Hello, everyone. Very good morning to all of you. Wonderful meeting you today. It's a bright morning. It's a fine day. I believe we also make it the same for you. So, hi, my name is Anuja. I am from Legal Edge. I guess probably you know that much because you're here for Legal Edge Marathon. And we are once again back with the longest marathon till now, which is going to run for 12 hours. And when I say it's going to go for 12 hours, it's from morning 9 to late night 9 p.m. And we are planning to cover all the areas. That means we are starting with English, we'll have analytical reasoning, we'll have critical reasoning, we'll have quantitative techniques, we'll have legal reasoning. So everything that's important and what is asked in CLAT, it's going to be a part of the marathon session today. But the sheer length of this period, does that bother me? Does that feel like a Herculean task? That how am I going to sit here in front of the screen for 12 hours and how am I going to concentrate? Yes, it sure seems like a daunting task to me. I mean, if not to you, it sure seems like a daunting task to me. But believe me when I say this, you're going to come out as a much more tolerant individual who would feel a sense of accomplishment that he sat through it all. It's going to be tiring, of course. We'll try to make it our best. We'll try to keep it light, lively. We'll give you breaks. We'll try to keep it interactive. We'll try to keep it simple so that you have no problem understanding what we are teaching today. But what I need from you is the real motivation that comes from within, that is going to make a difference once you are done with this. Not only you're going to learn a lot, but you're also going to feel that I have accomplished something. I have a bird's eye view now. I know precisely what all comes in CLAD, what is expected to come, what are the skills I'm supposed to develop, and that ways it would be wonderful. So I'm really looking forward to having a great session with you guys together. My session, which is the first session, is going to be a 1.5 hour session. What are we going to do today? So we are going to talk about the most important question type, which is the question type in CLAT as per the new pattern. This is reading comprehension passages. So I have picked wonderful passages for you today, some really interesting ones. I have taken care that they are from different genres so that we do not get typecast. We do not focus on just one type. We cover various varieties, and there are also different type of questions which will give me an opportunity to talk about various things to you, various important things in the exam. Okay, so that's the plan today. That's how we are going to progress. I have shared the sheet already in the Telegram group, which Legal Edge has. I am sure you're a part of that. So just check out the Word file, the PDF that I have shared there, because reading here might be a bit difficult. You might not be able to read. So, as a backup plan, the sheet is already there on the Telegram group. Go there, download it from there. And if you are capable of reading it on my screen, that's fine with me as well, because I'm going to project it on the 50% part of the screen. So we'll go like that. So in all, there are 5 passages today, 5 great passages, which will not only give us some good time, but we'll learn a lot. I will be as thorough as possible in my discussion with you. Even if you do not ask me, I'm going to explain why this option, why not this option, because elimination is as important as selection, especially in an exam where options can get tricky, and especially in a section like English language, which can get absolutely tricky. So I'm going to have a discussion about why this, why not that. Whatever fundas and whatever tricks I can come up with, I'll keep sharing those with you. I suggest you sit with a writing pad and a pen and note down whatever you find relevant. Okay, it's going to be a long journey today. Do not rely too much on your memory. Don't think I'm going to remember everything. You're not. So please ensure that you note down things. Okay, so I'll give you time to read. I'll be fair like that. And once you're done, then we'll start the discussion. Okay, so let's go. Yeah, we'll begin with the first
passage, which is one of my absolute favorites. You know why? Because I love coffee. Coffee is the only hot beverage that I'm really into. I'm not a tea person, so yes, I'm very happy, excited to share this passage with you, which is all about coffee. But what is the perspective? Let's understand that. Then we'll get to the questions. Okay, so I'll be quiet for a while so that you can read in peace, and then we'll start. So I hope that you have read the passage. It is only two paragraphs. Okay, another thing that I must tell you that today it's a practice session, RCs. I am not going to be bothered too much about the word limit. Of course, I have tried not to bring too long passages because that would not be relevant, but do not worry too much about the word limit because we are focusing on the concept and that's the thing. So I believe you're done with the passage. I'll take you to the questions and then we'll start our discussion. Okay. Do not worry if you do not understand. I will strongly recommend not worrying, but giving it all you have, trying your best. I think that's what's important to me. Okay. Let's go to the next. Okay. No next.
So, yes, this particular passage. I think once we have read the passage, I would highly recommend that you try to summarize the passage. I guess if you cannot summarize it, you will not be able to get a handle on questions, because what happens when you summarize, you try to filter out the most important points. And when you filter out the most important points, that shows that you have actually digested it. You have not only read it, you have actually digested it. So that is very, very important that we try to ask ourselves what is the essence of this entire thing. So I'll try to do what I derived. So when I read this passage, I really like the first line. The author said that coffee is not just about coffee, it's about camaraderie. It's about camaraderie. Now this is how vocabulary is going to play a very strong role, because if you do not know what camaraderie is, you are taken aback on the very first note. So, what is camaraderie? Camaraderie is very good friendship between two people. So, here the author is trying to explain how coffee is a sign of very good friendship, and that's why he has compared the humble filter coffee that you get in Bangalore to the cappuccino that you get in these fancy cafes, CCD and other barista and other things. So he feels that this humble darshanis, these small cafes of Bangalore where they serve filter coffee, which is my absolute favorite. I mean, this is the drink I go by. This is the way I start my day. So I totally understand what they are saying. This is the right kind of caffeine. This is the right bubbly, frothy coffee. And what he feels about this is that, you can share it with your friends. You can divide it into so many parts. Did you see that? By two, two by three, six by seven, these human coffee dispensers. Could you understand who is referring to? He's talking about the waiters, these human coffee dispensers. They are so fine tuned that they can just do all this sort of division, and they can ensure that everybody gets their perfect cup of coffee. So the author is saying that these small cafes in Bangalore, they are very Indian in nature. You can compare them to American fast food chains. These are very Indian in nature. Okay, so now moving on, this paragraph was mainly about how coffee in Bangalore is like. Moving on, when we talk about the second paragraph, he starts the comparison with cappuccino. He says cappuccino by definition is a selfish person's beverage. Why is it a selfish person's beverage? Because it's not supposed to be shared. So he feels that, maybe they should also think of starting a venture. He has a business idea for the entrepreneurs where they can start something in which they can divide cappuccino into smaller parts. And he says that would be amazing. And in the last, he says if she could make it better than filter coffee, then they would have found the holy grail. Do you even understand the enormity of those words? Because you know what Holy Grail is. Grail was the cup that Jesus was believed to have drank from on the day of the Last Supper. And that is the kind of Holy Grail that people have been wanting to find, but it eludes them. So if you say that something is Holy Grail, you're saying that it's something of utmost significance, but it eludes you. You sort of cannot get to it. So they say if they can make cappuccino as good as filter coffee, they would have achieved something that was sort of unachievable. I guess you clearly understand his bias towards filter coffee, how much he loves them, not just the taste, but how they are served. He used a very nice phrase that I would like to point your attention to. He said that. This is the kind of joint which is eat and scoot. You see that? Eat and scoot joint. You quickly eat and you just go from there, because it's that kind of a place where you mean business, you have a good time, you quickly go. Okay. So this was the summary of the passage. Now we'll go to the questions. Now let us see what it takes to get these questions right. Now, what is question number one like? The passage can best be described as. Now, this is a question that I would consider a central idea question, because if you do not understand the passage from beginning,
till the end completely, then you will not be able to handle this question. So, first is with a touch of patriotism. Okay, did I find patriotism anywhere? I'm going to go by evidence. Yes, I did. In the beginning, the author was saying that these darshanis in Bangalore are as Indian as it gets. Like American fast food joints, this is our Indian style. So, yes, there was patriotism. I did find it there. Okay, but let me hold on. In English, it's very imperative that you compare all the options because it can very well happen that you will find an even better option. So the second one is in a lighter vein. In a lighter vein means he's not very serious. He's having fun. He's talking in a humorous way. That's option B. What's option C? With a bias against the nouveau riche. What are nouveau riche? That's a French term that I would like to point your attention to. And once again, it gives me an opportunity to tell you why vocabulary is going to play a very important role. Because if you're going to tell me that, ma'am, I don't know the meaning of nouveau riche, then how am I going to even take a decision on this one? So, nouveau riche are people who are newly rich, but they have not the class and elegance of a rich person. So, this is not a term used for appreciation. This is a term which is used for uh, looking down upon someone. When you call somebody a nouveau riche, you're trying to say that somehow he has newly become rich, but he is not quite there. Even in terms of education, he's not like a rich person. Okay, so this was the meaning of option C. Let's talk about option D with an eye on feminists. I don't think I need to explain this word to you, but let us eliminate the irrelevant options first. I think C and D are pretty irrelevant. There was no discussion on people who have newly become rich, and I don't think the author was concerned about feminists. So C and D are rejected, and I think it's very easy to reject irrelevant options because if you have read the passage, you'd know instantly. But now I have to decide, do I go with patriotism? Do I go with lighter vein? And the secret here is that you go with an option which is more encompassing. You go with an option which covers most of the passage. So when I talk about patriotism, I found it only in the beginning and then nowhere else. But if I talk about this humorous, funny attitude, I found it everywhere. So I think for question number one, our answer should be option B. And I think after this detailed discussion, you're clear with the justification. And justification is what you need because that's how you will ensure that you have understood. You have understood enough to not make the same mistake again. Let's talk about question number two. Now, this time we are specifically talking about the human coffee dispenser, that is the waiter. How does the author feel about him? Now, once again, it's the entire role of vocabulary because if you cannot know the meaning, then I guess our job here is done. I mean, what do we even discuss? So, that is why it's very important to know the meanings. As of today, I am going to explain these words to you so that you can learn. So when I say nostalgic and sentimental, of course, sentimental is being on emotional. Nostalgic is thinking about the beautiful past that somebody had. Laughing up his sleeves is more like mocking, making fun of someone. Mildly critical and mocking, humorous and appreciative. I think first of all, I'm going to eliminate the options that I found absolutely contrary, that I found absolutely opposite. And I think they are B and C. I did not see any criticism on author's part when he was talking about waiters. So I don't think he was derisive. I don't think he was ridiculing. I don't think there was any mockery at all. So B and C are gone. Now let's talk about, was he being nostalgic more or was he being appreciative more? I like option D because it has that right combination. We have already decided that he was talking everything in a humorous light vein, but he was also very appreciative of the kind of work these waiters do. So I think in question number two, the best option or the better option as compared to A is of course B. Okay, so what have we learned from this first RC that we have just finished? That it's very important to summarize the paragraph before you go to the questions, because once you have an idea of what you have just read,
it will be very easy for you to get to the right answer. And in process of getting to the right answer, you must compare all the options, because don't be that guy who reads A and say, yeah, A looks fine. And then he later realizes that I didn't even read C and C was better than A. So we are not supposed to do that. Third lesson to be learned is vocabulary plays a very important role. If I do not know the meaning of certain terms, then I am going to be crippled. I am not going to be in a position to justify, I'm not going to be in a position to rationalize. And then, how can I ensure that my comprehension is right? Okay. And fourth thing is go try filter coffee. You are going to fall in love with it just like I have. Okay. Time for us to move on to the second RC. Here you go. Very different topic, very different treatment. Read it, take your time, then we'll go to the questions.
I hope you're done with the passage. Let's go to the questions. All right, the last question of this passage. Okay. So, first of all, I would like to point out something about these questions. As you see, in every question, they have mentioned the paragraph that is relevant, the line that is relevant, and I think when I say this, you'll agree with me that this is going to be of big help. Because if they are asking me in the last line of para 3, then I can specifically go to that part, right? If they are asking me in the last paragraph what is the author's tone, then when I'm reading the last paragraph, I can be particularly thoughtful about the tone. Similarly, in the third paragraph, they say in the second paragraph, what is the author feeling? So I think this is a very big help, and I must ensure that I use this help so that I know what is the part which I can encash and where I'm going to get my marks. Okay, so as we see the passage, it has overall one, two, three. So total three passages, right? And let's try to understand what is happening para by para because there are questions specifically about each paragraph. So if I begin with passage one, I mean paragraph one, I see that the topic is being introduced to me, which often happens. I mean, whatever is the topic line will be given to me as the first line of the paragraph. So here they are telling me that it's about road rage, the kind of anger. You know, the word is not even anger. It is of the intensity of wrath. Because when we feel that anger on the road, we all know, we have all experienced it. It's completely irrational. It knows no limits. So this is what they are talking about. This is the topic, which is road rage. And he says it never seems to be outside the headlines for long, particularly in Delhi, because it keeps happening. Now, there are examples. So, there is an example of how a bus conductor beat a woman, and then he started with the example of Delhi, but then he goes ahead to say that it's not limited to Delhi. Don't think that it's a problem which is unique to Delhi. It's a problem which is everywhere. He says there are enough instances in all major cities where such things are happening. No accurate data, but other statistics are there which are telling you that how bad road rage is. So, para 1, what is the job that para 1 has done? It has introduced the topic. What is the topic? The problem of road rage. First, they gave me an example of Delhi, but they went ahead to say that, don't think that this is a problem which happens only in Delhi. It's a pan India problem. Okay, that's all. That's the job of para 1. Once I have done that summarizing part, it will be very easy for me to know what is written here. It will be really easy for me to refer back to it if I need to be. Okay. And I will mention a very important thing here, which is a lot of discussion goes on about reading fast. You have heard that how you should be a fast reader. But this is not how it works. An efficient reader doesn't always read fast. He reads fast, but he also reads slow. I know that comes like a shock to you. Why would you say that he reads slow? Because when he has started reading, so let's say he has started reading this passage and he has just begun, he's reading the first paragraph.
He does not know what is going to be said. He is absolutely clueless. And that is why he will read slowly. He will read slowly so that he understands what is the theme, what is happening here. Once he gets that, then he starts reading fast. So, okay, he has understood the topic sentence. Now there is an example. He can read really fast through that example because example is secondary. Example is not very important. So I would say that a good reader is not somebody who always reads fast. A good reader is somebody who knows when to read fast and when to read slow. So just try to exercise that in the next RC that you get. Read slow in the beginning. Once you understand what is happening, what am I into, then you can read faster so that you can just go through the explanation and all that part very, very quickly. Okay, let's talk about the second paragraph. The frequency of incidents. Now, all these incidents, accidents that are happening because of road rage, the frequency tells you how often they are happening. That tells you that the problem is not just traffic management. The problem is also our attitude, how we behave. He says that police are unable to cope. That's one thing, but another thing is also people who move to big cities, but they don't know how to handle all those things. And traffic laws, you know how they are not enforced. There is no accountability. If somebody breaks the rules, flouts the rules, there's no accountability. So he says this is a major contributing factor in causing road rage. Okay, so I think in para 2 went further in detail. He started analyzing that what is causing all this, why is this happening. Then now let's talk about paragraph 3. He says we have abysmally failed. Abysmally is like really, really miserably, because abyss is a well which has no bottom. So if you are abysmally failed, you have hopelessly failed to develop a road safety culture. And road rage occurs because road users believe that they can do whatever they want to do with impunity. Now, impunity is a beautiful word. And once again, if you do not know this word, questions on contextual vocabulary were very common in CLAT 2020. Do you know that? So they can highlight this word and ask you the meaning of this word. What is impunity? Impunity means when you get away without any punishment. What can be the trick to remember this word? There can be a very simple trick. If you believe in unity, then all of us will commit the crime and we'll say, since all of us have done it, none of us is guilty. That's how you can remember it. So impunity is no punishment, you just get away. So this is the problem here. Road rage occurs because road users believe that they can get away with impunity. Nothing happens. He says, unfortunately, this is right. What they believe is right. This is what is happening. People are not getting any punishment at all. So most people think that their political or business connections, they are going to help them. Everybody knows somebody high enough, right? And what about bystanders? What about onlookers? What about the passers-by, the normal people who are there? What do they do? He has told us an incident where something really unspeakable atrocity was committed, and what did people do? They just stood there. They didn't do anything. Significantly, nobody called the police. Do you see that? They just stood and they watched. That's all they did. Okay, so what is he saying now? He's saying stringent enforcement of traffic laws, which is a strict enforcement of traffic laws. We need to do that, but it can only go so far. That means, it has a limit. What else we should do? Communities must step up. So as you see, he's ending with a slew of suggestions. He has given a lot of suggestions that communities must step up, media should do its role, newspaper and news channels must follow up the cases. When the regular arms of law fail, then media has to step in to arouse public consciousness. So he has ended his discourse with a suggestive tone. Well, he's telling that what can we do? So it's not just problem, problem, problem. He has also tried and give you solutions. Okay, so that's the entire passage. We have understood the structure. It's crystal clear in my mind that he introduced the topic, then he went even further, then he gave certain suggestions, he told me about the psychology of people, everything. That's the entire structure. Now we are ready to go to the question. Of course, you would be wondering that, ma'am, it's very nice and it's very good. I understand everything, but you took so much time. And in mock and on the D day,
I'm not going to have so much time. And I absolutely agree with you. I am completely on the same page. But the deal is that if you start applying this method from today onwards, you will become trained. You know why I'm taking so much time right now? Because I'm explaining it to you. But when I'm reading the passage, I don't need to do all this. So I can be really fast. I do all this mentally. I make all the summary notes mentally. I notice all the important parts mentally. If need be, I quickly underline. If I'm reading on a screen, I quickly jot down. And believe me, that's very, very quick. And why is it quick? Because I'm in the habit of doing it. I do it every single day. Whenever I come across something, I do it. So once you start doing it from today, it's going to become very, very smooth when you need to do it in your mock and when you need to do it on the D day. Okay? Chalo. Let's go to the first question, which is in the second paragraph of the passage. Remember the second paragraph now? How is the author? When we say the author is self righteous, that means he takes a lot of pride in being himself. He thinks he's right and he's trying to tell that to other people. Aggressive is, very attacking and thinking that others should be taught a lesson, something like that. Severely critical, I think it needs no explanation, it's very obvious. And caustic is like caustic soda. Those words are going to hurt you a little bit. So, if I take you back to the second paragraph, what was happening? The author was telling you all sorts of problems that are there. So, not just our traffic management, but it's also the attitude of people. It's also that no accountability when somebody flouts the rules. So, I wouldn't say that he was severely critical because I also have to match the intensity, right? I cannot be all hyperbole, exaggerated. I cannot use that here. So, I don't think the author was severely critical, and I also won't say that he was aggressive because he was not that angry either. And I shouldn't say that he was giving too much importance to himself, that see how I am right and what I am saying should be the thing. I think the correct word after elimination, of course, I'm going to say this that after elimination because I closely compare, I see flaws with other options, and I'm going to choose the best that I have got. So from question number three, I feel the answer should be D, which is caustic. Caustic like bitter, bitter criticism. That's what he's doing. Question number four, in the last paragraph, how has the author's tone changed? I think you all know this. Has he become instructional? Has he become pedantic? Has he become vicious? Has he become opinionated? Now, if you do not know the meanings, there is absolutely no chance for you to get this question right because there are too many nuances, there are too many shades. That's why it's very, very important that you develop an interest in this sort of thing. Now, let me explain it one by one to you. What is the meaning of instructional? When somebody becomes instructional, they give you instructions, and instructions are like do this, do that. That's a step one, that's a step two. So, probably somebody is telling you how to make tea, they will become instructional with you, right? That is the thing. What happens when somebody becomes pedantic? When somebody becomes pedantic, he starts giving suggestions that this should be done and that should be done, and media should do something, newspapers should do something, communities must step up. This is becoming pedantic. Of course, there is a difference between being pedantic and didactic. Always remember that. Pedantic is already written there, so I'm only going to write didactic. When you become didactic, you give suggestion, but your suggestion is not so forceful. You just say it, but you do not emphasize so much on it. But I guess when you become pedantic, you become really imposing. Vicious is really bitter when you are hurt and you want to hurt others, you become vicious. And a lot of people are confused about the usage of the term opinionated. They feel that if you are opinionated, you have opinions. But that's not the thing. If you're opinionated, you have
very strong opinions. And what is the problem with having strong opinions? The problem with having strong opinions is you end up becoming intolerant. You become a fanatic. You think that you are the only self-righteous person here and everybody else is an idiot. That is the problem with being opinionated. So I think the best option for us here is I guess you get it. I'll go by elimination simply and I'll tell you my reasons. I think the answer should be B. Question number four, the answer should be B. The author is being pedantic. He's giving many suggestions. Why have I not chosen instructional? Because I don't think it's a step by step instruction process that he has done. I don't think he's vicious. Vicious would be way too harsh. And when I say that he's opinionated, I'm saying that he's unjustified in having this strong opinion. But I don't think that he's being irrational there. So I'm not going to criticize the author because I did not find the evidence. Okay? I hope you get that. I hope you're noting down because these words are very important. Let's talk about question number five now. In the last line of para 3, significantly nobody called the police. Okay, what does this show you? Nobody called the police. Does it show you that people were scared? I'm not going to work on my whims and fancies. I'm going to look for evidence in the passage. And I've shared the passage with you. It's there with you also on your Word document that I have given to you on the Telegram group. You check it there if you need to. There was no fear. I could not sense any fear. Negative attitude, I did not think that people had antipathy or hatred or something. It was sheer apathy. You know what apathy is? A as a prefix means that there was absence. And what is the absence of? The absence was of pathy. What is pathy? Pathy is a feeling. So the absence of any feeling. They just stood there and watched. They didn't care enough. They didn't do anything. That is sheer apathy. That is sheer indifference. So the correct answer for question number five is option D. Okay. So what have we learned from this particular passage? We have learned that um vocabulary is going to play a very important role. If it's a tone question, if it's a mood question, if I have to tell what the author is feeling, I'm going to require words. And you know what? That is not going to be direct. The author will not himself say that, see, guys, I am vicious, I am self righteous. He's not say that. He'll give you hints, he'll say certain things, and from those things, you have to understand, you have to do your reasoning and come to the answer. Okay, so when such a thing is required, please ensure that you're reading as if you are here to do a deep, thoughtful conversation with the author. You're here to understand everything that he's saying. Only then you will have enough data to answer the questions. Okay, so I hope that this was a good read for you. I hope that you're ready to move on to the next passage and here you go. Oh, sorry, I forgot. There is one more question here. So let's also do question number six. That's also based on this passage. I'll give you a minute. Solve it. So, as I have already said, this was a kind of passage in which questions were referring to a specific part in the passage, and it was quite easy for us to simply go there and get our answer. So, where was this line said? Unfortunately, they are right. This line was said when the author was talking in para 3, when he was saying that people feel that they can get away by breaking, after breaking road rules, they can get away with impunity, and unfortunately, they are right. So, this part, unfortunately, they are right. What was it about? Was it about road rage has become common? No. Was it about road rules are not observed in India? वो तो है ही, but that was not what he was sorry about. He was sorry about that most people get away, and you know
who will get this answer? One who knows the meaning of impunity. Otherwise, you will not even know that getting away and impunity is the same thing. So, question number six, the answer is D. Don't think that there is some hack. Okay, most of the answers are D, so that is going to be my my thing. No, just be logical here. Okay, I do not support, I'll categorically say it, I do not support any shortcuts in reading. You'll get to read at different places that you can skip some part and you can just go for only the most important part. But all these are shortcuts, and shortcuts do not work. I mean, they don't work all the time. And I need you to be actually good at this skill, which is the most important skill of your life. And there are no shortcuts there. You have ample time. I have faith in you, and you'll do great job if you are at it every single day. Okay? Chalo. Let's go for para 3. Passage 3. Now, passage 3 is something very different. I really like this one. This is more personal. A heart surgeon is sharing something with you, but not related to surgery or difficult medical terms that you would not understand. He's sharing with you something really personal. So just try to understand in short. Brevity is the key. What he's saying, then we'll go to the questions.
Okay. So I'll take you back to the passage. Now, as I said, this is a kind of passage which is a personal recounting, it's a personal narration where the author is describing what happened to him and what he learned from it and how he learned it. Okay, now there will be various incidents and flow of events, and I don't think all those are important because this is a kind of story telling that's going on. And after you have heard this, all you need to do is what happened and what should I know. That's all. It's the kind of passage which is the easiest to summarize because you do not need to focus too much on details. You can just listen to the entire story as if you are sitting with the author over a cup of coffee and he told you something, you have understood his emotions, and now we're going to answer the questions. Okay? So, what happened here? He was talking about this thought that why people suffer. And he says suffering seems so prevalent in the world today, so cruelly prevalent. It's everywhere, it's ubiquitous. Everybody is suffering. He gave you some stats. Okay. But he said, why do people have to suffer? And he said, why did I start thinking about it? Because he had an accident a few years ago. He told you how that accident happened. And when he was just suffering there, he told you about the suffering in detail. He was just suffering there. He kept on thinking, why should this happen to me? Why should this happen to us? I was doing good job. I was doing God's work. I have patients waiting for me. My wife has a young baby to take care of. So why should this happen to me? He said if my father were alive, he would say that, this has been God's will. This is God's will. So this is what has happened. But as a doctor, he says that I don't understand why God will for something like this to happen. And he says, I can see no nobility in the crying of a lonely child in a ward at night. These are all imagery that he's drawing for us to understand what he feels. But one thing happened. One morning, several years ago, he witnessed what he's calling the Grand Prix of Cape Town's Red Cross uh, Children Hospital. What happened there, you know, yeah. So what happened there, he says, opened my eyes that I was missing something in all my thinking about suffering, something that was very basic, that was full of solace for me, that gave me satisfaction, that told me how to think. So often it happens that we get so caught up in the way we think, and we start thinking that, okay, this is how things should be. But we see something and it changes our entire perspective. That is something what happened here. He narrated a very fun incident where two kids, and of course they were suffering, but they did not let that suffering bog them down. They were cheerful, they were hearty, they were playing, and this entire description is there what they were doing. As I've said, you don't have to worry about every single small detail. You just have to understand what has happened here in entirety. So he has told about each one of them, saying that he had this sort of problem, he had that sort of problem, but still, they were all enthusiastic and they were all very cheerful. So what he realized was something about the business of living. He said a wonderful line. He said, "The business of living is joy in the real sense of the word, not just something for pleasure or recreation. It's the celebration of being alive. Just this realization that you are alive, that gives you happiness." He says, I had been looking at suffering from the wrong end. I have understood it all wrong. You don't become a better person because you are suffering. You become a better person because you have experienced suffering. Because we can't appreciate light if we haven't known darkness. Nor can we appreciate warmth if we have never suffered cold. How will we? Why would we? We don't know what it feels like. So when we have endured suffering, we can appreciate, we can be grateful for just this miracle that we are alive right now. So he says, this is the final closing statement that he gives. He says, these children showed me that it is not what you have lost that is important. What is important is what you have left. If we keep focusing on what's gone, then we'll be miserable. We'll be in caught in that rut where we'll keep thinking, why me? Why did I? What did I do? Why did it have to happen to me? But when he saw those children, those who were suffering, and they felt that, okay, come what may,
I will be happy with what I have. That is the lesson that he got, and that was the lesson that you needed to remember. That's it. Now let's go to the questions and deal them one by one. Let's begin with question number 7. Look at the first and the last paragraph. How has the mood changed? That's a very significant question because it will cover everything right from the beginning to the end. And of course, it will only work if you know the meanings. So, first of all, I am eliminating option A because it is talking about euphoria. What is euphoria? When you feel euphoria, when you feel ecstasy, when you feel bliss, you are extremely happy. You are on cloud nine, you are in seventh heaven. That's the kind of happiness that you have. The day the result gets declared and you get to know that you are in the top 10, that's euphoria. Did you feel that author became this happy in the end? I don't think he did. So I'm going to eliminate option A. And if you do not understand this meaning in the right intensity, then you might get confused with option A. Okay, now other three options are very close because I can see that he became philosophic in the end. He started giving all that lessons, right? You can say that don't focus on what you have lost, focus on what is left to you. It can also be called acceptance, that he has accepted his fate, and it can also be called optimism in a way. But I think here my selection will be based on the first word. What is despondency? Despondency means that he was hopeless. What is criticism? That he was criticizing others. And I think this is the reason why we should eliminate C. He was not criticizing anybody. He didn't say that God is a bad God. He didn't say that that driver was not driving properly. He didn't criticize anyone. So I think C is eliminated. And now we'll have to think, was it pessimism? What is the difference between despondency and pessimism? They are quite close. But pessimism is the end of the tunnel. When you have absolutely no hope, that's when you are a pessimist. But I think it was not so bad for author. So it's the right intensity of the emotion that I'm looking for, not just the kind of emotion, but the intensity of emotion. He was hopeless, but he was not absolutely a gone case. So I will rather go for option B. Okay, from despondency, he became philosophic. Let's talk about question number 8 now. The author's recounting of the past history of the mechanic and the driver, those two kids. How is that recounting? How is that narration? Let's see if you know the meaning. Critical is, of course, criticizing. That's out. That let's throw it out of the window. The author was not criticizing those two kids. Was he detached? Did he not feel anything at all? Was he apathetic? I don't think that. Now there is a close fight between pathetic and poignant. Now, what happens when something is pathetic? Pathetic, pathos, feeling. It makes you feel pity. It makes you feel miserable, you know. And when you talk about poignant, it makes you feel sort of the same thing, but more like sentimental. It touches you. And I think if I have to closely, very closely put these words under the microscope and think about them with reference to the passage, was it miserable or was it more touching? I think he was more touched. He did not feel that, oh, how these poor kids are. He was like, oh, wonderful. How can they be like that? So I think the answer is A. I hope you appreciate the difference because that's all there is to it. Now let's talk about question number 9. When the author asks, why should this happen to us? How is his attitude? Is he arrogant? Is he saying that no, how can this happen to me? Is he abusive? Is he hopeless? Is he dejected? Now, once again, I think I'll go ahead with C because I've told you he's not entirely hopeless, but he's, of course, feeling bad. Now, question number 10. Why does the author refer to this Indianapolis 500 car chase? You do understand that this was just an analogy. He was not talking about the event. He was not talking actually about the car race. So B and C are out of the window. Now, the question is, was he trying to emphasize by exaggeration? Yes, of course. But I think A has a very central point missing. What was he trying to emphasize? So I think we should go ahead with D because D says that he was trying to highlight the spirit of the dauntless children. He was not just trying to highlight. What was he trying to highlight? The spirit
of the dauntless children. Dauntless, fearless, the people who do not get scared at all. That was the thing. So I think the answer is D. Let's move on to question number 11. The passage may best be described. It. The word best plays an important role here. You can describe it in so many ways, but what will be the best description that you will give? Motivating, pessimistic, despairing, critical. Now, the author has gone through a roller coaster of emotions. He has said that I have been sad and I have been in despair, but what is the final emotion that comes out? That's definitely one of motivation. It seems that the author was motivated in the end, and somehow it could motivate us also. Now, what is solace? Solace is the kind of satisfaction that you can finally get. What brought solace to the author? When he saw that a lot of people are suffering, when he felt that you can enjoy life even when death is around the corner, like those two kids were doing, that children do not worry about their future. Was it just about children? You'll have to ask yourself. You will have to be in a very active conversation with yourself. It's going to be very important. So, was he trying to just talk about children, or was he simply saying that don't bother about your life? You know what? Forget life. No, I think the best answer here is going to be B. He was trying to say that you can enjoy life. When he saw that one can enjoy life even when the circumstances are unfavorable, that's what brought him solace. Okay, so that is it. That's done. The third passage. We are done with the third passage. Time for us to move on to our final passage of the day, which is this one. So it's about India, our country. You'll get to see a lot of things here. Again, I would say be that reader who knows when to go fast, who knows when to go slow. So go slow in the beginning, understand what's happening, but go fast when the author is giving examples. And the author will end up saying a lot of similar things that India had this, and similarly that, and similarly that. So, you can just go fast when you're reading all those things. Once you finish, there are these three, no, actually, these questions till 17 that we'll handle. Okay, so let's start with the passage. Read, then we'll discuss.
All right, students, I hope you're ready to discuss the passage now. Now, this is a very special passage. You know why? Because there is only one and one line, which is the summum bonum of everything, which is the summary, which is the main point. The author has gone on and on about how India is a great land and it's a story in itself, and there are diverse cultures and they have mythology. He has basically been talking about Hindu mythology, and there are some great writers there, by the way. I'll take their names so that you can go ahead and explore if you want to. Devdutt Patnaik, Chitra Banerjee Devakuruni. I think these two are people who have tried to make Hindu mythology really simple for people of this generation to understand. And what Chitra Banerjee has done is she has written Hindu epics from the point of view of the female protagonist. I think that is something that you must check out, because a different perspective should also always be welcomed, right? And anyway, I'll talk about authors some other day, otherwise, I'll get carried away. Coming back to this passage, so the author has gone on and on about how this is the beauty of the land. People follow their customs, they celebrate their festivals, what is the power of symbols, what kind of avatars are there. All these is being made into animation flicks now, movies now, so that children can also understand. But if there is one line that summarizes it for me, that is the very last line. Read it with me. Mythology is the treasure of Indian religion and must be given to our progeny, that is the next generation. This is the very essence of the entire passage. So, if you were one of those who could spot this, bingo, you did the perfect job. There was no point in getting caught up in so many details because none of the questions require that. Now, the questions are also unique in a way. You would see that there are so many questions, but all of them, absolutely all of them, are only based on one principle. And what is that one principle? All the options are good because all the options have been taken directly from the passage. But which one is the best? And how do I decide which one is the best? The one which is most complete. That is the formula. The one which is most complete, the one which covers everything, that is the one. I'm not going to choose an option which is only talking about a part of the first para or a part of the third para. I am going to choose an option which is covering everything. That is the only principle that you need to follow. Let's get started with the questions. So, the question number 13, the central idea. Now, the central idea is not just about how India has so many nomenclatures. It's not just about how India has bright chances of becoming superpower. It's not about amazing tales by grandma. It's basically about option D, how mythology is very important and it should be given further to our generation. Question 14. Now, this question is asking me to give an evidence of what? Of how an Indian believer has a strong influence of his religion. So, is it just going and giving prayers? Is it visiting temples? Is it celebrating festivals? Or should I go with option D, which has all of this and more? Do you understand what I was saying when I said choose the most comprehensive option? D has got everything: teachings, beliefs, customs, codes, सब कुछ आ गया. ठीक है? Let's talk about question number 15. In India, mythology is very important. It's very significant. Why? Once again, I will say the option which is most complete is B, because it tells you everything: beliefs, traditions, cultures, art, religion, festivals. It's the essence. It's good over evil. Everything. You know what other options do? As I have already said, they are good, but they only address one aspect. B addresses everything. Okay, I hope you're with me on this. Question number 16, animation flicks. How will they help? Will they help in increasing sales? Will they help in keeping creative directors busy? Will they help parents to get rid of their children? No. Actually, the message according to the passage was they will help in teaching kids and also elders about our mythology. And the final question here, which is the conclusion, and it's very obvious that conclusion is in the end, and in the end we got to know about how mythology is very important. So we are going ahead with option B.
The final conclusion cannot be about animation flicks. The final conclusion cannot be about how deities are described. So the final conclusion has to be about the main message. So with this passage, we learned that the main message can be a very, very simple one. It could be just one line. And as in this case, this one line came directly from the passage. Can you believe that? And that one line gave us 5 marks, and those 5 marks, this ability to spot that one line and getting 5 marks correct, is going to have a tremendous impact on your result. So just to be aware how impactful this can be. Keep practicing this skill. It's only going to get better with time. I know that there is one more RC in the sheet that I have shared with you, but I'm quite aware of that. The time is running out. I will definitely take it up with you sometime later. I'm sure there will be ample opportunities. I hope that our purpose is met. What we were trying to achieve today, we were trying to get you started on reading. We were trying to show you the kind of passages they come, how to read them, how to compare options, what is the logic behind choosing a particular option and rejecting a particular option. I hope you could see all that. It was absolutely delightful to start my day with you. I hope you feel the same. I hope the feeling is mutual. Do let me know. I hope to see you very soon again sometime. There is going to be a long day for you. Just ensure that you be right with us. There is going to be a small break now, and after the break, there will be another class. Okay? Have a good day. Enjoy the process. See you very soon. All the best.
Welcome back in 12 hours marathon series of Legal Age. This is Raghvendra Saran, एनालिटिकल रीजनिंग फैकल्टी ऑफ लीगल एज। और आज के इस सेशन में मैं एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। एंड आई होप आप सभी प्रिपेयर्ड होंगे। और एक एक करके हम सभी टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किए हैं और ब्रॉडली आपको एक आइडिया मिलेगा कि एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या टॉपिक आपके आ सकते हैं, जो कि 2021 एंड 2022 एज वेल, जो कैंडिडेट इन दोनों एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं, ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। राइट, चलो देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 कोडिंग डिकोडिंग से है, बेसिक क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पे क्लैट 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सभी ट्राई करें क्या आंसर आ रहा है, एंड देन आई विल डिस्कस। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 467, दीज आर थ्री डिजिट्स, 4 6 एंड 7, इनका कोड रेफर कर रहा है वो लीव्स आर ग्रीन, लीव्स आर ग्रीन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है 485, मींस ग्रीन इज गुड, ग्रीन इज गुड। सिमिलर क्वेश्चन आपका क्लेट 2020 में पूछा गया है। थर्ड इक्वेशन 639, मींस दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अब यहां पर हमें एक बात समझनी पड़ेगी और वो ये है कि कॉमन डिजिट और कॉमन वर्ड, ये मैपिंग हमें देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो देखते हैं, जैसे इक्वेशन 1 एंड 2 में यहां पर 4 हमें कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहां कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन दिख रहा होगा, ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन का जो कोड जाएगा वो कहीं ना कहीं 4 को रेफर करेगा। तो इन दो इक्वेशन से हमें क्या निकल के आया, 4 का कोड होगा ग्रीन। ठीक है, अब इसमें 6 और 7 बचा है, इसमें 8 और 5 बचा है, कोई कॉमन नहीं है। हमें क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले देख लेते हैं। विच विच डिजिट स्टैंड फॉर लीव्स, लीव्स का कोड कहां से मिलने वाला है, इक्वेशन 1 से। तो कहीं ना कहीं ये जो आर है, अगर आर का कोड पता चलता है तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारा रिमेनिंग डिजिट को रिजल्ट में बता देगा। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में आर कॉमन आ रहा है और डिजिट कौन सी कॉमन आ रही है, 6। ठीक है, तो इस हिसाब से 6 का कोड क्या जाना चाहिए, आर। तो 6 का कोड यहां पर आर जा रहा है, तो रिमेनिंग जो लीव्स है वो किसका कोड बन जाएगा, 7 का। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 1 इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर हमें मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोडेड ब्लड रिलेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ ब्लड रिलेशन। इसमें शॉर्टकट भी रहती हैं और शॉर्टकट को हम कैसे अप्लाई करेंगे अभी के अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करें आप लोग। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसकी क्या शॉर्टकट हो सकती है इन डिटेल, इसका एक व्यू मैं आपको क्लियर करूंगा। और इस
क्वेश्चन में कौन सी शॉर्टकट आपको अप्लाई करनी रहेगी वो भी मैं आपको बताता हूं अभी। देयर आर थ्री शॉर्टकट्स बेसिकली, है ना। कोड्स गिवन है और रिलेशन हमें बताना है कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में के इज फादर इन लॉ ऑफ एच, ये रिलेशन किस ऑप्शन से निकल के आ रहा है, राइट। तो इसको सॉल्व करने में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर बेसिक मेथड से हम जाते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हमें बहुत सारा टाइम लग सकता है। कैसे? बिकॉज ऑप्शन ए को हम पूरा बनाएंगे फैमिली ट्री में, ऑप्शन बी को फैमिली ट्री में बनाएंगे और रिलेशन चेक करेंगे क्या इसमें के फादर इन लॉ है एच का। इस तरह से हम जाते हैं। और दूसरा क्या है, शॉर्टकट हम अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट तीन तरह से अप्लाई की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेंडर ऑफ द पर्सन। सेकंड, हम जनरेशन के बेस पर भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट, ये तीन तरह से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हर एक ऑप्शन में हम जाते हैं और चेक करते हैं क्या के फादर इन लॉ है एच का। तो अगर हम जेंडर के बेस पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि के रेफरेंस में बात हो रही है और के फादर इन लॉ है, दैट मींस के मस्ट बी अ मेल कैंडिडेट। के फादर इन लॉ होगा तो के मेल होगा। तो जेंडर के बेस पर हम क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन में जाएंगे और के को चेक करेंगे क्या वो के मेल है। अच्छा, इन्होंने डेफिनेट रिलेशन पूछा है कि के फादर इन लॉ होना चाहिए एच का, दैट मींस कोई भी पॉसिबल केस अगर ऑप्शन में आता है वो हम कंसीडर करने वाले नहीं है। देखते हैं, जैसे ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं हम। ऑप्शन ए में द पोजीशन ऑफ के इज इन द लास्ट, यहां पर एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रही है एच से, एच एट द रेट जे डॉलर एल हैशटैग पी एंड स्टार के। हमें पता करना है क्या के फादर इन लॉ होगा। अब जरा जेंडर के बेस पर हम अगर बात करते हैं कि पी स्टार के से क्या निकल के आ रहा है के का जेंडर, तो स्टार का कोड हमें दिया हुआ है ए स्टार बी मींस ए इज फादर ऑफ बी। तो पी स्टार के मींस पी इज फादर ऑफ के। अब पी के का फादर है बट के कौन है, के मे बी सन और डॉटर ऑफ पी। द जेंडर ऑफ के इज नॉट क्लियर, सो हम ये भी नहीं बोल सकते कि के फादर इन लॉ इसमें मिल जाएगा। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि पोजीशन जो है के की लास्ट में है एक्सप्रेशन के, एक्सप्रेशन के लास्ट में है, दैट्स व्हाई हम जेंडर इसका क्लियर नहीं बता सकते। इस कारण से ऑप्शन ए एलिमिनेट होगा। और यही कारण रहेगा कि ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन ऑप्शन बी और डी में भी के की पोजीशन जो आ रही है वो सबसे लास्ट में आ रही है। अब सबसे लास्ट में आ रही है तो सेकंड लास्ट एलिमेंट के साथ में इसका क्या सिंबल रिलेशन दिया हुआ है। क्योंकि हमेशा एक बात का ध्यान रखना, किसी एक्सप्रेशन पेयर में, दो एलिमेंट के पेयर में हम सिर्फ और सिर्फ जेंडर तभी दोनों की पता कर सकते हैं जब कपल रिलेशन दिया हो। जैसे ए हस्बैंड बी और बी हस्बैंड ए, इस तरह से चीजें दी हैं एंड देन हम जेंडर बता सकते हैं, अदरवाइज हम जेंडर नहीं बता सकते। ठीक है। तो यहां पर एक चीज देखना कि जो ऑप्शन बी में है वो एल हैशटैग के लिखा हुआ है और ऑप्शन डी में है अगेन एल हैशटैग के लिखा हुआ है। तो हैशटैग का मतलब क्या जा रहा है यहां पर, ए हैशटैग बी मींस ए इज डॉटर ऑफ बी। तो एल हैशटैग के मींस एल इज डॉटर ऑफ के। अब एल डॉटर है के की तो के फादर या मदर में से कोई भी हो सकता है। दैट मींस के का यहां पर और यहां पर दोनों ही केस में जेंडर फिर से क्लियर नहीं है। और जब जेंडर ही क्लियर नहीं है तो हम डेफिनेट नहीं बोल सकते कि इसमें और इस एक्सप्रेशन में के फादर इन लॉ एच का होगा, ये हम डेफिनेट नहीं बोल सकते। इस कारण से बी और डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा अकेला ऑप्शन सी है, बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है। बाकी बची हुई बात किसकी है, हमने देखो इसको कैसे हमने एलिमिनेट किया, विद द हेल्प ऑफ जेंडर एंड विद द हेल्प ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट। इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है। अब अगर बात कर रहे हैं कि जनरेशन की, जनरेशन में हमें यह देखना होता है, जैसे हालांकि इसमें कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है, हमारा काम वैसे ही हो गया, फिर भी समझ लेते हैं कि जनरेशन पे अगर हम शॉर्टकट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, के इज फादर इन लॉ ऑफ, तो के और एच में, के और एच में एक जनरेशन का गैप जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहां पर के फादर इन लॉ है तो एच की वाइफ या एच के हस्बैंड का फादर होगा के। समझ रहे हैं? बिकॉज द जेंडर ऑफ एच इज नॉट क्लियर ना, तो एच के हस्बैंड या एच की वाइफ के फादर का नाम होगा के। तो एक लेवल ऊपर होगा जनरेशन में के। तो यहां से अगर एक्सप्रेशन में देखना होता तो सिंबल को हम आइडेंटिफाई करते और जनरेशन से ये पता कर लेते कि कितने, किसी भी एक्सप्रेशन में कितनी जनरेशन का हमें गैप मिल रहा है। अगर इक्वल जनरेशन का गैप है
और के जैसे यहां पर एक लेवल ऊपर है, तो वहां पर भी अगर हमें एक्सप्रेशन में एक लेवल ऊपर मिलता है तो हमारा काम हो जाएगा, अदरवाइज तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या जा रहा है हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज फ्रॉम स्लॉजिज्म। ट्राई करें, एक अच्छा क्वेश्चन है और सिली मिस्टेक होने के इसमें बहुत ज्यादा चांस होते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, और मैं आपको आंसर भी सजेस्ट कर दूं कि जनरली जो सिली मिस्टेक होती है वो ऑप्शन बी टिक करने से हो जाती है। एक बार ट्राई करें, क्या आंसर आपका आना चाहिए। बना क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं क्या बोल रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है, अगर एलिट एग्जाम की बात करें तो एलिट एग्जाम में सेम इसी कॉन्सेप्ट पे 4 क्वेश्चंस थे, एलिट 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर इंस्ट्रक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और इंस्ट्रक्शन में हमें क्या बोला जा रहा है, हमें एक ऐसा कंक्लूजन लेना है जो लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट गिवन है हमें, सम लाइफ इज बुक, ऑल बुक इज पेज, नो पेज इज पेन, सम पेन इज मोबाइल, नो मोबाइल इज नेटवर्क, नो मोबाइल इज नेटवर्क। दिस इज फाइनल वेन डायग्राम ऑफ अवर स्लॉजिस। अब यहां से कंक्लूजन हमें दिए हैं ऑप्शन में, एंड हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें कंक्लूजन फॉलो नहीं किया जा रहा है गिवन स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर करते हुए। देखते हैं, सम लाइफ इज नॉट पेन, सम लाइफ इज नॉट पेन। यहां पर सम लाइफ, सम पार्ट ऑफ एल, सम पार्ट ऑफ एल पेन नहीं है, ये बात निकल के कैसी आ रही है, ट्रू। ठीक है, ये बात कैसे निकल के आ रही है, ट्रू। सेकंड ऑप्शन, ऑल बुक बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बुक, ऑल बुक बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों, यहां पर समझना, क्योंकि नो पेज इज पेन, ऑल बुक इज पेज, तो बुक और पेन कॉमन नहीं हो सकता, ये हमें क्लियर दिख रहा है, इस कारण से ये फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, सम पेन इज नॉट network, some pen is not network. Yes, we can say the sided part of pen is not network because no m is n, that's why some part of m, इसको हम दो तरह से जान सकते हैं, some part of m और some part of pen, तो दोनों के लिए ये बात एप्लीकेबल है। सो ये वाला स्टेटमेंट तो फॉलो कर रहा है। डी डी स्टेटमेंट क्या बोलता है, सम बुक इज नॉट पेन, सम बुक इज नॉट पेन। जब यहां से हमने देखा कि नो बुक इज, नो पेज इज पेन, सो नो बुक इज पेन, एंड नो बुक का पेन के साथ रिलेशन नो का आ रहा है, तो सम का भी, सम नॉट का भी रिलेशन यहां पर ट्रू कंसीडर होगा। हमें एक ऐसा ऑप्शन लेना था जो कि फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर टिक करना रहेगा। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है,
जल्दबाजी में जब अगर हम इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं और हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है तो हम सीधा सीधा पहले ऑप्शन को ही क्या कर जाते हैं, मार्क कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें हमें ये बोला जाता है कि एक ऐसे कंक्लूजन को चूज करना है जिसमें कि वो फॉलो कर रहा है गिवन स्टेटमेंट को। तो हम ऑप्शन ए जो कि ट्रू आ रहा था हम उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि हकीकत क्या थी, हमें एक ऐसा कंक्लूजन लेना था जो कि लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा था, जो कि ऑप्शन बी में था। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई करें इसको। आंसर आया क्वेश्चन 4 का, समझते हैं इसको। स्टेटमेंट हमें दिए हैं, सम रिजल्ट इज वेटिंग, सम रिजल्ट इज वेटिंग, ऑल वेटिंग इज हेजिटेटिंग, सम हेजिटेटिंग इज सॉरो, ठीक है। एंड फोर्थ, सम रिजल्ट इज गुड, सम रिजल्ट इज गुड, लास्ट स्टेटमेंट ऑल गुड इज जॉब, ऑल गुड इज जॉब, फाइन। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट वेन डायग्राम बना। कंक्लूजन हमारे पास 4 हैं और हमें ध्यान उसी बात का रखना है कि एक ऐसा कंक्लूजन हमें टिक करना है जो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। देखते हैं कंक्लूजन 1, सम जॉब आर रिजल्ट, सम जॉब आर रिजल्ट, यस। जी और आर के सम पार्ट कॉमन होने के कारण से जे और आर का सम पार्ट कॉमन हो रहा है, ये बात ट्रू है। ऑप्शन बी, ऑल वेटिंग बीइंग सॉरो इज अ पॉसिबिलिटी, डब्ल्यू और एस का कोई डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन हमें कहा नहीं गया है, ये दोनों कॉमन हो सकते हैं और इसकी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन में मेंशन है, फॉलो करेगा। ऑप्शन सी, ऑल गुड बीइंग वेटिंग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल गुड बीइंग वेटिंग इज अ पॉसिबिलिटी, अगेन जी का और डब्ल्यू का कोई भी डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन हमें कहा नहीं गया है, सो दे कैन कॉमन टू ईच अदर पार्शियली और कंप्लीटली, तो ये स्टेटमेंट सॉरी ये कंक्लूजन भी ट्रू कंसीडर किया जाएगा। लास्ट आंसर हमारा जो है, सम गुड इज हेजिटेटिंग, सम गुड, देखो जी का और एच का अगेन कोई भी डेफिनेट रिलेशन गिवन नहीं है और इन्होंने कंक्लूजन डेफिनेट बोला है कि ऐसा है क्या, जी का और एच का सम पार्ट कॉमन है, हम बोल नहीं सकते, डेफिनेट नहीं बोल सकते, इस कारण से ये एक पॉसिबल केस होगा एंड फॉलो नहीं करेगा। हमें एक ऐसा कंक्लूजन टिक करना था जो फॉलो नहीं कर रहा था, सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑप्शन डी यहां पर कंसीडर किया जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां पर हम 5 लेते हैं। 5 में क्या रहेगा, 6 स्टेटमेंट्स हैं और 6 स्टेटमेंट में अगेन फिर से मैं आपको कहूंगा कि इंस्ट्रक्शन को रीड करना काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर दिया हुआ है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहां पर सिंगल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ही अकेला है इस इंस्ट्रक्शन के लिए। सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन there are 6 statements followed by options consisting of 3 statements put together in a specific order. Choose the options that indicates a combination where the third statement can be logically deduced from the first two statement. याद रखना इंस्ट्रक्शन अलग अलग आती हैं, इस तरह की सेट में इंस्ट्रक्शन अलग अलग आती हैं। हमें अभी क्या बोला जा रहा है,
हमें जैसे जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, किसी ऑप्शन में 1 4 3 अगर इस तरह से लिखा हुआ है, तो फर्स्ट टू का जो कंक्लूजन निकल सकता है एज अ थर्ड स्टेटमेंट, तो हमें उसको कंसीडर करना है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ट्राई करो इसको। और इसका बेस्ट मेथड क्या होता है, ऑप्शन से हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। रैंडम नहीं जाएंगे, स्टेटमेंट को बना बना के नहीं देखेंगे, बिकॉज देर आर 6 स्टेटमेंट एंड देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज कि बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। सो बेटर ऑप्शन इज कि हम बाय ऑप्शन इसको सॉल्व करें। ठीक है, ट्राई करो इसको। आंसर आया बच्चों? चलो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। आई होप मैंने स्टार्टिंग में जो हिंट दी है आपको, वहां से अप्रोच क्लियर हुआ होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 6 4 1 6 4 1। दैट मीन्स इन दोनों को हम एज अ स्टेटमेंट कंसीडर करें और इन दोनों से हम फर्स्ट को कंक्लूड कर पा रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा, नहीं तो हम आगे ऑप्शन चेक करेंगे। देखते हैं 6 में क्या बोला जा रहा है, सम पाई इज जिप। फोर्थ में क्या बोल रहा है, ये तो हमने 6 के लिए बना लिया। 4 में क्या बोला जा रहा है, 4 में बोला है सम पाई इज अबिकस। सम पाई इज अबिकस। अब यहां से क्या कंक्लूजन नंबर 1 हम पता कर पाएंगे, तो यहां पर 1 में लिखा है ऑल अबेकस इज रेडियस। रेडियस का यहाँ कोई सीन है ही नहीं, तो हम बिना बनाए भी ये एलिमिनेट कर सकते थे। हम पहले और दूसरे स्टेटमेंट, ग्रुप के पहले और दूसरे स्टेटमेंट से थर्ड को हम कंक्लूड नहीं कर पाए, दैट्स वाई हमने ऑप्शन ए को एलिमिनेट किया। नाउ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में लिखा है 1 3 6। 1 3 एंड 6। देखते हैं 1 और 3 को हम चेक करते हैं, क्या हम कंक्लूड कर पा रहे हैं 6 को। तो फर्स्ट में ऑल अबेकस इज रेडियस। थर्ड में लिखा है सम रेडियस इज जीबैक। एंड क्या इस फिगर से हम स्टेटमेंट 6 को कंक्लूड कर पाएंगे, सम पाई इज जिप। अगेन यहां ना तो पाई है और ना जिप है, तो हम 1 और 3 की हेल्प से 6 को कंक्लूड नहीं कर सकते, दैट्स वाई ऑप्शन बी अगेन हम एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी का कहना है 1 5 3। 1 5 3। 1 और 5 से हम थर्ड को कंक्लूड कर रहे हैं, अगर हो जाएगा तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो 1 में लिखा है अगेन ऑल अबेकस इज रेडियस। 5 में लिखा हुआ है स्टेटमेंट 5 में सम जीवैक इज अबेकस। सम जीवैक इज अबेकस। ठीक है, क्या इस फिगर से हम थर्ड को कंक्लूड कर पा रहे हैं, तो थर्ड में हमें लिखा हुआ है सम रेडियस इज जीवैक। सम रेडियस इज जीवैक, यस। विद द हेल्प ऑफ ए एंड आर कॉम्बिनेशन हम क्लियर यहां से देख पा रहे हैं एक्स का और आर का सम पार्ट कॉमन हो रहा है, और ये डेफिनेट है। सो ये ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर कंसिडर करना चाहिए हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, और एक सिंपल बट अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करो इसको।
क्वेश्चन नंबर 5 में अलग अलग तरह से इंस्ट्रक्शन आती हैं। एक इंस्ट्रक्शन ये भी बोलती है, क्वेश्चन नंबर जो 5 हमने सॉल्व किया था, कि जो 3 स्टेटमेंट है हर एक ऑप्शन में, वो बस आपस में रिलेटेड होना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की इंस्ट्रक्शन क्या थी? फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से हम थर्ड स्टेटमेंट को कंक्लूड कर पाए, एक ऐसा ऑप्शन हो, उसको हम करेक्ट आंसर कंसीडर करेंगे। बट कई बार इंस्ट्रक्शन आती है ऐसी कि ऑल द स्टेटमेंट्स इन ऑप्शन जस्ट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना? तो उनका आपस में रिलेशन हमें मिलना चाहिए, हर एक स्टेटमेंट का, वो हमारा करेक्ट आंसर होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फिलहाल। द एक्सप्रेशन ई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एच greater than z, second part of expression is as less than equal to y, and e is greater than f। अगर इन्होंने ट्रू कंसीडर किया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन विल बी डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको तो हम मर्ज करते हैं सबसे पहले। तो h का और y का रिलेशन हम कहीं ना कहीं यहां कॉमन देख पा रहे हैं, तो h इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। और E इज ग्रेटर देन F, E इज ग्रेटर देन F, और वी कैन से F इज लेस देन E। यहां पर हमारा ये फाइनल एक स्टेटमेंट बना। अब इस स्टेटमेंट से हम कंक्लूड कर रहे हैं ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। और हमें ध्यान ये रखना है कि एक ऐसा कंक्लूजन टिक करना है जो डेफिनेटली फॉल्स हो, ठीक है। F लेस देन वाई, F लेस देन वाई, रिजल्ट क्या दे रहा है? F लेस देन E लेस देन J लेस देन इक्वल टू एच लेस देन इक्वल टू वाई। सो यहां से एफ लेस देन वाई हम ट्रू कंसिडर कर पा रहे हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, वाई इज ग्रेटर देन ई, वाई इज ग्रेटर देन ई, वाई एच जे ई। वाई और एच का ग्रेटर इक्वल का रिलेशन है, एच और जे का अगेन ग्रेटर इक्वल का रिलेशन है, और एच जे का और ई का अकेला ग्रेटर का है। सो वी कैन से वाई से ई का रिलेशन अकेला ग्रेटर का हमें डेफिनेट मिलेगा, तो ये रिजल्ट भी ट्रू आएगा, ठीक है। F is less than H, C ऑप्शन, F is less than H, F F से E लेस देन है, E से J लेस देन है, और J से दो रिलेशन है H के बीच में, लेस देन भी है और इक्वल भी है। तो F से लेके H तक का जो फाइनल हमारा रिजल्ट निकलेगा वो लेस देन ही होल्ड कर पा रहा है। सो F लेस देन H कहना अगेन ट्रू कंक्लूजन हमें मिल जाएगा। अब ऑप्शन डी बोल रहा है कि ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू, ठीक है। तो ये बात सही है कि सभी ऑप्शन सही है, कोई भी डेफिनेट फॉल्स हमें मिल नहीं रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी यहां पर हमें कंसीडर करना रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें डायरेक्शन एंड स्ट्रेस का काफी आसान सा क्वेश्चन है। आंसर आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। अरुण स्टार्ट वॉकिंग इन अ डायरेक्शन एंड वॉक्स 5 मीटर। अब दिक्कत ये है कि उसने डिस्टेंस दी है, इनिशियल डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है। जब भी इनिशियल डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है, इन दैट केस हम किस डायरेक्शन में उसको कंसीडर करें, जो ट्रेवलिंग पाथ हमारा रहेगा, हम किस डायरेक्शन में उसको प्लॉट करें, ये दिक्कत है।
तो ऐसे केस में जब हमें डेफिनेट नहीं है कि इनिशियली हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम सिंपली उसको प्लॉट कर दें, और उसको जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन सेट होता है हमारा, उसके लिए हमें उसको कंसीडर नहीं करना है। दैट मीन्स अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट ये कंसीडर किया है और यहाँ से इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, तो अगर आप कहेंगे कि सर स्टैंडर्ड चार्ट हमारा ये होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हमने ये पाथ लिया है, दैट नॉट मीन्स इन दिस क्वेश्चन कि वो ईस्ट होगा ही होगा, नॉट नेसेसरीली ट्रू। बिकॉज हमारा कहना यह है कि स्टार्टिंग में हम इन डायरेक्शन सेंस को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज हमें इनिशियल डायरेक्शन गिवन नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं, लेकिन इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रहे कि हमें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा। तो अरुण स्टार्ट वॉकिंग इन अ डायरेक्शन एंड वॉक्स 5 मीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर उसने ट्रेवल किया। अगेन आपको याद दिला दूं, ये डायरेक्शन ईस्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इनिशियली हमें पता नहीं है। नाउ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। पाथ ये था तो लेफ्ट तो क्लियर होगा कि ऊपर होगा। ऊपर होने का मतलब क्या? नॉर्थ? नहीं, नहीं पता हमें क्या होगा वो, ठीक है। नाउ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स अनदर 5 मीटर। तो ये डिस्टेंस अगेन उसने 5 मीटर कवर की है फिर से। देन अगेन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड 10 मीटर फिर से कवर करता है। तो लेफ्ट इस बार इधर होगा। 10 मीटर कवर करने का मतलब क्या? यहां तक तो 5 उसका कवर हो जाएगा, रिमेनिंग 5, तो ओवरऑल 10 मीटर इसका कवर हो जाएगा, और ये पाथ उसका रहा, ठीक है। नाउ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 10 मीटर, जो कि हमने रिप्रेजेंट किया, बट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। मतलब 10 मीटर कवर करने के बाद उसने राइट टर्न ले लिया होगा। यहां पर उसने राइट टर्न लिया है। इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इनिशियली उसने बोला था कि 5 मीटर उसने ट्रेवल किया है, फिर लेफ्ट टर्न लिया है, फिर 5 मीटर फिर से ट्रेवल किया है, and instruction again, then again he takes a left turn and walks 10 meter before turning to his right। मतलब 10 मीटर कवर करने के बाद उसने राइट टर्न ले लिया। तो ये हमारा पाथ था। राइट टर्न कहां हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अब उसका फेस यहां इस डायरेक्शन में नहीं है, उसका फेस कहां है? इस डायरेक्शन में है अभी, ठीक है। पॉइंट यहां पर वो खड़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्शन उसकी फेस की यहां पर मिल रही है हमें। नाउ इफ ही इज फेसिंग ईस्ट, इसने जो इंस्ट्रक्शन बोली है कि फेस इसका इधर है, और अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है, अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है, देन इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट, है ना। अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है तो इससे हम बता सकते हैं इसका अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट होना चाहिए, और बचे हुए दो डायरेक्शन हम बता सकते हैं यहां पर आना चाहिए नॉर्थ, बिकॉज हमें पता है नॉर्थ पोल से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब हम टर्न करते हैं तो हमें ईस्ट मिलता है। नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज 90 डिग्री जब हम टर्न करते हैं तो हमें ईस्ट मिलता है, और नॉर्थ का अपोजिट यहां पर हो जाएगा साउथ। तो इन्होंने बोला है कि जब स्टार्टिंग पॉइंट से वो जा रहा था, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा था? यहां पर जो डायरेक्शन चार्ट बनने वाला है एग्जैक्टली वो वही रहेगा जो यहां पर बना है। तो इसको सीधा हम यहां पर कॉपी कर सकते हैं, राइट। कि यहां पर ऊपर हमारे लिए ईस्ट है, यहाँ साउथ है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो इनिशियली जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से अपने पाथ को उसने कवर करना स्टार्ट किया, तो वो साउथ में जा रहा था। इनिशियली वो साउथ में जा रहा था। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। एंड डेटा सफिशियंसी जो कि डेटा अरेंजमेंट पर ली गई है। अच्छा सेट है, ट्राई करो इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं।
आंसर आया बच्चों इसका। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि डेटा सफिशिएंसी सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हैं और ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए, ठीक है। तो हमें डेटा दिया जाएगा एज अ स्टेटमेंट और हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा। उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए स्टेटमेंट के फॉर्म में डेटा दिया जाएगा। अब हमें ये चेक करना होता है कि गिवन स्टेटमेंट, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इंडिविजुअली स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, या दोनों के दोनों सफिशियंट हैं एक साथ, या एक भी सफिशियंट नहीं है, या उनमें से कोई एक सफिशियंट है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। हमें ये पूरा प्रोसेस कैसे करना है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 8 में बोल रहा है, आर ऑल द फाइव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के नाम लिखे हैं, हु आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, क्या सभी के सभी पांचों फ्रेंड्स आपस में जो बैठे हुए हैं वो सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इन्होंने क्या जानने की कोशिश की है, क्या सभी के सभी लोग सेंटर फेस कर रहे हैं या नहीं। अब हमें स्टेटमेंट एक एक करके इनका आंसर ढूंढना है और जस्ट ये चेक करना है क्या सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट से हम इनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, अच्छा दोनों स्टेटमेंट में तो एक बात क्लियर है कि भाई 5 पर्सन का सीटिंग अरेंजमेंट है और हमें ये चेक करना है कि सभी सभी अंदर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो इनकी हमने पोजीशन दोनों में बना दी है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट वन का डेटा लेते हैं। लीना सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमित, अमित फेसेस द सेंटर। मानो अमित हमने यहां पर कंसीडर किया, अमित का फेस सेंटर है और लीना सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमित, अमित से लेफ्ट 1 2 यहां पर आ जाएगी लीना, ठीक है। अब लीना का फेस कहां है अभी नहीं पता है, आगे देखते हैं। अरुण सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ लीना। अब एक बात समझना, अगर लीना का फेस सेंटर की ओर हुआ तो लीना का राइट सेकंड यहां पर अमित होगा, ठीक है। लीना का राइट सेकंड अमित होगा, लेकिन इन्होंने बोला है कि लीना का राइट सेकंड अरुण है, मतलब लीना इनसाइड फेस नहीं कर सकती, कंफर्म लीना का फेस सेंटर से बाहर की ओर होगा, ठीक है। और लीना के राइट सेकंड पर यहां पर कौन आ जाएगा, अरुण। तो बस इतनी जानकारी से हमें यह पता चल चुका है कि सभी लोग सेंटर फेस नहीं कर रहे, मतलब कोई ना कोई तो बाहर फेस कर रहा है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सभी लोग सेंटर फेस नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको ये जानना था क्या सभी लोग सेंटर फेस कर रहे हैं। तो जवाब आया नो, जवाब क्या आया, नो, सभी लोग सेंटर फेस नहीं कर रहे हैं। दैट मींस ये स्टेटमेंट अपने आप में सफिशिएंट है जो इन्होंने क्वेश्चन किया था उसके आंसर को करने के लिए, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। इन्होंने बोला है स्टेटमेंट 2 में, अली सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कैन, कैन फेसेस द सेंटर। मानो हमने यहां पर कैन को कंसिडर किया है, कैन का फेस सेंटर है और अली सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ कैन, 1 2 3, ये अली की पोजीशन है जो कि कैन के लेफ्ट थर्ड है। अली का सेंटर फेस है आउटसाइड सेंटर फेस है नहीं पता, आगे देखते हैं। अमित सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अली, अली का इमीडिएट लेफ्ट अमित होगा, अमित सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अली, बट कैन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमित। अब एक चीज समझना, अमित सिट्स यहां पर जो इन्होंने कैन के लिए मना किया वो किसके लिए बोल रहा है, वो अमित के लिए, कि कैन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमित, मतलब अमित न तो यहां पर आ सकता है और ना ही अमित यहां पर आ सकता है, कैन का इमीडिएट नेबर अमित नहीं है। और जो अली का और अमित का रिलेशन दिया है, बोला है अमित सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अली। अब अली अगर आउटसाइड सेंटर फेस करेगा तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कौन आ जाएगा, अमित। अली अगर आउटसाइड सेंटर फेस करेगा तो अली का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, अमित, यही बोला है, अमित सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अली। अब ऐसे केस में जो अमित बचा हुआ है वो या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, जो कि रेस्ट्रिक्टेड है। दैट मींस अली आउटसाइड सेंटर फेस नहीं कर सकता, कंपलसरी है कि अली को इनसाइड फेस करना पड़ेगा। और इस हिसाब से अमित यहां ना होके अमित सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अली बट कैन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ अमित, आई एम सॉरी,
आई एम सॉरी, मैं आपको अरुण और अमित के चक्कर में थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन कर गया। मैं अपडेट करता हूं स्टेटमेंट को यहाँ पर। जो इन्होंने बोला है अमित का, यहाँ पर सीधा सीधा कैन का अमित के साथ रिलेशन दिया था ना। कैन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ अमित, यस यस यस। कैन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ अमित। और अली का जो बचा हुआ है, अगर अली सेंटर फेस करेगा तो अमित की पोजीशन यहां आनी चाहिए थी। कब? जब अली सेंटर फेस करता तब। और जब अमित यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है कैन के चक्कर में, तो हमें पता है कि भाई अली जो है बाहर ही देखेगा। ये चीज थोड़ा अपडेट कर लेना, मैं आपको रॉन्ग एक्सप्लेन कर गया था जस्ट इसी से पहले। तो अली को कंपलसरी सेंटर से आउटसाइड फेस करना पड़ेगा, और इसके रेफरेंस में फिर जो अमित आएगा, वो अमित की ये पोजीशन फाइनल हो जाएगी। तो यहां से पूरे स्ट्रक्चर से एक बात पता चल रही है कि अमित का फेस बाहर है, सॉरी अली का फेस बाहर है। अब जब अली का फेस बाहर है तो और इन्होंने क्या जानने की कोशिश की है, क्या सभी लोग सेंटर फेस कर रहे हैं? पता चला कि सभी लोग सेंटर फेस नहीं कर रहे हैं, आंसर नो में मिला। तो यहां पर स्टेटमेंट ये कंसीडर किया जाएगा सफिशिएंट। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी डेटा सफिशिएंसी की बात होगी, डेटा सफिशिएंसी में हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर जो रहेगा, क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, वो दो फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ नो और इन द फॉर्म ऑफ यस एज वेल। ठीक है? मतलब किसी क्वेश्चन का नो में आंसर आया तब भी वो सफिशियंट है हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए, अगर उसका आंसर यस में आया तब भी वो सफिशियंट है हमें आंसर करने के लिए। तो दोनों ही केस में, चाहे वो नेगेटिव आंसर हो चाहे वो पॉजिटिव हो, इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो डेफिनेट होना चाहिए। और अगर डेफिनेट है तो हमारे लिए वो सफिशियंट हमें कंसिडर करना चाहिए। ठीक है? तो दोनों ही केस में वो डेफिनेट हमें रिजल्ट दे रहा था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसमें। 9 से लेके 11 का एक पजल है, इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो इसको एंड देन आई विल एक्सप्लेन। अप्रॉक्स 3 मिनट का मैं टाइम दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। आप सॉल्व करें, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ट्राई करें इसको।
बन रहा है बच्चों? चलो इसको सॉल्व करेंगे अपन। बन गया? चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अपन। है क्या एग्जैक्टली exactly? इसमें दिया हुआ है 8 एम्प्लॉइज, ए टू एच उनके नाम है, विल हैव टू टेक द लीव इन द मंथ ऑफ जनवरी, मार्च, जुलाई एंड नवंबर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। In each month, in each month, they all will take a leave on either 8th or 19th of the given month. Not more than 2 employees will take a leave on the same month. Fine. Only one employee will take a leave on each day. ठीक है। यहां से डेटा फिल करना हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास जो की फील्ड है वो है, एक तो मंथ है ना। मंथ कौन कौन से? जनवरी, मार्च, जुलाई एंड नवंबर। और दूसरा ये डेट्स हैं। डेट हमारे पास दो हैं, 8th और 19th। ठीक है। और कुछ पर्सन हैं कि कौन कहां पर जाने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मंथ, डेट एंड देन पर्सन। मंथ हमारे पास है जनवरी, मार्च, जुलाई एंड नवंबर, राइट। ठीक है। हर एक मंथ में दो ऐसी डेट्स हैं जिन पे वो एम्प्लॉय लीव ले सकते हैं। ठीक है। क्या क्या डेट्स हैं? या तो 8th है या 19th है। अगेन यहां पर भी 8th और 19th ऑफ मार्च, 8th और 19th ऑफ जुलाई, 8th और 19th ऑफ नवंबर। ठीक है। समझते हैं इसको। डेटा इसमें फिल करेंगे अपन। ओनली वन पर्सन विल टेक अ लीव बिफोर द जी। जी से पहले, देखो इनको हमने सीक्वेंस में इसलिए अरेंज किया है बिकॉज दिस इज अ सीक्वेंशियल पजल, है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले किसने लीव ली होगी, तो जनवरी 8 को पहला व्यक्ति होगा जिसने लीव ली होगी। जनवरी 19 को दूसरा व्यक्ति होगा जिसने लीव ली होगी। समझ रहे हैं ना। इस तरह से लास्ट में लीव किसने ली होगी, नवंबर 19 को किसी पर्सन ने लीव लिया होगा। ये लास्ट वाला लीव डेट रहेगा। तो इस हिसाब से ओनली वन पर्सन विल टेक अ लीव बिफोर द जी। तो इसका मतलब क्या है, जी ने 19 जनवरी को लीव लिया होगा, क्योंकि इससे पहले एक पर्सन ने ही लीव लिया है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, मोर देन 3 पर्सन विल टेक अ लीव बिटवीन जी एंड ए। अब मोर देन 3 पर्सन का मतलब क्या हो सकता है? वो 4 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, और भी कैंडिडेट। अब चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी 8 ही हैं और जी यहाँ पर हो चुका है, तो हमें या तो 4 या 5 वाली कंडीशन यहाँ पर देखने मिल सकती है। कहने का मतलब क्या है, जी और ए के बीच में मोर देन 3 पर्सन का गैप आने वाला है। तो 1, 2, 3, 4, मोर देन 3, कम से कम यहां तक तो होगा। कम से कम यहां तक तो होगा। मतलब यहां ए हो सकता है, या जी के रेफरेंस में यहां पर ए हो सकता है।
ठीक है, ये वर्टिकल जो मैपिंग चल रही है उसको थोड़ा ध्यान रखना कि जी तो पक्का है 19 जनवरी को ही आएगा, और जी के रेफरेंस में 1 2 3 4 का गैप ए या तो ऐसा होगा, या 1 2 3 4 5 का गैप ए ऐसा हो सकता है। क्लियर है, क्योंकि मोर देन 3 का यहां पर हमें गैप जी और ए में चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली वन पर्सन विल टेक अ लीव बिटवीन ए एंड एच। ए एंड एच में एक ही व्यक्ति आ रहा है, तो देखो इस वाले केस में नीचे एच तो आ नहीं सकता, तो वन पर्सन यहां पर लीव लेगा और यहां पर एच हमें कंसीडर करना रहेगा। और इस वाले केस में वन पर्सन और यहां पर एच हमें कंसीडर करना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू पर्सन्स विल टेक अ लीव बिटवीन एच एंड बी। एच और बी के बीच में दो लोग हैं, एक दो, यहां पर बी नहीं आ सकता, तो एक दो के बाद यहां पर बी आ जाएगा। यहां पर एक दो के बाद बी का नीचे चांस नहीं है, तो एक दो के बाद बी का यहां पर चांस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ओनली वन पर्सन विल टेक अ लीव बिटवीन बी एंड एफ। ओनली वन पर्सन विल टेक अ लीव बिटवीन बी एंड एफ। अब बी और एफ का क्या रिलेशन जा रहा है भाई, एक पर्सन का यहां पर मिलना चाहिए, तो बी और एक पर्सन एफ यहां कंपलसरी आ जाएगा इस वाले केस में। और यहां पर दो केस बन जाएंगे, बी और एफ में इन्होंने एक ही बोला है ना, बी एंड एफ, ओनली वन पर्सन विल टेक अ लीव बिटवीन बी एंड एफ। तो यहां पर एफ हो सकता है, या बी के रेफरेंस में एक छोड़ने के बाद यहां पर एफ हो सकता है। तो इस वाले केस का एक और कॉपी हमें बनाना पड़ेगा, जी यहां पर बी, यहां पर एच, यहां पर ए। अब बी के लिए एक बार एफ ऊपर और एक बार एफ नीचे, तो इस वाले केस में हम एफ यहां पर बना लेते हैं, और इस वाले केस में एक छोड़ने के बाद एफ यहां पर कंसिडर करते हैं, क्योंकि इन्होंने यही बोला है ना, ओनली वन पर्सन विल टेक अ लीव बिटवीन बी एंड एफ। ठीक है, अब वो कौन पर्सन है डिपेंड करेगा। टू पर्सन विल टेक अ लीव बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी के बीच में दो पर्सन ले रहे हैं लीव, तो एफ एक दो, सी यहां पर आएगा इस वाले केस में। एफ यहां पर है तो एक दो के बाद सी यहां पर आएगा, क्योंकि एफ और सी में दो लोग लीव ले रहे हैं। एफ यहां पर है तो एक दो के बाद सी यहां पर नहीं आएगा, एक दो के बाद सी यहां पर नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना, हमें चाहिए एफ और सी में दो लोगों का गैप, तो एफ का एक दो के बाद सी यहां नहीं आ सकता, एफ का एक दो के बाद सी यहां नहीं आ सकता, तो सीधी सीधी बात है, ये वाला केस तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दो हमारे केस बचे हुए हैं अभी तक। डी विल टेक अ लीव वन ऑफ द डेज आफ्टर ई। डी विल टेक अ लीव वन ऑफ द डेज आफ्टर ई। ई कहां पर है, देखो दो पोजीशन बची हैं, या तो यहां पर आ सकता है या फिर यहां पर आ सकता है। तो डी जो है वो ई के बाद कभी लीव लेता है, तो ई यहां पर आना चाहिए, और उसके बाद कभी डी लीव लेगा, यही तो मतलब है ना। डी विल टेक अ लीव वन ऑफ द डेज आफ्टर ई। ठीक है, और यहां पर दो प्लेस खाली थी, तो पहले ई ने लीव ली होगी एंड देन डी ने लीव ली होगी, तो ये दूसरा केस हमारा बन चुका है। अब लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, नीदर डी नॉर ई विल टेक अ लीव ऑन 19th ऑफ द एनी ऑफ द गिवन मंथ। ना तो डी और ना ई 19th को लीव लेने वाले नहीं है। चेक करते हैं, ई का लीव 8th को है, डी का लीव 19th को है, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि डी और ई में से कोई भी 19th को लीव नहीं ले सकता। यहां पर चेक करते हैं, ई का 8th को है और डी का अगेन 8th को है, सो ये वाला जो केस है ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बनेगा। अब इसके बेस पर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, ये तीन क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं, देखते हैं। एच विल टेक अ लीव ऑन विच डेट एंड मंथ। एच का एच का 19th जुलाई, ये आंसर आ रहा है 19th जुलाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग फॉलोइंग विल टेक अ लीव ऑन मार्च मंथ। तो मार्च में भाई किस किसने ली है, बी और सी ने, बी और सी, ऑप्शन डी अगेन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी पर्सन विल टेक अ लीव बिटवीन एफ एंड ई। एफ एंड ई के बीच में 1 2 3, 3 पर्सन ने लीव ली हुई है, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी।
देखो ये एक सिक्वेंशियल पजल था, और हमेशा याद रखना सिक्वेंशियल पजल को सॉल्व करते टाइम हमें जो सीक्वेंस बनाना रहेगा, जो भी सीक्वेंस हमें जिस की फील्ड के रेफरेंस में सीक्वेंस दिया हुआ है उसको बना लो। जैसे मंथ का बात की है तो मंथ को भी हमने सीक्वेंस में रखा है, डेट की भी बात की है, डबल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो डेट को भी उसी सीक्वेंस में हमने रखा है, उसके बाद डेटा फिल करना चालू किया है। हमारे लिए काफी इजी रहेगा पजल को अप्रोच करना। ठीक है, एक और नेक्स्ट डेटा अरेंजमेंट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी मैं 3 से 4 मिनट आपको दे रहा हूं, सॉल्व करो, ट्राई करो, एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। ट्राई करें डेटा अरेंजमेंट सॉल्व करने का, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। बन पा रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है?
आई होप बना होगा, कुछ समझते हैं इसको। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है और किस तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा क्या कहा गया है इसमें। ए से लेके जी तक 7 पर्सन है who travel to office every day by a particular train which stops at 5 stations। स्टेशन के नाम क्या क्या है, 1 से लेके 5 तक रिस्पेक्टिवली, आफ्टर लीविंग इट्स बेस स्टेशन। तो एक बेस स्टेशन और उसके बाद स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2 अप टू स्टेशन नंबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन नंबर 12 to 16 को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टेशन का नाम लेते हैं हम। स्टेशन नेम कौन सा है, दैट मीन्स वो बेस स्टेशन है, स्टेशन नंबर 1 है, क्या है ना। कौन कहाँ पर ट्रेन में आ रहा है और कौन कहाँ से ट्रेन में उतर जा रहा है, ये चीज हम एक एक करके डेटा फिल कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेशन नेम में सबसे पहले तो हमने देखा कि बेस स्टेशन है, फिर स्टेशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 स्टेशन और हैं। देखते हैं डेटा फिल करेंगे, इसमें क्या बोल रहा है। 3 among them get on the train at the base station। अब उन 3 में से कौन बेस स्टेशन पे चढ़ रहा है ट्रेन में, ये नहीं पता है, बट ये पक्की बात है यहाँ पर 3 लोग आने वाले हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, D gets down at the next station at which F gets down, है ना। D gets down at the next station at which F gets down। F के बाद कहीं ना कहीं डी उतर जा रहा है। अब वो कौन से स्टेशन पे उतर रहा है, एफ कौन से पे डी, वो हम देख लेंगे ये, लेकिन जो साइड में बनाया है हमने, इसको हम डेटा बाद में फिल कर लेंगे अपने टेबल में। थर्ड पॉइंट देखते हैं, बी डज नॉट गेट डाउन ईदर विथ ए और एफ। बी डज नॉट गेट डाउन ईदर विथ ए और एफ। ये कॉम्बिनेशन हमारा नहीं होने वाला। बी डज नॉट गेट डाउन ईदर विथ ए और एफ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, जी अलोन गेट्स ऑन एट स्टेशन नंबर 3, है ना। जी गेट्स जी अलोन गेट्स ऑन एट स्टेशन नंबर 3। तो स्टेशन नंबर 3 अकेला जी आ रहा है, तो जी का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और कोई आने वाला यहाँ पर है नहीं। जी अलोन गेट्स ऑन एट स्टेशन 3 एंड गेट्स डाउन विथ सी आफ्टर हैविंग पास्ड 1 स्टेशन। जी यहाँ पर आया, एक स्टेशन पास होने के बाद वो यहाँ पर उतर जाएगा, किसके साथ, सी के साथ में। ठीक है, अच्छा क्या जी और सी अकेले उतर रहे हैं, ऐसा है, एक बार देख लेते हैं। जी अलोन गेट्स ऑन स्टेशन 3 एंड गेट्स डाउन विथ सी आफ्टर हैविंग पास्ड 1 स्टेशन। जी सी उतर रहे हैं, और भी कोई हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। पॉइंट नंबर 5, ए ट्रेवल्स बिटवीन ओनली 2 स्टेशन एंड गेट्स डाउन एट स्टेशन 5। ए स्टेशन 5 पे उतर जा रहा है और सिर्फ 2 स्टेशन के बीच में चल रहा है, दैट मीन्स ए यहाँ पर ट्रेन में चढ़ा हुआ, ठीक है, और स्टेशन नंबर 5 पर वो उतर जा रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, नन ऑफ देम गेट्स ऑन एट स्टेशन नंबर 2। नन ऑफ देम गेट्स ऑन एट स्टेशन नंबर 2। तो यहां कोई भी नहीं आ रहा है, ये खाली चला जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर 3 पर्सन की प्लेस है, वो 3 पर्सन कौन कौन है वो हम लोग समझ लेंगे अभी। नन ऑफ देम गेट्स ऑन एट स्टेशन टू फाइन। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है सी गेट्स ऑन विद एफ, सी गेट्स ऑन विद एफ, ठीक है, बट डज नॉट गेट ऑन विथ ईदर बी और डी। सी जो है वो बी के साथ में नहीं आ रहा है, सी जो है वो डी के साथ में भी नहीं आ रहा है ना। सी गेट्स ऑन विद एफ। अब यहां पर एक चीज ये देखना रहेगा कि हमारे पास 3 लोग तो यहां पर आ रहे हैं ट्रेन में, 2 लोग ये हो चुके हैं, 5 लोग हो चुके हैं, अब 2 की जगह खाली बची हुई है ना, 2 की जगह खाली बची हुई है। तो ऑब्वियस है कि जो 2 की जगह खाली बचने वाली है वो यहां पर स्टेशन नंबर 5 पे आ जाएगा। ये तो लास्ट स्टेशन है, यहाँ पर कोई चढ़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो 2 की जगह जो बची है वो यहां पर आ सकती है, ठीक है। देखते हैं, कंपलसरी नहीं है, एक बार पॉसिबल केस अपन देख रहे हैं कि कौन कौन यहां हो सकता है। सी गेट्स ऑन विद एफ, सी गेट्स ऑन विद एफ बट डज नॉट गेट ऑन विद इधर बी और डी, ठीक है। इसको होल्ड करते हैं पॉइंट को। पॉइंट नंबर 6 को अभी हमने, पॉइंट नंबर 7 को अभी हमने होल्ड कर रखा है। पॉइंट नंबर 8, ई गेट्स ऑन विद 2 अदर्स, ई गेट्स ऑन विद 2 अदर्स। अब एक बात का यहां देखना, ई गेट्स ऑन विद 2 अदर्स का सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन इस वाले फील्ड में ही हो सकता है, क्योंकि 3 लोगों की एंट्री यही है और कहीं 3 लोगों की एंट्री अब पॉसिबल नहीं है। तो इन 3 में से एक तो पक्का ई होगा, ये हमने बना दिया। ई गेट्स ऑन विद 2 अदर्स एंड गेट्स डाउन अलोन आफ्टर डी। डी के बाद में ई अकेला उतर जाएगा, ठीक है, डी के बाद में ई अकेला उतर जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, अब यहां से एक बात तो पता चल रही है कि डी डी के बाद ई उतर रहा है, डी के बाद ई उतर रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबल केस है, वो भी होल्ड करते हैं इसको भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही गेट्स ऑन विद 2 अदर्स एंड गेट्स डाउन अलोन आफ्टर डी, ओके फाइन। पॉइंट नंबर 9, बी एंड डी वर्क इन द सेम ऑफिस, बी एंड डी वर्क इन द सेम ऑफिस एंड दे गेट डाउन टुगेदर एट स्टेशन नंबर 3। बी डी स्टेशन नंबर 3 पे उतर रहे हैं एक साथ, और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों एक साथ रहने वाले हैं, क्योंकि एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो एक साथ उतरेंगे, एक साथ चढ़ने वाले हैं। तो अब ये जो दो दो का कॉम्बिनेशन है, वो दो का कॉम्बिनेशन किस तरह से रहेगा भाई? बहुत सीधी सी बात है कि जो 2 का एक साथ चढ़ने का है, वो कहां पर स्पेस खाली मिल रहा है, या तो यहां पर मिलेगा स्पेस खाली या फिर यहां पर मिलेगा। तो ये 2 केस बन सकते हैं। क्या क्या केस बन सकता है, इसको मैं साइड में और लिख दूं कि ई यहां पर था और 2 लोगों का और स्पेस था, है ना, और यहां पर 2 लोगों का स्पेस था। तो इस वाले फील्ड में 2 केस बन जाएंगे, मैंने यहीं पर कर दिया है कि या तो जो बी डी है यहां पर आए होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि बी डी यहां पर आए होंगे, ठीक है। अब अगर यहां पर बी डी आता है तो ये 2 जगह बच रही हैं, जो वो किस किस की हो सकती हैं? हमारे पास ए हो चुका है, जी हो चुका है ना, बी डी, सी बचा हुआ है एक तो, और एफ बचा हुआ है एक, ठीक है। सी और एफ हमारे पास बचा हुआ है, तो ए बी सी डी ई एफ सभी लोग हो रहे हैं। और इस वाले केस में यहां पर ई के साथ में कौन? सी और एफ आ सकता है। तो पूरा केस क्या बन जाएगा यहां पर कि भाई इन्होंने जो कहा है कि बी डी एक साथ में एक ऑफिस में जाते हैं, तो भाई एक ऑफिस में जाते हैं, और तो और बेस स्टेशन, सॉरी, स्टेशन नंबर 3 पे उतर रहे हैं ट्रेन से। तो यहां पर हमें यह समझना है कि भाई बी और डी एक साथ रहने वाले हैं, तो बी और डी या तो यहां पर चढ़े होंगे, या फिर इस वाले फील्ड में कहा बेस स्टेशन पे चढ़े होंगे। तो बी और डी का कंफर्म नहीं है, इस कारण से सी और एफ का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म किसका है? ई जो है वो बेस स्टेशन पे चढ़ा होगा, ये इनमें से कंफर्म है, ठीक है। अगला देखते हैं, बी एंड डी, ये पॉइंट नंबर 9 हो चुका है। 10th पॉइंट देखते हैं, नन ऑफ देम गॉट डाउन एट स्टेशन नंबर 1। स्टेशन 1 पे कोई भी नहीं उतरा, ठीक है। चलो, अब हमें ये देखना है कि 5 में से 3 लोग तो यहां पर उतर चुके हैं,
साथ में ये देखना है कि जहां पर डी उतर रहा है उसके ठीक बाद में ई उतर रहा है। तो डी यहां पर हो चुका है कंफर्म, तो यहां पर ई और वो भी अकेला ट्रेन से उतर रहा है, ये चीज हो चुकी है। तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन हमारे पास यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। ये बेस स्टेशन है, यहाँ पर कोई उतरेगा नहीं, ऑब्वियस है। यहाँ पर मना कर रखा है इन्होंने। अब ये वाला पॉइंट अकेला बचा हुआ है, और ये वाला पॉइंट भी बचा हुआ है डी। डी से पहले कौन? एफ। डी से पहले कौन उतरा है? ठीक, पहले एफ उतरा है। तो यहाँ पर जो बेस यहाँ पर स्टेशन नंबर जो 2 है वहां पर कौन? एफ गेट डाउन हो रहा है। फाइन। तो 3 4 और 7% का हमें डेटा यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर भी पूरे हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, दो केस बन रहा है इस वाले में। तो दोनों केस को कंसिडर करते हुए अब हम एक एक करके इनके आंसर ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा था? सी गेट्स ऑन with F. C gets on with F but does not get on with B और D. C B और D के साथ में नहीं है, C F के साथ में है, C B और D के साथ में नहीं है। होल्ड कर दिया है, जो हमने होल्ड किया था ना पॉइंट 7, ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। अब एक एक करके इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 12, एट विच स्टेशन डज ई गेट डाउन? एट विच स्टेशन डज ई गेट डाउन? तो ई स्टेशन नंबर 4 पे जा रहा है। ठीक है, गेट डाउन कहां पर हो रहा है? स्टेशन 4 पे। आंसर ऑप्शन सी यहां पर कंसिडर किया जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एट विच स्टेशन डू बोथ सी एंड एफ गेट ऑन? सी और एफ, सी और एफ का फिक्स नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, सी और एफ स्टेशन नंबर 1 पे भी गेट ऑन हो सकता है, सी और एफ स्टेशन नंबर जो बेस स्टेशन है उस पे भी ई के साथ में गेट ऑन हो सकता है। सो द पोजिशन ऑफ सी एफ गेट ऑन होने की पोजीशन क्लियर नहीं है, वो बेस स्टेशन और स्टेशन 1 में से कहीं भी जा सकता है। इस कारण से नन ऑफ दीज यहां पर हमें कंसीडर करना रहेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो स्क्रीन पे देखते हैं, आपको भी मैं एक्सेस दे रहा हूं। क्वेश्चन 14 में बोल रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन डू बी एंड डी गेट ऑन? एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन डू बी एंड डी गेट ऑन? तो यहां पर बी डी का भी वही काम हो रहा है कि ई तो कंफर्म है, बेस स्टेशन पे आ रहा है, बी और डी हो सकता है बेस स्टेशन पे आएगा या फिर स्टेशन नंबर 1 पे बी और डी आएगा। तो यहां पर डेफिनेट नहीं है, इस कारण से भी इसका ऑप्शन डी यहां पर कंसीडर किया जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि दो केस बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आफ्टर हाउ मेनी स्टेशन डज ई गेट डाउन? आफ्टर हाउ मेनी स्टेशन डज ई गेट डाउन? ई कहां पर आया? ई का पोजीशन डेफिनेट है कि बेस स्टेशन पर आया, और कहां पर उतर रहा है? 4th स्टेशन पे। तो बेस स्टेशन के बाद स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 के बाद स्टेशन 4 पर उतर रहा है, मतलब 3 स्टेशन के बाद वो 4 पर उतर जा रहा है। तो क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, क्वेश्चन नंबर 16, एट विच स्टेशन मैक्सिमम पीपल गेट डाउन? तो यहां से गेट डाउन की लिस्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ 3 लोग उतर रहे हैं। कौन से स्टेशन पे? स्टेशन नंबर 5 पे। गेट डाउन काउंट 3 आ रहा है, मैक्सिमम है जो कि, तो ऑप्शन बी बॉम्बे है ना। 5 जो स्टेशन नंबर 5 है वहां पर सबसे ज्यादा लोग उतर रहे हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या आता है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट का एक काफी इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आई होप ये पूरा सेट कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैंने दो डेटा अरेंजमेंट आपको लिए हैं इसमें, और दोनों के दोनों मॉडरेट लेवल के थे कहीं ना कहीं, और अच्छे सेट थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। बेसिकली यहां पर एक ग्रिड बनेगी, उस ग्रिड में पूरे के पूरे एलिमेंट को अरेंज किया जा रहा है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन दी है।
उन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करके आंसर दे देंगे। देखो क्या बोल रहा है 17 में, boys and girls are made to sit in 5 rows and 5 columns. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rows, 1, 2, 3, 4, 5 columns। ठीक है। तो इस पूरे अरेंजमेंट का जो सेंटर पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट बनेगा ये वाला, पूरे अरेंजमेंट का, पूरी ग्रिड का। ठीक है। नाउ ए इज एट द सेंटर ऑफ द अरेंजमेंट, और हर एक व्यक्ति नॉर्थ फेस कर रहा है। नॉर्थ फेस करने का मतलब क्या है? कोई भी कहीं भी बैठा है, जैसे यहाँ पर जो पर्सन बैठा हुआ है वो नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है। और सेंटर ऑफ द अरेंजमेंट जो है वो पॉइंट ए बन रहा है। ए इज एट द सेंटर ऑफ द अरेंजमेंट, पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए नॉर्थ फेस कर रहा है, नेक्स्ट जो इमीडिएट राइट होगा वो ये वाला पोजीशन रहेगा, और पी भी नॉर्थ फेस कर रहा है, बिकॉज कहा गया है सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्यू इज जस्ट बिहाइंड पी। पी का फेस नॉर्थ में है, तो पी से ठीक पीछे इस पोजीशन को क्यू होल्ड करेगा। अगेन क्यू इज फेसिंग नॉर्थ, एंड आर इज टू द नॉर्थ ऑफ ए। आर इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, ये पोजीशन आर की होगी, और आर भी नॉर्थ फेस करेगा। ए के रेफरेंस में आर नॉर्थ साइड में बैठा हुआ है। सो द क्वेश्चन इज क्यू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर। आर के रेफरेंस में अगर हमें क्यू को बताना है तो ओरिजिन हमें आर को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आर के रेफरेंस में बताना है। सो दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज ईस्ट पोल। सो क्यू इज इन साउथ ईस्ट रीजन विद रिस्पेक्ट टू आर। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट है ना। क्यू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर। यहां से आंसर साउथ ईस्ट आना चाहिए अपना, और जो कि ऑप्शन में यहां पर हमें Q is in which direction with respect to R? The correct answer is southeast, जो कि ऑप्शन में यहां पर लिखा नहीं है। The correct answer is southeast। ठीक है। ऑप्शन अपडेट करना पड़ेगा, ऑप्शन डी में डेटा इनएडिक्वेट की जगह हमें लेना पड़ेगा साउथ ईस्ट। ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 17 का करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज जाएगा, है ना। 17 का करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज, एंड आंसर क्या आ रहा था हमारा? साउथ ईस्ट। लास्ट क्वेश्चन सेकंड सेशन का। इसके बाद आपका 10 मिनट्स ब्रेक के बाद फिर नया सेशन रहेगा। इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू सिस्टर्स मेघा एंड दिया वर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस। बात हो रही है कब की? इवनिंग की। अब हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इवनिंग की बात होती है तो सन की पोजीशन कहां पर होती है? इवनिंग में सन की पोजीशन वेस्ट डायरेक्शन में होती है। सन कहां पर होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। दैट मीन्स कोई भी पर्सन होगा, उस पर्सन का जो शैडो पड़ेगा वो ईस्ट डायरेक्शन में पड़ेगा। क्लियर है? So one evening before sunset, two sisters Megha and Diya were talking each other face to face. If Diya's shadow was exactly to her right side, दिया का shadow दिया के राइट में पड़ेगा। ये तभी हो सकता है जब इन दोनों को हम वर्टिकल रिप्रेजेंट करें, है ना। दिया एंड मेगा वर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस, है ना। अब इनमें से कौन सी दिया है कौन सी मेगा है हमें नहीं पता, बट दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस कर रही हैं। इवनिंग का टाइम है तो दोनों का शैडो ईस्ट में जाएगा, ये बात पक्की है। ये जो स्टूडेंट है, इसका जो शैडो का रेफरेंस बन रहा है वो इसके राइट साइड बन रहा है, और इसके लिए इसका लेफ्ट साइड में शैडो बन रहा है। क्वेश्चन में जिसके रेफरेंस में बात की है उसको उठा के हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। क्या बोल रहा है? इफ दिया शैडो वाज एग्जैक्टली टू हर राइट साइड, दिया का शैडो दिया के राइट में है, यहाँ पर इन दोनों में से किसका शैडो राइट में जा रहा है? इसका। तो ये जो होना चाहिए वो होना चाहिए दिया, एंड ये होना चाहिए मेघा। क्लियर है?
तो दिया एंड मेघा में से विच डायरेक्शन वॉज मेघा फेसिंग? मेघा ये है और मेघा का फेस नीचे है, नीचे का मतलब क्या होता है? साउथ। सो मेघा इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों ने इस पूरे मैराथन सीरीज में सेकंड जो सेशन था उसको काफी एंजॉय किया होगा। एंड अभी 10 मिनट्स का ब्रेक है और उस ब्रेक के बाद में आप सभी लोग फिर से सेशन 3 के लिए रेडी रहिएगा। आफ्टर 10 मिनट्स सेशन थर्ड स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।
Chalo, a very good afternoon, everyone. I hope I am audible and visible now. दोनों. If yes, just write yes or no in the chat window. No तो मतलब क्या ही लिखोगे? But yeah, write yes. The chat is now open. If you're not able to view the chat, just refresh your page once. वो चालू हो जाएगा. Good afternoon, everyone. Am I audible now? आवाज आ रही है? Audible. Chalo, wonderful. That's great. Finally. So sorry for this delay. Don't worry, we'll make it up for it. And I hope अभी तक का जो सेशन है उसमें मजा आ रहा है. You guys are enjoying all of them. Yes, चलो wonderful. तो second session was on analytical reasoning by Raghvendra sir. Third session I'll be taking on critical reasoning. Now critical reasoning, as all of us know. Good afternoon. Chalo, wonderful. Yes. Now critical reasoning, as all of us know, it comes in CLAD by the name logical reasoning. Logical reasoning होता है 28 से approximately 32 marks का, और 28 से 32 marks के अंदर critical reasoning normally forms a major component. Now earlier it was a minor component, but critical reasoning 2020 से एक major component हो गया. So that's what our focus is going to be. So we'll be having two pure sessions on critical reasoning. एक मैं लूंगा, एक करण से लेंगे. Now I'll be focusing more on questions. पर क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि थ्योरी नहीं करी तो क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा. हर क्वेश्चन की बेसिक थ्योरी में बताते जाऊंगा, and Karan sir will be focusing more on theory and a little bit of questions, right? So make sure that you attend both of them. uh, and 12 घंटे का है, कोई बात नहीं. पूरे 12 घंटे एक बार में नहीं कर पा रहे हो, करना भी नहीं चाहिए. तो गैप दे दे के करो. कुछ कुछ सेशन को बाद में रिपीट करो. कुछ सेशंस को अभी छोड़ दो, बाद में देख लो. कल का दिन पूरा की पूरा फ्री है. So just take your time, but just make sure that you make full utilization of whatever is happening today, right? Chalo, wonderful. PDF, yes, I'll share in a bit on the Telegram channel. Just once I give you the first question, I'll share the PDF in the Telegram channel also. Now, I'm presuming that all of you already know the importance of critical reasoning. तो उस पर मैं अब और ज्ञान नहीं दूंगा. But just make sure कि अगले 6 7 8 महीने अपने को critical reasoning में फोकस बहुत ज्यादा रखना है. ऋषिता, नो एब्सोल्युटली. लीगल एज की कोई क्लास कैंसिल नहीं हो रही है. मॉर्निंग ड्रॉपर्स स्टिपुलेटेड टाइम पर है. इवनिंग क्लास स्टिपुलेटेड टाइम पर है. सब कुछ रेगुलर टाइम पर है. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. वॉल्यूम कम कर दें. ओके. सो लीगल क्लास आई थिंक इज द नेक्स्ट वन विच इज बाय साक्षी मैम. तो बैक टू बैक सारी की सारी तुम लोग की क्लासेस होने वाली है. इमीडिएटली पहले क्वेश्चन से अपन चालू करते हैं. थ्योरी मैं पहले बिल्कुल नहीं बता रहा हूं. क्वेश्चंस के साथ में मैं बेसिक थ्योरी बताऊंगा. ठीक है. नाउ वील बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस व्हिच हैव one paragraph and one question. We'll move on to the questions which will have one paragraph and then two questions, and then we'll end with questions where we'll have a one very long paragraph and then around 3 to 4 questions. 3 to 4 questions. क्लियर हुआ, पल्ले पड़ा. तो अपन we'll start small and then we'll move on to the lot of questions वाला वो. ठीक है. Now meanwhile बीच में प्लीज ऐसे रैंडम क्वेश्चन मत पूछना. वो आखिरी की 10 मिनट I'll take all the general doubts. So question specific doubts I'll take as much as possible, but जो जेनेरिक डाउट्स है ये आखिरी के लिए रखना प्लीज. ठीक है. पल्ले बड़ा क्लियर हुआ, समझ में आया. यस प्रिया, फ्रेश कोर्स अवेलेबल है. वी हैव एन एआई एसएटी ऑन 20th. चलो चालू करते हैं. पहला क्वेश्चन सामने आने वाला है. Starting with the small ones, moving on to the more difficult and the lengthy ones. Okay, we'll start with the small one. In fact, I'm starting with a question which came in CLAT 2011. CLAT 2011 का actual question अपन चालू करने वाले हैं. And here's the question. आराम से read the passage and answer.
फॉर एवरी क्वेश्चन आई विल बी गिविंग यू अराउंड 45 odd seconds. अपन बहुत कम टाइम भी नहीं लेंगे. जनरल टाइम 45 odd seconds would be enough. Yes, we are getting the just the questions file posted on Telegram. उसमें options नहीं होंगे, सिर्फ question होंगे. ठीक है. चालू करें. Sure. India is the only country in the world where, in the states which are governed by Communist Party, human rights are fully respected. India is the only country in the world. And this is because a Bill of Rights is firmly entrenched in a national constitution. We can proudly say that. So यहाँ पर ऑदर ने अपना ओपिनियन दिया, अपना कंक्लूजन दिया. क्यों ऐसा हो रहा है? We can proudly say that Constitution gave us a flying start and equipped us. What gave us a flying start? The Constitution gave us a flying start and equipped us adequately to meet the challenges of the future. What does this mean? This means कि इंडिया अकेली कंट्री है जहां पे कम्युनिस्ट स्टेट्स में भी ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है किसी और को नहीं, किसी लीडर को नहीं, किसी आइडियोलॉजी को नहीं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को. एंड दैट डॉक्यूमेंट इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो पूरा क्रेडिट किसको जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन को जाता है. दैट्स व्हाट इट इज. So others argument is the complete credit goes to the constitution, and we have to weaken that argument. इसका मतलब क्या? That we essentially have to prove that constitution को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए. उसका ऑपोजिट बोलना है. ऑपोजिट बोला, मैं वीकन कर दूंगा आर्गुमेंट को. लेट्स सी. उल्टा देखते हैं. कंट्रीज विद अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ ह्यूमन राइट्स आर प्रोन टू ऑप्रेसिंग माइनॉरिटीज. यहां तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी नहीं करी, जबकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्रेडिट करना था, पर बात भी नहीं करी. गलत हो गया. ह्यूमन राइट्स नीड टू बी एनफोर्सेबल टू हैव एनी मीनिंग. यहां पर तो ह्यूमन राइट्स की मीनिंग की बात कर रहा है, बट कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्रेडिट करने की बात नहीं कर रहा है, जबकि मुझे तो वही करना है. गलत हो गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन इटसेल्फ सिंपैथेटिक टू कम्युनिस्ट प्रिंसिपल. ओके. तो ये तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो. आप कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद सिंपैथेटिक है कम्युनिस्ट प्रिंसिपल को. सो इन अ वे यू आर सपोर्टिंग माय आर्गुमेंट, बट यू हैव टू वीकन माय आर्गुमेंट. अगेन गलत हो गया. वैसे तो एलिमिनेशन से भी ए मार्क कर सकते हैं, बट एक्चुअली सही आंसर है ए. दैट इज, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स आर मोटिवेटेड टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स आउट ऑफ कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल वंस. विच मीन्स आप ये जो कम्युनिस्ट जगह पर ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्रेडिट देना चाह रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है. कम्युनिस्ट जगह पे इसीलिए कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को नहीं. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को आप क्रेडिट दे रहे हो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्लियर. सो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को क्रेडिट दे रहा था, उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं. आ गया आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ए. क्लियर हुआ? आयो पल्ले पड़ गया, समझ में आ गया? यस. यस. क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट आंसर इज ए. वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन अपना वीकन था. सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो.
30 seconds more, guys. और बिल्कुल देखा देखी नहीं करनी है. Do not just blankly copy the answer which has been given by majority. Please don't do that. If you do that, you miss a fantastic opportunity of truly understanding where did you go wrong. Understand? So the first step towards solving a problem is identifying that there is a problem. और अगर अपन देखा देखी ऊपर वाले को आंसर मार्क करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम कभी अपन पकड़ नहीं पाएंगे. इसीलिए ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट मत करो, जो बहुत लोग कर रहे हैं, आई एम श्योर, बिकॉज सब लोग के बड़े स्टैंडर्ड से सेम से आंसर हो. जो पहला वाला अगर सी बोलता है सी 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 सी, पहला वाला डी बोलता है डी 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 डी. मेक श्योर ऐसा नहीं हो, ठीक है. यहाँ पे नो वन इज जजिंग यू एज सच. सो जस्ट मार्क द आंसर दैट यू ट्रूली थिंक इज करेक्ट. ओके. करें चालू. At any given point of time, approximately 15% of all the homes in Florida are in the market. In Texas, however, only 7% of all the homes are in the market. Therefore, अच्छा, therefore का मतलब इसके आगे conclusion आने वाला है, याद रखना. So, therefore, one will have wider selection of homes to choose from if one looks for a home in Florida rather than in Texas. Which of the following would seriously strengthen the argument? अपने को पहले क्या करना था? वीकन करना था, पर अब अपने को क्या करना है? स्ट्रेंथन करना है. ठीक है. तो अपने पास डेटा क्या है? डेटा ये है कि फ्लोरिडा में अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ द होम्स आर इन मार्केट एंड टेक्सास में, एक सेकेंड, टेक्सास में अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ द होम आर इन मार्केट. फ्लोरिडा में 15%, टेक्सास में 7%. तो इसका मतलब क्या? अगर आप फ्लोरिडा जाओगे यू विल हैव वाइडर सिलेक्शन ऑफ होम टू चूज फ्रॉम एज कंपेयर टू टेक्सास, क्योंकि टेक्सास में सिर्फ 7% है. पर ये कॉमन सेंस है कि आपने सिर्फ परसेंट बोला, आपने बेस फिगर तो दिया ही नहीं. और बेस फिगर नहीं दिया है तो छोटे नंबर का 15% वुड बी ऑब्वियसली लेस देन बड़े नंबर का 7%. दैट्स हाउ परसेंटेजेस वर्क. व्हाट इज परसेंट? परसेंट मींस आउट ऑफ 100. सो अगर मैं यहां पर ये बोलूंगा कि लेट्स से फ्लोरिडा में टोटल नंबर ऑफ होम्स 100 है और टेक्सास में टोटल नंबर ऑफ होम्स 1000 है, तो टेक्सास में एक्चुअली कितने घर हमेशा अवेलेबल हैं? 70. पर फ्लोरिडा में हमेशा कितने घर अवेलेबल है? जस्ट 15. तो am I getting a wider selection in Florida or am I getting a wider selection in Texas? I'm getting a wider selection in Texas, not Florida, even though Florida का परसेंट ज्यादा था. तो इसीलिए ये भी जानना जरूरी है कि बेस फिगर किसका ज्यादा बड़ा है. दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज डी. दैट इज the total number of homes in Florida is 3 times greater than the total number of home in Texas. तो अगर फ्लोरिडा में ओके उल्टा है क्या? हाँ, स्ट्रेंथन करना है. ओके. सो विच एसेंशियली मीन्स कि फ्लोरिडा में अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि घर भी बहुत ज्यादा है, तो फ्लोरिडा में ज्यादा घरों का 15% वुड बी अ लॉट ग्रेटर देन टेक्सास में कम घरों का 7%. तो जो मेरा ये वाला डर था, जो मैंने एग्जाम्पल यहां पे दिया था, वो डर भी अब खत्म हो गया है. क्यों? बिकॉज उन्होंने प्रूव कर दिया कि फ्लोरिडा में घर भी ज्यादा है. तो ये इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक. तो फ्लोरिडा में घर भी ज्यादा, उसका परसेंटेज भी ज्यादा, तो इसीलिए फ्लोरिडा में हमेशा ऑप्शंस मुझे ज्यादा ही मिलेंगे. क्लियर है? सी देख लेते हैं. The construction industry in Texas reported significant growth over the last 5 years, or over the past year. Okay, टेक्सास अपना ग्रो कर रहा होगा, पर परसेंटेज तो टेक्सास में अभी भी कम ही है ना, तो इसीलिए उससे मेरा आर्गुमेंट वीकन नहीं हो रहा है या स्ट्रेंथन नहीं हो रहा है. मॉर्गेजेस आर इजियर टू ऑब्टेन फॉर होम्स इन फ्लोरिडा देन फॉर होम्स इन टेक्सास. मॉर्गेज तो तब की बात हुई जब मैंने घर डिसाइड कर लिया है. यहां पे द क्वेश्चन इज नॉट कि मैंने घर डिसाइड करा है कि नहीं. द क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल टू मी. एंड ऑप्शंस एज कंपेयर टू टेक्सास, as per the passage, more options are available to me in Florida. So mortgage is after I've decided on the home, now I have to pay the money. And the author is talking about the options which I have before deciding the home. तो इसीलिए ऑप्शन बी तो रेलिवेंट ही नहीं है. बी गलत, सी गलत, डी इज करेक्ट आंसर. क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? राइट यस नो इन द चार्ट विंडो. क्लियर और नॉट क्लियर? आया समझ में गाइस? फ्लोरिडा में परसेंट भी ज्यादा और बेस फिगर भी ज्यादा.
श्रद्धा या एसके अली, क्या नहीं क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, कुछ लोगों को बेस फिगर का वो लग रहा है। अब एक बात बताओ, ठीक है, एक चीज अपन जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे। इमेजिन करो फ्लोरिडा में, भले ही, जस्ट अ सेक, आई जस्ट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ दिस। इमेजिन करो अगर फ्लोरिडा में 15% घर अवेलेबल थे और टेक्सास में 7% थे। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। वन एग्जाम्पल है इसकी जो बेस फिगर है, नहीं पढ़ा, चलो एक मिनट वापस बताता हूं मैं। अब अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार फ्लोरिडा में ना ऑप्शंस तो ज्यादा ही अवेलेबल है हमेशा, तो इसका मतलब मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि टेक्सास के कंपैरिजन में फ्लोरिडा में घर भी ज्यादा अवेलेबल है। तो घर अगर ज्यादा अवेलेबल है और उसका 15% वुड बी अ बिग फिगर, और एज कंपेयर टू टेक्सास इट वुड बी अ लार्जर फिगर। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू प्रूव कि हाँ फ्लोरिडा में ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल है। और अगर इसका उल्टा होता तो क्या हो जाता? सपोज टेक्सास में अगर ओवरऑल घर ज्यादा अवेलेबल होते एज कंपेयर टू फ्लोरिडा, घर ही ज्यादा अवेलेबल अगर होते, है ना, तो उसका परसेंटेज इवन दो 15 होता, पर क्योंकि बेस फिगर ही छोटा है तो फ्लोरिडा में ऑप्शंस भी कम ही होते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, 100 का 15% इज लेसर देन सपोज 500 का 7%। क्लियर है? तो सिर्फ परसेंट से कुछ नहीं होता है, सिर्फ परसेंट से कुछ नहीं होता है, बेस फिगर भी तो जानना जरूरी है। और ऑप्शन डी ने क्या करा, बेस फिगर का प्रूफ कर दिया कि बात बिल्कुल सही है, बेस फिगर जो है वो ज्यादा ही है। समझ में आया? अगर बेस फिगर ही कम होता तो ज्यादा परसेंट कुछ खास मैटर नहीं करता। एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। इंडिया की पॉपुलेशन और लेट्स से नेपाल की पॉपुलेशन। अब अगर मैं ये कहूं दैट इन इंडिया 60% of the people are educated, whereas in Nepal 90% of the people are educated, right? In India 60% of the people are educated, in Nepal 90% of the people are educated. That is why there are more educated people in Nepal than in India. ये तो गड़बड़ हो गया ना। मैंने पहले परसेंट बोला, पर मैंने बाद में टोटल नंबर की बात कर दी, जबकि मैंने दोनों की पॉपुलेशन कंपेयर ही नहीं करी। वो पॉपुलेशन ही तो बेस फिगर होता है, और अगर वो पॉपुलेशन जब तक मैं नहीं देखूंगा, आई कैन नॉट कंक्लूसिवली से दैट द टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इन नेपाल इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इन इंडिया। क्लियर है? समझ में आया? इसीलिए बेस फिगर इंपॉर्टेंट होता है। और ऑप्शन डी ने अपने वही डर को खत्म कर दिया। ऑप्शन डी ने बोल दिया बात बिल्कुल सही है तुम लोगों की, 15% वाला जो है ना फ्लोरिडा, वहां पर बेस फिगर भी ज्यादा ही है, बेस फिगर कम नहीं है, ज्यादा ही है। तो यस, आपका बोलना बिल्कुल सही है, फ्लोरिडा में हमेशा ज्यादा ऑप्शंस, टेक्सास में हमेशा कम ऑप्शंस। आ गया? क्लियर? समझ में आया? पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ गया, वंडरफुल। चलो एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ओके, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। पल्ले बड़ा, वरदान, इट इज इट्स अ इट्स अ पेन टैब का वो क्या बोलते हैं, इट्स ग्लव्स विच इज रिक्वायर्ड वाइल यूजिंग पेन टैब। चलो,
मूविंग ऑन टू द लास्ट ऑप्शन नाउ. कुछ लोगों को लास्ट ऑप्शन दिख नहीं रहा है. एंड मार्क द आंसर देन. संजना, श्योर आई ट्राई. 10 seconds. चलो स्टार्ट करें. नाउ द पैसेज इज एसेंशियली सेइंग कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करना चालू करेगी, भले ही थोड़ा सा रिलक्टेंटली करेगी, बट जब वो रिस्पॉन्ड करना चालू करेगी, तो इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन लॉट ऑफ कंपनीज, स्पेशली द कंपनीज which produce a large amount of fossil fuels will face higher taxes and regulatory burdens. Some energy producers may find it impossible to exploit their known reserves. तो काफी energy producers जिन्होंने known reserves ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, because it'll go against the climate, the it'll contribute to the climate change. So that is why they would not be able to exploit it, and the regulatory hurdles will be so much, the taxes will be so high, so it will be difficult for them to exploit the reserves also. And there's stranded assets की बात करिए. stranded assets का मतलब क्या होता है? stranded assets मीन ऐसे assets जो हैं तो, पर मैं उनको यूज नहीं कर सकता हूं. they have been stranded, वो पड़े हुए हैं एक जगह पे. Other industries could be affected by economic damage caused by more extreme weather. तो बहुत सारी इंडस्ट्री तो एक्सट्रीम वेदर के डैमेज के चक्कर में they will be affected. अब इन सबसे अपन क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं? Government and companies need to be adequately prepared to face the climate change. Yes, जब आपको पता है कि कुछ टाइप का climate change, ये जो फिनोमिना है, जब गवर्नमेंट इस पे एक्ट करेगी, तो हाउ कैन इट अफेक्ट योर इंडस्ट्री? यू शुड बी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो यस, वेरी वेल ट्रू. फर्स्ट इज करेक्ट. Extreme weather events will reduce the economic growth of governments and companies in future. Yes, last line. Other industries could be affected by economic damage caused by more extreme weather, storms, floods, heat waves, and droughts. तो ये भी सही हो गया. Ignoring climate change is a huge risk for investors. Obviously, when we know that कि ये climate change की ट्रेन, कितनी बड़ी ट्रेन अपनी तरफ अप्रोच करी, और अगर आप रास्ते से हटे नहीं, तो फिर obviously it can cause a lot of damage. So yes, from the perspective of investors, if you ignore it, you will end up paying a lot of damage for this. There will be a huge damage to your company for this. तो ये भी सही है. तो 1 भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही. The correct answer is 1, 2 and 3. तीनों अपनी अपनी जगह पर एब्सोल्युटली सही बात बोल रहे हैं. क्लियर है? सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3. तीनों अपनी जगह पर सही है. ठीक है, चलो. प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्लियर हुआ? पल्ले पड़ा? तीनों अपनी अपनी जगह पे सही बात बोल रहे थे.
Anjali Devnani and others. Economic growth of government is not mentioned. They have used government and companies interchangeably because the government itself they run a lot of companies, right? So the public and the private companies वो दोनों की बात कर रहे हैं. इसीलिए बी गलत नहीं है. बी गलत हो सकता था अगर ऊपर सिर्फ कंपनीज लिखा रहता और नीचे सिर्फ गवर्नमेंट लिखा रहता. पर नीचे गवर्नमेंट भी लिखा है और कंपनीज भी लिखा है और ऊपर कंपनीज की बात करिए. सो यहाँ पे ऑर्डर की मेंटालिटी समझो दैट दे हैव यूज्ड इट इंटरचेंजेबली. दैट्स हाउ इट इज. ओके guys, there are a few students who are asking me to repeatedly use only English. That'd be really difficult because most of the students here are bilingual. That is why we'll have to cater to both Hindi and English. I'll be using a lot of English also, but please don't bank on me using 100% English. So yes, I'll be using both of them. ऊपर वालों का देखा देखिए आंसर पोस्ट नहीं करना है. थैंक यू वैष्णवी. चलो चालू करें. ऑप्शन डी इज नॉट फुली विजिबल. ये लो, मैं बीच में आ रहा हूं ऑप्शन के. एक सेकंड रुक जाओ. चलो लेट्स स्टार्ट. Now this particular city जिसका नाम है सिफिसा, and author is saying that it was not Siphissa was not buried by the eruption of Mount Amnos in 8310. As some believe, the eruption damaged the city, but it did not destroy it completely. Siphissa survived for another century before it finally made its destruction in AD 415. मतलब क्या कि इस वाले ने डैमेज तो करा पर खत्म नहीं करा. खत्म करा इस वाले ने. ये वाला जो है ना, इसने खत्म किया. अपने को इस पॉइंट को प्रूव करना है. सो वी एसेंशियली हैव टू प्रूव दैट यस there was an earthquake in 310 but it did not completely destroy the city. The city was completely destroyed only in AD 415. So how do we prove that? I hope the question is clear now. Which of the following if true would strengthen the argument? So yes, we have to prove that it was destroyed only in 415 and not in 310. The city of Siphissa is mentioned in a historical work known to have been written in 400. ठीक है, तो वो तो जस्ट बिकॉज इट हैज बीन मेंशन्ड उससे थोड़ी ना कुछ प्रूव हो रहा है. हो सकता है कि वो डिस्ट्रॉय हो गई हो 310 में, उसके बाद भी उसको मेंशन कराओ. सो जस्ट बिकॉज इट हैज बीन मेंशन्ड डजंट प्रूव एनीथिंग. गलत हो गया. कॉइन्स बियरिंग द इमेज ऑफ एन एम्परर हु लिव्ड अराउंड 410. नाउ ये कुछ काम की बात है. Now this emperor lived around 410, have been discovered in the ruins of Siphissa, which was preserved by the cinders and ashes that buried the city. अब एक चीज बताओ, if the city was damaged in 310, how can an emperor live around 410 अकेला? पूरे की पूरी सिटी में सिटी डैमेज हो चुकी है, वो अकेला एम्परर रह रहा है. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. So if an emperor lived there around 410, this means that the city was not damaged in 310. It survived at least till 410, and that is what we are given. That the city was damaged in 415, not in 310. आ गया अपना आंसर. So the correct answer, which is the perfect answer, is B. Since human beings used to live there till 410, this means that the city was not damaged in 310. और वही तो प्रूव करना था अपने को. आ गया. So the correct answer is B. C और D भी देख लेते हैं. Geological evidence shows that eruption of Mount Amnos in 410 deposited a 10-foot thick layer of lava in the city of Siphissa. ठीक है, लावा जमा हो गया. तो क्या इससे इससे खत्म हुआ या नहीं हुआ? ऐसा भी तो हो सकता है 310 में सिटी खत्म हो चुकी थी. There was nothing for the next 100 years, and 410 में there was another eruption, and that deposited a 10-foot lava. ये भी हो सकता है. So again, C is not proving anything. Artworks from the city of Siphissa have been found in the ruins of another city known to have been destroyed in 410, 420. So वहां के artworks को 420 में एक
एक दूसरी सिटी थी, वो भी डैमेज हुई थी इन 420 एंड देयर द आर्टवर्क्स वर फाउंड. ओके, सो इट कुड वेरी वेल हैपन दैट द सिटी वाज डैमेज्ड इन 310 और उनके आर्टवर्क्स 310 के पहले ही दूसरी सिटी में चले गए और वो सिटी डैमेज हुई इन 410 और 420. सो डी इज नॉट प्रूविंग एनीथिंग. ठीक है, गलत हो गया. अकेला ऑप्शन जो कंक्लूसिवली प्रूव कर रहा है, एक सेकेंड गाइस. हाँ, सो अकेला ऑप्शन जो कंक्लूसिवली प्रूव कर रहा है इज ऑप्शन बी, जो बहुत सिंपल भाषा में ये बोल रहा है अगर सिटी 310 में डैमेज हो जाती तो 410 में वहां पे राजा कैसे रह रहा होता. सिंपल. एंड इफ समवन इज लिविंग ओवर देयर, दैट मीन्स दैट द सिटी वाज नॉट डैमेज्ड इन 310. इट्स एज सिंपल एज दैट. दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी. पल्ले बड़ा क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर और नॉट क्लियर? राइट यस और नो इन द चैट विंडो. क्लियर और नॉट क्लियर? प्रज्ञा ए नहीं है बिकॉज जस्ट बिकॉज 400 एडी में वहां पे कुछ मेंशन हुआ था एक बुक में, उस स्टोरी में कुछ प्रूव हो रहा है. बुक में तो ये भी लिखा हुआ है कि हॉगवर्ट्स करके कोई जगह है या फिर वहां पे एक हैरी पॉटर है और 934 करके एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जब पिलर में आप घुस जाओ तो फिर आप पहुंच जाते हो दूसरे प्लेटफॉर्म पे. बुक्स में लिखे रहने से कुछ प्रूव नहीं होता है. दैट्स हाउ इट इज. ओके, क्लियर, वंडरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Solve question number 5 and 6. Same passage, दो questions उस पे. First solve the first question, then we'll move on to the next one. Fifteen seconds, guys. Yes, Ananya, you can start preparing for CLAT now. It's a pretty good time to prepare for CLAT. If you haven't yet subscribed to the LE channel, do that and press the bell icon also so that their notification comes whenever there's a new video. ये दोनों याद से कर लेना अभी. चालू करें? A study of attitude towards a prime time television program shows that programs with identical ratings in terms of number of people watching it received highly divergent marks for quality from its viewers. इसका मतलब क्या? Even though there is this program A and program B, program A suppose अगर है कि program A is ससुराल सिमर का and program B is something which is a wonderful program, something like I don't know, कोई अच्छा प्रोग्राम बताओ, कौन बनेगा करोड़पति. तो इवन दो ये भी एक्स लोग देख रहे हैं, ये भी एक्स लोग देख रहे हैं, पर ये जो अपना ससुराल सिमर का है इसको रेटिंग मिली है सपोज 2 आउट ऑफ 10, बट बी को रेटिंग मिली है सपोज 9 आउट ऑफ 10. इफ देर आर एनी ससुराल सिमर का फैंस हेयर, so I'm really, I apologize for this taunt, but please let's go ahead with the example. So even though दोनों सेम नंबर ऑफ पीपल देख रहे हैं पर इसकी रेटिंग कम है, इसकी रेटिंग ज्यादा है. Now in that context, advertisers के लिए ये चीज बहुत valuable है because they should end up advertising in during the programs
which have a better rating. Even though same number of people are watching that, but it has a better rating. So that is why it's better कि आप वहां पे एडवर्टाइज करो जहां की रेटिंग बेटर है, इवन दो सेम नंबर ऑफ पीपल आर वाचिंग दैट. हमें अब इस आर्गुमेंट को विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द क्लेम. सपोर्ट्स द क्लेम मतलब हमें इस चीज को सपोर्ट करना है, फेवर करना है. लेट्स सी. Television viewers more frequently remember the sponsors of the program which are judged as good according to them. We have hit the nail on the head in the first option itself. यहाँ पे उन्होंने क्लियरली कह दिया कि टेलीविजन व्यूअर्स उन टाइप के प्रोग्राम्स में आई हुई एड, जिन प्रोग्राम्स उनको पसंद आ रहे हैं, उनकी एड्स को ज्यादा याद रखते हैं एज कंपेयर टू उन प्रोग्राम्स की एड जो उनको पसंद नहीं आ रहा है. विच एसेंशियली मीन्स कि ससुराल सिमर का जो प्रोग्राम है उसको भी 100 लोग देख रहे हैं, केबीसी को भी 100 लोग देख रहे हैं, पर ससुराल सिमर का के बीच की जो एड्स हैं वो उनको ज्यादा याद नहीं रहेगी एज कंपेयर टू केबीसी के बीच की जो एड्स हैं. दैट्स व्हाट इट इज. That is why, that is what the author is saying, and that is what option A is also saying. A भी यही कह रहा है कि इसीलिए बिल्कुल सही है, जहां पे रेटिंग ज्यादा है आप वहां पे इन्वेस्ट करो, आप वहां पे अपनी एड्स चलाओ. So the correct answer is A. A few of you have also marked C. C भी देख लेते हैं एक बार. Television viewers report that the quality of television advertisements has little effect on their buying habits. एक बात बताओ, am I talking about the quality of advertisements or am I talking about the quality of programs? In the passage, I'm talking about quality of programs. And option C is talking about quality of television advertisements. Quality of advertisement का मुझसे कोई नाता नहीं है. मेरा पैसेज तो, मेरा ऑप्शन तो, मेरा आर्ग्यूमेंट तो प्रोग्राम की क्वालिटी की बात कर रहा है, एडवर्टीजमेंट की क्वालिटी की नहीं. सो सी इज जस्ट नॉट कनेक्टेड टू माई आर्ग्यूमेंट, इसीलिए वो गलत हो गया. सो द करेक्ट आंसर इज ए. पल्ले पड़ा, क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? राइट यस और नो इन द चैट विंडो. पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? राइट यस और नो? क्लियर? चलो सही है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. सेम पैसेज बट ए डिफरेंट क्वेश्चन. सॉल्व करो. वंडरफुल. चलो गुड. वंडरफुल. गुड. करो. Now this one is simpler as compared to the previous one. नहीं, लास्ट ऑप्शन अच्छा हाइड हो रहा है, सॉरी. Here you go. ये लो. सेम फैक्ट्स. अब इस आर्गुमेंट को अपने को वीकन करना है. पहले अपन ने क्या करा था? स्ट्रेंथन करा था. अब क्या करना है? वीकन करना है. नो मोस्ट ऑफ यू मार्क द आंसर एज बी. बी देख लेते हैं. According to a report, most viewers while watching high quality program have very little interest in advertisements and are usually using the break time to flip through the channels. अब एक बात बताओ, हाई क्वालिटी वाले चैनल्स के बीच में अगर मैंने एडवर्टीजमेंट पुट किया और ऑप्शन बी ने मुझे बोल दिया कि यार जो हाई क्वालिटी प्रोग्राम देखते हैं ना उनको एडवर्टीजमेंट में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, तो जैसे ही एड आती है तो दे फ्लिप द चैनल्स. सो दिस मीन्स अच्छे प्रोग्राम के बीच में एड लगाना इज बैकफायरिंग. इट्स नॉट सपोर्टिंग माई कॉज, इट्स बैकफायरिंग. आगे आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज बी. कपल ऑफ यू हैव आल्सो मार्क डी. डी भी देख लेते हैं. द ट्रू क्वालिटी ऑफ एड, फिर वही बात, सेम प्रॉब्लम जहां पिछले ऑप्शन में सी के साथ था. द ट्रू क्वालिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट, आई एम नॉट, my focus is not the quality of advertisement. My focus is quality of the program and putting the advertisement between a good quality program. That is what my focus is. The quality of the advertisement itself,
That's not the crux of the argument at all. इसीलिए the correct answer is B. Clear? Everyone is on track? मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ट्रैक पर हो अभी भी? हाँ या ना, समझ में आया? दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए? अनन्या, क्या नहीं समझ में आया? बी सही आंसर है, बिकॉज मैं सोच रहा था अच्छे क्वालिटी एडवर्टीजमेंट में बीच में ऐड लगाऊंगा तो अच्छा होगा। बी ने बोल दिया अच्छे क्वालिटी एडवर्टीजमेंट में तो बीच में ऐड लगाओगे खराब होगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि अच्छा क्वालिटी जो प्रोग्राम होता है ना, जब लोग वो देखते हैं तो ऐड आता है तो वो चैनल ही चेंज कर देते हैं। तो आपकी ऐड देखेगा कौन? आगे आंसर। ऑन ट्रैक, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। 10 सेकेंड्स। विजिबल नाउ? चलो चालू करते हैं। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा है, सी व्हाट हैपेंस इज इन अ लॉट ऑफ टाइम्स द लीक व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीक मींस व्हेन सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन regarding the other political party, regarding a particular politician, or regarding a policy, regarding something, it was leaked to the media. And then the media made a huge news out of it, and everyone now knows that. So that is known as a leak. It started with something which is very small, but now everyone in the country or probably across the world knows that. ठीक है? भले ही हमें लग रहा है कि लीक तो बड़ी काम की चीज है और पीपल हैव अ राइट टू नो एंड पीपल शुड नो एवरीथिंग, बट बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज ये जो लीक करवाते हैं ना, ये दे हैव देयर ओन पॉलिटिकल एजेंडा। एंड मीडिया को भले ही लग रहा है दैट दे आर प्लेइंग सम, दे आर द प्राइमरी मूवर्स बिहाइंड दैट एंड दे आर द वंस जो एक बहुत अच्छा काम कर रही है और गवर्नमेंट की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर नॉट, they are they are more often than not just instrument of the process, not instrument of the process, they are not prime movers. So they are not the prime movers, वो एक बहुत बड़ी सी एक साइकिल के एक छोटे से स्पेयर पार्ट होते हैं, but they are not the prime mover, they are not the one who are running that cycle. ठीक है? That's what the author is saying. और इसीलिए the author has suggested कि that even the media must be held accountable for their activities like every other significant institution of the society. So author is not in favor of these leaks. Author is saying कि भले ही हमें लग रहा है कि लीक्स से बहुत अच्छा काम होता है, आई डोंट थिंक सो। कोई अपना एजेंडा फुलफिल कर रहा होता है, सिर्फ ये होता है। और मीडिया को लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, पर मीडिया उस एजेंडा को फुलफिल करने में मदद कर रही है, बस। दैट्स इट। दैट इज व्हाई इवन मीडिया शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। दैट्स इट। Which of the following can be inferred from this? Media leak is a part of American government's policy. ये देखने में सही लग रहा होगा, पर एक बात बताओ, they have nowhere said
कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी का पार्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी? पॉलिसी मींस कि गवर्नमेंट ने खुद ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है और डॉक्यूमेंट में उन्होंने कहा है दैट सी दिस इज व्हाट वील डू। उन्होंने कहा कि यार हम लोगों के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे और लीक करेंगे। तो ऑफिशियल गवर्नमेंट का पॉलिसी है, इसका मतलब ये कि लीक इज अ पार्ट ऑफ देयर ऑफिशियल पॉलिसी इटसेल्फ। दैट्स नोवेयर रिटन। गलत हो गया। द प्राइमरी पर्पस, वन ऑफ द पर्पस ऑफ मीडिया लीक्स इज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी। दैट इज फाइन। पर ये जहां पर भी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स आए ना, वर्ड्स लाइक प्राइमरी, इसको हमेशा थोड़ा सा सोच समझ के इसको मार्क करा करो। प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब पहला पर्पस। ये इतना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है कि ये तभी सही होता है जब इतना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऊपर भी दिया है। तो one of the purposes is to influence policy. I agree. Primary purpose is to influence public policy. Not given. गलत हो गया। C. There needs to be accountability amongst the media with regards to its actions. Yes. पूरा सेकंड हाफ में ऑर्डर ने यही बोला है। There needs to be accountability amongst the media. पूरे सेकंड हाफ में, especially the one that I've marked in green, that is what essentially the author is saying. So yes, the correct answer is C. That is what can be inferred. Inferred का मतलब क्या होता है? Inferred का मतलब जिसको मैं ऊपर के इंफॉर्मेशन के हिसाब से 100% कह सकता हूं, दैट इज नोन एज inferred. B 100% नहीं कह सकता हूं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. A 100% नहीं कह सकता हूं. C डेफिनेटली 100% कह सकता हूं. आगे आंसर. So the correct answer is C. आगे. Clear? And yes, most of you had marked as C only. चलो बढ़िया. Next question. Same passage, a different question. मार्क करो. Rashi, inference is the same as conclusion for our purposes. Practically speaking दोनों में डिफरेंस होता है, बट फ्रॉम द क्लैट पर्सपेक्टिव दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. ठीक है. टेन सेकेंड्स. चलो देखें. What is a passage state about the journalists who believe that they are the prime movers behind the media leaks? उन जर्नलिस्ट के बारे में ये पैसेज क्या कहता है जो जिनको ये लग रहा है कि they are the ones who are running the show. They are not a part of the show. They are the ones who are running the show. Their belief is correct. Their belief is correct. ये दोनों तो गलत हो गए. Because author is very clearly saying that their belief is not correct. Simple. गलत हो गया. Clear? C. Their belief is incorrect because more often than not, they are just being used to serve somebody else's larger purpose. That is what the author said कि they are just a cog in the wheel. मतलब एक बहुत बड़े से एक बड़े से ब्रह्मांड का एक वो छोटा सा स्पेक है, बस स्पेक कहते हैं उसको. They're just a speck. So they are not the ones who are moving this complete cycle. So yes, their belief is incorrect because more often than not, they are just being used to serve someone else's purpose. Perfectly correct. Their belief is incorrect because at time the public may choose not to believe them. उनका बिलीफ गलत है क्योंकि बहुत बार पब्लिक उन पे विश्वास करेगी ही नहीं. ऑदर ने ऐसी कोई बात करी है क्या? नहीं. ऑदर ने कौन सी बात करी है? जो ऑप्शन सी में लिखा है कि उनका बिलीफ गलत है. उनका बिलीफ क्यों गलत है? क्योंकि बहुत बार वो सिर्फ दूसरों के पर्पस को फुलफिल करते हैं. उनका खुद का कोई पर्पस नहीं हो, दूसरे पर्पस को फुलफिल कर रहा है. दैट इज वाई द बिलीफ इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन डी में फर्स्ट हाफ तो सही है, सेकंड हाफ गलत है. ऑप्शन सी में फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों सही है. आगे आंसर. तो इसीलिए सही आंसर हो गया सी. क्लियर? क्लियर. चलो वंडरफुल, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. पहले आराम से पैसेज पढ़ो, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे.
आई होप अभी तक की पूरी स्टोरी क्लियर है. थोड़ी सी अपनी स्पीड ज्यादा है, सो दैट वी कैन सॉल्व अ लिटिल मोर क्वेश्चंस, बट just stay with us. Question number 9, just read the passage for now. Vardhan, at least half an hour more. 30 seconds more, फिर start करेंगे. Okay, moving on to the question now. Solve question number 9. प्रियांश, एली के सारे स्टूडेंट्स को लेट आज शाम तक मिलेगा. मोस्टली मतलब आज रात में सोने के पहले यू विल हैव द पीडीएफ विथ यू. चलो करें. चलो. नाउ essentially what the author is saying is कि पहले तो बहुत ही अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल था यूएस कंपनीज का वहां पे, एंड दैट अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल वाज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, दैट इज 1940s एंड 50s. एंड प्रॉब्लम हुआ 1960s से. उस टाइम पे द जापानीज, आई थिंक द जापानीज, यस, द जापानीज बिगैन टू टेक द एडवांटेज, एंड यूएस का जो एडवांटेज है वो कम हो गया. अब इसमें इसका रीजन क्या क्या था, वो रीजन के ऊपर लोगों ने अपना एनालिसिस करना चालू करा. द फर्स्ट एनालिस्ट टू ब्लेम वाज द डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन बिजनेस, ब्लेम द यूएस गवर्नमेंट. ये पहला रीजन. Second था the American workforce. अच्छा, author is not giving a reason right now. This is a reason which is given by the people, by the analysts themselves. The author has not given any reason till now. Citing labor demands, poor productivity as a reason behind American corporations having been unable to compete with the Japanese and the European counterparts. कुछ एनालिस्ट ने इवन अमेरिकन कंज्यूमर्स को बोला. तो कुछ लोगों ने वन, कुछ लोगों ने टू, कुछ लोगों ने थ्री. अब ऑथर ने एंट्री मारी. अब ऑथर ने अपना रीजन दिया. एंड व्हाट डिड द ऑथर से? The blame and actually means not, this is my opinion. The blame actually lies with the corporate management, which has made serious errors based on the misconceptions and so on and so forth. So there is this some person जिसने A को blame किया, किसी ने B को blame किया, किसी ने C को blame किया, but actually तो blame किसी चौथे पर है, which is D. Actually blame पूरा corporate management का है. That is what the author is saying. Now let's look at the options. Which of the following can be concluded? इससे हम क्या चीज 100% निकाल सकते हैं? That is what we have to find out. American consumers are partly responsible for the decline in global standing. क्या ऑदर ने ये चीज बोली? नहीं. ऑप्शन ए में जो लिखा है वो ऑदर ने बिल्कुल भी नहीं बोला है. वो सिर्फ एक एनालिस्ट ने बोला, और ऑदर ने अपने को ये बात बताई है कि एनालिस्ट ने ये चीज बोली है. बट ऑदर हिमसेल्फ हैज नॉट सेड दैट द अमेरिकन कंज्यूमर्स आर पार्टली टू ब्लेम. गलत हो गया. American business functioned extremely efficiently in the period following the World War II. Yes, this is clearly given above,
दैट आफ्टर 1940s वो बहुत कम प्राइस पे बहुत सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे थे, विच इज एफिशिएंसी. सो यस, दे वर फंक्शनिंग एक्सट्रीमली एफिशिएंटली. सही हो गया. Poor production choices made by the leaders of American companies are partly to be blamed for the decline in the stature of the companies. So, poor production choices, ये बात यहां पे करी हुई है, और leaders, ये बात corporate management यहाँ पे करी हुई है. So, poor production choices made by the corporate management, that is partly to blame. Perfectly correct. That is clearly given in the passage. The correct answer is both B and C, and that is why the correct answer is D. तो बी भी सही है, सी भी सही है, सही आंसर डी हो गया. पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, समझ में आया कि नहीं आया? राइट यस नो इन द चैट विंडो. क्लियर और नॉट क्लियर गाइस? आया समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आया? अपना आंसर कैसे निकाला? कंक्लूजन इज समथिंग जो ऊपर के हिसाब से 100% फॉलो करे. याद रखना. कहां गया? कंक्लूजन इज समथिंग जो ऊपर के हिसाब से 100% फॉलो करे. ये होता है. दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी. प्रिया, व्हाट्स अ डाउट? सजल, कहां पे जाके डाउट है बेटा? बी क्यों है? बी इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कहा ना कि वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद दे वर इन अ वे रूलिंग द वर्ल्ड. इफ दे वर रूलिंग द वर्ल्ड, they cannot rule the world by being inefficient. So they were ruling the world, which means that they were efficient. That implies इसीलिए. ठीक है. अरे अगर मैं कंप्लीट ब्लेम कर रहा हूं तो पार्शियल ब्लेम तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा ना. मैं पार्टली ब्लेम कर रहा हूं, फिर मैं बोलूं नहीं, पार्टली से कंप्लीटली कंक्लूजन नहीं निकल सकता. कंप्लीटली से पार्टली कंक्लूजन बिल्कुल बिल्कुल निकल सकता है. दैट इज वाई सी इज ऑल्सो करेक्ट. क्लियर है? एक बात बताओ, अगर मैंने ये फोन खरीदा तो इसका मतलब ऑटोमेटिक हुआ ना कि मैंने इसकी बैटरी भी खरीदी है ना? तो अगर ऊपर लिखा है कि फोन खरीदा, तो और ऑप्शन में लिखा है कि आपने बैटरी खरीदी, सही है. पर अगर उल्टा होता, अगर मैंने सिर्फ बैटरी खरीदी होती, फिर आप ये कह सकते थे कि मैंने फोन खरीदा नहीं. तो स्पेसिफिक से जनरल नहीं निकल पाएगा, जनरल से स्पेसिफिक निकल सकता है. इसलिए सी सही है. आया पार्टली वाला पॉइंट? क्लियर हुआ बच्चा लोग? क्लियर. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम पैसेज. मेन पर्पस ऑफ द आर्ग्यूमेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is very tricky. That's why there are various answers. चलो देखते हैं. What is the main purpose of the argument? Argument करना क्या चाह रहा है? अचीव क्या करना चाह रहा है? To blame American corporate leaders for making poor growth strategies. वो अल्टीमेटली उसने सिर्फ ब्लेम उसके ऊपर डाला है आखिरी में जाके. बट दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ द आर्ग्यूमेंट. अगर पर्पस ही होता ना, तो पता है वो क्या होता? द फर्स्ट लाइन वुड हैव बीन द व्हाट द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज इज. फर्स्ट लाइन वो होती, और फिर वो अलग अलग रीजन देते. देखो, मैं इस रीजन से ब्लेम करना चाह रहा हूं, दिस इज एविडेंस ए. इस रीजन से बी. मैं इस रीजन से ब्लेम करना चाह रहा हूं सी. मैं इस रीजन से ब्लेम करना चाह रहा हूं डी. फिर वो ऐसा आर्ग्यूमेंट होता कि देखो मैं तो कर रहा हूं ब्लेम, और कहां गया?
So I am blaming them, and then when I'm blaming them, I'm blaming them because of this reason, this reason, this reason, this reason. ऐसा होता है. But that's not how the structure of the passage is. तो उन्होंने blame तो सीधा आखिरी लाइन में जाके करा है. गलत हो गया. तो A is wrong. To provide an alternative explanation for the event. Yes. क्यों? क्योंकि इवेंट क्या है? यूएस का नीचे आना, जापानीज और यूरोपियंस का ऊपर आना, ये इवेंट है. अ, किसी ने एक्सप्लेन क्या करा? ये करा. किसी और ने एक्सप्लेन क्या करा? ये करा. किसी और तीसरे ने एक्सप्लेन क्या करा? ये करा. पर मैंने एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दिया है. एज पर मी द एक्सप्लेनेशन इज दिस. So number 4 is actually an alternative explanation of number 3, number 2, and number 1. So that is why B is a perfectly correct answer. Let's see if we have a better answer, but B is perfectly correct. To justify, ये problem है. To justify the taking place of an event. What's the meaning of the word justify? Justify का मतलब ये जो हुआ है ना, ये बिल्कुल सही हुआ है. ये ऐसा ही होना चाहिए था. ये होता है justify. पर justify का मतलब ये नहीं है. यहाँ पे उन्होंने कोई से justify नहीं करा है. समझ में आया? जस्टिफ उन्होंने से उसने he has just given bare facts. Justifying means कि whatever is going on, I'm in a way proving that whatever is going on is perfectly right. But I'm not justifying anywhere. So because of the word justify, option C गलत हो गया. D देखते हैं. To repudiate the claim that corporate management was responsible. What is the meaning of repudiate? Repudiate means in a way cancel out. So, to repudiate the claim that corporate management was responsible for decline in the American industry during the 80s. Repudiate का मतलब मैं इस क्लेम को कैंसिल आउट करना चाहता हूं. मैं इस क्लेम को अगेंस्ट जाना चाहता हूं. पर हुआ क्या था? क्लेम तो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट क्लेम, आई एम फेवरिंग दैट क्लेम. That is why D is wrong. D is exactly opposite of what the main purpose is. So I'm not repudiating. What is the meaning of repudiating? Repudiating means that I'm against that claim. But I'm not against that claim. I'm in favor of the claim. That is why D is wrong. तो D गलत, C गलत, A गलत. सही आंसर क्या है? B. क्लियर हुआ? समझ में आया? पल्ले पड़ा? तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. C सही आंसर हो गया. अभी तक की स्टोरी क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर हुआ? बी जस्टिफाई के चक्कर में सी गलत है. ही इज नॉट जस्टिफाइंग. ये जो अमेरिकन कंपनी नीचे गिरी ना, ये क्यों गिरना सही था, ऐसी बात उन्होंने कहीं नहीं करी है. यस, वोकैबुलरी प्लेड अ रोल हेयर. क्लियर है? चलो, वंडरफुल. ए इसीलिए गलत है क्योंकि ऑप्शन ए उन्होंने सिर्फ आखिरी में लिखा है. दैट्स नॉट द मेन पर्पस. दैट्स मोर ऑफ अ टेक्निकल, जस्ट द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज वेयर वी आर concluding the passage, but that's not the main purpose. That's fine. Clear? चलो, नाउ नेक्स्ट पैसेज इज स्लाइटली लेंदी. तो पहले आराम से पैसेज पढ़ो एंड देन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. ये अपन लेंदी वाले पैसेज पे आ गए हम. रीड द पैसेज एंड इफ अगर यहाँ पे विजिबल नहीं है, द इट्स ऑलरेडी शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल. तो यहां से नहीं तो वहां से पढ़ लेना यहाँ से. ठीक है? It's lengthy and it's slightly difficult, so I'll give a lot of time to read it twice if you want. आउटसोर्सिंग का मतलब समझ में नहीं आया तो एक बार उसको गूगल कर लेना याद से. ठीक है? आई एक्सप्लेन द पैसेज वैसे, पर एक बार गूगल कर लेना.
30 seconds. That's the second half. पैसेज हुआ नहीं है अभी पूरा, ये भी पढ़ो. 30 seconds. Then we'll move on to the questions. नितिका, PV and both ऊपर भी जो नाम है, it's basically the name of the companies who have done some research on outsourcing. ठीक है? Morgan. Yes, it is tough. चलो करें. So essentially, what is the passage saying is, so passage is completely talking about outsourcing. Outsourcing का मतलब क्या होता है? अपना काम किसी ऐसे पर्सन से या कंपनी से कराना जो स्पेशलाइज है उस काम में. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से लीगल एज ने अपना मटेरियल को प्रिंट कराने के लिए खुद प्रिंटर नहीं खरीदा. उन्होंने एक ऐसे पब्लिशर को या प्रिंटर को आउटसोर्स कर दिया जिनका काम ही फुल टाइम प्रिंटिंग का है. या फिर कॉल्स रिसीव करने के लिए उन्होंने खुद कॉल्स रिसीव करने के लिए पर्सन को हायर नहीं करा, कॉल सेंटर्स को हायर कर लिया. दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग. सो अपना इन हाउस काम किसी और से कराना, who are specialized with that type of work. But outsourcing has certain issues and there are research on this. पर वो दोनों रिसर्च जो है वो दोनों रिसर्च में ओवरलैप है. डू फोकस ऑन दिस वर्ड that there is an overlap in both this research. Now there are two type of research. Number one is PV. ठीक है? So एक रिसर्च करी है PV ने, दूसरी रिसर्च करी है मॉर्गन ने. ये दो रिसर्चेस की बात करी है. PV की रिसर्च ये है कि यार प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने बहुत बार अपने कंपनी की बहुत ज्यादा इसेंशियल इंफॉर्मेशन आपने दूसरों को दे दी है. सो व्हाट यू शुड डू इज, इफ यू रियली वांट टू प्रोटेक्ट दैट इंफॉर्मेशन, यू शुड इम्पोज हेवियर पेनल्टी ऑन द लीक ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. तो अगर वो इंफॉर्मेशन, अगर वो लीक हुई है जो आपने एसेंशियल इंफॉर्मेशन किसी ऐसी कंपनी को दी टू विच द वर्क हैज बीन आउटसोर्स्ड, अगर उन इंफॉर्मेशन कुछ भी लीक करी, मैंने अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेलीकॉलर्स को दी जो कोई और कंपनी की, अगर इंफॉर्मेशन लीक करी, देयर बी हैवी पेनल्टी ऑन दोस. दैट इज व्हाट यू शुड डू. Morgan, on the other hand, is looking at the business entities that perform the outsourced work. As such entities grow, their ability to provide specialized services to a specific client diminishes. Morgan ने outsourcing के प्रॉब्लम को ऐसे देखा है कि यार प्रॉब्लम क्या होता है कि शुरू शुरू में आपकी एक कंपनी है ए, आपने कंपनी को काम दिया दैट इज बी, और बी सिर्फ आपका ही काम कर रही थी, पर बी को तो ग्रो करना है. तो बी ने धीरे धीरे करके सी का भी काम चालू कर दिया, डी का भी काम चालू कर दिया, ई का भी काम चालू कर दिया. तो जैसे जैसे ये डाइवर्सिफिकेशन होता है बी के तरफ से, वैसे वैसे बी का सर्विस देने की कैपेबिलिटी ए को डिमिनिश हो जाती है. सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम विद डाइवर्सिफिकेशन एंड अनदर प्रॉब्लम विद आउटसोर्सिंग. सो इन्होंने, मॉर्गन ने एक अलग प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया है, पीवी ने एक अलग प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया है. खैर मॉर्गन ने उसका एक सोल्यूशन भी दिया.
But author is saying that the solution is very, very short-sighted. What is the solution that they have given? The solution is that Morgan's aim is to educate corporations engaged in outsourcing so that they can choose a firm focusing on providing just one service. तो आप तो ऐसे फर्म को ही काम दो जो सिर्फ एक ही सर्विस दे रही है. पर एज पर द ऑर्डर दिस सोल्यूशन इज शॉर्ट साइटेड. व्हाई? वो हो सकता है आज एक काम दे रही है, पर कल जब उनको रेवेन्यूज कम लगेंगे तो कल वो चार काम और करने लगेगी. सो आज से वी कैनॉट थिंक अबाउट 2023 और 2025. सो दैट इज व्हाई दिस सोल्यूशन इज वेरी शॉर्ट साइटेड. दैट इज व्हाट द ऑर्डर इज सेइंग. जो मॉर्गन ने सोल्यूशन दिया है ना, बड़ा शॉर्ट साइटेड सा सोल्यूशन है. Towards the end, the author is saying that there is an overlap between both the studies. बस ये याद रखना, दोनों स्टडीज में ओवरलैप है. That's it. Clear? Now let's look at the questions. So it's about outsourcing. Outsourcing में there are two studies. दोनों studies ने अलग अलग पैरामीटर को डील करा है, but दोनों studies में overlap भी है. That is what it is. Now let's focus on the questions. Question number 11. Solve करो. Question number 11. मॉर्गन का प्लान कि आप कंपनीज को ये बताओ कि यार ऐसी कंपनीज को चुनो ही मत which are providing multiple services. So only pick up the companies which are just providing one service. That is what the author is saying. What is the problem with this plan? Let's see. The author of the plan passage considers Morgan's plan to educate corporations short-sighted, as in it's a flawed plan. Why is it a flawed plan? Because it seeks to educate only corporations and not business entities to which the corporations outsource work. ठीक है, पर वैसे भी अगर ए अपना काम बी को आउटसोर्स कर रहा है, तो मेरा प्रॉब्लम तो, मैं तो सिर्फ ए के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा हूं ना, मैं बी के प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ही नहीं चाह रहा हूं. दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग. इसलिए बी गलत हो, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया. सो दिस इज नॉट इवन रेलिवेंट फॉर मी. Assumes that companies that plan to diversify may not end up doing so. उल्टा है. हो सकता है कंपनीज आज बोले कि हम डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, पर हम कल डाइवर्सिफाई कर लें. एज इन 2020 दे सेट कि हम डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, 2023 में वो डाइवर्सिफाई कर लें. तो ये प्रॉब्लम है ना. तो प्रॉब्लम ये नहीं कि वो बोलेंगे कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे और फिर नहीं करें. प्रॉब्लम ये है कि वो बोलेंगे हम डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे और कर लें. और ये बात किस में लिखी है? ये बात बी में नहीं लिखी है, सी में लिखी है. इट प्रोवाइड्स एन एडवाइस विच माइट नॉट बी रेलेवेंट इन नियर फ्यूचर. सो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सिंप्लीफाई करूं, इसका मतलब ये, मैंने कहा था कंपनीज को सिर्फ उन्हीं कंपनीज को आउटसोर्स करना जो सिर्फ आपको केटर कर रहे हैं, ये किसी और को केटर नहीं कर रहे हैं. मैंने कहा ठीक है, उन्हीं को पकड़ते हैं. तो उनको पकड़ा और कंपनी से बोला आप टेंशन मत लो, हम सिर्फ आपको ही केटर करेंगे, हम किसी और को नहीं करेंगे. पर कल जब उनकी रेवेन्यूज हिट होगी, जब उनके प्रॉफिट्स कम होंगे, हो सकता है वो दूसरों को भी केटर कर ले. सो दैट इज वाई ये जो मेरा सजेशन है कि वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज को पकड़ो, मेरा सजेशन तो इट फॉल्स फ्लैट. दैट इज वाई. So that is why the correct answer is C, because that is what the problem with my suggestion is. That is why the correct answer is C. Clear? Clear हो गया. चलो, wonderful. Let's move on to question number 12 now. Solve question number 12. Clear हो गया? Yes. चलो, wonderful.
व्हाई नॉट बी? ओके, एक सेकंड जल्दी से देख लूं। अच्छा, बी इसीलिए नहीं है जिन लोगों को बी में डाउट हो रहा है। देखो, दो चीजें हो सकती हैं। आज वो बोले हम डाइवर्सिफाई करेंगे और कल वो डाइवर्सिफाई नहीं करें, तो ये तो मेरे लिए फायदा हुआ ना, बिकॉज एनी वे आई डिड नॉट वॉन्ट देम टू डाइवर्सिफाई। तो आज वो बोले डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे और आज अगर वो बोले डाइवर्सिफाई करेंगे और कल नहीं करें, दैट्स एन एडवांटेज फॉर मी। दैट इज नॉट व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट, दैट इज नॉट व्हाई योर प्लान इज फॉल्टी। उल्टा है, आज वो बोले भाई हम तो डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, विल ओनली बी केटरिंग टू यू, यू विल बी आवर ओनली क्लाइंट, अगर वो ये बोले, पर कल वो डाइवर्सिफाई कर लेंगे। प्रॉब्लम ये है। तो आज उनने मना करा पर कल उनने कर लिया, ये प्रॉब्लम है। आज उन्होंने बोला हम कर देंगे और कल उन्होंने मना करा, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो पहली वाली है, दैट इज फाइन। यस अनुष्का, नेक्स्ट बैच स्टार्टिंग ऑन 21st itself this month. The primary purpose of the passage is to describe the way in which the two theories conflict. वो तो कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं देखो दोनों थ्योरी में पैरेलल है, दोनों थ्योरी में कॉमन चीजें हैं, कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, गलत हो गया। प्रपोज टू डिफरेंट सॉल्यूशंस टू द सेम प्रॉब्लम, वो सॉल्यूशंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ सजेशंस की बात करें जो उन कंपनीज ने दिया है, उसने ऑर्डर ने खुद ने सॉल्यूशन थोड़ी ना दिया है, गलत हो गया। डिस्कस हाउ टू स्टडीज अराइव एट कॉन्ट्रडिक्टरी सॉल्यूशंस, गलत। The solutions are not contradictory solutions. In fact, surprisingly, there is a there is a commonality in the solution. That is what it is. So, अकेली ये बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है? ऑप्शन डी, explore two reactions to a phenomena and draw a parallel. Which means, what is a phenomena? Outsourcing. और आउटसोर्सिंग पे अलग अलग रिएक्शन हुए, एक रिएक्शन है बी, एक रिएक्शन है सी, और उन दोनों में भी कुछ कॉमन चीजें हैं। दैट इज वॉट दी ऑथर इज सेइंग। दैट इज वाई perfectly correct answer is option D. D is the correct answer, which most of you had already marked. So एक फिनोमिना में रिएक्शन और रिएक्शन पे कैसे कॉमनैलिटी है, ये चीज चेक करना, ठीक है। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द पैसेज। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट क्वेश्चन ऑन द पैसेज एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे फॉर क्रिटिकल रीजनिंग मैराथन। लंच ब्रेक इस क्वेश्चन के बाद है, 10 मिनट्स का, देन वील स्टार्ट विद लीगल रीजनिंग मैराथन। यस, स्लाइटली डिफिकल्ट, थोड़ा सा अपन ऑन अ हाई नोट खत्म कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, 30 seconds. Happy Navratri to you too, guys. चलो कर दे। According to the passage, which of the following is common to both PV's and Morgan's studies? Now ये लास्ट वाले क्वेश्चन में काफी लोगों को धक्का लगने वाला है। बोथ वेलकम डाइवर्सिफिकेशन इन बिजनेस एंटिटीज प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर कॉर्पोरेशंस, दोनों ने वेलकम किया है, नहीं दोनों ने वेलकम नहीं किया है, दोनों ने डाइवर्सिफिकेशन की कुछ प्रॉब्लम्स बताई है, तो दोनों ने बिल्कुल ऐसे खुले हाथ से वेलकम नहीं करा है, गलत हो गया। बोथ डिस्कस द इफेक्ट दैट आउटसोर्सिंग हैज ऑन द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन, इन्होंने डिस्कस नहीं किया है। दे शुड हैव डिस्कस्ड, दे शुड हैव डिस्कस्ड, बट दे हैव नॉट डिस्कस्ड, दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। उन्होंने लॉन्ग टर्म वायबिलिटी कहीं डिस्कस नहीं करी, उन्होंने बोला हाँ ये कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, पर लॉन्ग टर्म में कितना वायबल है कंपनीज के लिए उन्होंने बिल्कुल डिस्कस नहीं कराई, गलत हो गया। बोथ एक्सप्लोर द वे इन विच डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ विद इन कॉर्पोरेशन कैन अफेक्ट आउटसोर्सिंग। सो कंपनी विच इज आउटसोर्सिंग, वो अगर डाइवर्सिफाई करती है तो दूसरी कंपनी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये डिस्कस नहीं हुआ है।
उन्होंने क्या डिस्कस किया है कि एक कंपनी ने अगर दूसरी कंपनी को डाइवर्सिफाई आउटसोर्स किया, तो अगर ये वाली कंपनी डाइवर्सिफाई करती तो क्या इंपैक्ट होगा. So the company which is outsourcing, their diversification has not been talked about. The company to which work has been outsourced, their diversification has been talked about. So outsourcing करने वाले का diversification की बात नहीं करिए, outsourced करने वाले का diversification की बात करिए. तो C गलत हो गया. D, neither questions whether outsourcing itself is beneficial practice for the corporations or not. Yes, ऑदर ने यही बात ऊपर पैसेज में करी भी थी कि दोनों ने बात करी है, दोनों एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, दोनों सोल्यूशन दे रहे हैं, पर दोनों ये बात नहीं कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग खुद अपने आप में बेनिफिशियल है कि नहीं है. इन अ वे दे आर प्रिज्यूमिंग कि आउटसोर्सिंग इज अ नेसेसरी इवल, वो तो होना ही है. नाउ लेट्स लुक एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. पर वो ये नहीं बता रहे हैं कि आउटसोर्सिंग अपने आप में इज अ बेनिफिशियल प्रैक्टिस और नॉट. तो यस, दैट इज कॉमन बिटवीन बोथ द कंपनीज. दैट इज डेफिनेटली कॉमन. आया समझ में? सो द करेक्ट आंसर देयरफॉर सरप्राइजिंगली, बिकॉज डी काफी कम लोगों ने मार्क करा था, सरप्राइजिंगली इज डी. सो द करेक्ट आंसर इज डी. दैट्स अ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. इसके बाद का एक और पैसेज है, उसके क्वेश्चंस आई विल पोस्ट इन द पैसेज इटसेल्फ. सो यस, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, उसको एक बार वापस इसका वीडियो देख लेना. And quickly 10 minutes ka break, and then Sakshi ma'am will come and start the legal reasoning marathon in the next 10 minutes itself. I hope this is ये पूरी जर्नी तुम लोगों की जो ऑलमोस्ट 3 सेशंस की हो गई है, काफी अच्छी जा रही होगी. Stay till the very last marathon and then take a break tomorrow. That's what I would strongly suggest you do. So 10 मिनट खाना खाने का टाइम मिलेगा, और टेंशन मत लो, सामने भी तुम बैठ के खाना खा सकते हो, यूट्यूब देखते हो, इट्स नॉट अ फिजिकल क्लास, वो भी कर सकते हो. सो वो सब भी करो, बट जस्ट मेक श्योर कि आज का पूरा दिन एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू अटेंड एज मेनी मैराथन एज पॉसिबल. बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. ठीक है? एंड if you like the marathon, please press like on the chat in the video also, and do subscribe to the channel. Pretty much every 15 to 20 days we'll be coming up with a marathon, we promise that. Every few weeks we'll be coming up with a marathon, because this is extremely beneficial for a lot of students. And we're having the next all India scholarship and admission test on 20th. The next freshers batch we are starting on 21st. The next droppers batch is also we are starting on 21st. So anyone who's interested, do attend the AISCT on 20th. ठीक है? चलो, thank you so much guys. Bye bye, take care and have a nice day. I'll see you guys very soon, next week itself, in some other YouTube live. Okay, thank you so much. Bye bye.
Hi, good afternoon, everyone. My name is Sakshi, and I would be taking forward the next session that is legal reasoning. So let's get started. Just a moment, okay? Just give me a second. Okay, so moving ahead with our first set of questions. So here's the passage. I am giving you next 30-40 seconds to read the passage. So start reading. I'll be covering legal reasoning questions, the new CLAT pattern legal reasoning. So basically, I'll be discussing passages along with the questions based on the passages. Start reading. Done reading. Okay, moving ahead. Read the next part of the passage. Done. Moving on to the first question. Read the first question.
I would want you to solve all the questions first and then we will start discussing one by one. Answer to the first question. A lot of varied answers. Let's move on to the next question. I'll be discussing all the questions all together. Okay. So read the next question and answer. Now question two. The next third question. And third, moving on to the next question. Read fourth.
And fourth, answer for the fourth question. Okay, go through the fifth question now. Answer to the fifth question. जल्दी पढ़ना पड़ेगा, इतना आराम आराम से नहीं पढ़ सकते हम. Okay. The last question for the passage. Read the sixth question. So shall I start discussing? Okay. So, taking you back to the passage, मैं तुम्हें एक जनरल आइडिया देती हूँ कि ये पैसेज किसके रिलेशन में है या किस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करता है. So it's a part of a family law. फैमिली लॉ मतलब ऐसा लॉ जो आपके मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस, ये सारे इश्यूज से डील करता है. ठीक है. So, the basic that you need to know before actually understanding the passage and the concept that is given here is that India does not have one particular family law for all the people in the country. ठीक है. एक particular law नहीं है जिससे कि हम सारी शादियां, सारे डाइवोर्स सब पर अप्लाई करके जो भी उनके डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉर्ट करते हैं. सो इंडिया में अलग अलग लॉज हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन.
So Hindus have a Hindu law for all the marriages, divorce, maintenance that is taking place among a Hindu couple. Muslims have a Shariat law, तो मुस्लिम्स के पास शरीयत लॉ है, वैसे ही क्रिश्चियंस का लॉ है, ठीक है. पारसीज हैव देयर ओन लॉ. एंड जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि देर इज अ कपल जो इंटर रिलीजियस मैरिज की है जिसने, ठीक है, हिंदू मैरिड अ मुस्लिम और अ मुस्लिम मैरिड अ क्रिश्चियन, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उन सबके लिए हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है. सो दिस पर्टिकुलर पैसेज इज रिलेटेड टू सम कंसेप्ट कॉल्ड मेंटेनेंस. मेंटेनेंस के कंसेप्ट को डील करता है एंड ये हिंदू मेंटेनेंस एक्ट की बात कर रहा है. तो हमें हिंदू लॉ के रिलेटेड कुछ मेंटेनेंस की बात यहाँ पे की गई है और वो हमें पढ़ के समझना है. अब बेसिकली मेंटेनेंस होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंटेनेंस. सो जब भी कभी कोई डाइवोर्स होता है और डाइवोर्स के बाद जो भी वाइफ है, ठीक है, अब तो हस्बैंड को भी मिलने लग गया है, ठीक है, तो अगर हस्बैंड वाइफ है, जो भी स्पाउस है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब वो पहले कहीं जॉब नहीं करते थे और अभी भी वो शायद जॉब नहीं कर रहे हैं, वो केपेबल नहीं है, उनकी दूसरी शादी भी नहीं हुई है, एंड दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन देमसेल्व्स, तो उनके पास कोई अपना लाइवलीहुड, बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने का कोई जरिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है. So the other spouse who is capable of earning and has money is supposed to give it to the other spouse. तो मेंटेनेंस किया जाता है. अब एक चीज बहुत जरूरी है ध्यान रखना मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस इज पेड फॉर वंस नेसेसिटी. आपकी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए आपको मेंटेनेंस मिलता है, ना कि आपकी लग्जरीज को. सो अगर आप कहीं पे रह रहे हो जहाँ का घर का रेंट लेट्स से 6,000 है, आपकी ग्रोसरीज वगैरह सब मिला के आपका पूरा महीने का खर्चा comes down to 15-20,000. So the maintenance would be according to that. The maintenance will also depend upon कि जो spouse आपको maintenance दे रहा है, ठीक है, वो person कितना earn करता है, उसका financial income, उसका financial securities कितनी है. तो इन सारी चीजों को ध्यान रख के अलग अलग फैमिलीज को उस तरह से मेंटेनेंस दिया जाता है. अब तुम कहोगे कि यहाँ तो वो डॉटर की बात कर रहा है, आप तो कुछ वाइफ की और हस्बैंड की कहानी बता रही हो. यस. सो हाउ डज डॉटर्स एंड चिल्ड्रन कम इनटू पिक्चर मेंटेनेंस वाली सिचुएशन में. सो एक सेक्शन है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. सीआरपीसी इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ऑल्सो anybody who's preparing for the next CLAT or CLAT 2022 need to understand कि सीआरपीसी जैसे टर्म्स जब लिखे होंगे तो जरूरी नहीं है कि उस पैसेज में उसका फुल फॉर्म भी दिया होगा. कुछ चीजें बेसिक हैं जो हमें पता होना चाहिए. दो कंसोर्शियम हैज ऑलरेडी सेड इट 100 टाइम्स कि आपको पहले से कुछ लॉ पता होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बेसिक लॉ की नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे पैसेज पढ़ो, उसी को पढ़ के आप आंसर कर दो. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नॉट लाइक दैट. उन्हें ऐसा लगता है कि हम बेसिक चीजों से अवेयर होके, बट इन जनरल अ लॉट ऑफ अस डू नॉट नो द बेसिक टर्मिनोलॉजी, डू नॉट नो द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लॉ. हम तो वो चीज समझते हैं जो हमारे प्रैक्टिकली हमारे आसपास अवेलेबल होती है. एंड दिस इज द रीजन दैट यू शुड बी गोइंग बैक रीडिंग द थ्योरी. थ्योरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बेसिक क्रिमिनल लॉ के कंसेप्ट्स पता होना चाहिए, आपको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, आपको बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, ये सब पता होना चाहिए. तभी आप जाके ऐसे पैसेजेस, उसमें जो छोटे मोटे टर्म्स मेंशन है, आप वो समझ पाओगे और तभी आप वो पैसेज को समझ के आपके आंसर्स में अप्लाई कर पाओगे. सो इवन दो अ लॉट ऑफ पीपल वुड टेल यू कि आपको पहले से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पैसेज में आएगा वही सब होगा, बट पैसेज समझ भी तो आना चाहिए एग्जाम के बीच में, ठीक है. तो बेसिक चीजें तुम्हें पता होना चाहिए. तो कमिंग टू सेक्शन 125 सीआरपीसी बोलता क्या है. सेक्शन 125 सीआरपीसी कुछ कैटेगरी ऑफ लोग हैं जिनको मेंटेनेंस देने की बात करता है. ऑफ कोर्स द डाइवोर्स वाइफ और डाइवोर्स हस्बैंड, ठीक है. हस्बैंड वाली चीज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें हमने हस्बैंड को भी मेंटेनेंस दिया है. देन ऑल द माइनर चिल्ड्रन, आपके जितने भी बच्चे जो 18 साल से कम के हैं, आपको उनको भी मेंटेनेंस देना है. एंड मेजर अनमैरिड डॉटर्स हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स. अब तुम कहोगे ये तो बायसनेस हो गई ना मैम कि आप अनमैरिड मेजर डॉटर्स को दे रहे हो जिनकी शादी नहीं हुई. व्हाट अबाउट अनमैरिड मेजर सन्स. सी, when you will read law you will find a little bit of biasness here and there, क्योंकि जो सोसाइटी में हम जैसे रहते हैं लॉज उसी सोसाइटी को एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं. एंड आई एम श्योर यू वुड हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ women, a lot of girls in the family not working and completely dependent on their family members, which is much acceptable in society. But when it comes to men, we put a lot of pressure on them कि नहीं, तुम 18 साल के हो गए हो, तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया है, अब इधर तुम बिजनेस कर लो, या तुम सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ लो, या फिर तुम जुडिशरी निकाल लो, या तुम कोई नौकरी ढूंढ लो. डू समथिंग, बिकॉज having a boy or a man
सिटिंग एट होम नॉट डूइंग एनीथिंग इज समथिंग जो सोसाइटी जनरली एक्सेप्ट नहीं करती है, एंड दिस इज द रीजन कि उनको लगा कि विमेन को तो जरूरत पड़ेगी, द अनमैरिड मेजर डॉटर वुड नीड मेंटेनेंस, सन का उनने इतना सोचा नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि यहाँ पे सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंशन्ड है, इसी के सिमिलर एक सेक्शन है सेक्शन 20 क्लॉज 3, तुमको दिख रहा होगा 20 सबसेक्शन 3, ठीक है, वो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का। अभी सेक्शन 20 क्या है? अच्छा, एक और चीज इससे मुझे यहाँ पर याद आया तुम्हें बताने के लिए कि अगर तुमने सिर्फ देखा सेक्शन 20 क्लॉज 3 और उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन कहीं तुम्हारे पैसेज में मेंशन नहीं है, तो घबराना मत, परेशान मत होना। तुम्हारे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जितना इंफॉर्मेशन पैसेज में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो मेंशन नहीं करेंगे और वो तुमसे पूछ लेंगे। तो तुम्हें एग्जैक्टली 20 सबसेक्शन 3 क्या है अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, जो पैसेज में दिया है उस हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो 20 सबसेक्शन 3 में भी सेम चीजें मेंशन है कि जब भी डाइवोर्स होगा तो डाइवोर्स वाइफ को मेंटेनेंस देना है, माइनर चिल्ड्रन को देना है और मेजर अनमैरिड डॉटर्स को देना है आपको मेंटेनेंस, तब तक जब तक आपकी बेटी खुद से कमाने ना लग जाए या फिर आपकी बेटी की शादी ना हो जाए। ये चीजें ऐसी थी। हमारा पैसेज स्पेसिफिकली एक ऐसे जजमेंट से डील करता है जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और उस सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ था अंडर सेक्शन 125। तो किसी पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था सेक्शन 125 में, ठीक है, और 125 के अंदर उन्हें बोला कि जो भी अनमैरिड मेजर डॉटर है क्या उसको मेंटेनेंस देना जरूरी है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर आप उस बेटी को जो 18 साल की ऊपर की हो गई है, जो अनमैरिड है, उसे आप मेंटेनेंस तभी दोगे व्हेन शी इज सफरिंग फ्रॉम सम फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी और इंजरी। मतलब वो एक ऐसी पर्सन है जो इनकेपेबल है अपना लाइवलीहुड अर्न करने। बट ऑन द कॉन्ट्री अगर आपकी बेटी एकदम परफेक्ट तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, शी इज अ नॉर्मल person with no issues at all, no physical, no mental issues at all, and she is somebody जो livelihood earn कर सकती है, ठीक है, वो capable है, तो फिर आप ऐसे डॉटर को मेंटेनेंस नहीं दोगे। तो आपको सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करना है जो कि बेसिकली अपने आप को खुद अपना लाइवलीहुड अर्न नहीं कर सकते। ऑन द कॉन्ट्ररी 20 सबसेक्शन 3 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। 20 सबसेक्शन 3 एक बहुत मेजर और ब्रॉडर राइट है, ठीक है। वो मेजर और ब्रॉडर राइट में वहां पे कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, वहां पे आप फिजिकली इनकेपेबल हो, मेंटली इनकेपेबल हो या केपेबल हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको आपकी मेजर डॉटर जो भी है उसको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो 20 सेक्शन जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का है वो ब्रॉडर है, ऑन द कंट्री 125 में कंडीशन अप्लाइड है, और अगर कोई 125 के अंदर रेमेडी मांगेगा तो उसको उस 125 के हिसाब से ही रेमेडी मिलेगी, कीपिंग इनटू अकाउंट दैट पर्टिकुलर कंडीशन लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो ये यहाँ पे कहानी थी। नाउ मूविंग ऑन, अब इसके नेक्स्ट इसमें जो मैंने तुमको अभी लास्ट में बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, हम सेक्शन 20 को देखें और हम सेक्शन 125 को देखें, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो वो डिफरेंस यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में ही दिया है, ठीक है। तो मैं तुमको डायरेक्टली अब क्वेश्चन पे लेके जाती हूँ। सो कमिंग टू क्वेश्चन 1, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके या। सो अब क्वेश्चन 1 जो हमसे बोल रहा है, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबल एप्रोप्रिएट वर्डिंग। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो क्वेश्चन है वो दो तरीके के आएंगे, एक फैक्चुअल सिचुएशन होगा और एक ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, इट कुड बी जस्ट एनीथिंग, ठीक है। अब जब इस तरह का कोई पैसेज आता, सॉरी, कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है विच इज अ कंप्लीट स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसकी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, वो हमसे प्रोबेबल एप्रोप्रिएट पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे, हमें इन सारे ऑप्शंस अवेलेबल में जो सबसे बेस्ट है वो बताना है। तो एक से ज्यादा भी सही होंगे, बट उन सारे एक से ज्यादा में जो एक सबसे बेस्ट है हमें वो बताना होगा, ठीक है। तो हमसे वो बेसिकली इन्फ्रेंस पूछ रहा है। सो गोइंग थ्रू, इट सेज अ मेजर चाइल्ड हु इज नॉट मैरिड daughter can claim maintenance from his or her parents if she is unable to maintain himself or herself। ये सही तो है, बट यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग
थोड़ी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन मेंशन कर दी है, उस रूलिंग में चीजों को बढ़ा दिया है, उस कंडीशन को अप्लाई कर दिया है, तो ये तो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। कमिंग टू द सेकेंड, इट सेज अ मेजर चाइल्ड हु इज नॉट अ मैरिड डॉटर, ठीक है, अभी तक ये सही लग रहा है। हु इज नॉट अ मैरिड डॉटर कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स प्रोवाइडेड शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और एबनॉर्मलिटी और इंजरी। क्या ये सही है? ठीक है, तो हो सकता है ये हमारा बी ऑप्शन हो। सी देखते हैं, अ चाइल्ड हु इज नॉट अ मैरिड डॉटर। अब यहाँ पे ये दिक्कत हो गई, तुम चाइल्ड बोल रहे हो, माइनर मेजर तुमने नहीं मेंशन किया है, एंड दिस इज द रीजन कि जो सी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। सो सी गलत हो गया। डी बोल रहा है मैरिड डॉटर कैन क्लेम मेंटेनेंस। अब मैरिड डॉटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये भी हट गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली एक फैक्चुअल हाइपोथेटिकल फैक्चुअल सिचुएशन है, जहां पे वो एक रेशमा की बात करें हु इज अ मुस्लिम डॉटर। अब तुम कहोगे कि ऐसे कैसे, कि जो ऊपर का पैसेज है उसमें तो हिंदू फैमिली की कहानी थी और उसमें हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट मेंशन था, फिर ये मुस्लिम का क्वेश्चन कैसे दे दिया? रिमेंबर, जो सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है वो तो सिर्फ हिंदूज पर एप्लीकेबल होगा, बट जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है उसका कोई रिलीजन नहीं है। इट्स सम लॉ विच इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर वो ऐसा लॉ है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग नहीं करता है, तो क्या वो सब पर अप्लाई होगा? फिर उसमें क्या मुस्लिम्स भी आ जाएंगे? यस। सो यहाँ पे दिया है कि शी वॉज वर्किंग एंड देन आफ्टर सम टाइम शी वॉज अनएम्प्लॉयड, ठीक है, शी केप्ट लुकिंग फॉर अ जॉब और उसकी जो सेविंग्स थी वो सारी भी खत्म हो गई, ठीक है। देयरफॉर रेशमा हैड नो अदर ऑप्शन बट टू अप्रोच द कोर्ट अगेंस्ट her फादर फॉर मेंटेनेंस। तो उसने, जब उसके पास नौकरी नहीं थी, उसकी सेविंग्स खत्म हो गई, शी डिसाइडेड टू सीक मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर। क्या वो सक्सीड करेगी एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द आर्टिकल? आर्टिकल में इंफॉर्मेशन क्या दी है कि अगर तुम सेक्शन 125 सीआरपीसी अप्लाई करते हो तो वहां पे देखना पड़ेगा कि कोई इंसान जो भी अनमैरिड मेजर डॉटर है, ठीक है, वो एक सेकेंड, क्या कोई अनमैरिड मेजर डॉटर है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है। अगर वो डिसेबल्ड है तो ही मेंटेनेंस देना है, नहीं तो मेंटेनेंस नहीं देना है, ऐसा कंडीशन है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर वो केपेबल है बट वो अभी जॉब ढूंढ नहीं पा रही है या उसके पास जॉब नहीं है, तो जो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है वो अप्लाई होगी, तो उस हिसाब से उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी या इंजरी नहीं है। शी इज केपेबल ऑफ अर्निंग हर लाइवलीहुड। तो नो वाले ऑप्शन हमारे पास कौन सा? एक ऑप्शन बी है और एक डी है। बी सेज नो बिकॉज शी इज अ मेजर and can claim maintenance only if she is suffering from any physical or mental abnormality injury। ये तो मेरे को परफेक्ट लग रहा है, बट दूसरा भी देख लेते हैं। D says no because she is not a Hindu and cannot claim maintenance from her father। नहीं, हम सेक्शन 125 सीआरपीसी अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डी नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। So the third question talks about a girl named Priya who's a Hindu, ठीक है, and she's been living separately from her parents, that is okay, she's earning a money और she's earning some money और वो money उसके लिए काफी है, मतलब वो अपना रेंट दे रही है, वो अपनी ग्रोसरीज खरीद रही है, वो सारी चीजें खरीद रही है। यहाँ पर एक लाइन देखो, बस ये वाला इंपॉर्टेंट है। शी इज rarely able to save money for going out and other requirements। her father used to send 6,000 every month for the extra expenditure। मतलब वो अपनी ग्रोसरीज खरीद पा रही है, अपनी मेड को अफोर्ड कर पा रही है, बिजली दुनिया पानी के बिल सारे दे पा रही है, रेंट दे पा रही है, मतलब उसकी बेसिक नेसेसिटीज वो खुद पूरा कर दे रही है। सिर्फ उसको बाहर जाना, घूमना फिरना, ये सारी चीजें हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रही, जिसके लिए फादर पैसे देते थे, बट नाउ दैट शी इज फॉलन इन लव विद सम अदर पर्सन, तो फादर उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहे। द पॉइंट इज कि अगर नेसेसिटीज के लिए सब कुछ वो खुद अर्न कर रही है, तो क्या वो फादर से कुछ डिमांड कर सकती है क्या? नहीं, तो आंसर वुड बी नो। तो अब नो वाले हमारे पास ऑप्शन कौन से? एक बी है, नो बिकॉज शी इज गोइंग टू मैरी राहुल अगेंस्ट her father's wish, तो ये तो फालतू बात हो गई, बिकॉज ऑफ कोर्स एनीबडी कैन मैरी एनी पर्सन whomsoever he or she wants to, तो ये तो सही नहीं है। सेकेंड नो बोल रहे हैं, नो बिकॉज शी इज एबल टू मेंटेन हर सेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग्स एंड नीड्स हर फादर्स मनी फॉर अदर लग्जरीज। यस, और मैंने तुमको मेंटेनेंस के में बताया था कि मेंटेनेंस आपकी बेसिक नेसेसिटीज के लिए होता है, आपकी लग्जरीज के लिए नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर डी। फोर्थ, so some person shall be a Hindu unmarried daughter, ठीक है, when she turned 21,
उसके फादर ने उसको पैसे देने से मना कर दिया, ठीक है। शी वांटेड टू परस्यू हायर स्टडीज, और उसको किसी भी तरह का जो पैसे वगैरह लग रहे होंगे हायर स्टडीज के लिए वो उसके पास नहीं थे। ये क्वेश्चन का आंसर आई फॉर सम रीजन टुक अकाउंट अ लॉट ऑफ यू मार्क्ड इनकरेक्ट। आई टेल यू व्हाई। तुमने क्वेश्चन की आखिरी लाइन नहीं पढ़ी, तुमने ढंग से नहीं पढ़ी आखिरी लाइन। आखिरी लाइन क्या बोल रही है यहाँ पे? यहाँ पे आखिरी लाइन बोल रही है कैन शी क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर अंडर द लॉ प्रायर टू द कोडिफिकेशन ऑफ 1956 एक्ट। मतलब लॉ आने के पहले की जो कहानी थी, क्या उसके हिसाब से वो क्या क्लेम कर सकती है, ठीक है। द पॉइंट इज कि उसके हिसाब से वो जो भी क्लेम करेगी वहां पे किसी तरह की कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे वो जो चाहे वो मांग सकती है, जिस तरह चाहे वैसा मांग सकती है। और अगर वो उस हिसाब से जो लॉ पहले था बिफोर द 1956, ठीक है, अगर उसके पहले वो जो भी अपनी हायर स्टडीज के लिए पैसे मांगना चाहे, क्या वो डेफिनेटली आगे जाके मांग सकती है क्या? यस। सो यस वाला ऑप्शन हमारे पास कौन से? एक है ए और दूसरा है सी। ए सेज because she is a Hindu unmarried daughter who has a statutory right to claim maintenance from her father if she is unable to maintain herself. Okay. Yes, Hindu law obliges a Hindu to maintain unmarried daughter who is unable to maintain herself. Yes. तो हमें यहाँ पे आंसर, क्योंकि लॉ प्रायर जो पहले था उसके हिसाब से देना है, जस्ट द बेसिक नॉलेज, द बेसिक थ्योरी, और उस हिसाब से फिर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि हिंदू ऑब्लाइज्ड है, कोई भी हिंदू पर्सन ऑब्लाइज्ड है अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए। उसका मन करे या ना करे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट जो भी लॉ बोलता है बेसिक वो तो यही है कि आपको आपकी बेटी का ध्यान रखना पड़ेगा। वो तो बाद में जाके अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 125 सेक्शन के लिए कि आपको फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी देखना है, ठीक है। सो मूविंग अहेड, coming to the fifth question here. Fifth question says Neha is a major Hindu unmarried daughter who has already adopted a daughter. अच्छा, ऐसी जब भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे कुछ फैक्चुअल सिचुएशन में ऐसी चीज दी है विच यू माइट बी अवेयर ऑफ, यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ, कि अनमैरिड या सिंगल वुमेन बच्चे अडॉप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। एक चीज याद रखना, ये आंसर करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे पूरे पैसेज में आपने बेटी अडॉप्ट कर रखी है तो ही आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांग सकते हो, या आपने बच्चा अडॉप्ट नहीं किया है या आपका खुद का बच्चा नहीं है तो मांग सकते हो, ऐसा कुछ अलग से मेंशन नहीं है। यहाँ पे आपका अनमैरिड होना दिया हुआ है, बाकी चीजों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कि जब ये एक्स्ट्रा कुछ भी अडॉप्शन के रिलेटेड बात नहीं की गई है तो हम अपना कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे लाके डिस्प्यूट भी नहीं करेंगे। तो जो हमें पैसेज दिया है हम उसको अप्लाई करके आंसर करने की कोशिश करेंगे। कैसे? तो यहाँ पे उसमें दिया हुआ था कि वो 1 लाख रुपए कमाती थी, बट और उसमें सब उसका बेटी और उसका सबका खर्चा चल जाता था। नाउ द पॉइंट इज कि शी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड देन शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ। उसके पेरेंट्स ने कहा कि वो मेंटेनेंस तभी देंगे जब वो अपनी बेटी को छोड़ दे, ठीक है, जो उसने अडॉप्ट कर रखी है बेटी उसको वो छोड़ दे। नाउ द पॉइंट इज देयरफॉर नेहा मूव्ड टू द कोर्ट अगेंस्ट हर फादर अंडर सेक्शन 20 ऑफ द 1956 एक्ट। विल शी सक्सीड? क्या वो सक्सीड करेगी? आंसर इज यस, क्योंकि अगर वो अनमैरिड मेजर डॉटर है और वो फिजिकल इंजरी से सफर कर रही है जहां पे उसके लिए जॉब करना इम्पॉसिबल हो गया है, वो अर्न नहीं कर सकती है, तो क्या ये फादर की ड्यूटी बन जाएगी बेटी को मेंटेन करना? यस। अब यस वाले ऑप्शन हमारे पास कौन से? ए और सी। ए सेज yes because she's a Hindu unmarried daughter who has a statutory right to claim maintenance from her father. C says because the condition laid by her parents is unreasonable. ये फैक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से ऑप्शन है, यहाँ पे कहानी के हिसाब से बोला कि नहीं 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 मम्मी पापा तो बहुत अनरीजनेबल बात कर रहे हैं, हमें क्या मतलब है, हमें तो जो आंसर देना है वो लॉ के हिसाब से देना है। सो सी तो नहीं होगा, द आंसर वुड बी ऑप्शन ए। सिद्धांत or anybody asking that how do we know the law prior to that act? We don't have to know the law prior to the act. We assume कि जो इसमें चलता आ रहा है, जो कंडीशन अभी दी गई है उसके पहले वो कंडीशन नहीं थी, तो हम वो चीज को ध्यान में रख के आंसर करते हैं। ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो प्रायर नॉलेज है, जब हमने थ्योरी पढ़ी होगी, जब हमने फैमिली लॉ पढ़ा होगा, तो हमने बेसिक कंसेप्ट समझे होंगे, वो बेसिक कंसेप्ट भी यहाँ पे काम आ जाते हैं, ठीक है। फिर से ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये कह रहा है व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट इन द जजमेंट डिस्कस इन द आर्टिकल। तो कंक्लूजन बताना है किसका? कोर्ट का। अपना कंक्लूजन नहीं बताना है अपन को, कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया है हमें वो बताना है। तो पहला बोल रहा है कोर्ट कैन नॉट डिसाइड इफ एन अनमैरिड डॉटर इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 20 ऑफ द 1956 एक्ट इन द प्रोसीडिंग्स
अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। ठीक है, अगर तुमको ये नहीं समझ में आया ऑप्शन तो मैं तुमको बता रही हूँ। ये बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि कोर्ट को एक प्रॉब्लम हुई थी जजमेंट देते समय, कि कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो करे क्या। अगर किसी ने 125 सेक्शन के अंदर केस फाइल किया है और वो रेमेडी मांग रहा है सेक्शन 20 के अंदर, तुम केस पर्टिकुलर लॉ के अंदर फाइल कर रहे हो और रेमेडी किसी और के अंदर सीख कर रहे हो, तो यहाँ पे कोर्ट को डिफिकल्टी हो रही थी डिसाइड करने के लिए कि वो करे क्या, क्योंकि यहाँ पे दो दो चीजें डिस्प्यूट हो रही थी। तो ये तो डेफिनेटली एक इशू था जो कोर्ट ने फेस किया और जो कोर्ट ने कंक्लूड किया। और देखते हैं क्या है। कोर्ट कैन नॉट डिसाइड इफ अ मेजर हिंदू अनमैरिड डॉटर इज इंटाइटल टू, नहीं, कोर्ट तो डिसाइड कर सकता है, तो ये तो गलत है। सेक्शन 125 सीआरपीसी इज बेनिफिशियल लेजिस्लेशन, is a beneficial legislation which cannot be defeated except through clear provisions of the statute। अब क्लियर प्रोविजंस तो वैसे भी लॉ ने मेंशन नहीं की, क्योंकि अभी अभी अपन ने देखा कि इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने एक गाइडलाइन मेंशन कर दी, एक छोटी सी कंडीशन मेंशन कर दी। तो वो छोटी सी कंडीशन स्टैट्यूट का पार्ट नहीं है, वो एक जजमेंट का पार्ट हो गई। तो ये स्टैट्यूट पे ही जाके बात करना, तो ये तो सही नहीं है। डी बोल रहा है अ हिंदू अनमैरिड डॉटर कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी अंडर सेक्शन 20 एंड नॉट अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। ये तो सही है कि ये बोल रहा है कि आप सेक्शन 20 के अंदर तो ता उम्र, जब तक आपकी दोबारा शादी, दोबारा कह रही हूँ, जब तक शादी नहीं हो जाती उस लड़की की, या वो खुद जॉब करना शुरू नहीं कर देती, या जब तक उसका मन है, ठीक है, वो तब तक डिमांड कर सकती है। बट 125 में ऐसा नहीं है। 125 में मेंटेनेंस तभी डिमांड कर सकती है जब वो फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल हो। तो ये सही है। अब अगर मैं ए और डी को देखूं और मुझे डिसाइड करना है कि मेरा क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि ए भी सही है और डी भी सही है, ऐसे टाइम पे जब तुम प्रॉब्लम फेस करो, रीड द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन सेज व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट। हमसे कंक्लूजन पूछा जा रहा है। ऑन द कॉन्ट्री, जो ये ए वाला ऑप्शन है, ये कंक्लूजन नहीं है, ये डिफिकल्टी थी जो कोर्ट ने फेस करी। ठीक है, उस समय कोर्ट को क्या लग रहा था, क्या सही है क्या गलत है, ये डिफिकल्टी जो कोर्ट फेस कर रहा था, ये वो है। कंक्लूजन तो कोर्ट का ये है। सो आर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि दो ऑप्शन में कुछ तो लग रहा है कि कैसे डिसाइड करूं मैं, सही या गलत है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना, एक बार उसकी लैंग्वेज समझना, एंड दैट विल हेल्प यू डिसाइड कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। ठीक है, सो मूविंग अहेड, स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट पैसेज फास्ट। स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट पैसेज। पढ़ा। दिस इज अ प्रिटी easy passage। Done. Read the second part. Okay.
Done reading the passage? Okay, start reading the seventh question. It's a pretty simple question. Okay, move to the next question. Done. Read the next. Ninth का answer. Okay, read 10th question.
Done 10th, read 11th, fast. Eleventh. Okay, so this is the last question for the passage. Okay, so shall I start discussing? Okay, so moving ahead, taking you back to the passage. अब ये जो passage है, this is something which is core related to the कॉन्ट्रैक्ट लॉ थ्योरी, ठीक है। तो एक और चीज जो आई वुड वांट ऑल दी क्लैट 2021 एंड 22 एस्पिरेंट्स टू कीप इनटू अकाउंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, दैट इज डू नॉट स्किप द थ्योरी अगेन। ये क्यों मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हें क्लैट 2020 का पेपर देखना चाहिए। तुम अगर क्लैट 2020 का पेपर देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि कंसोर्शियम डिड से कि आपको बहुत सारा बेसिक चीजों का नॉलेज नहीं होना चाहिए, बट जो क्लैट 2020 का एक्चुअल क्वेश्चन पेपर था, इट हैड पैसेजेस रिलेटेड टू द बेसिक स्टैटिक थ्योरी, पॉलिटर स्पेस प्रिंसिपल दिया हुआ था, विच इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स। तो टॉट्स और एनवायरमेंट लॉ में हम पोल्यूटर स्पेस प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो एक्चुअल में थ्योरी का पार्ट है, और अगर हम थ्योरी समझ गए ढंग से तो हमारे लिए पैसेज समझना आसान होगा। सो दिस पर्टिकुलर पैसेज टॉक्स अबाउट द कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट। कॉजाई का मतलब होता है पार्शियल, ठीक है। अब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है। तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी प्रॉमिस है जो कोर्ट पे एनफोर्स कराई जा सकती है। मतलब आप कोर्ट में जाके उस प्रॉमिस के अगेंस्ट रेमेडी मांग सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने घर के पास वाले ग्रोसरी स्टोर से 10,000 रुपए का किराने का सामान खरीदा, और अगर उस इंसान ने आधा ही सामान भेजा और बाकी का नहीं भेजा, तो जो मेरे पैसे वो ले चुका है और उसने मुझे जो सामान डिलीवर नहीं किया है, एंड इफ ही रिफ्यूजेस टू डिलीवर, क्या मैं उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ? यस, क्योंकि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमारे बीच में एक प्रॉमिस हुई थी, जहां पे उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे ग्रोसरीज भेजेगा, जिस प्रॉमिस के रिटर्न में मैंने एज अ कंसिडरेशन उसको 10,000 रुपए दिए थे। सो वी हैड अ प्रॉमिस, अ प्रॉपर प्रॉमिस इन बिटवीन अस, एंड यही प्रॉमिस को हम कोर्ट में ले जाके रेमेडी सीक कर सकते हैं। कॉज़ाइक कॉन्ट्रैक्ट एक थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें होता क्या है कि कोई ऐसी बोली गई या लिखी हुई प्रॉमिस नहीं होती है। आप किसी को कुछ बोलते नहीं हो करने के लिए, या सामने वाला आपको कुछ ऑर्डर नहीं करता है। यहाँ पे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बिना बोले या बिना पहले से सोचे हो जाता है। कब? जब आपने ऐसा कोई बेनिफिट ले लिया हो
जिसके लिए आपने पहले से बोला नहीं था। तो अगर कोई इंसान कुछ चीज लेकर आया है, वो दो ही लेकर आया था, मतलब उसने उसको दो ही लेकर आनी थी, लेट्स से दो बुक्स ही लेकर आनी थी, बट उस पर्सन के पास एक एक्स्ट्रा बुक थी, ठीक है, आर एस अग्रवाल ही हो गई जो तुम लोग सॉल्व करते हो, ठीक है, उसके पास एक एक्स्ट्रा आर एस अग्रवाल थी, एंड बिकॉज तुमको भी आर एस अग्रवाल चाहिए थी, तुमने वो बुक उससे ले ली। अब वो फ्री में थोड़ी ना बांट रहा था आर एस अग्रवाल। जब उसने 1000 1500 जितने की भी आर एस अग्रवाल आती है, ठीक है, उतने की बुक तुमको दे दी, और तुमको वो बुक मिल गई, जिससे तुम्हें एक बेनिफिट हुआ, जिससे तुम्हें फायदा हुआ, आर यू बाउंड टू पे दैट पर्सन? यस। तो यहाँ पे सीन क्या था, तुमने पहले से किताब नहीं मंगाई, उसने ये प्रॉमिस नहीं किया कि वो तुम्हारे लिए किताब लेकर आएगा, बट जब वो किताब ले आया और उससे तुम्हें बेनिफिट हो गया, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उस पर्सन को जितनी की वो बुक है उतने पैसे देना। एंड दिस इज बेसिकली व्हाट क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट इज, कि कोई चीज जो तुमने पहले से नहीं बोली थी मुझे चाहिए या मैं खरीदना चाहता हूं, बट वो तुम्हारे पास आ जाए और तुम उसको रख लो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने जिससे भी वो चीज ली है उस पर्टिकुलर चीज के लिए तुम उस पर्सन को जो भी पैसे हैं वो दो। और अगर तुम ऐसा नहीं दोगे, तो जो तुम्हारे बीच में एक तरह का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये वायलेट हो रहा है। सो दिस पर्टिकुलर पैसेज टॉक्स अबाउट दोज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। मूविंग अहेड, यहाँ पे उन्होंने कंडीशन मेंशन की है कि हम क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट को इम्पोज कैसे करेंगे, कब कब कंडीशन होगी, जब क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, हम कैसे पता करेंगे। तो ये पैसेज में वो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। नाउ मूविंग अहेड to the first question, that is question 7th for this passage. It says अनुज और मनोज दो लोग नेबर्स हैं, ठीक है, एक ने कुछ फ्लावर मंगाया, किसने मंगाया था फ्लावर, कुछ आटा वगैरह मंगवाया, और जो जी मार्ट था जिससे मंगाया था अनुज ने, वो जी मार्ट कंफ्यूज हो गया अनुज और मनोज के घर में, और उसने ले जाके किसको डिलीवर कर दिया, मनोज को। अनुज अंडर एन ऑनेस्ट बिलीफ यूजेस द फ्लावर, ओके सॉरी, मनोज ने मंगाया था, बट एक्चुअल में वो कंफ्यूज हो गए, जैसे मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ, और ले जाके उसको डिलीवर कर दिया अनुज के घर पे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनुज अंडर एन ऑनेस्ट बिलीफ, उसको लगा कि ठीक है ये अच्छा फ्लावर है, वो यूज कर सकता है, उसने उसको यूज कर लिया। जब उसे बोला गया कि भाई जो तू ये 10 किलो आटा यूज कर चुका है, तू इसके पैसे दे, क्या इस पर्सन को उसके पैसे देने पड़ेंगे? यस, बिकॉज उसने अपने आप को बेनिफिट किया है, उसने अपने आप को एनरिच किया है, ठीक है। अच्छा, देयर अनदर थिंग जो मुझे एकदम से याद आया, जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए, एक टर्म आया था पैसेज में, क्वांटम मेरिट, ठीक है, एक सेकेंड, आई फाउंड दिस वर्ड समवेयर, जस्ट लाइक ये quantum merit is basically a kind of it's basically a legal term। तो तुम पूछते हो ना बहुत बार टीचर्स से, बहुत सारी यूट्यूब लाइव्स में, कि हमें लीगल टर्म्स याद करने हैं क्या, हमें लीगल टर्म्स रटने हैं क्या? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब तुम थ्योरी पढ़ोगे, जब तुम ऐसे पैसेजेस पढ़ोगे, तुम्हारे प्रिपरेशन के टाइम पे ऑलरेडी तुम्हें ऐसे बहुत सारे लीगल टर्म्स मिल जाएंगे, और जब तुम ये पैसेज के फॉर्म में उसको पढ़ रहे हो, थ्योरी के फॉर्म में पढ़ रहे हो, तुम्हें उसका कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है, ये तुम्हारे लिए याद रखना आसान होगा। तो अब जब तुमने क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, जब तुमने अनजस्ट एनरिचमेंट पढ़ा कि कोई भी इंसान अपने आप को अनजस्टली एनरिच नहीं कर सकता है, और उसको हम बोलते हैं क्वांटम मेरिट, ठीक है, ये वर्ड उसके लिए यूज होता है, क्वांटम मेरिट। तो ये चीज अब हमको याद हो जाएगी, फिर हमें अलग से रटने की जरूरत नहीं है। सो ट्राई करना कि जितने भी लीगल टर्म्स तुम जो पढ़ना चाह रहे हो, वो मेजोरिटी पार्ट तुम्हारी थ्योरी से ही आए। तुम थ्योरी ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, जो भी तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है वहां से पढ़ो, जितने सैम्पल पेपर्स हैं, जो न्यूज आ रही है, करंट लीगल अफेयर्स है, इन सारी जगहों से बहुत सारी थ्योरी पढ़ो, तो अपने आप तुम्हें लीगल टर्म्स पता चल जाएंगे, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जिसने आटा रख लिया है अनुज, उसको पैसे तो देने पड़ेंगे, तो ये नीड नॉट बोल रहा है, ये भी नीड नॉट बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि अनुज विल हैव टू पे एज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। यस, यहाँ पे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट एक्जिस्टेंस में आ चुका है, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। सो आंसर इज सी। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, अनु किसी एग्जीबिशन में जाती है, ठीक है, अपनी डॉटर इमारा को लेकर, और जब वो इधर उधर कहीं दिख रही थी, तो बेटी ने एक चॉकलेट उठाई और खा ली, विच इज लाइक वेरी कॉमन, जो छोटे बच्चे करते हैं। अब अनु एक्चुअल में वो चॉकलेट अपनी बेटी के लिए नहीं खरीदना चाहती थी, बट जब उसकी बेटी लेके उठा के खा चुकी है, तो क्या अनु को वो शॉपकीपर को पैसे देने पड़ेंगे? यस। सो अनु विल हैव टू पे, तो विल वाले ऑप्शन हमारे पास कौन से सी और डी? सी बोल रहा है अनु विल बी लाइबल एज इट विल अमाउंट टू अनजस्ट एनरिचमेंट। क्या वो लाइबल, यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, तो क्या अनु लाइबल होगी क्योंकि अनजस्ट एनरिचमेंट था? ठीक है, यस।
डी बोल रहा है अनु विल बी लायबल एज शी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द डॉटर। अब ये वाली जो बात है कि वो अपने डॉटर के एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो फैक्चुअल सिचुएशन की बात कर रहा है। हमें आंसर यहाँ पे लॉ के हिसाब से करना है कि अगर कभी ऑलरेडी बेटी वो चीज उठा के खा चुकी है, वो अपने आप को अनजस्टली एनरिच कर चुकी है, तो क्या ये ड्यूटी बनती है अनु की पैसे देना? यस, सो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। मूविंग टू द 9th क्वेश्चन। सो अदिति और अनिता दो लोग हैं, ठीक है, एक ही विसिनिटी में रहते हैं। अनीता ने पिज्जा ऑर्डर किया था, तो अनीता ऑर्डर्ड सम पिज्जा, बट वहां पे किसी तरह का कुछ नंबरिंग का कंफ्यूजन हो गया और वो जो पिज्जा था वो अदिति के घर में डिलीवर हो गया। अदिति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और ले जाके अंदर रख दिया। फिर वो अनीता जिसने ऑलरेडी पिज्जा ऑर्डर किया था वो अदिति के घर आती है, और जब वो यहाँ पे लिखा है व्हाइल वेटिंग फॉर अदिति शी ईट्स द पिज्जा दैट वाज लाइंग अराउंड, मतलब ये तो तुम बोलो कि ऐसा कौन करता है, बट देन दिस, ठीक है, दिया हुआ है फैक्चुअल सिचुएशन में कि वो अपनी दोस्त के अंदर से बाहर आने का वेट करी थी और उसने देखा कि बाहर तो पिज्जा का डब्बा रखा है, उसने उठाया और खा लिया। इट वॉज लेटर फाउंड दैट कि अदिति के घर में किसी ने पिज्जा ऑर्डर किया ही नहीं था। अब हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे लाइबल कौन होगा, जिसने पिज्जा खाया है या जिसके घर पर डिलीवर हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे लाइबिलिटी किसके हिसाब से देखेंगे, तो हम यहाँ पे लाइबिलिटी देखेंगे अनीता के हिसाब से, बिकॉज एक सेकेंड, क्या हो गया, आ रहा है ये, अच्छा हाँ, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है अदिति शुड पे एज शी एक्सेप्टेड द पिज्जा मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, बट एक्चुअल में उसने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तो किया बट उसने अपने आप को बेनिफिट तो किया नहीं। यहाँ बोल रहे हैं अदिति एंड अनीता बोथ शुड पे, तो बोथ तो डेफिनेटली नहीं होगा, नीदर भी नहीं होगा। ये बोल रहे हैं अनीता शुड पे एज एज शी ऑर्डर्ड एंड रीप्ड द बेनिफिट, ऑफ कोर्स उसी ने ऑर्डर किया था, अल्टीमेट बेनिफिट भी उसी को मिला, तो इट वुड बी अनीता जिसको यहाँ पे कॉम्पनसेट, सॉरी, जो भी ऑर्डर के जितने पैसे हैं वो देने पड़ेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। नाउ टू पीपल आर नेबर्स, ठीक है, और एक के घर में आग लग जाती है तो दूसरा पर्सन डेफिनेटली वो आग बुझाने के लिए भागता है, एंड देयर इज अनदर पर्सन बी, बी नाम का कोई पर्सन है जिसके पास फायर एक्सटिंग्विशर है। तो एक्स, सॉरी, जो जी नाम का पर्सन है वो फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है, एक्स के घर में जो आग लगी है उसको बुझा देता है। अब जिसका फायर एक्सटिंग्विशर था जिसको तो उसने यूज कर लिया, वो यहाँ पे कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहा है जेड से बोल रहा है कि तुम यहाँ पे कॉम्पनसेशन दो। अब ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है कि जेड वुड बी लाइबल एज ही टुक द एक्सटिंग्विशर विच एन ऑब्लिगेशन ऑन हिम, बट द पॉइंट इज कि यहाँ से जेड को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ है, जो जी नाम का पर्सन है, जेड जी जो भी है, उसको एक्चुअल में कोई फायदा नहीं हुआ है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये वुड लाइबल वाला भी नहीं होगा। अब वुड नॉट बी लाइबल वाले मेरे पास दो ऑप्शन है, कह रहा है जी वुड नॉट बी लाइबल बट एक्स एज ही बेनिफिटेड फ्रॉम हिम, ठीक है, जेड वुड नॉट बी लाइबल एज इट वॉज अ नेसेसिटी। अब अगर मैं डी ऑप्शन पढ़ूंगी तो मुझे लग रहा है कि डी ऑप्शन एकदम अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आग लगी थी, लगी है कहीं पे, किसी का घर जल रहा है, हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे इतना नाटक थोड़ी ना करेंगे कि यार फायर एक्सटिंग्विशर किसका है, जिसका है बस वही बुझा पाएगा, दूसरे नहीं बुझा पाएंगे, वी ऑब्वियसली डोंट डू दैट, ठीक है। बट एक और दिक्कत है, मेरे पूरे पैसेज में नेसेसिटी को लेके कहीं कुछ मेंशन नहीं है। नेसेसिटी अपने आप में कंसेप्ट है, नेसेसिटी अपने आप में एक डिफेंस है, जब ये चीज कहीं पे मेंशन नहीं है तो मैं अप्लाई कैसे करूंगी, एंड दिस इज द रीजन व्हाई माय आंसर वुड बी ऑप्शन बी, क्योंकि जो चीज मेरे पैसेज में दी है, जो चीज मुझे ऑलरेडी पहले से मेंशन कर रखी है, मैं वही आंसर मार्क कर सकती हूँ, मैं अपने मन से नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करके आंसर मार्क नहीं करूंगी, ठीक है। Moving to the last question of this particular passage. So there is a, acha, very important question, very important. I'll tell you why. This is one question जो कि मैंने deliberately यहाँ पे use किया है in this PPT and as a part of this marathon to tell you कि कभी-कभी ऐसा भी होगा कि passage में कुछ information दी है और एक छोटी सी extra set of information तुम्हें factual situation में दी गई होगी, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा सिचुएशन या एक्स्ट्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लॉ के फॉर्म में तुम्हारे फैक्ट्स के साथ दी गई है, हमें उसे इग्नोर नहीं करना है, हमें उसे भी कंसीडर करना है। तो मेरा पूरा पैसेज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स का था, मेरा पूरा पैसेज कोई भी इंसान अपने आप को अनजस्टली एनरिच कर रहा है तो उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए, इस बारे में था। बट अगर मैंने क्वेश्चन 11th पढ़ा तो यहाँ पे एक नई कहानी है, नई कहानी उन्हें क्या मेंशन करी है, दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच में, तो ए बी के अगेंस्ट केस कर पाएगा और बी ए के अगेंस्ट केस कर पाएगा। जो सी या एक्स या वाई या डी, कोई भी ऐसा तीसरा पर्सन है जो उस कॉन्ट्रैक्ट पार्टी का या एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, वो जाके उसको एनफोर्स नहीं कर सकता, वो जाके उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। बट यहाँ पे उनने हाउएवर मेंशन किया है। याद रखना, जब वो हाउएवर जैसे वर्ड यूज करते हैं, मतलब वो एक एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो वो कंडीशन क्या हो गई? अ थर्ड पार्टी कैन बी अलाउड इफ इट होल्ड्स अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आउट ऑफ इट। यहाँ पे वो कंडीशन ले कर रहा है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम थर्ड पार्टी को आगे जाके केस फाइल करने के लिए अलाउ कर देंगे, अगर थर्ड पार्टी का उस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में किसी ना किसी तरह का कोई इंटरेस्ट रहा होगा। ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे पैसेज में नहीं है, बट जब मुझे फैक्चुअल सिचुएशन में अलग से लिख के दी थी, तो मैं इसको इग्नोर नहीं करूंगी, मैं इसका भी ध्यान रखूंगी और मैं अकॉर्डिंगली आंसर मार्क करूंगी। ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? कि एक इंस्टेंस में रमेश की कोई लाइबिलिटी है 5 लाख की ओवर दीपक। टू डिस्चार्ज इज लाइबिलिटी, रमेश ने अपनी 7 लाख की जो कार वगैरह है, वैन है, वो जीना नाम की किसी लड़की को सेल कर दी। शी प्रोमिसेस टू पे द अमाउंट एट द अर्लिएस्ट। रमेश इन्फॉर्म अबाउट दिस अग्रीमेंट टू दीपक। उसने बोल दिया कि जैसे ही मेरी कार के पैसे आ जाएंगे, मैं तुम्हारे पूरे पैसे तुमको चुका दूंगा। अब यहाँ पे जो जीना नाम की लड़की है, उसने ले तो लिया वैन, बट वो पैसे नहीं दे रही है। दीपक डिसाइड करता है केस फाइल करना उस जीना नाम की लड़की के अगेंस्ट। क्या वो ऐसा कर सकता है? वो ऐसा कर पाएगा। रीजन बी, यहाँ पे जीना जब पैसे देगी तभी दीपक को उसके पैसे वापस मिलेंगे। तो आइडली रमेश और जीना के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, दीपक थर्ड पार्टी था, बट क्या उस पैसे, उस कॉन्ट्रैक्ट से जो पैसे आ रहे हैं, उसमें दीपक का इंटरेस्ट है? यस। और अगर उसमें दीपक का इंटरेस्ट है तो दीपक फिर वो सूट क्लेम कर सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? नॉट मेंटेनेबल वाले तो हम हटा देंगे। ये बोल रहा है सूट इज मेंटेनेबल एज अ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी डिपेंडेंट ऑन इट। ठीक है। द सूट इज मेंटेनेबल एज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज इंटर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ दीपक। ये दोनों ही सही है, दोनों ही क्लोज ऑप्शन है। यहाँ पे सिर्फ एक लौता फर्क है ऑप्शन चूज करने का, वो है लैंग्वेज। हम अगर बी ऑप्शन चूज करेंगे तो वो बोलेगा कि वो बोल रहा है कि जो बेनिफिट है दीपक का वो उस पर डिपेंडेंट है, विच इज ट्रू। बट हम यहाँ पे बेटर टर्म्स यूज करेंगे, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन इट। तो दीपक के ऊपर जो लाइबिलिटी है, जो दीपक की लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगी, वो कंप्लीटली जीना के पैसों पे डिपेंडेंट है। And because A has a better language, better legal terms, और वो lawfully better आंसर कर पा रहा है, हम ऑप्शन बी को चूज ना करके हम ऑप्शन ए चूज करेंगे। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज, स्टार्ट रीडिंग फास्ट। स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट पैसेज। स्टार्ट रीडिंग। जल्दी पढ़ो जल्दी।
Read the next part. Shall we move to the questions now? Okay. Read the 12th question. Done. Read 13th. This too is a pretty simple passage. Done 13th. Read 14th. Read 14th question.
Pada 14th. Next read 15th. Sixteenth. Read question 16th. करो जल्दी करो. Read question 17th. Done. Okay. So shall I start discussing?
चलो, सो टेकिंग यू बैक टू द पैसेज, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर पैसेज टॉक्स अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ थेफ्ट, कि थेफ्ट एग्जैक्टली होता क्या है। तो थेफ्ट अगर तुमने बेसिक थ्योरी पढ़ी है या तुम्हें जनरली थेफ्ट का जो कंसेप्ट है वो पता है, तो तुम्हें पता होगा कि थेफ्ट में हम मूवेबल प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट देयर शुड बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी शुड बी मूव और टेकन अवे। आप उसको उसकी जगह से, उसकी पोजीशन से शिफ्ट कर रहे हो या आप उसको उसकी जगह से उठा के ले जा रहे हो। मूव और टेकन अवे विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ऑफ कोर्स कोई भी क्रिमिनल एक्ट होने के लिए आपका इंटेंशन बुरा होना जरूरी है, सो देयर शुड बी अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड इट शुड बी टेकन आउट ऑफ समवन एल्सेस पोजेशन। किसी के पोजेशन से जब आप बाहर लेकर गए हो उसकी परमिशन के बिना, तब हम कहेंगे कि ये थेफ्ट है। ओनर कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे जब भी थेफ्ट देखते हैं तो थेफ्ट में हम सिर्फ पोजीशन देखते हैं, मतलब चोरी किया हुआ माल दोबारा चोरी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ पोजीशन देखेंगे, पोजीशन के अलावा कौन ओनर था कौन नहीं था उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस पर्टिकुलर पैसेज इनिशियली टॉक्स अबाउट व्हाट एग्जैक्टली थेफ्ट इज। थेफ्ट में जो मूव वाला टर्म है उस मूव को कहीं पे ढंग से डिफाइन नहीं किया गया है, और इनिशियली कोर्ट ने यही बोला कि क्योंकि कहीं पे ढंग से उन्होंने मूव डिफाइन नहीं किया तो हम मूव में वही कंसीडर करेंगे जो इंग्लिश का मूव होता है, दैट इज चेंज इन पोजिशन। किसी भी चीज की जब आप पोजिशन चेंज कर रहे हो तो हम कहेंगे कि वो उस चीज को आपने मूव कर दिया है। अब आगे यहाँ पे कोई केस दिया हुआ है मद्रास हाईकोर्ट का, जो कि काफी पुराना है, 1957 का। उसे एक्सप्लेन किया था, वहां पे यही चीज बोली गई थी कि जब मूव अलग से कहीं पे दिया हुआ नहीं है तो जो इंग्लिश में जैसे हम समझते हैं मूव को, हम वैसे ही इसको मानेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज talks about what about the information or what about the a kind of a picture जिसमें किसी तरह की इंफॉर्मेशन है। अगर कोई फोटो या कोई डॉक्यूमेंट की कोई फोटो कॉपी कर रहा है और उस बुरे इंटेंशन के साथ ही फोटो कॉपी कर रहा है ताकि वो डॉक्यूमेंट या वो इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाए, तो क्या ये भी थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर कंसिडर किया जाएगा? यस, सो यहाँ पे भी हम थेफ्ट को कंसिडर करेंगे। नाउ गोइंग स्ट्रेट टू द क्वेश्चंस, सो देयर इज अ फैक्चुअल सिचुएशन गिवन हियर कि मनोरमा नाम की कोई लड़की है जो लॉन्ग ड्राइव करके कहीं जा रही थी और उसको बीच में कोई ट्रक मिल जाता है। अब वो ट्रक रास्ते में खड़ा हुआ है जिसके कारण शी इज नॉट एबल टू मूव अहेड। ऐसे में उसने सोचा कि मैं आगे जाके ट्रक ड्राइवर को बोल देती हूँ कि प्लीज ट्रक को थोड़ा साइड में कर लो। शी वेंट देयर ओनली टू रियलाइज कि ट्रक में जो कीज है वो लगी हुई है बट ड्राइवर मिसिंग है। तो उसने सोचा कि यार अब पता नहीं भैया कहाँ है, कितनी देर में आएंगे, सो शी डिसाइडेड टू मूव द ट्रक। तो वो ट्रक में बैठ जाती है, ट्रक का इग्निशन ऑन करती है और ट्रक को मूव करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, ये लास्ट की 3-4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सुन एज शी स्टार्टेड द ट्रक विद द इंटेंशन ऑफ मूविंग इट, द ड्राइवर केम एंड कॉट देम। मतलब यहाँ पे हमें देखना है कि मनोरमा का इंटेंशन क्या था। क्या वो ट्रक चुरा रही थी या ट्रक को साइड कर रही थी? यहाँ पे उसका इंटेंशन ट्रक को साइड करना था, एंड बिकॉज उसका कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं था, कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था। मैलाफाइड इंटेंशन मतलब बैड इंटेंशन। अगर उसका कोई डिसऑनेस्ट बैड इंटेंशन नहीं था तो फिर मनोरमा लाइबल नहीं होगी। तो क्या ड्राइवर सक्सीड करेगा? ड्राइवर विल नॉट सक्सीड। तो नॉट सक्सीड वाले ऑप्शन कौन से हैं? ये तो कैंसिल हो गया। ड्राइवर विल नॉट सक्सीड एज शी डिड नॉट हैव डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है। द ड्राइवर विल नॉट सक्सीड एज देयर वाज नो रॉन्गफुल लॉस। लॉस तो बाद में आएगा, इंटेंशन पहले आएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी ना होकर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। 13। अब इस 13 को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। पराक्रम जा रहा था बिजनेस ट्रिप पे और वो जो अपना गोल्ड का ब्रिक है वो अमित को देके चला गया। अमित को पैसों की जरूरत पड़ी और अमित ने वो गोल्ड का ब्रिक बेच दिया। इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ थेफ्ट वेल, यू विल रियलाइज कि यहाँ पर थेफ्ट नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में थेफ्ट नहीं है। क्यों थेफ्ट नहीं है मैं बताती हूँ। जो गोल्ड का ब्रिक बेचा गया, ठीक है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी था। अमित ने अपने घर से ले जाके उठा के उसको बेच कर आ गया, तो ये मूव और टेक अवे भी था। अमित का ऑनेस्ट इंटेंशन था, ठीक है, किसी और के परमिशन से उसकी प्रॉपर्टी वो बेच रहा था। बट क्या अमित किसी और के पोजेशन से बेच रहा था क्या ले जाके? नहीं, क्योंकि वो जो ब्रिक था वो तो ऑलरेडी पराक्रम अमित को देकर गया था। मतलब यहाँ पे उसने किसी और के पोजेशन से मूव नहीं किया है, वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी उसके खुद के पोजेशन में थी, एंड इसीलिए ये थेफ्ट नहीं है। ये बेसिकली केस है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का।
जब तुम थ्योरी पढ़ोगे क्रिमिनल लॉ की, दिस इज वाई कीप टेलिंग यू कि यू शुड बी अवेयर ऑफ द बेसिक कंसेप्ट। तो जब तुम क्रिमिनल लॉ की थ्योरी पढ़ोगे, उसमें कंसेप्ट आता है, एक क्राइम है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यहां पर वो अप्लाई होगा, यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अप्लाई होगा, बट ये थेफ्ट का केस नहीं है, दिस इज नॉट अ केस ऑफ थेफ्ट। तो अब नॉट वाले केस में हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? अमित इज नॉट लाइबल एज ही डिड नॉट पजेस एनी डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ठीक है, अमित तो वैसे भी लाइबल नहीं है। अमित इज नॉट लाइबल एज द एक्ट ऑफ इंट्रस्टमेंट मेड द ब्रेक द प्रॉपर्टी ऑफ अमित, नहीं ये तो गलत है, तो ये वाला तो हटा दो। ये तो लाइबल बोल रहा है तो ये भी नहीं। अमित इज नॉट लाइबल एज ऑल द एसेंशियल्स ऑफ द थेफ्ट हैव नॉट बीन सैटिस्फाइड, यस। यहाँ पे जो फोर्थ कंडीशन थी कि किसी और की पोजीशन से मूव करना है, वो सैटिस्फाई नहीं हुआ है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14, अंजन को कोई बुलक कार्ट मिलता है, ठीक है, बुलक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स। तो उसको एक मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, एक बुल है जिसके ऊपर एक डब्बा अटैच है जिसमें ऑर्नामेंट्स है। वो उस बुल को इस पर्पस से कि वो ऑर्नामेंट्स चुरा लेगा, वो उसको कुछ लालच दिखा के, कुछ बेट दिखा के अपनी तरफ मूव करवाता है, ताकि बुल मेरे साथ आ जाए और फिर मैं उसको ले जा लूं और वो जो सामान है वो चुरा लूं। वो थोड़ा ही मूव किया था, उतने में मालिक ने देख लिया और मालिक ने वो बैल को रोक लिया। बट क्या मूवमेंट हो चुका था? मूव मतलब चेंज इन पोजीशन, क्या बुल एक पोजीशन बदल चुका था? यस। ये पोजीशन क्यों बदली थी? विथ बेसिकली पोजीशन क्यों बदली थी? ये पोजीशन बदली थी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, और किसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था? अंजन का, एंड दिस इज द रीजन। क्या अंजन लाइबल हो जाएगा? यस। सो अंजन विल बी लाइबल, और जो ओनर है वो सक्सीड करेगा अंजन के अगेंस्ट। तो ओनर शैल सक्सीड वाला ऑप्शन कौन सा? एक ये है, तो ओनर शैल सक्सीड एज द एसेंशियल्स ऑफ द थेफ्ट हैव बीन सैटिस्फाइड। ओके, ये तो उल्टा बोल रहा है, ये तीनों ही उसके अगेंस्ट बोल रहा है, तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट हो चुका है, और अगर मूवमेंट हो चुका है ऐसे डायरेक्शन में डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ जो अंजन का था, तो फिर जो ओनर है बुलक कार्ट का, जिस पे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है या जो भी चीजें ऑर्नामेंट्स है, फिर वो सक्सीड करेगा। कमिंग टू द 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन सेज, मधु है, मधु ने किसी ज्वेलरी शॉप से चोरी करने की कोशिश की, ठीक है, तो उसने क्या किया यहाँ पे? व्हेन ऑल द ब्यूटीफुल रिंग्स आर डिस्प्लेड, एंटाइज ट्राइज टू स्नीक द रिंग इन हर पॉकेट। वो पॉकेट में रखने की कोशिश करती है, बट उसको लगता है कि ये सीसीटीवी कैमरे में वो दिख जाएगी, और फिर वो उठा के वापस रख देती है। बट जब उसने पहली ही फुर्सत में वो रिंग उठा के मूव कर लिया था इस पर्पस से कि वो चुराएगी, क्या वो थेफ्ट कर चुकी थी? यस। तुम्हारा बाद में कितना भी अच्छा मन हो जाए, तुम कोई चीज चोरी करके ले आए, तुम्हें लगा कि फिर यार नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू डू, दूसरे दिन तुम वापस करके आ गए, डजंट मैटर। जिस मोमेंट पे तुम्हारा बैड इंटेंशन था, उसी टाइम पे हम डिसाइड कर लेंगे कि वो थेफ्ट है या नहीं है। सो हियर मधु विल बी हेल्ड लाइबल फॉर कमिटिंग थेफ्ट। तो ये तो दिस वुड नॉट अमाउंट बोल रहा है, ये भी बोल रहा है दिस वुड नॉट अमाउंट, और ये बोल रहा है दिस वुड नॉट अमाउंट, बट देन दिस विल अमाउंट टू थेफ्ट। सो आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट दिस वुड अमाउंट टू थेफ्ट एट देयर एक्सिस्टेंस डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड मूवमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बबीता हैड अ ह्यूज फैक्ट्री, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जहां पे हो रही थी वहां पे उतनी सफिशिएंट नहीं होती थी, एंड दिस इज द रीजन उसने क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है उस पर अपना वायर लगा के बिजली चुराने की कोशिश की। अब तुम कहोगे कि बिजली कोई प्रॉपर्टी है क्या? ऑफ कोर्स है, हाथ में लेके नहीं घूम सकते हैं, बट प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। और अगर उसको पता था कि जो वो कर रही है वो इलीगल काम है, और जब वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने उसको पकड़ लिया, तो विल शी बी हेल्ड लाइबल फॉर थेफ्ट? यस, शी विल बी हेल्ड लाइबल फॉर थेफ्ट। सो नॉट लाइबल हटा दो, फिर ये वाला भी बोल रहा है नॉट लाइबल, ये भी नॉट लाइबल। ये बोल रहा है बबीता विल बी हेल्ड लाइबल एज देयर एक्सिस्टेड अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन अलोंग विथ wrongful लॉस टू द गवर्नमेंट। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द पैसेज। दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्पिता को बोला है कि ऑर्डर्ड गिव्स एन ऑर्डर टू अर्पिता टू अटैच हर ऑर्नामेंट्स अगेंस्ट द डेट्स ऑफ मीता। उसे मीता से कुछ लोन ले रखा होगा, वो लोन चुका नहीं पाई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई तुम अपनी प्रॉपर्टी मीता को दे दो। तो उसने बोला कि ठीक है मैं अपनी प्रॉपर्टी दे देती हूँ, और प्रॉपर्टी को थोड़े टाइम के लिए मीता के पास गिरवी रख देती हूँ एक तरह से, और जो लोन का अभी तक पेंडिंग अमाउंट है वो मैं इकट्ठा कर लूंगी, और मीता को वो देकर अपनी जो ज्वेलरी है वो छुड़वा के ले आऊंगी। ऐसा करते हैं ना जनरली, तुमने सुना भी होगा, ठीक है। अब जब अर्पिता की प्रॉपर्टी मीता के पास थी, तो अर्पिता को किसी की शादी में जाना था, तो वो गई मीता के पास कि ज्वेलरी मुझे दे दो ताकि मैं शादी में पहन के जा पाऊं।
बट वहां पे मीता थी नहीं, तो उसने क्या किया, बिना मीता के परमिशन के वो ज्वेलरी उठा ली और शादी में पहन के चली गई। यहां दिया है, शी विजिट्स Mita to make a request to allow her to take the ornaments for the purpose of marriage. On realizing that Mita is not at home, she takes away the ornaments, wear them at the wedding. और जब उसको पता चला मीता को कि वो उठा के ले गई ये ज्वेलरी, क्या वो अर्पिता को लाइबल कर सकती है? यस, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप से कोई मतलब नहीं है। वी ऑलवेज एंड ऑलवेज लुक फॉर द पोजेशन, और यहाँ पे पोजेशन किसका था? अर्पिता का, सॉरी मीता का। और मीता के पोजेशन में होते हुए अर्पिता ने प्रॉपर्टी अपने मर्जी से उठा के ले गई है विदाउट द परमिशन ऑफ मीता। और अगर परमिशन नहीं ली थी मीता से तो फिर वो थेफ्ट के लिए लाइबल हो जाएगी। सो अर्पिता नॉट लाइबल वाले दोनों हटा दो। डी बोल रहा है अर्पिता इज लाइबल एज द ऑर्नामेंट्स वर टेकन आउट ऑफ पोजीशन ऑफ मीता। ठीक है, अर्पिता इज लाइबल एज ऑल essentials ऑफ आर satisfied टू बी कंसिडर्ड इट एज थेफ्ट। यस, यहाँ पे सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सो answer would be option A. Also, electricity is a movable property. Electricity moves from one place to another through wires. अच्छा, हाथ से मूव नहीं करते हो, ऐसे धक्का मार के ऐसे दूर नहीं कर सकते हो, but electricity does move. Okay. Okay. So I'm going to stop the session here, and I will look forward to more such marathon session. The next session would be, I think, maths. So Arvind sir would be joining us shortly, and it was nice having you all here. So thank you and have a good day.
तो हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ अरविंद भार्गव। क्या हाल है सब लोगों के? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून। So I think everything is fine. Shall we start, everyone? सो गाइस, आई होप आप सब लोगों ने 21 के लिए 2021 के लिए जो अपना एग्जाम होने वाला है क्लैट का, उसके लिए प्रिपरेशन आप सब लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। और उसी के रिगार्डिंग आज का अपना कंप्लीट जो मैराथन सेशन है वो उसी को देखते हुए है कि जो क्लैट 2020 से अपनी लर्निंग्स हैं, जो अपन ने सीखा है फ्रॉम क्लैट 2020, उनको अपन जल्दी से कैसे यूज करें 21 की प्रिपरेशन में। और उसी सबको देखते हुए अपन ने एक मैराथन सेशन जो आज का प्लान किया है वो इसी के लिए किया है कि आप लोगों को एक अंदाजा लग जाए प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त कि जब आप में से इवन सभी लोग और मैक्सिमम लोग अभी प्रिपरेशन को जस्ट स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो हो सकता है पहले से लास्ट ईयर से ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जस्ट अभी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आपके पास वो सारे पॉइंट्स, वो सारे क्लू पॉइंट्स, वो सारी मास्टर कीज अगर आपके पास अभी होंगी कि यार ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जहां जनरली लोग मिस्टेक करते हैं, वो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके अराउंड मुझे पढ़ाई करना है, वो अगर आपको अभी मालूम चल जाए, सो थ्रू आउट द सेशन आपकी प्रिपरेशन उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो अपने मैराथन सेशन का जो एक विजन है वो यही है कि आपको एक पढ़ने का रास्ता मिले कि यार आपको ये सारी चीजें, इसी के अराउंड जो चीजें होंगी वो चीजें आपको अपनी प्रिपरेशन में कवर करना है। तो अपने सेशन का जो पर्पस है वो सिंपली यही है। ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी हों, जस्ट स्टार्ट कर रहे होंगे कई लोग प्रिपरेशन को। तो अभी से अगर आपको एक सही रास्ता मिल जाएगा, एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी, तो यहां से फिर आगे बढ़ना आप सबके लिए बहुत आसान होगा। तो आज का अपना जो पॉइंट है वो मेनली यही है। इसी को देखते हुए अपन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसके आसपास के बहुत सारे क्वेश्चन आपको खुद से करना है। मतलब अपन जो अपने सेशन में करेंगे वो तो बिल्कुल करेंगे ही, बट आपको खुद से भी सेशन के बाद, मैराथन के बाद अपनी प्रिपरेशन में अपन जो काम कर रहे हैं उसी के अराउंड और बहुत सारी चीजें आपको करना है। लेकिन आपको एक रास्ता मिलेगा, एक अंदाजा लगेगा कि अच्छा ये सारी चीजें शायद मेरे एग्जाम में हो सकती हैं, इतने टाइप की चीजें शायद मेरे सिलेबस का पार्ट हो सकती हैं। तो आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको इसी के अराउंड की सारी चीजें पढ़ना है। सो अपन क्वेश्चंस को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चंस आपके पास जो राइट में आपको पीपीटी स्क्रीन दिख रही है वहां आपके पास क्वेश्चंस आते जाएंगे। और आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है अपना लीगल एज का, उस पर आपको इंफॉर्मेशन शेयर की है। एक पीडीएफ फाइल शेयर की है मैंने अभी, ठीक है, कुछ टाइम पहले। उसमें वो सारे ग्राफ्स हैं जिसको अगर किसी को थोड़ा बहुत रीड करने में अगर हो सकता है स्क्रीन पे दिक्कत हो तो वो वहां से भी क्या कर सकता है, ग्राफ्स को देख सकता है टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, बाकी यहाँ तो आपको क्वेश्चन सारे दिखेंगे ही, बट कुछ ग्राफ्स की इंफॉर्मेशन मैंने आपको वहां भी शेयर की है जिससे आप वहां से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो शैल वी स्टार्ट एवरीवन? बिल्कुल। आज अपन डेटा इंटरप्रिटेशन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो क्लैट के लिए कोर सेक्शन है उसी की अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए जो अपने पास टाइम लिमिट है उसके अंदर। सो गाइस, फर्स्ट ग्राफ आपके सामने। ग्राफ को अच्छे से रीड करना है, ग्राफ को अच्छे से रीड करना है। इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से देखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन में गिवन है।
तो सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ना, डायरेक्शन मिस मत करना। कितने लोगों की जनरली आदत होती है यार डायरेक्शन को तो क्या रीड करना, उसमें तो वही सब लिखा होता है जो हमने हर बार हर एक ग्राफ के अंदर देखा होता है। ठीक है, तो डायरेक्शंस में कई बार बहुत काम का डेटा भी होता है जो क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है, तो डायरेक्शंस को मिस करने की गलती मत करना। क्या बोल रहा है डायरेक्शन में? स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ एंड टेबल और आंसर द क्वेश्चन। फिर उसके नीचे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन 5 डिफरेंट बैंक्स ए बी सी डी ई। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, अपने आज के जो सारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो क्लैट 2020 की लाइन पर हैं, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन क्लैट 2020 में पूछे थे उसी टाइप के क्वेश्चंस कुछ अपन आज कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आज के लिए। ठीक है, 5 बैंक्स ए बी सी डी और उनके एम्प्लॉयज का डेटा आपके पास गिवन है। सो टोटल एम्प्लॉयज का डेटा आपके पास क्लियरली गिवन है, ए बी सी डी ई, दीज आर 5 बैंक्स। फिर उसके नीचे एक टेबल बनी हुई है, दिख रही है सबको? टेबल में क्या है? रेशो ऑफ मेल टू फीमेल, रेशो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज, बैंक वाइज मेल और फीमेल का डेटा गिवन है। ठीक है, तो बच्चों एक बात आप सबको इतनी इंफॉर्मेशन देखकर समझ आ रही होगी कि यार टोटल एम्प्लॉय है, मेल और फीमेल का रेशो है, तो मेल और फीमेल को डिवाइड भी करना पड़ेगा टोटल से। ये वाली बात समझ में आ रही है? जो रेशो गिवन है उसके अकॉर्डिंग मेल और फीमेल को क्या भी करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा जो डेटा आपके पास ऊपर गिवन है। तो सबसे पहला टास्क आप सब लोग यही करेंगे कि जो टोटल एम्प्लॉयज हैं उनको मेल और फीमेल में डिवाइड करो। जो आपके पास टोटल डेटा गिवन है, आगे क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले यही काम अपन को करना है कि अपन सबसे पहले क्या करें, उस डेटा को डिवाइड कर दें इन द मेल एंड फीमेल। बैंक ए total number is 1520, बैंक बी total number is 1680, बैंक सी 1460, बैंक डी 1380, बैंक ई 1420, बैंक ई हाउ मच? 1420। ये डेटा गिवन है। और मेल एंड फीमेल के रेशियोस आपके पास गिवन है। मेल एंड फीमेल का रेशियो क्या गिवन है? 13:6। देखना, एक का मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल 1520 ए के लिए टोटल है, मेल एंड फीमेल का रेशो कितना है बेटा? 13:6। ठीक है, सो 13 पार्ट्स आर मेल एंड 6 पार्ट्स आर फीमेल, सो द टोटल पार्ट्स आर 19 पार्ट्स, और यू कैन से मेल्स आर 13x और 6x, so the total is 19x equals to 1520, सो x इक्वल्स टू 1520 अपॉन 19। ये वन पार्ट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब इस वन पार्ट में से मेल के पास कितने हैं? 13, तो जो भी वन पार्ट की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय 13 तो मेल्स आ जाएंगे, और फिर जो वन पार्ट की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय फीमेल तो नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, सो दिस इज 141040 एंड फीमेल्स आर 480। चेक करना, आई थिंक ये आ रहा होगा, 1040 and 480. B, male and female 4:3, 960, 720। जल्दी डिवाइड करना बेटा क्योंकि फिर अपन को क्वेश्चंस पर फोकस करना है।
9 and 11, male and female. So this is 657, and next one is 73 into 11. How much? 803. Male and female, 1380. 10 ratio 13. So the one part is 60. So this is 600, 780. E 1420, 13 ratio 7. So one part is 20 से divide करो. This is 71. So 923 and 497. So this is the number of male and female. Information clear है सबको यहाँ तक? Information clear है? इसका वन पार्ट कितना आएगा? 80. So males are 13x. So 13 into 80, 1040. This is 6 into 80. So 480. So I think clear. सबको डेटा काउंट कर पाए? एवरीवन रिप्लाई. क्वेश्चंस दिखाएं. So these are the 5 questions. 1, 2, 3, 4, 5. क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करना. कुछ टाइम पहले मैं आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए. खुद से ट्राई करो. कैन यू आंसर क्वेश्चन नंबर 1? What is the total number of male employees taking all the banks together? Total number of male employees. बाकी लोग जल्दी रिप्लाई. कुछ लोगों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 तो सिंपल है एकदम. क्या फाइंड करना है? सम. क्वेश्चन नंबर 1.
total male employees. So total male employees 1040, ए के लिए 960, 657, A B C, and D is 600 and 923. So it is how much? 4180. So option D is correct. Second, average of female employees. Second question में यही पूछ रहा है आपसे. Average number of female employees taking all the banks together. Average. कैसे find करते हैं भाई average? Sum of the observation divided by number of observation. तो टोटल फीमेल का एवरेज यही फाइंड करना है. टोटल फीमेल का एवरेज. सो दिस इज 480, 720, 803, 780 एंड 497. कैन यू ऐड? सम कितना आएगा? सो आई थिंक दिस इज 3280. चेक एवरीवन, क्या ये करेक्ट है? डिवाइड बाय 5. टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 एंड 5. सो 5 6 30, 2 remaining 28, 5 5 25 or 5 6. So this is 656. So correct answer is option C. One and two clear, everyone. Next one, third. Third is approximately what percent is the male employees A and C more than female B and D? Male employees A and C, male employees A and C कितना ग्रेटर है किससे? फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ बी एंड डी. यही पूछ रहे हैं. मेल एम्प्लॉयज ऑफ बैंक ए एंड सी हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ बी एंड डी. सो सिंपली आपको क्या फाइंड करना है? परसेंट चेंज. क्या फाइंड करना है? परसेंट चेंज. कैन यू से व्हाट इज परसेंट चेंज? यस, डिफरेंस. डिफरेंस upon previous value, old value, multiply by 100. So what is the female B and D? Female of B and D, this is 1500. What is the male employees of A and C? Male employees A and C, I think 1697. Can you find percent change between these two? So difference is 197 around कुछ. प्रीवियस वैल्यू कंपेयर किससे करना है? फीमेल ऑफ बी एंड डी. तो अपॉन में क्या आएगा? 1500 मल्टीप्लाई बाय 100. जीरो एंड जीरो कैंसल. So divide by 15, 197. So this is 13% around approx value. याद रखना डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में अप्रोक्स वैल्यू बिल्कुल आंसर का पार्ट होंगे. अप्रोक्स वैल्यू बिल्कुल आंसर का पार्ट होंगे. कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्ट आंसर आपका ऑप्शन में हो. ठीक है, उसका जो नियरेस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू जो भी होगी वो आपके ऑप्शन का पार्ट जरूर होगी. So I think third clear. What about question number 4 and 5? Question number 4 and 5. 4.
रेशियो ऑफ फीमेल डी टू ई, फीमेल एम्प्लॉइज, रेशियो फाइंड करना है बैंक डी एंड ई. So female in D, it is 780. Female in E 497. So I think cancel होना सेम वैल्यू से पॉसिबल नहीं लग रहा. चेक करो जरा. So what is the answer? फोर्थ के लिए, फोर्थ के लिए क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. When we choose option none of these, when your answer not in the option, then you go for the none of these option. So guys, last and next question number 5. Approximately what percent number total employee of bank C more than bank D? यहां भी कंपैरिजन ही आपसे पूछ रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? टोटल एम्प्लॉय इन सी परसेंट ग्रेटर देन टोटल ऑफ डी. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सी इज व्हाट? सी का टोटल 1460, डी का टोटल 1380. ये गिवन है. सी का टोटल 1460, डी का टोटल कितना है? 1380. सो सी इज हाउ मच परसेंट मोर देन डी? सिंपली क्या फाइंड करना है? अगेन आपको परसेंट चेंज फाइंड करना है, जैसा आपने यहां फाइंड किया था. क्या फाइंड करना है? परसेंट चेंज. सो व्हाट इज द डिफरेंस? परसेंट चेंज डिफरेंस 80 1380 previous multiply by 100. So 0 and 0 cancel. 400 upon 69. So approx value क्या आ सकती है? 6%. So answer is option B. Answer is option B. So all questions are doable. Move करें for the next graph. Can we move for the next graph? Everyone? All 5 questions of the first graph बहुत सिंपल तो नहीं बोल सकते, बट उतना काम करना था, लेकिन डुएबल थे. देखना, डुएबल और सिंपल क्वेश्चन में डिफरेंस होता है. सिंपल का मतलब जो सबके लिए सिंपल हो. डुएबल का मीनिंग जिसने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो रेगुलर चीजों को समझ रहा है, वो अगर क्वेश्चंस को कर पा रहा है, दैट मीन्स क्वेश्चंस आर डुएबल. सिंपल का मीनिंग ऐसा है, वो हर किसी के लिए सिंपल होते हैं. तो फर्स्ट ग्राफ सिंपल नहीं बोल सकते, डुएबल जरूर था. सो मूव करते हैं नेक्स्ट पर. सी द ग्राफ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10. डायरेक्शंस को अच्छे से रीड करना. Following line graph shows the total number of items sold by different shops from the January to June 19. Different items, जो articles, number of articles जो sold सेल किए from the book shop A, B, C, D and E और F. यहीं तक A to F. Total item sold. एंड एक और आपके पास नीचे एक ग्राफ और है जिसमें क्या गिवन है? टोटल नंबर ऑफ कूलर सोल्ड.
ठीक है। तो आपके पास जो फर्स्ट वाला ग्राफ है लाइन ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ। टू लाइन ग्राफ्स उसमें गिवन है, फर्स्ट फॉर द टोटल आर्टिकल्स एंड सेकंड फॉर द नंबर ऑफ कूलर्स। निखिल, इनिशियली बेटा बिल्कुल आप सब लोगों को कुछ चीजों में टाइम लगेगा, ये मान के चलना, बट जब रेगुलर प्रैक्टिस होती जाएगी तो बहुत सारी चीजें आप ओरली कैलकुलेट कर पाओगे। अभी हर चीज के लिए आपको नोट करना पड़ता है, हर चीज के लिए आपको पेन पेंसिल की जरूरत पड़ती है, बट जब वो वही चीज रेगुलर प्रैक्टिस पर होती जाती है तो कितने ही चीज सिर्फ देखकर ओरली मन में ही कैलकुलेट करने लगते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बट वो प्रैक्टिस करते करते होता है। इनिशियल डेज पर आपको हर चीज नोट करनी पड़ेगी, हर चीज आपको लिखनी पड़ेगी, और यही वो तरीका है जहां से हर कोई आगे बढ़ता है। शुरू में टाइम लगता है, बिल्कुल लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका पेपर आज नहीं है, आपका पेपर आज से 6-7 मंथ्स के बाद है, ठीक है। तो इतना टाइम आपके पास बहुत अच्छा टाइम है ये, तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और बेटा एक टेबल नीचे भी गिवन है, क्या बता रहा है, रेशियो ऑफ द डिफेक्टिव कूलर्स टू डिफेक्टिव एसी। कूलर और एसी के जो आर्टिकल्स आपने सेल किए उसमें डिफेक्टिव कितने थे उसका रेशियो गिवन है। और बीच में एक रेड कलर वाली जो लाइन है वो दिख रही है आपको दोनों ग्राफ के बीच में, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू कूलर प्लस एसी प्लस अदर्स, मतलब तीन टाइप के आप आर्टिकल सेल करते हैं टोटल, कूलर, एसी, अदर। अदर में कुछ भी हो सकता है फिर वो। तो सबसे पहले तो इससे एक टेबल प्रिपेयर कर लो, इस डेटा को एक जगह नोट कर लो, इस डेटा को एक जगह नोट कर लो। मेरे पास थोड़ी बोर्ड पर जगह कम है इसलिए मैं नोट नहीं कर रहा, बट आप लोग जो नोटबुक में लिख रहे हैं आपके पास इनफ स्पेस होगा, तो इस टाइप से एक टेबल बनाओ। शॉप ए, टोटल फॉर एग्जांपल 600, कूलर, नीचे वाला जो लाइन ग्राफ है वो कूलर का नंबर दिखा रहा है 200, डिफेक्टिव कूलर एंड एसी का रेशो, डिफेक्टिव कूलर एंड एसी का रेशो, डिफेक्टिव कूलर एंड एसी का रेशो। जैसे मैंने ए के लिए प्रिपेयर किया, प्रिपेयर फॉर बी सी डी ई एंड एफ, इस टाइप का कंप्लीट डेटा नोट करो पहले। अभी बच्चों इनिशियल डेज पर आपको बिल्कुल नोट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको डेटा को हैंडल करने की उतनी आदत नहीं है, ठीक है। तो हर चीज को देखकर सॉल्व करने से अच्छा है अपन नोट करके थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं उसके साथ, फिर अपन इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये टेबल जरूर प्रिपेयर करना फॉर दी शॉप A to F, जिससे आपको बार बार ग्राफ पर ना जाना पड़े, आपकी नोटबुक पर ही कंप्लीट डेटा हो जाए। सो आई एम गिविंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन 6, 7, 8 ऑन द स्क्रीन। बच्चों यहाँ डेटा ज्यादा है, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना। डिफेक्टिव की बात करेगा, नॉन डिफेक्टिव की बात करेगा, टोटल आर्टिकल्स, कूलर, एसी, अदर, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर किसी को कंफ्यूजन यहाँ होना बहुत आसान है, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहना। क्वेश्चन नंबर 6,
ये सारे ग्राफ्स मैंने लीगल एज के टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हुए हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर वहां से आप लीगल एज का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको ये सारा डेटा वहां से मिलता जाएगा। और वो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया था। कितनी बार स्क्रीन पर कुछ डिवाइसेस में कहीं देखने पर दिक्कत होती है, किसी की डिवाइस छोटी है, कोई मोबाइल फोन में शायद डेटा देख रहा होगा, तो इसीलिए अपन ने उस पर शेयर किया हुआ है। कैन यू आंसर क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या गिवन है 6 में? SOP A, ratio of the total number of AC to the total number of others 1:3. Total number of non-defective AC is 40. Then total number of defective cooler. तीन इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। क्या? AC टू अदर, इसका रेशो क्या है? SOP A की बात कर रहा है, सबसे पहले तो ये फिक्स करो। SOP A, AC टू अदर, इसका रेशो कितना है? 1:3। सेकेंड, AC प्लस अदर, इसके लिए क्या गिवन है आपके पास? AC प्लस अदर 200 क्या है? कोई डेटा है? हाँ बिल्कुल, कूलर। ए के लिए अगर कूलर देखो तो 200 है, तो AC प्लस अदर कितना हो जाएगा? 400। आपके पास शॉप ए में टोटल आइटम्स कितने हैं? टोटल आइटम्स है 600, जिसमें कूलर का डेटा कितना है बेटा? 200। तो टोटल में से अगर कूलर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? AC प्लस अदर आइटम्स, दैट इज 400। याद रखना, टोटल 3 टाइप्स के आर्टिकल हैं, कूलर, AC, अदर। ठीक है, तो आपके पास कूलर का डेटा 200 गिवन है एंड टोटल आइटम्स आर 600, सो द रिमेनिंग टू इज AC प्लस अदर इक्वल्स टू 400, और ये उसी का रेशो गिवन है। So can you divide AC and other? There is total 4 parts equals to 400. So one part is 100 and 3 part is 300. ठीक है, तो आपके पास AC का नंबर आ गया 100, अदर का नंबर आ गया बेटा 300। अब आपके पास सारी चीजें, तो टोटल AC 100। अब इसमें से नॉन डिफेक्टिव AC कितना गिवन है? नॉन डिफेक्टिव AC, नॉन डिफेक्टिव AC 40। तो डिफेक्टिव एसी कितना हो जाएगा बेटा? डिफेक्टिव एसी 100 टोटल है, 100 टोटल एसी, डिफेक्टिव इज 40, सॉरी नॉन डिफेक्टिव इज 40, तो डिफेक्टिव एसी इज 60। ठीक है, अब डिफेक्टिव एसी आपके पास 60 है। अब क्वेश्चन में एक रेशो और गिवन है, देखो जरा ए के सामने डिफेक्टिव का रेशो क्या गिवन है? डिफेक्टिव का रेशो AC टू कूलर, ये रेशो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन के अंदर मतलब ग्राफ में 2:1। सो AC is 60, if one part is 60 then two part is 120। और आपसे यही पूछ रहा था क्या? डिफेक्टिव AC, यही आपका आंसर है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर कोई बहुत ध्यान से नहीं देखेगा बेटा तो कंफ्यूजन होना बहुत आसान है यहाँ। सो व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 7? कई लोगों ने 7 का आंसर भी दिया है। 7th, total number of other items sold by shop B and shop C is 180। टोटल अदर गिवन है बी एंड सी का, अदर आइटम्स और दिस ऑफ बी एंड सी इज 180, ये गिवन है।
और बी एंड सी का ऑल क्या है? ऑल मतलब सब कुछ, कूलर, एसी और अदर। तो बी और सी का टोटल देखना बेटा कितना आ रहा है, आई थिंक 700, क्योंकि बी का है 400 और सी का है 300। चेक करो। तो आपके पास अदर्स वाले आइटम गिवन है, टोटल गिवन है। तो आप इन दोनों से बाकी दो क्या क्या बचे? कूलर एंड एसी फॉर द शॉप बी एंड सी। 700 में से क्या माइनस करें? 180। सो इट इज 520। ये आ गया कूलर और एसी का डेटा, दोनों का सम। अब कूलर का डेटा आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, याद रखना क्वेश्चन में कूलर के लिए भी डेटा गिवन है। तो कूलर बताओ दोनों के लिए कितना है? दोनों मतलब बी एंड सी। बी एंड सी। तो कूलर बी एंड सी 150 और 80 दिख रहा है सबको, 150 और 80। सो इट इज 230। अब बच्चों ये वाली जो वैल्यू थी ये सम थी कूलर और एसी का, जिसमें कूलर इंडिविजुअल कितना आ गया? 230। कैन यू फाइंड एसी फॉर बी एंड सी? यस, 520 माइनस 230, सो इट इज 290। अब आपके पास आ गया एसी, कूलर, अदर, सब कुछ आ गया बी एंड सी के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिफरेंस। किसका डिफरेंस? एसी, बी एंड सी और ई एंड एफ, कूलर। किन दो चीजों का डिफरेंस पूछ रहा है? देखना आपका क्वेश्चन क्या है। ये तो आपका जो गिवन डेटा था वहां से निकाला। क्वेश्चन क्या है आपका? डिफरेंस। किस किस का डिफरेंस सर? दो चीजों का डिफरेंस। फर्स्ट क्या है? एसी ऑफ बी एंड सी, जो हम ऑलरेडी ला चुके। एसी बी एंड सी इज 290। एंड कूलर ऑफ ई एंड एफ, कूलर ऑफ ई एंड एफ। ये डेटा बेटा ग्राफ में दिया हुआ है। तो कूलर ई एंड एफ कितना है? 400 एंड 550। 400 एंड 550 ये ग्राफ में दिया है, मैं यहाँ लिख भी रहा हूं, ग्राफ में दिया हुआ है। दिस इज 950। तो बताओ दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? कैन यू आंसर डिफरेंस? 0, 6, 8 माइनस 2 6, 660। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बस इंफॉर्मेशन ज्यादा है जिसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत इजीली हो सकता है, लेकिन अगर कोई कॉन्सेंट्रेट रहकर अगर उस पर काम करेगा तो कहीं भी ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चेक करो सब लोग। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 7 ऑप्शन ए 660। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 एवरीवन? इफेक्टिव एसी शॉप डी। शॉप डी की बात हो रही है। अच्छा एक चीज और नोटिस किया करो कि कौन से शॉप की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर। और अगर बीच में कोई नई शॉप अगर नहीं आई है तो हर जगह शॉप को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8।
क्या गिवन है 8 में? शॉप डी की बात हो रही है सबसे पहले तो, हर जगह। ठीक है। डिफेक्टिव एसी, डिफेक्टिव एसी इज एक्स, डिफेक्टिव एसी, डिफेक्टिव एसी एक्स, ये गिवन है। और अदर 4x, ये भी गिवन है। ठीक है। नॉन डिफेक्टिव कूलर, नॉन डिफेक्टिव कूलर 220। क्या फाइंड करना है? 4x की वैल्यू फाइंड करना है, ये अपना सिंपली क्वेश्चन है। 4x की वैल्यू फाइंड करना है। डिफेक्टिव एसी, अदर नॉन डिफेक्टिव कूलर 4x। अब बच्चों x क्या है? डिफेक्टिव एसी या फिर अदर। नॉन डिफेक्टिव कूलर आपके पास 220 गिवन है। ठीक है। अब ये देखो शॉप डी में आपके पास क्या क्या है। शॉप डी में टोटल आइटम्स कितने हैं बेटा? टोटल आइटम्स 500। टोटल आइटम्स 500। इसमें कूलर भी गिवन है। ग्राफ में दो चीजें हैं ना, टोटल और कूलर। कूलर कितना है? 300। अब कूलर में अगर 300 है तो आपके पास नॉन डिफेक्टिव कूलर्स हैं। नॉन डिफेक्टिव कूलर्स कितने? नॉन डिफेक्टिव कूलर्स 220। तो क्या डिफेक्टिव कूलर्स ला सकते हो? डिफेक्टिव कूलर्स, यस, 80। तो डिफेक्टिव कूलर आ गए 80। ठीक है। डिफेक्टिव कूलर आ गए 80। और डिफेक्टिव कूलर और एसी का रेशो भी गिवन है। कहां सर? ग्राफ में। डिफेक्टिव कूलर और एसी क्या रेशो गिवन है? 4:1। डिफेक्टिव कूलर कितने? 80। If 4 ratio is 80, then what about 1 ratio? It is 20. So defective AC is 20. Defective AC is 20. ठीक है। डिफेक्टिव AC is 20. So defective AC, यहां देखना बच्चों सब लोग, defective AC is 20 and this is given X। क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है? X. So what about 4X? It is 80। तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था और कुछ नहीं था। फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। टोटल 500, कूलर 300, नॉन डिफेक्टिव 220, सो द रिमेनिंग डिफेक्टिव 80। रिमेनिंग डिफेक्टिव 80 और कूलर और एसी का रेशियो गिवन होता है डिफेक्टिव का 4:1। इफ 4 रेशियो इज 80 देन 1 रेशियो इज 20। सो दिस इज डिफेक्टिव एसी एंड क्वेश्चन के अंदर डिफेक्टिव एसी ऑलरेडी कितना गिवन है? एक्स। तो 4x कितना हो जाएगा? 80। So I think clear. Try question number 9 and 10. Try question number 9 and 10. 9 में कौन से शॉप के लिए बात हो रही है? इट इज फॉर शॉप एफ। और आगे कहीं शॉप सी के लिए भी बात होगी। याद रखना ग्राफ में दो चीजें हैं, टोटल और कूलर। दो डेटा गिवन है और एक रेशो भी गिवन है, डिफेक्टिव कूलर टू एसी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9।
शॉप एफ, टोटल इज, एफ का डेटा लिखते हैं, टोटल इज 700, कूलर इज 550, अदर का डेटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है फॉर 10% ऑफ टोटल, सो 10% ऑफ 700 इज 70। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि जो अदर्स आइटम है दैट इज 10% ऑफ द टोटल आइटम्स। देखो जरा गिवन है, फिर इसके आगे नंबर ऑफ एसी इन शॉप एफ, अदर इन सी, नंबर ऑफ एसी इन शॉप एफ इक्वल्स टू अदर इन सी, ये गिवन है। ठीक है, अब एफ के लिए टोटल आपके पास है, कूलर आपके पास है, अदर आपके पास है, तो आप एसी फाइंड कर सकते हो ना एफ का, एसी इन एफ, बिल्कुल 700 में से कूलर और ये दोनों माइनस कर देते हैं, सो दिस इज 620 एंड 80, so AC in F is 80, this is others in C। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है AC in C is what percent of cooler in C, AC in shop C, so AC in shop C, AC, अब C के लिए बात करते हैं, ये अपना क्वेश्चन है, शॉप सी, ये अपना क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड करना है, टोटल कितना है बेटा सी में, सी का टोटल 300, कूलर कितना है 80, ये गिवन है वही, अदर ऑलरेडी आ चुका, अदर ये भी 80 है, तो कूलर है अदर है, एसी आ सकता है क्या, बिल्कुल 300 माइनस 80 प्लस 80, सो दिस इज 160, माइनस करो तो 140, तो एसी इन सी, एसी इन सी इज 140, कूलर इन सी इज 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंट वैल्यू फाइंड करना है, सो दिस इज 175%, विच ऑप्शन, ऑप्शन डी, ये आपका क्वेश्चन था। तो आपको एफ के लिए डेटा देखना है और शॉप सी के लिए डेटा देखना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज नंबर ऑफ एसी ऑल दी शॉप 140, तो नाइन्थ भी एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं था, टेंथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज गिवन है, एवरेज ऑफ एसी ऑल, ये गिवन है 140, अगर बच्चों एवरेज गिवन है तो आप टोटल फाइंड कर सकते हो, सम फाइंड कर सकते हो, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, so this is 140 into 5 observation, so total is a to e 6 है, sorry, so 14 6 84, so there are total 840 AC in all shops। देखो जरा, तो एवरेज से क्या फाइंड कर लिया आपने, टोटल नंबर ऑफ एसीज इन ऑल दी शॉप, ये फर्स्ट हाफ लाइन अपन ने रीड की थी। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10,
डिफरेंस फाइंड करना है, कूलर ऑल और अदर्स ऑल। क्या फाइंड करना है? डिफरेंस। किस किस का डिफरेंस फाइंड करना है, यहां लिख लेते हैं। कूलर ऑल एंड अदर, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। कूलर बेटा आप इजीली ला सकते हो, कूलर आप इजीली ला सकते हो, क्योंकि कूलर का डेटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो टोटल कूलर ऐड करके बताना कितना आएगा। टोटल कूलर 1680, यही आ रहा है। टोटल ऑल कितना है? ऑल मतलब समझ रहे हैं, एसी, कूलर और अदर। तो ऐड करो सबका, सो इट इज 3300। तो आपके पास ऑल है, कूलर है, एसी है, अदर फाइंड कर सकते हो बिल्कुल। 3300 में से कूलर 1680 एंड एसी, एसी इज टोटल ऑल एसी 840, माइनस करो कितना आएगा। 3300, 16 8 24 2520, so it is 780. So what is the difference between 1680 and 780? So difference is 900. Correct answer is option C. So I think clear है सबको। क्वेश्चन नंबर 10 इजीली डुएबल था। क्वेश्चन नंबर 10 इजीली डुएबल था। Can we move to next, everyone? See the next graph related to mensuration, or you can say area and perimeter. Next graph related to area and perimeter. Read question number 11 to 15. Dimensions of the base of a house are 20 meter and 15 meter, and the height is 3 meter, in which there are two rooms, one hall, one storeroom, and one kitchen. And the cost for the painting outside 210 rupees per square meter, and inside is rupees 150 per square meter. So guys, one simple point इन द हाउस, जो आपके रूम्स और किचन स्टोर रूम जो सब कुछ गिवन है, उनके डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ के चेंज होंगे। हाउस में कहीं भी हाइट चेंज नहीं होती भाई। हाइट तो बाय डिफॉल्ट कैसी रहती है, थ्रू आउट द हाउस सेम रहेगी। ये वाली बात समझ में आ रही है। तो हाइट सिंपली एक जगह मेंशन की है, बाकी कहीं भी हाइट नहीं है। सारे जो रूम्स, किचन, हॉल, जो सब कुछ उसके अंदर गिवन है, उन सब की हाइट क्या रहेगी, सेम।
तो ट्राई टू आंसर क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। थोड़ा सा ओरिएंटेशन आपका डिफरेंट होगा इन क्वेश्चंस में। अभी जो अपन ने लास्ट टू सेट्स किए वो परसेंटेज रेशो उन सब के अराउंड थे, बट ये वाला जो सेट है आपके सामने, ये एरिया एंड पेरीमीटर और मेंसुरेशन के अराउंड है। याद रखना, आउटसाइड अगर पेंट करना है उसकी कॉस्ट है 210 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, एंड इनसाइड वाली रेट, अंदर अगर पेंट करना है घर के या जो भी रूम किचन जो भी गिवन है, उसका रेट है 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, बहुत सारे लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है, बाकी लोग भी जल्दी से बताइए। तो आई थिंक सबके डायमेंशंस या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम आपके पास सामने ही गिवन है, और आगे आने वाली स्लाइड्स में भी गिवन होगा। तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक पॉइंट याद रखना, हाइट सारे डायमेंशंस में सेम रहेगी, केवल क्या चेंज होगा, लेंथ और ब्रेथ। इससे पहले एक पॉइंट और, फॉर एग्जांपल ये आपका एक रूम है, ये आपका एक रूम है, देखना इधर, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है, थर्ड डायमेंशन। तो इसकी वॉल का एरिया जब निकालोगे, इन दोनों वॉल, वॉल वन, वॉल टू, तो एरिया ऑफ, देखना सब लोग ये पॉइंट, या डाउट आएगा लोगों को, एरिया ऑफ वॉल वन एंड टू। सो लेंथ एंड हाइट, ये तो वॉल वन का है, सेकंड वॉल, लेंथ एंड हाइट, so the total area of wall 1 and 2, 2LH, exact same, wall 3 and wall 4, area of wall 3 and 4, B and H, plus B and H, so this is 2BH। तो याद रखना, जिस रूम में भी आप बैठे हुए हैं वहां भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपके सामने एक वॉल है, उसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो वहां ब्रेथ या लेंथ कुछ एक होगी एंड हाइट होगी उसकी, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से रेक्टेंगल है जो आपके सामने है, या रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, वहां भी साइड इनटू साइड होता है। तो एक आपके पास डायमेंशन हाइट होती है वॉल में, दूसरी ब्रेथ या लेंथ होती है। सो आई थिंक ये वाला पॉइंट सबके दिमाग में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, तो आप एरिया फाइंड कर पाओगे इजीली। क्लियर है ये वाला पॉइंट? वॉल का एरिया निकाल सकते हैं सब लोग, लेंथ या ब्रेथ बट हाइट के साथ, और सब में टू आएगा। क्यों टू आएगा? क्योंकि सिमिलर वॉल टू होती हैं, सेम वॉल, आमने सामने वाली, जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11, आउटसाइड पेंट करना है, इसी के कॉस्ट की बात कर रहा है, ठीक है, और कंप्लीट हाउस के लिए बात कर रहा है। कंप्लीट हाउस, कंप्लीट हाउस के डायमेंशन क्या थे? 20, 15 और 3। तो बेटा सबसे पहले तो एरिया निकालेंगे, और एरिया के बाद उसकी जो रेट है, रेट ऑफ पेंट, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आउटसाइड का एरिया क्या होगा? बिल्कुल 2LH, अभी मैंने लिखा था 2BH, और रेट क्या है? आई थिंक 210, यही गिवन है, चेक करो। बिल्कुल, टू कॉमन आ सकता है, हाइट कॉमन आ सकती है, सो व्हाट इज हाइट? 3। नेक्स्ट L एंड B, लेंथ कितनी है बेटा? 20,
and 15, and this is 210. So 236, 35, 210. चेक करो कितना आएगा. 44 100. So I think it is option C. Check everyone. Ratio of the total cost of painting outside surface of the wall, inner surface of the wall. अब आउटसाइड के लिए तो आपके पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया. आउटसाइड की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में. अब अंदर के लिए इनर कॉस्ट पेंट जो करना है, उसके लिए अगर अपन देखें तो सबसे पहले वही उसका जो एरिया होगा वो इंटी रेट ऑफ पेंट. अब एरिया इनर बेटा अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या है. 2 रूम्स हैं, प्लस एक हॉल है, प्लस 1 स्टोर रूम, 1 किचन. ये सब कुछ है, इसके वॉल की बात होगी. इनटू रेट ऑफ पेंट इज 150. रेट ऑफ पेंट इज 150. तो 2 रूम्स, याद रखना, चाहे रूम हो, चाहे हॉल हो, चाहे किचन हो, चाहे स्टोर रूम हो, सब में लेंथ इंटू हाइट होता है 2LH प्लस 2BH. क्योंकि सबके वॉल के एरिया तो वही होंगे ना, बस डायमेंशन बदल जाएंगी. कहीं लेंथ 15 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है, बट एरिया निकालते वक्त 2LH प्लस 2BH, इसका बिल्कुल ध्यान रखना. सो 2 रूम्स, 2 रूम्स के लिए क्या करें भाई. 2 रूम्स के लिए 2 रूम, रूम इज 2LH प्लस 2BH. ये तो एक रूम हुआ मल्टीप्लाई बाय 2. 1 हॉल, डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं तो ज्यादा बेटर है. 1 हॉल 2LH 2BH. 1 स्टोर, इसमें भी वही होगा LH और BH. 1 किचन 2LH प्लस 2BH इंटू 150. इंटू 150. इंटू 150. अब देखना इसमें से 2 सब में से कॉमन आ सकता है और हाइट कॉमन आ सकती है. 2 सब में से कॉमन आ सकता है और हाइट कॉमन आ सकती है. सो 2, 3 हाइट और ये 150. अब 2 चला गया सब में से और हाइट चली गई. दिस इज L प्लस बी, हाइट भी बाहर निकाल दी. सो दिस इज L प्लस बी बट मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स. तो रूम के लिए क्या था बेटा, 10 इंटू 15. 2 रूम थे ना, 10 इंटू 5 प्लस हॉल. हॉल के डायमेंशन क्या है, 25. 20 और 5. किचन, किचन की डायमेंशन या हॉल के बाद स्टोर रूम की डायमेंशन 8 प्लस 5. लास्ट किचन 12 प्लस 5. हमने क्या क्या कॉमन ले लिया. 2 सब में था वो कॉमन ले लिया, हाइट सब में थी वो कॉमन ले ली 3, एंड 150. वाई 150, रेट ऑफ पेंटिंग. सो कैन यू आंसर, क्या आ सकता है इनर कॉस्ट. सो 450 इंटू 2 900. 10 5 15 2 30. 30 and 25 55. 55 13
10, 5, 15 और 2 30 plus 25 plus 13 plus 17. So this is 85. So 85 into 900, 76500. ये इनर कॉस्ट आई है। अब आपसे क्या पूछ रहा था? रेशो। आपसे क्या पूछ रहा था? रेशो। आउटसाइड 44 100 अपॉन इनसाइड 76500. So can you answer? 441 अपॉन 765, 9 से डिवाइड करना, 9 4 36, 8 बचेगा, 9 8 72, 4, so 49 upon 85. So correct answer is option B. थोड़ा सा देखकर ध्यान से काम करना पड़ेगा बेटा, इसमें थोड़ा सा देखकर काम करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट भी रहना पड़ेगा इनिशियली आपको। 13 14 15, नेक्स्ट 13 एंड 14। बस ये एक ही क्वेश्चन मुझे लगता है इस ग्राफ में थोड़ा सा लेंदी सा था, बाकी और कोई में मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला। बाकी तो 13 14 15 भी सिंपल से दिख रहे हैं मुझे। आउटसाइड का कॉस्ट कितना था? 44 100। इनसाइड का कितना आया? 76500। जीरोस कैंसल, 441 अपॉन 765, उसके बाद 9 से डिवाइड किया। सो करेक्ट आंसर इज 49 अपॉन 85, ऑप्शन बी। कैन यू आंसर 13? All the walls are painted with a single paint, 150 उसकी रेट है, 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। देन हाउ मच मनी वुड द हाउस ओनर सेव? क्या डिफरेंस आएगा? सिंपली यही तो पूछ रहा है कि अगर कंप्लीट घर को पेंट करें एक सिंगल पेंट से, आउटसाइड वाले की रेट कितनी गिवन है? 210। इनसाइड वाले की रेट कितनी गिवन है? 150। तो बेटा अगर सबको 150 से पेंट कर रहे हो तो इनसाइड वाले पेंट की जो रेट होगी, कॉस्ट होगी, उसमें तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, वो तो ऑलरेडी 150 थी। सर डिफरेंस किस में आएगा? ओनली आउटसाइड में। डिफरेंस किस में आएगा? ओनली आउटसाइड में, क्योंकि वो पहले 210 था, नाउ इट बिकम 150, सो द डिफरेंस इज 60 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो आपको सिर्फ आउटसाइड वाले में डिफरेंस आएगा, इनसाइड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा 13 में। क्यों? क्योंकि उसकी रेट तो पहले से ही उतनी थी, 150। चेक करो। क्वेश्चन नंबर 13, ओरिजिनल अगर देखें, आउटसाइड जो पेंट कर रहे थे उसकी रेट क्या थी? 210। और अंदर अगर पेंट कर रहे हैं उसकी रेट क्या है? 150। तो ये तो ऑलरेडी 150 है, बस केवल इसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। और न्यू नई रेट कितना बता रहा है? 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो बेटा सिर्फ आउटसाइड में डिफरेंस आएगा, इनसाइड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वहां की रेट तो सर पहले से ही 150 थी, ठीक है। सो डिफरेंस इक्वल्स टू आउटसाइड अकेले में डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना आएगा? पहले 210 था, अब 150 हो गया, इनटू एरिया। टोटल कॉस्ट का डिफरेंस बताना है ना, एरिया से भी तो देखना पड़ेगा। 60 तो केवल रेट का डिफरेंस है, टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आएगा? सो दिस इज 60। आउटसाइड का एरिया बेटा पहले से याद है अपन को, 3 इंटू 2 क्या था? 20 प्लस 15,
यही था ना लेंथ और ब्रेथ। 3 to 6, 6 and 35, या 35 into 2 70, 7 3 21 and 6 126। ये डिफरेंस आएगा सिंपली क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग। क्योंकि सर अंदर जो पेंट करना है उसकी रेट तो ऑलरेडी 150 थी, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ओनली आउटसाइड वाले में डिफरेंस आएगा। कैन यू आंसर 14? If the inner surface area of the walls of the hall are painted with paint 250, increase in the cost। अब हॉल के लिए बात कर रहा है और वो भी अंदर का एरिया, जबकि अंदर की रेट कितनी थी बेटा? ओरिजिनल 150। देखना, ओरिजिनल इनर पेंट रेट 150, न्यू रेट 250। सो डिफरेंस इन हॉल, सो डिफरेंस इज 100, बट ये तो वन के लिए है, आपको हॉल के लिए देखना है। तो हॉल के जो डायमेंशंस होंगे वो क्या थे? 2h, और लेंथ और ब्रेथ क्या होंगे बेटा? 20 and 5। सो दिस इज 25, 50 150, 15,000। ये आ रहा है ऑप्शन ए। चेक करो। इज इट क्लियर? आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। हॉल के लिए इनर पेंट के लिए बात कर रहा है बेटा, अंदर आपको पेंट करना है और अंदर की ओरिजिनल रेट 150 थी, नाउ इट बिकम 250, सो द डिफरेंस इन रेट इज 100 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, बट इट इज द ओनली रेट फॉर 1 स्क्वायर मीटर, एंड क्वेश्चन इज फॉर द टोटल कॉस्ट इन द इनर पेंट। ठीक है, तो इनर एरिया आपने पहले फाइंड किया, 2 into LH plus BH, एच कॉमन ले लिया, हाइट सबको ये समझ में आ रहा है 3 कॉमन क्यों ले रहे हैं हर बार? क्योंकि हाइट दोनों में सेम होगी तो कॉमन ले पा रहे हैं। अंदर केवल क्या बचेगा? L+B, लेंथ प्लस ब्रेथ। सो द लास्ट क्वेश्चन 15। कैन यू आंसर 15? 15, 2 liters of the paint needed, paint an area 5 square meter. How much paint should be required for the all walls of the hall of the house at the same rate? 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए कितना पेंट रिक्वायर्ड है? फॉर 5 मीटर स्क्वायर 2 लीटर, एंड 1 मीटर स्क्वायर 2 by 5 liters।
ठीक है, इतने पेंट की रिक्वायरमेंट है फॉर दी 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अब आपको क्या पेंट करना है? टोटल, टोटल एरिया, टोटल एरिया मीन्स आउटसाइड प्लस इनर दोनों। अब बच्चों आउटसाइड वाला एरिया कहां से आएगा? आपके पास ऑलरेडी गिवन है। देखना, आपने जो आउटर कॉस्ट निकाली थी, आउटर कॉस्ट कितनी थी? 44,100। रेट क्या था? 210। भाई रेट से डिवाइड कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। टोटल कॉस्ट यहाँ कितनी आई थी याद करो? टोटल कॉस्ट यहाँ कितनी आई थी? 765,000। याद आ रहा है कुछ? 76500 एंड रेट इज 150। So this is 21, this is 15, 575, 1, 510. So it is total 720 meter square. So पेंट की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है? 1 मीटर स्क्वायर के लिए 2/5 लीटर, तो 720 के लिए मल्टीप्लाई बाय 2/5। सो 515 टू रिमेनिंग 4, 144 अपॉन इंटू 2। सो इट इज 288 लीटर। आंसर ऑप्शन डी। आंसर ऑप्शन डी। चेक क्वेश्चन नंबर 15। चेक क्वेश्चन नंबर 15। हियर एवरीवन, मूव करें नेक्स्ट पर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 16 to 20, यही ये वही क्वेश्चन है जो क्लैट 2020 के कैंसल हुआ था। इसके हालांकि ऑल 5 क्वेश्चंस ही रॉन्ग थे, लेकिन क्लैट ने केवल इसके 3 क्वेश्चंस को क्या किया था? ड्रॉप कर दिया था। मतलब उनको कंसीडर ही नहीं किया था क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर। और 2 क्वेश्चन के कुछ आंसर चेंज कर दिए थे, बट वो 2 क्वेश्चन के आंसर भी गलत थे। ठीक है, कहने का मतलब कंप्लीट सेट रॉन्ग था इन द क्लैट 2020 एग्जाम। जो आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहा है, जो सेट आपको दिख रहा है, सेमी सर्कल वाला जो सेट आपको दिख रहा है, ये वो क्वेश्चन है जो क्लैट 2020 में रॉन्ग हुआ था, क्लैट के साइड से, बच्चों का नहीं, क्लैट के साइड से रॉन्ग हुआ था। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो ड्रॉप करना चाहिए था कंप्लीट 5 क्वेश्चंस, बट क्लैट ने इसके केवल 3 क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए थे। मतलब पेपर 150 का नहीं हुआ था, 147 का हुआ था क्लैट 2020, बिकॉज 3 क्वेश्चंस ड्रॉप हो गए थे मैथ सेक्शन के अंदर। ये 3 क्वेश्चन इसी सेट के थे जो आपके सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, दिखा सबको? तो इसमें आपको एक काम करना है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन इसका सॉल्व नहीं करवा रहा, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व कर दो, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व कर दो। फिर इसके बाद अपन अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे और मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जहां क्लैट ने मिस्टेक की थी, वो पॉइंट बताऊंगा जो क्लैट ने मिस्टेक की थी। फिर आपको वो समझ में आ जाएगा, तो ऑल क्वेश्चंस के मैं आंसर भी आपको बता दूंगा और फिर आप इजीली उसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। चेक करो जरा। 16 to 20, एक फिगर गिवन है, अ गोट इज टाइड टू अ पोल एट पॉइंट ओ। सेमी सर्कल का जो सेंटर है, वहां आपने गोट को क्या किया हुआ है? टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है। ठीक है, अब वो जिस तरीके से चल सकती है उसके अकॉर्डिंग एक क्या बन रहा है? सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है, जो रोप की लेंथ होगी वो क्या होगी? उस सेमी सर्कल की रेडियस। क्लियरली दिख रहा है क्योंकि ओ इज द सेंटर फॉर द सेमी सर्कल, दिखा हुआ है। और एक जरूरी पॉइंट जो क्वेश्चन के अंदर है, क्या? एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर। फोर्थ लाइन पढ़ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
फोर्थ लाइन दिखा, एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर। ये सबसे जरूरी पॉइंट है, एरिया ऑफ द प्लॉट इक्वल टू पेरीमीटर। So guys, very simple. In the semicircle, this is center O, B, A and C. इसी तरीके से कुछ है. So area is pi r square by 2 and semicircle. This is pi r, this is pi r and this is 2r because ये center है and ये radius होगी आपके पास, ये radius होगी तो perimeter मतलब boundary. So this is pi r plus R and R 2R. ठीक है, तो यहां से रेडियस के लिए कुछ रिलेशन फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल। R कॉमन लो, कैंसल हो जाएगा, पाई प्लस 2, R एंड R कैंसल, दिख रहा है सबको? क्या आएगा रेडियस? R एंड R कैंसल, सो पाई R इक्वल टू ऐसा कुछ। R इक्वल टू 2 पाई प्लस 4 अपॉन पाई, सो दिस इज 2 प्लस 4 अपॉन पाई। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये रेडियस की वैल्यू ऑप्शन के अंदर नहीं है, दिखा सबको? दिख रहा है कि सबको कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है? बेटा ऑप्शन डी तो 2 है, कैसे ऑप्शन डी करेक्ट होगा? एवरीवन समझ आया सबको? सो ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। दैट्स वाई क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ा था। और क्लैट ने क्या गलती की थी? ऑप्शन 2 + 2 अपॉन पाई, विच वन? दिस इज ऑप्शन सी। इसको ऑप्शन सी कंसीडर कर लिया था, बट सी में यहाँ 2 है, दिख रहा है सबको? सी में यहाँ 2 है, तो सी ऑप्शन रॉन्ग नहीं होगा। करेक्ट आंसर था 2 + 4 अपॉन पाई, और गलती से उन लोगों ने 2 + 2 अपॉन पाई कंसिडर कर लिया था। और ये रेडियस है, सबसे अच्छी बात क्या है? ये रेडियस है, ये रेडियस है। और रेडियस गलत होगी तो आगे के कई सारे क्वेश्चन क्या हो जाना है? गलत हो जाना है। तो बच्चों आगे के क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? आई होप सब लोग सॉल्व करना है इनको। 17, 18, 17, 18, 19, 20, ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। 17, 18, 19, 20 ये सॉल्व करना, और इनके मैं करेक्ट आंसर्स आपको बता रहा हूं, ठीक है? करेक्ट आंसर्स मैं आपको बता रहा हूं। 16 का तो आ ही गया। क्या आया था 16 का आंसर? रेडियस इक्वल टू 2 + 4 अपॉन पाई। 17 का आंसर 17, 16 पॉइंट समथिंग। अप्रोक्स आंसर लिख रहा हूं मैं, है ना? एग्जैक्ट हो सकता है, थोड़ा सा इनसे कुछ डिफरेंट हो। 18, ये भी अप्रोक्स लिख रहा हूं, 4.6 समथिंग। 19, इट इज ऑल्सो 10 पॉइंट समथिंग 7, ये भी अप्रोक्स है। अप्रोक्स इसलिए लिख रहा हूं कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू ज्यादा कैलकुलेट ना करना पड़े। 20, इट इज 15 पॉइंट समथिंग, क्योंकि सारी वैल्यू डेसिमल्स में है। तो ये मैंने आपको अप्रोक्स आंसर लिखे हुए हैं। 17, 18, 19, 20 ऑल 4 क्वेश्चन। 16 तो अपन ने सॉल्व कर लिया। सो गाइस इनको सॉल्व करना, ठीक है? हो जाएगा ये सब कुछ एवरीवन?
गाइस आई होप आपने कंप्लीट सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको बहुत सारी नई चीजें मालूम चली होंगी, क्वेश्चंस की टाइप मालूम चले होंगे। ठीक है, क्वेश्चन की टाइप मालूम चले होंगे और किस तरीके से आपको इनको करना है, ये सारी चीजें आपको मालूम चल गई होंगी। तो अपनी प्रिपरेशन को इसी के अराउंड जो अपन ने चीजें डिस्कस की हैं, इसी से रिलेटेड, इसी के आसपास के पॉइंट्स, बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ठीक है, सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। दिस इज फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, एक आइडिया लगा होगा प्रिपरेशन का। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।
Hi, good evening, people. Good evening, everyone. Good evening, guys. Good evening. How are you? How are you? कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे. So I welcome you all in the in this next session of the YouTube Live. मैराथन का जो सेकंड लास्ट सेशन है वो मैं ले रहा हूँ. माय नेम इज मयूर उपाध्याय. आप सब जानते होंगे पिछले 2-3 यूट्यूब लाइव्स में जो मैराथन हुई थी उसमें मैं आपके साथ था जीके के पोर्शन के लिए. सो आज मैं आप पे वापस आया हूँ. ठीक है. ओके. ओके. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अनदर मोमेंट. स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द सेशन. अच्छा, सेशन के स्टार्ट में ही आपको मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ कि ये सेशन चलेगा कैसा. आप सबने देखा होगा. ठीक है. मोस्ट ऑफ यू वर प्रेजेंट इन द प्रीवियस यूट्यूब मैराथन. जो पहली अपनी मैराथन हुई थी उनमें आप सब लोग थे. आप सबने देखा होगा कि वो मैराथन कैसे चली थी. सो यहाँ पे भी हमारा जो आगे का जो अगले 1.5 आवर का जो अपना शेड्यूल होगा वो कैसे चलेगा एक बार आपको बता देता हूँ. आपके सामने एक आधी स्क्रीन आ रही होगी. उस स्क्रीन पे क्या होगा, क्वेश्चंस आएंगे, पैसेज आएंगे. पहले तो आपको वो पैसेज रीड करना है, वो आपको पैसेज पढ़ना है एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है. ठीक है. अगेन फिर से बता रहा हूं, क्लैट 2021 20 तो हो चुका है. क्लैट 21 आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा पैसेज पढ़ें. और जीके में, जीके के सेक्शन में एक अच्छी बात यह है कि आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है. आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. आप बस कीवर्ड्स पकड़िए. ठीक है. ये मैं पहले भी बता चुका हूं. कीवर्ड्स पकड़िए. ओके. कीवर्ड्स पकड़िए, कीवर्ड्स को ढूंढिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पैसेज है ये किसके बारे में बात कर रहा है. पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है आपको चीजें समझ में आ जाएंगी. आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को पकड़ना है एंड उसके पीछे क्या होना चाहिए, तुरंत आपके बैक ऑफ द माइंड एक उसकी पूरी हायरार्की चलनी शुरू हो जानी चाहिए. ठीक है. स्टोरी चलनी शुरू हो जानी चाहिए कि ये जो पैसेज है ये किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है एंड ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं. ठीक है. अनटिल अनलेस अगर उसमें कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं हो, पैसेज में अगर कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं है, हम पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे. हम बस कीवर्ड्स पकड़ेंगे और हम डायरेक्ट किस पे आ जाएंगे, क्वेश्चंस पे आ जाएंगे. क्लियर है? समझ में आया? मगज में आया? बढ़े आगे. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. पीडीएफ, इसकी जो पीडीएफ है, ये सेशन की जो पीडीएफ है वो मैं आपको ये सेशन एंड होगा उसके बाद बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें जो मेनली जो चीजें वो समझाने वाली हैं. आपको ज्यादा पढ़ना है नहीं यहाँ पे सेशन में. आपको बस समझना है. ठीक है. जो टॉपिक है उसको मैं समझाऊंगा, आपको समझना है, बस आपका काम वहां खत्म हो जाएगा. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन. लेट्स बिगिन द सेशन. ओके. आपके सामने पैसेज आ गया है. पैसेज पढ़िए एंड कॉम्प्रीहेंड करिए. समझिए ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है ये पैसेज. समझिए. कौन पैसेज को पढ़ो, उसको कॉम्प्रीहेंड करो एंड बताओ मुझे ये पैसेज किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है. ओके. सो आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे. सो अगर मैं पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करूं, अगर मैं पैसेज पढ़ना स्टार्ट करूं, क्या लिखा है, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. द बिल अमेंड्स द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. अंडर दिस एक्ट सर्टेन पर्संस आर प्रोहिबिटेड डैश 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 डैश. क्या अब मुझे आगे पढ़ने की जरूरत है? इसमें मुझे आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं है. मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा. बट हम यहां पे समझ लेते हैं कि ये पैसेज किसकी बात कर रहा है. सो दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट दी एफ सी आर ए. एफ सी आर ए के बारे में बात कर रहा है. फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 उसके बारे में बात कर रहा है. एंड अभी ये न्यूज में क्यों आया था, ये अभी न्यूज में इसलिए आया था
क्योंकि दो कारण से, ठीक है, इसके दो रीजन थे, क्योंकि ये अभी न्यूज में आया था। रीजन नंबर वन, पहला रीजन क्या था कि हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, हमारी होम मिनिस्ट्री जो है उसने क्या किया था, सिक्स एनजीओ के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था। 6 एनजीओ के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था। एंड ये लाइसेंस को कैंसिल क्यों किया गया था? तो ये एफसीआरए एक्ट के अंडर में उन्होंने क्या किया, होम मिनिस्ट्री ने 6 एनजीओ के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। एक ये वाली न्यूज थी, इस कारण से न्यूज में आया। और जो सेकंड न्यूज है वो क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या किया है, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया है। गवर्नमेंट ने एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को प्रपोज किया है। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल यहां पे प्रपोज किया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। समझ में आया ये क्यों न्यूज में आया? 2 वजह से न्यूज में आया था। ओके, तो मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 वजह से न्यूज में आना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझते हैं व्हाट इज दिस एफसीआरए, ये एफसीआरए क्या है, ठीक है। ओके, ओके, सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सो रिसेंटली क्या हुआ कि हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने क्या किया, 6 एनजीओ के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। अब इन एनजीओ के लाइसेंस को क्यों कैंसिल किया गया था, इसके लिए जो होम मिनिस्ट्री है उसने कोई एडिक्वेट रीजन नहीं बताया, ठीक है, कोई ज्यादा रीजंस नहीं बताए थे होम मिनिस्ट्री ने सिर्फ इतना बोला कि ये 6 एनजीओ हैं, इनके लाइसेंस को कैंसिल किया जा रहा है, ठीक है। अब इन एनजीओ में से जो 4 एनजीओ थे, ठीक है, जो 4 एनजीओ थे वो कहां पे बेस्ड थे, तो 4 एनजीओ में से 2 एनजीओ जो थे वो झारखंड में थे, ठीक है, दे वर वर्किंग इन झारखंड में थे। एक एनजीओ मुंबई में काम करता था, मुंबई में काम कर रहा था, और एक मणिपुर में काम कर रहा था, ठीक है। 2 एनजीओ झारखंड में, एक एनजीओ मुंबई में, और एक मणिपुर में, ठीक है। ओके, अब यहां पे जो चीज कॉम्प्रिहेंड हो रही है, ठीक है, जो चीज यहां पे समझ में आ रही है वो ये है कि इन एनजीओ के ऊपर ये एक्यूजेशन लगाए गए थे, ये एक्यूजेशन लगे थे इनके ऊपर कि ये एनजीओ क्या काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग टुवर्ड्स दी रिलीजियस कन्वर्जन, वो रिलीजियस कन्वर्जन में काम कर रहे थे। रिलीजियस कन्वर्जन मतलब कि धर्म परिवर्तन करवाना, ठीक है। अब याद करो, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 2 एनजीओ कहां के हैं, वो झारखंड के एनजीओ हैं, ठीक है। झारखंड क्या है, ट्राइबल स्टेट। झारखंड इज अ ट्राइबल स्टेट, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना कि इट इज अ ट्राइबल स्टेट, ठीक है। ओके, अब ये एक्यूजेशन लगे कि ये एनजीओ क्या कर रहे हैं, ये उसके लिए काम कर रहे हैं, रिलीजियस कन्वर्जन के लिए काम कर रहे हैं। ओके, झारखंड ट्राइबल स्टेट है, यहां पे बेसिकली क्या होता है कि जो एनजीओ, जो क्रिश्चियन मिशनरीज यहां पे झारखंड में काम करते हैं, उनके ऊपर अक्सर ये एक्यूजेशन लगते रहते हैं कि भैया वो वहां पे जो ट्राइबल एरियाज है, एनजीओ वहां पे जाते हैं एंड वहां पे लोगों को उकसाते हैं, वहां पे लोगों को भड़काते हैं कि भैया आप अपना रिलीजन छोड़ो और आप क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है, क्रिश्चियंस में आप कन्वर्ट हो जाओ। तो ये काफी टाइम से ये एक्यूजेशंस लगते रहते हैं, मतलब सारे एनजीओ के ऊपर, ये जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो यहाँ पे इंडिया में आके काम करती हैं, उनके ऊपर ये एक्यूजेशन काफी टाइम से लगते रहते थे, ठीक है। 2017 में, 2017 में एक एनजीओ था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था कंपैशन इंटरनेशनल। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस कंपैशन इंटरनेशनल का लाइसेंस भी इसीलिए कैंसिल किया था। इसका जो पूरा लाइसेंस था वो इसीलिए कैंसिल किया था क्योंकि इसके ऊपर एक्यूजेशन लगे थे कि ये किस के लिए काम कर रहा है, रिलीजियस कन्वर्जन के थ्रू काम कर रहा है, रिलीजियस कन्वर्जन के लिए ये काम कर रहा है, तो इसीलिए इसके लाइसेंस को कैंसिल किया गया था। ओके, अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो एनजीओ के या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके जो लाइसेंस वो कैंसिल करती है, वो मेनली 2 बातें बोल के करती है। 2 बातें बोलती है कि इन 2 वजहों से क्या हो रहा है, इनके लाइसेंस को कैंसिल किया जा रहा है। पहली जो वजह है वो क्या है, नेशनल इंटरेस्ट को बोल के, द फर्स्ट वन इज नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को बोल के वो लाइसेंस को कैंसिल कर देती है। एंड जो दूसरी एक वजह है वो है पब्लिक इंटरेस्ट। जस्ट अ मोमेंट, नेशनल इंटरेस्ट एंड द सेकेंड इज पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये जो पब्लिक इंटरेस्ट है इसकी डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। मतलब कि अगर कोई इंडिया के अंदर अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है कि जो अफेक्ट्स कर रही है राइट्स को, इधर वो हेल्थ को अफेक्ट कर रही है इंडिया के लोगों की, या फिर अगर वो इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है इंडिया में,
तो वो क्या कर रही है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रही है, ठीक है। इट इज वर्किंग टुवर्ड्स अगेंस्ट दी पब्लिक इंटरेस्ट, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रही है। मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है। गवर्नमेंट के पास यहां पे पावर है कि वो उसके लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है। और पब्लिक इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो रिफ्यूज कर सकती है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रही है, या फिर वो स्टेट के या फिर वो स्टेट के किसके अगेंस्ट में काम कर रही है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में काम कर रही है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रही है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रही है, ठीक है। सो पब्लिक इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है वो बहुत ब्रॉड है, ठीक है। अब इसका इंटरप्रिटेशन कौन निकालेगा, डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, इसका इंटरप्रिटेशन कौन निकाल सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट इसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकती है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट कुछ भी बोल के क्या कर सकती है गवर्नमेंट हमारी, वो किसी भी एनजीओ के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है, ठीक है। समझ में आया पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतनी देर से अपन बात कर रहे हैं कि ये एफसीआरए, अब ये देख लेते हैं एक बार कि ये एफसीआरए होता क्या है। व्हाट इज दिस एफसीआरए? So FCRA, it is nothing but it is a law which has been enacted by the parliament to regulate the foreign contribution. ठीक है, it is a law enacted by the parliament to regulate the foreign contribution. मतलब कि जो भी मॉनेटरी डोनेशन आ रहा है बाहर से, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है बाहर से, उसको रेगुलेट करने के लिए इंडिया में क्या किया गया है, एफसीआरए एक्ट बनाया गया है, ठीक है। उसको रेगुलेट करने के लिए एफसीआरए एक्ट को बनाया गया था। क्लियर है? ओके, अब इसका काम क्या है, एफसीआरए एक्ट का काम क्या है, इसका काम ये है बेसिकली, ये एफसीआरए एक्ट ये देखता है कि भैया जो भी बाहर से पैसा आ रहा है, ठीक है, बाहर से जो भी पैसा आ रहा है, बाहर से जो भी डोनेशन आ रहा है, वो सही काम में यूज हो रहा है कि नहीं, वो पैसा सही काम में यूज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये सब पूरा चेक एंड बैलेंस करने का काम किसका है, एफसीआरए एक्ट का काम है। क्लियर है? ओके, सो दिस एफसीआरए 2010, ये इसका काम है, ठीक है। ओके, इनेक्ट कब हुआ, ये पहली बार इनेक्ट कब हुआ इंडिया में? सो दिस एफसीआरए एक्ट इट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर 1976। 1976 में ये पहली बार इनेक्ट होता है इंडिया में। बट सर आपने तो ऊपर ये लिखा है एफसीआरए 2010, एफसीआरए एक्ट 2010 का है। सो ये पहली बार इनेक्ट तो 1976 में हुआ था, बट 2010 में क्या होता है, इसमें इतने ज्यादा चेंजेस किए गए, इसमें इतने ब्रॉड चेंजेस किए गए थे कि अब एफसीआरए एक्ट कब का बोला जाता है, 2010 का बोला जाता है। बट सबसे पहली बार अगर इनेक्ट करने की बात आएगी, अगर ये पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि ये सबसे पहली बार इनेक्ट कब हुआ था, सो इट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1976। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या चीजें हैं। ठीक, अब जितने भी एनजीओज हैं इंडिया के अंदर जो काम करते हैं, वो सारे के सारे एनजीओज किसी ना किसी उससे, किसी ना किसी एक्ट से वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। किसी ना किसी एक्ट से वो सारे एनजीओज को रजिस्टर्ड होना जरूरी है इंडिया के अंदर। जैसे कि अगर कोई एनजीओ काम कर रहा है तो उसको वो सिर्फ एफसीआरए एक्ट से नहीं, सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से नहीं, वो और भी सारे एक्ट से वो एसोसिएटेड हो सकता है। जैसे कि कौन से हो गए, जैसे कि कौन से हो गए, सो इंडियन सोसाइटीज एक्ट, इंडियन सोसाइटीज एक्ट 1860, इससे एसोसिएटेड हो सकते हैं कोई भी एनजीओ, ठीक है, इसके अंडर में वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सेकेंड वन इज इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, इसके अंडर में एनजीओ रजिस्टर्ड हो सकते हैं। द थर्ड वन इज कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, इससे भी कोई एनजीओ रजिस्टर्ड हो सकता है, ठीक है। इन सारे एक्ट के थ्रू वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं इंडिया के अंदर, कोई भी एनजीओ। क्लियर है? ओके, अब इतनी देर से अपन बात कर रहे हैं ये एनजीओ की एफसीआरए के अंडर में अपन एनजीओ को कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। बट सर व्हाट इज दिस एनजीओ, ये एनजीओ होता क्या है? सो एनजीओ इज नथिंग, इट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ना गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, ना ही किसी प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ना गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, ना ही किसी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, उसको क्या बोला जाता है? एनजीओ बोला जाता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है यहां तक? ओके, अब एफसीआरए एक्ट के अंडर में जो 2010 का जो एक्ट है एफसीआरए का, उसके अंडर में कौन कौन
फॉरेन डोनेशन या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता है, उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दी एफसीआरए एक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है एफसीआरए एक्ट के अंदर कि कौन कौन फॉरेन डोनेशन नहीं ले सकता, कौन कौन फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता है। ठीक है, तो उस लिस्ट को एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो उसको देख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन इंडिया के अंदर फॉरेन डोनेशन या फिर फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता है। सो द फर्स्ट वन इज एनी इलेक्शन कैंडिडेट। एनी इलेक्शन कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है या फिर खड़ा हो रहा है, वो एफसीआरए के अंडर में क्या नहीं ले सकता, वो फॉरेन से डोनेशन नहीं ले सकता, वो मॉनेटरी डोनेशन नहीं ले सकता है। पहला है, ठीक है। दूसरा, कोई भी मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, इधर कोई भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो फॉरेन डोनेशन नहीं ले सकता, या फिर कोई भी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी फॉरेन फंडिंग या फिर फॉरेन डोनेशन नहीं ले सकता है अंडर दी एफसीआरए एक्ट। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट वन इज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, एनी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी ऑफिस बेयरर, ठीक है, और उसका कोई भी ऑफिस बेयरर, वो क्या नहीं कर सकता, वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता अंडर दी एफसीआरए एक्ट। वो एफसीआरए एक्ट के अंडर में फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता, डोनेशन नहीं ले सकता। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन हो, वो एफसीआरए के अंडर में क्या नहीं ले सकता, फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट वन इज कोई भी करस्पॉन्डेंट, कोई भी करस्पॉन्डेंट न्यूज़पेपर का, कोई भी कार्टूनिस्ट न्यूज़पेपर का, ठीक है, कोई भी एडिटर न्यूज़पेपर का, ठीक है, कोई भी कॉलमनिस्ट न्यूज़पेपर का, मतलब कि न्यूज़पेपर से एसोसिएटेड, मतलब कि जो भी प्रिंट मीडिया है उससे एसोसिएटेड कोई भी मेंबर एफसीआरए के अंडर में क्या नहीं ले सकता, फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता है। इवन प्रिंट मीडिया का अगर कोई ओनर होगा, ठीक है, अगर कोई भी ओनर हुआ प्रिंट मीडिया का, वो क्या नहीं ले सकता, एफसीआरए के अंडर में फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता। क्लियर है यहां तक? ओके। अच्छा, ये मीडिया को, प्रिंट मीडिया को इसमें क्यों इंक्लूड किया गया है? बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि जो मीडिया है वो क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक ओपिनियंस को, पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब आप सबने देख ही रहे होंगे कि क्या चल रहा है अभी न्यूज चैनल्स में, अभी क्या क्या चल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, पब्लिक का जो ओपिनियन है वो इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, कैसी भी न्यूज चल रही हो, मैं नाम नहीं लूंगा न्यूज का कि न्यूज कौन कौन सी न्यूज चल रही है, कैसी भी न्यूज चल रही है, उससे क्या होता है, लोग बाग जुड़ जाते हैं। आप सबको अभी पता होगा क्या हुआ था, टीआरपी स्कैम। ठीक है, टीआरपी का स्कैम हुआ था, सबको पता है कौन सा चैनल था, कौन कौन उससे एसोसिएटेड था, उसमें आप ज्यादा नहीं जाते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए कि मीडिया को क्यों इंक्लूड किया गया है, फॉरेन फंडिंग लेने से मना करने के लिए क्यों इंक्लूड किया गया मीडिया को, क्योंकि मीडिया क्या करती है, वो पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए उसको मना किया गया है। क्लियर है? ओके। इसके बाद कोई भी जज, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, और कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो कि किसी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय हो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय क्या नहीं कर सकता, एफसीआरए एक्ट के अंडर में वो फॉरेन फंडिंग, फॉरेन डोनेशन नहीं ले सकता है। क्लियर है? ओके। अब इसके बाद और कौन, कोई भी ऐसी एसोसिएशन जो कि या फिर कोई भी ऐसी एजेंसी जो कि किससे रिलेटेड है, वो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, विजुअल चैनल, विजुअल मीडियम से वो रिलेटेड है अगर, ठीक है, या फिर अगर वो कोई न्यूज दे रहा है, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे पहली बात हुई थी प्रिंट मीडिया की, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एसोसिएटेड है, वो क्या नहीं कर सकता, वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता, मॉनेटरी डोनेशन नहीं ले सकता अंडर दी एफसीआरए एक्ट। क्लियर है? ओके। इसके बाद लास्ट में आता है कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनी इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट ने ही मना करके रखा हुआ है, जिसको गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि भैया आप नहीं ले सकते। जैसे इस केस में क्या हुआ, ये जो 6 एनजीओ थे जिनके लाइसेंस को कैंसिल किया था गवर्नमेंट ने, उसी तरीके से अगर कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट ने मना करके रखा है कि आप भैया फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते एफसीआरए एक्ट के अंडर, वो भी यहां पे फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, क्योंकि ऑप्शंस में ये सारे पॉइंट्स को घुमा फिरा के दिया जा सकता है और एक गलत ऑप्शन देके आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन यहां पे फॉरेन फंडिंग एफसीआरए एक्ट के अंडर में नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है? समझ में आया, मगज में आया? ओके।
सो ये था अपना पूरा एफसीआरए एक्ट। ठीक है, अब अभी रिसेंटली इसमें क्या हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट ने इसमें कुछ अमेंडमेंट प्रोसेस किए हैं। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आई है गवर्नमेंट। एफसीआरए एक्ट के अंडर गवर्नमेंट क्या लेकर आई है, कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आई है। कौन कौन से अमेंडमेंट्स लेकर आई है वो यहां पे जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स अंडर दी एफसीआरए, अमेंडमेंट्स अंडर दी एफसीआरए एक्ट। ठीक है, कौन कौन से अमेंडमेंट्स आए उनको एक बार देख लेते हैं। और इस बिल को किसने प्रपोज किया है, इस बिल को प्रपोज किया है हमारी होम मिनिस्ट्री ने। प्लीज रिमेंबर, होम मिनिस्ट्री ने इस बिल को प्रपोज किया था। ठीक है, अमेंडमेंट के लिए। ओके, अब यहां पे जो पहला अमेंडमेंट है वो क्या है, जो पहला अमेंडमेंट है वो क्या है, वो ये है कि कौन कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मॉनेटरी डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता अंडर एफसीआरए। तो जो बहुत बड़ी मैंने आपको अभी एक लिस्ट बताई, बहुत सारे नामों की जो मैंने आपको लिस्ट बताई, उसमें आप एक नाम और जोड़ दीजिए कि अब यहां पे पहला अमेंडमेंट जो है वो ये कि अब कोई भी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, पहले वाली जो लिस्ट थी उसमें क्या था, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता एफसीआरए के अंडर में फॉरेन डोनेशन। यहां पे अब इस टर्म को और ब्रॉड कर दिया गया है, इसकी डेफिनेशन को और बढ़ा दिया गया है। अब इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें बोल दिया गया है कि एनी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अब क्या नहीं कर सकता, अब एफसीआरए एक्ट के अंडर में वो फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर है, ये पहला पॉइंट है, ये पहला अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, जो सेकेंड चीज है वो ये है कि अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है या फिर कोई भी एनजीओ जो चल रहा है, जो एफसीआरए के अंडर में फॉरेन डोनेशन या फिर फॉरेन फंडिंग लेना चाहता है, तो अब उसके जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनको, उसके अंडर में जितने भी जो बड़े ऑफिसर्स होंगे उनको, अब आधार उन सब का आधार, अब आप आधार की फोटोकॉपी गवर्नमेंट के पास जमा करवानी होगी। ठीक है, उसके आधार की फोटोकॉपी आपको गवर्नमेंट के पास जमा करवानी होगी। ये इसका सेकंड अमेंडमेंट आया है। ठीक है, आधार से लिंक कर दिया गया है सबको। और अगर कोई फॉरेनर किसी एनजीओ के, इंडिया में किसी एनजीओ के अंदर में वो काम कर रहा है, तो उस फॉरेनर का पासपोर्ट, ठीक है, और इधर अगर उसका वो नहीं है, पासपोर्ट पे वो नहीं है, और या फिर अगर वो इंडियन है, अगर वो ओसीआई सिटीजन है इंडिया का, तो उसका ओसीआई कार्ड, उसका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड, उसकी फोटोकॉपी को गवर्नमेंट के पास सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ओसीआई मेंबर के ओसीआई कार्ड को उसकी फोटोकॉपी को गवर्नमेंट के पास सबमिट करवाना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ पासपोर्ट को भी सबमिट करवाना पड़ेगा अगर कोई फॉरेनर किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनजीओ के अंडर में काम कर रहा है। ये इसका सेकंड अमेंडमेंट आया एफसीआरए एक्ट के अंडर में। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? ओके, अब इसमें जो थर्ड अमेंडमेंट है एफसीआरए एक्ट में, जो यहां पे थर्ड अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, जो थर्ड अमेंडमेंट यहां पे प्रपोज किया गया है वो ये है कि पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई एनजीओ, पहले वो किसी भी बैंक अकाउंट में फॉरेन फंडिंग को मंगवा सकते थे। ठीक है, फॉरेन फंडिंग को पहले किसी भी बैंक अकाउंट में मंगवा सकते थे, बट अब यहां पे अमेंडमेंट लाया गया है। वो अमेंडमेंट ये है कि अब आप सिर्फ एसबीआई की दिल्ली ब्रांच में, एसबीआई दिल्ली के किसी ब्रांच में अब आप फॉरेन फंडिंग को मंगवा सकते हो। ऐसा नहीं कि अब आप किसी भी अकाउंट में आपने फॉरेन फंडिंग को मंगवा लिया, फॉरेन डोनेशन को मंगवा लिया, नहीं, अब इस पे रोक लगा दी गई है। जो प्रपोज किया गया है वो ये है कि अब आप सिर्फ एसबीआई की दिल्ली ब्रांच में ही फॉरेन फंडिंग को मंगवा सकते हो। ये इसमें तीसरा अमेंडमेंट लेकर आया गया है। क्लियर है? ओके, अब आ जाते हैं अपन फोर्थ पे। फोर्थ अमेंडमेंट पे अपन आ जाते हैं। फोर्थ अमेंडमेंट में क्या है, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, मान लो एग्जांपल लेते हैं, मान लो बाहर से 1 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग आई। ठीक है, 1 करोड़ रुपए की बाहर से फॉरेन फंडिंग आई। पहले उसमें क्या होता था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं, वो जो भी फंडिंग आ रही है उसके 50% तक हो सकते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उसके 50% तक हो सकते थे पहले।
ठीक है, मतलब कि अगर 1 करोड़ रुपए आया तो आप 50 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए निकाल सकते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में क्या क्या आ जाएगा भैया, आप जितने लोगों को हायर करोगे उनकी सैलरीज देना, ठीक है, आपने अगर कहीं पे ऑफिस लिया है तो उस ऑफिस का रेंट देना, ये सब चीजें किसमें आती हैं, ये सब चीजें आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। तो पहले क्या था कि 50% पैसा आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में यूज कर सकते थे, एंड 50% बाकी का जो पैसा था वो आप किस में यूज कर सकते थे, बाकी का पूरा पैसा आप यूज कर सकते थे जिस पर्पज से आपने वो एनजीओ खोला है, ठीक है, जिस पर्पज से वो एनजीओ खोला गया है उसमें आप बाकी का पैसा यूज कर सकते थे। क्लियर है? अब इसमें लिमिट लगा दी गई है, 50% की लिमिट को अब कम कर दिया गया है। कितने से कम कर दिया गया है कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए आप सिर्फ 20% पैसा ही खर्च कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चेंज आया है, सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, ठीक है, कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए आप सिर्फ 20% पैसा ही यूज कर सकते हो, बाकी का पूरा जो 80% पैसा होगा वो आपको किस में यूज करना पड़ेगा भैया, जिस पर्पज से आप एनजीओ खोल रहे हो, जिस पर्पज से वो एनजीओ ओपन हो रहा है उस पर्पज के लिए आपको वो पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 50% पैसा लोगों की सैलरीज में बांट दिया, रेंट दे दिया, जो भी ऑफिस की स्टेशनरी होती है उसमें आपने यूज कर लिया, और जिस पर्पज के लिए एनजीओ है उसमें आप पैसा लगा ही नहीं रहे हो, ठीक है। अब उसका 80% पैसा जिस पर्पज के लिए वो एनजीओ है उसमें लगाना पड़ेगा, और 20% पैसा आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हो। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं, फाइनल पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो यहां पे फाइनल पॉइंट ये है, एफसीआरए एक्ट में जो लास्ट पॉइंट, जो लास्ट अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, वो लास्ट अमेंडमेंट यहां पे ये है कि, अच्छा पहले एक चीज आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर कोई भी एनजीओ जो है, ठीक है, कोई भी जो एनजीओ है वो 5 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है, 5 इयर्स के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होता है, किसी भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 5 इयर्स के लिए होता है, और अगर उस एनजीओ को फिर से अपना वो करना है, फिर से आगे और काम करना है उसको, तो फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू किया जाता है, ठीक है। शुरुआत में 5 साल के लिए होता है, एंड देन बाद में इसको और आगे वो किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो लास्ट अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है वो यह है कि अगर कोई एनजीओ जो पहले 5 साल के लिए प्रपोज था, बट वो एनजीओ क्या कर रहा है, वो एनजीओ 3 साल के अंदर ही अपने लाइसेंस को सबमिट कर रहा है, ठीक है, वो अपने लाइसेंस को विड्रॉ कराना चाहता है, वो 3 साल के बाद और आगे काम नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे क्या किया है, अमेंडमेंट प्रपोज किया है कि गवर्नमेंट पहले क्या कर सकती है, उस 3 साल के अंदर जो भी उस एनजीओ ने काम किया है वो सारे काम को देख सकती है, वो सारे काम को चेक कर सकती है कि भैया इन्होंने 3 साल के अंदर क्या क्या काम किया है, उसके बाद ही वो उसके लाइसेंस को विड्रॉ करेगी। यहाँ पे ये इसमें लास्ट अमेंडमेंट है, जो लास्ट अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है एफसीआरए एक्ट के अंडर में। क्लियर हुआ? समझ में आया? मगज में आया? इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे हो गए थे, एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल हुए और उसके बाद तुरंत क्या हुआ, अमेंडमेंट प्रपोज कर गए, इसलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफसीआरए एक्ट, एफसीआरए एक्ट। क्लियर हुआ? सारी चीजें क्लियर हैं? क्वेश्चंस कर सकते हैं, जल्दी बताओ। यस, यू हैव टू रिमेंबर दीज, ये सब आपको याद रखने हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, तभी तो एग्जाम में कर पाओगे क्वेश्चंस। क्लियर है सब कुछ? क्वेश्चंस करें जल्दी से, चलो। चलो लेट्स डू द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। ओके, फिफ्थ अमेंडमेंट एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी जो एनजीओ है वो 5 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है इंडिया के अंदर, ठीक है, और उसके बाद अगर वो 5 साल के बाद और ज्यादा काम करना चाहता है तो वो अपने लाइसेंस को रिन्यू करवा सकता है, ठीक है, लाइसेंस उसका रिन्यू हो सकता है। बट यहाँ पे क्या प्रपोज किया गया है कि कई बार क्या होता था कि एनजीओ 5 साल के लिए रजिस्टर्ड होते थे, फिर 2-3 साल में उन्होंने काम किया और अपना काम छोड़ के वो भग जाते थे, ठीक है, जो भी पैसा वैसा आया उसका कोई हिसाब नहीं देते थे, उसका कुछ भी वो गवर्नमेंट को बताते नहीं थे कि उन्होंने कितना पैसा कहां पे खर्च किया है, और वो 2-3 साल के अंदर ही भाग जाते थे, अपने लाइसेंस को सबमिट कर देते थे गवर्नमेंट के पास और भाग जाते थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहां पे क्या किया है कि अगर कोई एनजीओ 5 साल के लिए जिसका लाइसेंस है, अगर वो 1 साल के अंदर अपना वो छोड़ के जा रहा है काम, 2 साल 3 साल कितने भी टाइम में अगर वो अपना काम छोड़ के जा रहा है, तो पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, रिव्यू करेगी उसके उतने टाइम का, ठीक है, उतने साल का वो रिव्यू करेगी कि भैया इन्होंने इतने टाइम में क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। ये इसमें अमेंडमेंट आया है, पहले गवर्नमेंट उसको वो करेगी, रिव्यू करेगी, उसके बाद ही वो लाइसेंस विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं।
सो द फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, आंसर बताओ। जल्दी से देखो, आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट? चारों ऑप्शन पढ़ो, आंसर बताओ जल्दी से। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट? सो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? इट सीक्स टू प्रोहिबिट पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम रिसीविंग एनी फॉरेन फंडिंग। मैंने आपको क्या बताया, जो पहला अमेंडमेंट आया वो क्या था कि अब पब्लिक सर्वेंट को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। जो लिस्ट में जो कौन कौन नहीं इंक्लूड कर सकता, कौन कौन नहीं ले सकता फॉरेन फंडिंग, उसमें अब पब्लिक सर्वेंट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो पहला सही है। दूसरा, इट प्रपोज रिड्यूस द यूज ऑफ फॉरेन फंड्स टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बाय एनजीओ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 50% टू 20%। 50 से 20% पे ले आया, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है। सी, द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज टू बी चेंज टू अकोमोडेट एसोसिएशन। अब ये वाले अमेंडमेंट की कहीं पे भी बात नहीं हुई है, तो यहां पे द राइट आंसर वुड बी सी, द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज टू बी चेंज टू अकोमोडेट एसोसिएशंस। ठीक है, तो यहां पे द राइट आंसर इज सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स दी फॉरेन फंडिंग इन इंडिया? कौन इंप्लीमेंट करता है या फिर कौन रेगुलेट करता है फॉरेन फंडिंग को इंडिया के अंदर? जल्दी से ऑप्शन देखो, आंसर बताओ। सेकंड का जल्दी से आंसर बताओ, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो द सेकंड का राइट आंसर यहाँ पे क्या है? मैंने क्या बताया था कि ये जो सारे अमेंडमेंट्स हैं ये किसने प्रपोज किए हैं, या सारे अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया है होम मिनिस्ट्री ने। होम मिनिस्ट्री ने ये सारे अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया है, तो द राइट आंसर वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर है? चलो जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन, द अमेंडमेंट प्रपोज टू रिड्यूस द यूज ऑफ फॉरेन फंड्स टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बाय एनजीओ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 50% टू कितने तक उसको रिड्यूस किया गया है? 50% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो थी उसको 50% से कितने पे रिड्यूस करके लेकर आया गया है? जल्दी से आंसर बताओ, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? So the right answer of third is okay. I'm getting the right answers. ठीक है, सबके यहाँ पे सही जवाब आ रहे हैं। द राइट आंसर इज 20%। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को जो 50% थी पहले, उसको अब कितना कम करने का बोल दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 20% ही रहेगी। बाकी पूरा का पूरा जो 80% है वो एनजीओ के जिस काम के लिए, जिस पर्पज के लिए एनजीओ खोला गया है, उस पर आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द एक्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एवरी, जल्दी से व्हाट वुड बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड बी राइट आंसर? अंडर द एक्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एवरी, कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के लिए लाइसेंस मिलता है एंड कितने टाइम बाद उसको वापस से रजिस्टर करवाना पड़ता है? ग्रेट गाइस, ग्रेट। कितने टाइम बाद? हर 5 साल के बाद उनको रजिस्ट्रेशन अपना रिन्यू करवाना पड़ता है। सारे एनजीओ को अपना रजिस्ट्रेशन 5 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। क्लियर है? चलो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द बिल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द बिल? So A बोल रहा है the term person under the bill includes an individual, an association or a registered company। ठीक है, ये वाला पॉइंट रह गया था। इंडिविजुअल जो है यहाँ पे एफसीआर एक्ट के अंदर कोई भी अगर इंडिविजुअल है, वो कोई भी एसोसिएशन भी हो सकता है, वो कोई भी सिंगल पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई रजिस्टर्ड कंपनी भी हो सकता है। ठीक है, सो ए इज करेक्ट। सेकंड इज
B, the bill makes Aadhaar number mandatory for all office bearer, directors or key functionaries of a person receiving foreign contribution. जो भी अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसमें आधार अब मैंडेटरी हो गया है, ये बी ऑप्शन है. सी, इन केस ऑफ अ फॉरेनर अ कॉपी ऑफ पासपोर्ट और ओवरसी ओसीआई का जो कार्ड होता है वो अब बताया था मैंने आपको अमेंडमेंट पे. डी, ऑल ऑफ द अबव. व्हाट वुड बी द राइट आंसर? यहाँ पे सही जवाब क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे ये तीनों चीजें मैंडेटरी हैं, तीनों चीजें ट्रू हैं रिगार्डिंग द बिल. क्लियर है? चलो, आया समझ में सारी चीजें? पता चला कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसा टॉपिक आएगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. समझ में आई सारी चीजें? चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पैसेज. नेक्स्ट पैसेज आपके सामने. पैसेज देखो, बताओ ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? जल्दी से बताओ. यस, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. गुड गाइस. क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, अगर आप वो क्वेश्चन के सही जवाब दे रहे हो तो मतलब आपको जो टॉपिक है वो समझ में आ गया है. ठीक है, टॉपिक आपको समझ में आ गया है. ठीक है, चलो पैसेज देखो, जल्दी से बताओ पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? ओके, सो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. यहां पे बात किसके बारे में हो रही है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. ठीक है, क्यों न्यूज में आया है अभी? क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था? रिसेंटली हमारे इंडिया के 8 बीचेस को सिलेक्ट किया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए इंडिया के 8 बीचेस को सिलेक्ट किया गया है. तो ये पैसेज उसी के बारे में यहां पे बात कर रहा है. ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. ठीक, ओके. सो इसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करते हैं, इस टॉपिक को पूरा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. सो 2018 में क्या हुआ? 2018 में इंडिया से एक बीच था जिसका नाम था चंद्रभागा बीच. ठीक है, चंद्रभागा बीच विच इज इन उड़ीसा. चंद्रभागा बीच, ठीक है, विच इज इन उड़ीसा. इसको चंद्रभागा बीच को सबसे पहले इंडिया में ही नहीं, इसको सबसे पहले एशिया में, एशिया का ये पहला बीच था जिसको क्या दिया गया था? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था. ठीक है, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था, चंद्रभागा बीच उड़ीसा का. ठीक, ओके. अब इसके बाद क्या होता है? 2019 में जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री थी वो क्या करती है? 12 बीचों को और 12 बीचेस को और नॉमिनेट करती है, 12 बीचों को और भेजती है कि भैया इन सारे बीचेस को क्या दिया जाए? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाए. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए यहां पे नॉमिनेट किया जाता है इन जुलाई 2019, जुलाई 2019 में नॉमिनेट किया जाता है. एंड रिसेंटली अभी यहां पे क्या हुआ है? इन 12 में से 8 बीचेस को, इन 12 में से 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिल गया है. ठीक है, अभी रिसेंटली इनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन यहां पे दे दिया गया है. ठीक है, ओके. अब ये जो सर्टिफिकेशन है, ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, ये कौन देता है? ये जानना अपने लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है. ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन देता है? सो दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज बीन गिवन बाय, this blue flag certification has been given by FEE, an organization called FEE, Foundation for Environmental Program, sorry, Foundation for Environmental Education. फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है? जो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन देता है. ठीक है, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? सो इट्स हेडक्वार्टर इज इन कोपेनहेगन, डेनमार्क. कोपेनहेगन, डेनमार्क में इसका, कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है. ठीक है, ओके.
और अभी ये जो ब्लू फ्लैग के सर्टिफिकेट्स दिए गए थे, तो इसके लिए एक पूरी ज्यूरी बनाई गई थी, ठीक है। इसके लिए पूरी ज्यूरी बनाई गई थी, जिस ज्यूरी ने क्या किया था, सिलेक्ट किया था कि कौन कौन से बीचेस को क्या देना है, ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन देना है। अब ये जो ज्यूरी बनाई गई थी, इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वो थी, इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये अपने लिए जानना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट किया था इन 8 बीचेस को, ठीक है। सो यहाँ पे जो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी वो तो थी अपनी FEE, ठीक है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। उसके बाद जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी IUCN, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये सेकंड ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके बाद जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ पे वो थी UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक। इसके बाद जो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन थी वो है थी UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन थी ज्यूरी के अंदर, जिन्होंने डिसाइड किया था, जिन्होंने मिलकर इंडिया के 8 बीचेस को सिलेक्ट किया है फॉर दी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस को दिया जा रहा है। क्लियर है? ओके, देख लेते हैं जल्दी से व्हाट इज दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है ये होता क्या है। ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है ये किसको दिया जाता है, ये पूरे इंटरनेशनली, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बीचेस हैं और जितने भी मरीनाज हैं उन सबको सिलेक्ट करने का प्रोग्राम है, ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। और ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1985। 1985 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद 1987 में, अच्छा 1985 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कहां पे, फ्रांस से। फ्रांस से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद 1987 में ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का जो प्रोग्राम था ये यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में गया। 1987 में ये यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, अब इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में होता क्या है, इसमें बीचेस को कुछ क्राइटेरिया पे डिफाइन किया जाता है, बीचेस को कुछ क्राइटेरिया दिए जाते हैं कि अगर दुनिया के अंदर ये सारे बीचेस जो हैं, ये सारे जो मरीनाज हैं, अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो क्या उनको क्या दिया जाता है, ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया जाता है, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। क्लियर है? अगर वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, अगर वो एक एक चीज को फुलफिल कर रहे हैं तो उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का वो दिया जाता है। इसमें टोटल कितने क्राइटेरिया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ 33 क्राइटेरिया यहां पे डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, टोटल 33 क्राइटेरिया को यहां पे डिफाइन किया गया है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, सॉरी, अगर कोई बीच यहां पे इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है। क्लियर है? ओके, अब कौन कौन सी क्राइटेरिया यहां पे इंपॉर्टेंट है, थोड़े सारे नहीं, आपको कुछ कुछ यहां पे याद होना जरूरी है, ठीक है, कुछ, क्योंकि क्राइटेरिया जो है वो आपको ऑप्शंस में दे सकता है एंड वो आपसे वहां पे गलत ऑप्शन पूछ सकता है, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया आपको यहां पे याद होना जरूरी है, कौन कौन से, कि जैसे कि जो वाटर की क्वालिटी है, बीचेस के अराउंड में जो पानी की जो क्वालिटी है वो कैसी है, एक क्राइटेरिया ये है, ठीक है। उसके अलावा वेस्ट डिस्पोजेबल फैसिलिटी कैसी है, उन बीचेस पे वेस्ट की जो डिस्पोजेबल फैसिलिटी है वो कैसी है, एक ये क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो बीचेस हैं वो डिसेबल्ड फ्रेंडली हैं कि नहीं है, ठीक है, कि मतलब जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो उन बीचेस पे आराम से आ जा सकते हैं कि नहीं आ जा सकते, ये क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स, मतलब कि जो भी अगर बीचेस पे कोई हादसा हो जाता है, ठीक है, अगर कोई भी हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो फर्स्ट एड इक्विपमेंट वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है, ये क्राइटेरिया होता है। फैसिलिटी, मतलब जो भी सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, सेफ्टी फैसिलिटी वहां पे कितनी है, वो एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। आप सबने वो मूवी देखी होगी बेवॉच मूवी देखी होगी, उसमें द रॉक, ड्वेन जॉनसन था, जैक एफ्रॉन और इंडिया से प्रियंका चोपड़ा भी तो थी। उसमें क्या था कि जो मरीना था वहां पे क्या था कि एक बेवॉच की टीम थी, पूरी एक बेवॉच की टीम थी, और वहां पे बीच पे अगर कोई भी एक्सीडेंट होता था तो बेवॉच की टीम वहां पे लोगों को वहां पे बचाने का काम करती थी, ठीक है। देखना आप सब मूवी वो देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा कि जो पूरा अरीना है, जो पूरे जो बीचेस हैं उनका जो अरीना है, वहां पे पेट्स को, पूरा जो मेन कोस्टल एरिया है वहां पे पेट्स को अलाउ किया जाता है या नहीं किया जाता, ये भी एक क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्राइटेरिया भी हैं जो कंपलसरी हैं और कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जो वॉलंटरी हैं, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया वहां पे कंपलसरी प्रेजेंट होने चाहिए और कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जो कि वॉलंटरी है, हूं भी तो भी चलेगा, अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये होता है अपना ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। एंड सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दुनिया में किसके पास है?
सो वर्ल्ड में जो कंट्री जिसके पास सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो कंट्री है स्पेन। स्पेन के पास सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग की सर्टिफिकेशन है। एंड स्पेन के बाद कौन है? स्पेन के बाद ग्रीस, एंड ग्रीस के बाद कौन है? फ्रांस। स्पेन सबसे फर्स्ट नंबर पे, स्पेन के पास सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस हैं, एंड देन उसके बाद ग्रीस है, एंड देन उसके बाद फ्रांस है। क्लियर है? क्लियर है ये पूरा पॉइंट, ये पूरा पैसेज क्लियर है? चलो क्वेश्चन देखें इसकी जल्दी से। चलो जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री The environmental ministry selected how many beaches in India to vie for the certificate? ठीक है, कितने बीचेस को सिलेक्ट किया गया था इंडिया के अंदर बीचेस के लिए? तो यहां पे व्हाट वुड बी द राइट आंसर? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? कितने बीचेस सिलेक्ट हुए थे इंडिया से जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया था? सो द राइट आंसर इज सी, 12 बीचेस को भेजा गया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके पहले एक जो बीच था 2018 में चंद्रभागा बीच, जो कि कहां पे है? उड़ीसा में। उसको पहले ही सबसे पहले एशिया का वो पहला बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था। सो द राइट आंसर वुड बी सी 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय, ये जो प्रोग्राम है ब्लू फ्लैग का, इसको किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है इस ब्लू फ्लैग प्रोग्राम को? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सेवंथ का किसने लॉन्च किया है ये ब्लू फ्लैग प्रोग्राम को? ओके, सो द राइट आंसर इज ए, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। यहां पे आपको बता चुका हूं, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, एफईई, इसने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और एफईई का हेडक्वार्टर कहां पे? अच्छा, ये स्टैब्लिश कब हुआ था? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन ये स्टैब्लिश कब हुआ था? सो इट वाज स्टैब्लिश इन द ईयर 1981। 1981 में इसको ये स्टैब्लिश हुआ था, एंड इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? डेनमार्क। डेनमार्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस? ठीक है, तो 1000 रुपए का सवाल है कि बीसी का, किस किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है? जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, कौन सी कंट्री है वो? सो इट इज सी, स्पेन। स्पेन। ठीक है, अच्छा, स्पेन के पास अराउंड 560 प्लस 560 प्लस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। ठीक है, अराउंड 560 प्लस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है स्पेन के पास। ठीक है, आसान सवाल था। ठीक है, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? कौन सा इंडिया का पहला स्टेट था जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 9, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? कौन सा स्टेट था? तो चंद्रभागा बीच कहां पे था? इट इज इन उड़ीसा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी, उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है ये पूरा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? क्लियर है? सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है एफई, उसका ध्यान रखना, उसकी कब स्टैब्लिश हुआ था वो याद रखना, हेडक्वार्टर कहां पे वो याद करना, किस कंट्री में सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बीच हैं वो याद करना, फर्स्ट तीन, एटलीस्ट फर्स्ट तीन तो याद रखना।
कौन सा स्टेट था जहां पे सबसे पहली बार आया था वो ध्यान रखना, कौन सा बीच था उस बीच का नाम याद रखना, ठीक है। और कितने बीचेस को प्रपोज किया गया था हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ने, तो 12 बीचेस, 12 बीचेस को प्रपोज किया था, वो याद रखना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसेज पढ़ो, पैसेज पढ़ो जल्दी से एंड बताओ ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है। पैसेज किसके बारे में यहां पे बात कर रहा है, जल्दी से बताओ। समझ में आ रहा है क्लैट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको कैसे क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंड करना है, कैसे क्वेश्चंस को समझना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी अप्रोच होनी चाहिए। जैसे ही आपके सामने पैसेज आए तुरंत आपके बैक ऑफ द माइंड चलने लगना चाहिए, पूरा उसकी हायरार्की चलने लगनी चाहिए कि ये पैसेज किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वेरी गुड, जैसे यहाँ पे सब लोगों ने यहाँ पे बता दिया है, ये जो पैसेज है ये किसके बारे में बात कर रहा है। दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट द AGR वर्डिक्ट। दिस पैसेज हियर इज टॉकिंग अबाउट द AGR वर्डिक्ट। AGR वर्डिक्ट के बारे में ये पैसेज यहां पे बात कर रहा है। AGR इज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। ओके अब सर ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कैसे न्यूज में आया है, ये तो थोड़ा सा पहले का टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था वो तो पहले आ गया था, बट और इसमें अभी फरवरी में भी कुछ फर्दर डेवलपमेंट हुई थी, और अभी इसमें फर्दर कुछ डेवलपमेंट हुई है, बट अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अभी 2021 में, मार्च 2021 में भी न्यूज में रहने वाला है, ठीक है। मार्च 2021 में भी ये टॉपिक न्यूज में रहने वाला है। कैसे न्यूज में रहेगा वो अभी आपको पूरा बताता हूं, पूरा बताता हूं आपको ये अभी टॉपिक कैसे न्यूज में रहने वाला है एंड हमको ये टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है, ठीक। चलो समझते हैं व्हाट इज दिस AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है, ये इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। AGR को समझने के लिए हिस्ट्री में चलते हैं, कब, 1980s के टाइम पे, 80s के टाइम पे चलते हैं, जब पूरा जो टेलीकॉम सेक्टर था इंडिया का, जो पूरा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर था इंडिया का, वो किसके अंडर में था, वो गवर्नमेंट के अंडर में था, ठीक है। कोई भी प्राइवेट प्लेयर उसमें आ नहीं सकता था, कोई भी प्राइवेट प्लेयर एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें क्या थी, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती थी, ठीक। 1980s के टाइम की मैं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट की यहां पे पूरी मोनोपोली चलती थी, ठीक है। ओके इसके बाद क्या होता है, 1991 में LPG का मॉडल लेकर आ जाते हैं हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, PV नरसिम्हा राव उस टाइम पे LPG का मॉडल लेकर आ जाते हैं। LPG इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। LPG को लेकर आते हैं इंडिया में, मतलब कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को पूरे दुनिया के लिए खोल देता है, ठीक है, इकोनॉमी को पूरी दुनिया भर के लिए खोल देता है इंडिया, और मतलब क्या करता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ कर देता है कि अब वो अलग अलग सेक्टर्स में आके बिजनेस कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में आप आइए और बिजनेस करिए इंडिया में आके, ठीक है। इसी के साथ साथ और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट 1994 में, इन द ईयर 1994 गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी लेकर आती है, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी लेकर आ जाती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, भैया आइए प्राइवेट प्लेयर्स सारे के सारे आइए और क्या करिए, यहां पे इंडिया में आके आप बिजनेस करिए, इंडिया में आइए और बिजनेस करिए। ओके अब ये सारी चीजें चल रही थी, ये सारी चीजें चल रही थी, और इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आ जाती हैं और वो टेलीकॉम के सेक्टर में अपना बिजनेस करना चाहती थी, बिजनेस करना चाहती थी। तो उनको क्या था, पहले गवर्नमेंट ने उनको बोला कि भैया अगर आपको बिजनेस करना है इंडिया में आके तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट को लाइसेंस फी देनी होगी, आपको गवर्नमेंट को लाइसेंस फी देनी होगी, लाइसेंस फी प्रोवाइड कीजिए और बढ़िया आके इंडिया में आके बिजनेस कीजिए। जो कंपनीज थी, कंपनीज जो थी वहां यहाँ पे सारी कंपनीज को यहाँ पे ये लगा कि यार अगर लाइसेंस फी, अगर इतनी भारी भरकम लाइसेंस फी शुरुआत में दी थी तो हमारी कंपनी के और भी तो सारे काम हैं, बहुत सारे आगे के काम है, वो सारे के सारे काम अटक जाएंगे, ठीक है, कंपनी के वो सारे के सारे काम अटक जाएंगे। जैसे अभी हमें क्या करना था, अलग अलग सिटीज में हमें अपने ऑफिस खोलने हैं, ठीक है,
टावर्स खड़े करने हैं, अगर आपको वो करना है, अगर टेलीकॉम के सेक्टर में आना है तो आपको टावर्स खड़े करने हैं, अलग अलग सिटीज में ऑफिसेस खोलने हैं, लोगों को हायर करना है, उसके साथ साथ हमें ये सारे काम करने हैं, ये सारे काम हमको करना है। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट से ये सारी प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या बोलती हैं, गवर्नमेंट के पास ये प्रपोजल लेकर जाती हैं कि ये बोलती हैं कि सर आप हमसे शुरुआत में ये लाइसेंस फी मत लीजिए, ये लाइसेंस फी आप हमसे मत लीजिए शुरुआत में, बल्कि आप क्या कर लीजिए, आप हमसे रेवेन्यू शेयरिंग फी मॉडल पे आ जाइए। ठीक है, गवर्नमेंट पूछती है भैया अब ये रेवेन्यू फी शेयरिंग मॉडल क्या है, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि रेवेन्यू फी शेयरिंग मॉडल में क्या होगा कि कंपनियां, मतलब हम लोग जितना भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जितना भी हमारे पास पैसा आएगा, उसमें से, उस पैसे में से कुछ परसेंटेज हम आपको दे देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें शुरुआत में इतनी बड़ी लाइसेंस फी नहीं देनी पड़ेगी और आपको भी हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता जाएगा, गवर्नमेंट को भी हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट यहां पे मिलता जाएगा। गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 1999 में, इन द ईयर 1999, गवर्नमेंट शिफ्ट कर जाती है किस पे, रेवेन्यू फी शेयरिंग मॉडल पे। गवर्नमेंट किस पे शिफ्ट कर जाती है, रेवेन्यू शेयरिंग फी मॉडल पे शिफ्ट कर जाती है 1999 में, कि भैया ठीक है, जो भी आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कंपनियां जितना भी रेवेन्यू कमाएंगी, तो उस रेवेन्यू में से कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब इस रेवेन्यू शेयरिंग फी मॉडल में क्या था, टोटल दो चीजें थी, टोटल दो चीजें थी इस रेवेन्यू फी शेयरिंग मॉडल में। जो पहली चीज थी वो क्या थी, द फर्स्ट थिंग वाज एनुअल लाइसेंस फी, एनुअल लाइसेंस फी, आपको गवर्नमेंट को एनुअल लाइसेंस फी देनी पड़ेगी, विच वॉज अराउंड 8%, जो कितनी थी, 8% थी, मतलब जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 8% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये इसमें पहली चीज थी। एंड इसमें जो सेकंड चीज थी वो क्या थी, एस यू सी, द सेकंड थिंग वाज एस यू सी। एस यू सी इज व्हाट, एस यू सी इज स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस। ठीक है, पहला आपको क्या देना था, गवर्नमेंट को लाइसेंस फी आपको देनी थी विच इज अराउंड 8%, और दूसरा क्या था, आपको एसयूसी देना था, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस देने थे, विच इज अराउंड 3% टू 5%, ये वैरी करता रहता था। स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस ये वैरी करते रहते थे, 3% टू 5% पे वैरी करते रहते थे। ठीक है, ओके। अब ये सारी चीजें डिफाइन हो गई गवर्नमेंट के बीच में, और मतलब गवर्नमेंट का जो एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्लीज डिपार्टमेंट का नाम ध्यान रखना, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम था डीओटी। ठीक है, डिपार्टमेंट जिसका नाम था डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। So it was this department, Department of Telecommunication. It was established in the year 1985. 1985 में ये स्टैब्लिश हुआ था ये डिपार्टमेंट। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आता है डीओटी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी के अंडर में आता है ये डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी है, इसके मिनिस्टर कौन है अभी, हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर दिस मिनिस्ट्री, उनका नाम है रविशंकर प्रसाद, मिस्टर रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद। ठीक है, ओके। अब इनके बीच में ये ड्यूटी और जो टेलकोस थी, जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी थी, उनके बीच में ये हो गया कि भैया हम रेवेन्यू फी शेयरिंग मॉडल पे जाएंगे, और पहली चीज क्या रहेगी, हम एनुअल लाइसेंस फी देंगे आपको, डीओटी को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एनुअल लाइसेंस फी देंगे 8% की, और उसके साथ साथ स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस देंगे विच इज अराउंड 3% टू 5%। इतनी चीजें डिसाइड हो गई। बट अब यहां पे जो दिक्कत आई, ठीक है, जो यहां पे डिस्प्यूट हुआ, किसके बीच में, डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और इनके बीच में टेलकोस, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो किस चीज को लेकर होता है, उसको समझते हैं। यहां पे जो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ वो किस चीज को लेकर हुआ, वो हुआ एजीआर की डेफिनेशन को लेके। व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ दिस एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या होगी, उसको लेके दोनों के बीच में, डीओटी के बीच, डीओटी और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो थी सारी, उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। क्यों डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि दोनों, डीओटी एजीआर की डेफिनेशन अलग बता रहा था, और जो टेलीकॉस कंपनी थी वो एजीआर की डेफिनेशन अलग बता रही थी, दोनों एजीआर की डेफिनेशन को अलग अलग बता रहे थे। ठीक है, ओके। अब एजीआर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डीओटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डीओटी, ये जो एजीआर की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, इनके हिसाब से एजीआर की जो डेफिनेशन थी उसमें टेलीकॉम सर्विसेज थी, इट इंक्लूड्स
telecom services, it includes telecom services plus non-telecom services, plus non-telecom services. This is AGR definition according to DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से ये AGR की डेफिनेशन है कि भैया टेलीकॉम सर्विसेज में से भी हमें रेवेन्यू चाहिए और नॉन टेलीकॉम सर्विसेज में से भी हमको रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों होते क्या है, व्हाट इज दिस टेलीकॉम सर्विस एंड नॉन टेलीकॉम सर्विस, इसी को लेके पूरा डिस्प्यूट है, ठीक है। पूरा डिस्प्यूट इसी चीज को लेके चल रहा था। तो टेलीकॉम सर्विसेज, इसका मतलब ये होता है कि भैया आप अपने फोन में जो भी रिचार्ज करवा रहे हो, ठीक है, जो भी आप रिचार्ज करवा रहे हो, आप बात करने का, कॉलिंग का कोई रिचार्ज करवा रहे हो, आप इंटरनेट पैक डलवा रहे हो, ठीक है, आप मैसेज पैक डलवा रहे हो, इसके साथ अगर आप कोई भी कॉलर ट्यून डलवा रहे हो, तो ये सारी चीजें किस में काउंट होती हैं, ये सारी चीजें काउंट होती हैं टेलीकॉम सर्विसेज में, ठीक, ये सारी चीजें काउंट होती हैं टेलीकॉम सर्विस में। उसके साथ अब ये नॉन टेलीकॉम सर्विसेज क्या है, सो दिस नॉन टेलीकॉम सर्विस, इसमें क्या होता है, नॉन टेलीकॉम सर्विसेज में बाकी सारे तरह के रेवेन्यूज, ठीक है। मान लो कि अगर वोडाफोन है, ठीक है, वोडाफोन का अगर भोपाल में कोई ऑफिस है, भोपाल में कोई ऑफिस ओन करती है वोडाफोन, और वोडाफोन अपने भोपाल के ऑफिस को बेच देती है, किसी कंपनी को बेच दिया उन्होंने अपना भोपाल का ऑफिस वोडाफोन ने। अब इस यहां पे ऑफिस को बेचने से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ काउंट होगा नॉन टेलीकॉम सर्विसेज में, क्लियर है। उस ऑफिस को बेचने से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो किस में काउंट होगा, नॉन टेलीकॉम सर्विसेज में काउंट होगा, ओके। इसके अलावा जो कंपनीज हैं वो कई सारे टावर्स लगाती हैं, ठीक है, एक शहर में पता नहीं कितने कितने टावर्स लगाती हैं कंपनियां। अब इन टावर्स का बहुत सारा स्क्रैप मटेरियल होता है, ठीक है, लोहा रहता है, बहुत सारा इनका स्क्रैप मटेरियल जनरेट होता है। अब ये जो स्क्रैप मटेरियल है, ये जितना भी स्क्रैप मटेरियल जनरेट हो रहा है, इसको बेचने से भी कंपनियों को बहुत सारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, बहुत सारा रेवेन्यू यहां से भी जनरेट करती हैं। अब ये वाला जो रेवेन्यू है ये कहां पे काउंट होगा, सो दिस वुड बी काउंटेड इन दी नॉन टेलीकॉम सर्विसेज, ये भी किसमें काउंट होगा, नॉन टेलीकॉम सर्विसेज में काउंट होगा। इसके अलावा बाकी सारे सर्विसेज, ये टेलीकॉम सर्विसेज को छोड़ के जितने भी टाइप का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अगर मान लो कि जियो ने किसी कंपनी को लोन दिया, ठीक है, जियो ने किसी कंपनी को लोन दिया, अब उस लोन से उनको जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, लोन से जो भी इनके इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, वो इंटरेस्ट किस में काउंट होगा, वो नॉन टेलीकॉम सर्विसेज में काउंट होगा। सो मतलब कि यहां पे छोटी सी बात बस इतनी है कि अगर आप अपना जो भी रिचार्ज करवा रहे हो, जो भी इंटरनेट पैक डलवा रहे हो, जो भी मैसेज पैक डलवा रहे हो, जो भी डेटा पैक डलवा रहे हो, कोई भी टाइप की सर्विसेज है वो किस में काउंट होती है, टेलीकॉम सर्विसेज में, और बाकी सारी चीजें काउंट होती हैं नॉन टेलीकॉम सर्विसेज में, ठीक है। अब एजीआर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डीओटी, डीओटी यहां पे ये बोल रहा है कि भैया हमें तो इसमें से भी हिस्सा चाहिए और हमें तो इसमें से भी हिस्सा चाहिए, हमें दोनों में से शेयर चाहिए, हम दोनों में से शेयर लेंगे। मतलब अगर टेलीकॉम सर्विसेज में 200 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, टेलीकॉम सर्विसेज से अगर किसी कंपनी को 200 रुपीज का अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक, 200 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, प्लस नॉन टेलीकॉम सर्विस से अगर किसी कंपनी को 100 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो मतलब टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, 300 रुपीज, 300 रुपीज का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो यहां पे डीओटी ये बोल रहा है कि हमें तो जो रेवेन्यू का शेयर चाहिए वो इस 300 रुपए में से चाहिए, ठीक है, हम अकेला टेलीकॉम सर्विस से नहीं लेंगे, सबसे लेंगे। इसी को लेके पूरा डिस्प्यूट था, इसी को लेके यहां पे पूरा विवाद हो रहा था, क्लियर है। चलो अब देखते हैं आगे इसमें और क्या हुआ। अब जब गवर्नमेंट ने, जब डीओटी ने ये सारी चीजें बोली कि भैया हमें तो इसमें से ये पूरा सारा रेवेन्यू चाहिए, ये सारे में से हमको चाहिए, तो जितनी भी टेलीकॉम की कंपनीज थी, ठीक है, जितनी भी सारी टेलीकॉम की कंपनीज थी वो क्या करने लगी, वो सारी की सारी टेलीकॉम कंपनीज किसके, इसके अगेंस्ट में चली गई, डीओटी के अगेंस्ट में चली गई सारी की सारी टेलीकॉम कंपनीज, ठीक है, डीओटी के अगेंस्ट में चली गई सारी की सारी टेलीकॉम कंपनीज, ठीक है। सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अगेंस्ट में चले जाता है गवर्नमेंट के पास कि भैया डीओटी ऐसी अपनी मनमानी कर रहा है। गवर्नमेंट यहां पे क्या करती है, गवर्नमेंट यहां पे एक ट्राइब्यूनल सेटअप करती है, यहां पे गवर्नमेंट एक ट्राइब्यूनल बनाती है कि वो ट्राइब्यूनल क्या करेगी, इस पूरे मैटर को सॉल्व करेगी, पूरे मैटर को सॉल्व करेगी ये ट्राइब्यूनल, ठीक है, ओके। अब ट्राइब्यूनल यहां पे क्या करती है, 2015 में ये जो ट्राइब्यूनल बनाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, 2015 में अपना वर्डिक्ट सुनाती है, और ये ट्राइब्यूनल अपने वर्डिक्ट में बोलती है कि भैया जो एजीआर की जो डेफिनेशन है, जो डीओटी एजीआर की डेफिनेशन बता रहा है, वो एजीआर की डेफिनेशन गलत है।
जो डीओटी डेफिनेशन बता रहा है वो एजीआर की डेफिनेशन गलत है, मतलब कि टेलीकॉम सर्विस प्लस नॉन टेलीकॉम सर्विस, ये डेफिनेशन यहाँ पे गलत है। ठीक, अब जैसे ही इसका ये आता है, ये फैसला आता है उनका इस ट्राइब्यूनल का, तो यहाँ पे क्या होता है कि डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या करता है, इस फैसले के अगेंस्ट में, ट्राइब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट में कहां चले जाता है, सुप्रीम कोर्ट। इस ट्राइब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, एंड सुप्रीम कोर्ट से यहां पे क्या होता है, फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है कब, 2019 में, 24 अक्टूबर 2019 को यहां पे फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है कब, 24 अक्टूबर 2019। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट का यहां पे वर्डिक्ट ये आया कि जो एजीआर की डेफिनेशन है, एजीआर की जो डेफिनेशन है, जो डीओटी बता रहा है, वो डेफिनेशन यहां पे सही है। जो एजीआर की डेफिनेशन डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बता रहा है वो डेफिनेशन सही है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट एक बात और बोलता है कि सारी कंपनीज को, जितनी भी कंपनीज हैं, उन सबको अपना एजीआर का जो ड्यू है, जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो जितना ड्यू बन रहा है उन कंपनीज के ऊपर, ये सारा का सारा ड्यू आपको सबमिट करना पड़ेगा कब, बिफोर 23 जनवरी 2020। 23 जनवरी 2020 के पहले आपको अपना पूरा एजीआर का ड्यू सबमिट करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये वर्डिक्ट आता है तो कंपनियों में क्या होता है, कंपनियों में बहुत हड़कंप मच जाता है, कंपनियों में बहुत हड़कंप मच जाता है। और इसका कारण क्या था कि इतने टाइम का जितना भी एजीआर का जो वो बन रहा था, जितना भी ड्यू बन रहा था, इट वॉज अराउंड, द ड्यू वॉज अराउंड, द एजीआर ड्यू वॉज अराउंड 1.47 लाख करोड़। जब पूरा ड्यू निकाला गया कि कितना ड्यू बन रहा है कंपनियों के ऊपर, तो ड्यू कितना निकल कर आया, 1.47 लाख करोड़ का, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए का ड्यू निकल के आ रहा था कंपनियों के ऊपर। अब कंपनियों में क्या होता है, हड़कंप मच जाता है, कंपनियां यहाँ पे ये बोलने लगती हैं कि भैया इतना ड्यू तो हम सबमिट ही नहीं कर सकते, ठीक है, इतना ड्यू हम सबमिट नहीं कर पाएंगे, हम अपनी कंपनी बंद कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो हम रेवेन्यू जनरेट भी नहीं करते हैं जितना हमसे ड्यू मांगा जा रहा है। ठीक है, अब सारी की सारी कंपनीज किसके पास जाती हैं, डीओटी के पास जाती हैं, डीओटी से बोलती हैं कि भैया प्लीज यहाँ पे कुछ काम करिए, हम इतना ड्यू सबमिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहां पे क्या करता है डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, एक लेटर इशू करता है, और उस लेटर में क्या लिखा है, उस लेटर में यह लिखा था कि अगर कोई कंपनी 23 जनवरी 2020 तक, अगर कंपनीज 23 जनवरी 2020 तक अगर अपना ड्यू सबमिट नहीं कर रही हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 23 जनवरी 2020 तक ड्यू सबमिट करो। डीओटी ने यहां पे क्या बोल दिया, डीओटी ने बोला कि अगर नहीं सबमिट करते हैं कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को ये सारी बातें पता चलती हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही ये सारी चीजें सुनता है, सुप्रीम कोर्ट हो जाता है गुस्सा, सुप्रीम कोर्ट यहां पे गुस्सा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट यहां पे किससे इनको बोलता है, डीओटी को बोलता है यहां पे कि भैया आपने ये लेटर क्यों इशू किया, ये लेटर किस अथॉरिटी से आपने इशू किया था, क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट, हमने यहां पे एक वर्डिक्ट दे दिया था, और वर्डिक्ट क्या था कि भैया 23 जनवरी 2020 तक पूरा का पूरा ड्यू सबमिट करो, बट आप क्या करते हैं, आपने एक लेटर इशू कर दिया। ठीक है, और अगर आपको ये ड्यू नहीं चाहिए था, अगर डीओटी को ये ड्यू नहीं चाहिए था, तो आप फर्स्ट प्लेस में हमारे पास आए क्यों थे, सुप्रीम कोर्ट के पास आप क्यों आए थे, अगर आपको ये ड्यू चाहिए ही नहीं था। ठीक है, और भी सुप्रीम कोर्ट यहां पे बहुत सारी बातें बोलता है, मतलब बहुत फटकार लगाता है डीओटी को। इसके बाद क्या होता है, जो डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, अपने लेटर को विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, जो उन्होंने लेटर इशू किया था उस लेटर को विड्रॉ कर लेता है डीओटी, एंड उसके साथ साथ डीओटी क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट से अर्ज करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से ये अर्ज करता है कि कंपनियों के पास, जो भी टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनीज हैं, उनके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो 1.47 लाख करोड़ रुपीस वो अभी से एकदम से दे पाए। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट से बोलता है कि इन सारी कंपनीज को 20 इयर्स का टाइम दिया जाए, 20 साल का टाइम दिया जाए कि भैया ये अपना जो ड्यू है उसको सबमिट कर सकें, धीरे धीरे करके उस ड्यू को सबमिट कर सकें, ये ड्यूटी बोलता है। अब इसी उसमें फाइनली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनली वर्डिक्ट आया कब, लास्ट अगस्त 2020 में। ठीक है, अगस्त 2020 में यहां पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये बोला कि 20 साल, 20 इयर्स तो बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत लंबा टाइम होता है, हम यहां पे कंपनियों को 10 साल का टाइम दे रहे हैं। हम यहां पे जितनी भी कंपनीज हैं उनको 10 साल का टाइम देते हैं कि भैया आपके ऊपर जितना भी ड्यू बन रहा है, कंपनीज के ऊपर जितना भी ड्यू बन रहा है, वो पूरा का पूरा ड्यू आप 10 साल के अंदर सबमिट कर दो डीओटी के पास, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास आप पूरा का पूरा ड्यू सबमिट कर दो। क्लियर है,
ओके, इसके साथ साथ और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक बात और बोलता है कि हमें पता है कि अभी कोविड का टाइम चल रहा था, ठीक है? कोविड का टाइम चल रहा है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कोविड का टाइम चल रहा है। जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्लो हो गई है, इकोनॉमी ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो डीओटी है वो ये बोलता है कि भैया आप जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है, जो एजीआर की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो आपको कब तक सबमिट करनी है? आप 31 मार्च 2021 तक सबमिट कर सकते हो। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है विच इज अराउंड 10% की जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो आप कब तक सबमिट कर सकते हो? 31 मार्च 2021 तक। 2020 में आपको कुछ भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा था, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्लो डाउन था, तो आपको अभी रिबेट दे रहे हैं, थोड़ा सा रिबेट आपको दिया जा रहा है। आप जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 31 मार्च 2021 तक सबमिट कर सकते हो, ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बोला कि ये जो न्यूज है, ये जो एजीआर का जो इशू है, ये अभी मार्च में जब आपका बिल्कुल पीक टाइम आ जाएगा क्लैट का, तब ये फिर से न्यूज में रहेगा। इस टाइम पे ये फिर से न्यूज में होगा क्योंकि कई सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो ड्यू सबमिट नहीं कर पाएंगी, ठीक है? जो ड्यू नहीं सबमिट कर पाएंगी तब उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर क्या एक्शन लेता है वो एक देखने वाली बात होगी, ठीक है? सो दिस वाज द केस, दिस वाज द फुल एजीआर वर्डिक्ट। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने वर्डिक्ट में एक बात और बोलता है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट में यहाँ पे एक बात और बोलता है कि जो एजीआर का जो ड्यू है, कंपनीज को, सारी कंपनीज को एजीआर का ड्यू 2021 से लेकर 2031 तक, ठीक है? 2021 से लेकर 2031 तक 10 साल के टाइम पीरियड में आपको जो ड्यू है उसकी इंस्टॉलमेंट आपको हर साल 7 फेब के पहले पहले देनी है। हर साल की 7 फेब के पहले आपको अपनी इंस्टॉलमेंट डीओटी के पास जमा करवा देनी है, ठीक है? हर साल, मतलब जब भी साल आया 2022 आया तो 7 फेब के पहले इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी, ठीक है? 23 आया 7 फेब के पहले इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी, तो 7 फेब के पहले पहले आपको इंस्टॉलमेंट जमा करवा देनी है। वरना क्या होगा कि कोई कंपनी सबमिट कर रही है, कोई कंपनी सबमिट नहीं कर रही, वो बोलती है कि ठीक है हम दिसंबर में सबमिट करेंगे। इसलिए यहाँ पे एक डेडलाइन दे दी है कि इस डेडलाइन के पहले पहले आपको जो ड्यू है, जो आपके ऊपर जो ड्यू बन रहा है, जो इंस्टॉलमेंट आ रही है, वो इस डेट के पहले पहले आप सबमिट करवा दो, ठीक है? और अगर कोई कंपनी यहाँ पे फेल हो जाती है, वो इंस्टॉलमेंट सबमिट नहीं करवा पाती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उन पे फर्दर एक्शन लेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे फर्दर एक्शन लेगा, ठीक है? सो दिस वाज ऑल दी एजीआर इशू, दिस इज दी एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इशू। क्लियर हुआ? सारी चीजें क्लियर हैं इस एजीआर में? कोई डाउट हो पूछ लो। गाइस एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, क्वेश्चंस करें इसके? चलो चलो, क्लियर है? ओके, चलो लेट्स डू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, डेफिनेशन ऑफ एजीआर कंप्राइजेस, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, जो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2019 में आया था, उसके हिसाब से एजीआर की डेफिनेशन क्या है? उसके हिसाब से एजीआर की डेफिनेशन क्या है? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से एजीआर की डेफिनेशन क्या है? गुड गाइस। शुभी, नो बच्चे, शुभी ए कैसे होगा? एजीआर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या है कि उनको टेलीकॉम सर्विसेज का भी रेवेन्यू देना है, प्लस नॉन टेलीकॉम सर्विसेज का भी रेवेन्यू आपको शेयर करना है, ठीक है? डीओटी के साथ ये दोनों रेवेन्यू आपको शेयर करने हैं, ठीक है? सो बोथ ए एंड बी, बोथ इज द राइट आंसर। यहां पे जो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
What is the time given by Supreme Court to the telecom companies to clear their AGR dues redacted as X in the above passage? कितना टाइम दिया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज को कितना टाइम दिया है यहाँ पे कितना टाइम दिया गया है यहाँ पे कंपनीज की सॉरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंपनीज को कि भैया इस टाइम के पहले पहले आप अपना जो पूरा ड्यू है वो सबमिट कर दो कितना टाइम दिया है सो द राइट आंसर इज व्हाट इज द राइट आंसर कितना टाइम दिया है डीओटी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने कितना टाइम मांगा था उन्होंने 20 साल का टाइम मांगा था कंपनीज के लिए सारी टेलीकॉम कंपनीज के लिए 20 साल का टाइम मांगा था बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कितना बोला है कि 10 साल का टाइम दिया जा रहा है ठीक है सो द राइट आंसर वुड बी 10 ईयर्स 10 साल क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन What was the bench strength of the Supreme Court in the above verdict? अब यहाँ पे ये bench strength की यहाँ पे बात कर रहा है ठीक है अब ये वाला पॉइंट मैं बता नहीं पाया था तो यहाँ पे जो बेंच थी वो टोटल 3 जजेस की बेंच थी ठीक है टोटल 3 जजेस की यहाँ पे बेंच थी ठीक है ये जो फाइनल वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का इसमें टोटल 3 जजेस की बेंच थी एंड 3 जजेस की बेंच को क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है फुल बेंच ठीक है इसको फुल बेंच बोला जाता है 3 जजेस की बेंच को फुल बेंच बोला जाता है और अगर किसी केस में अगर 2 जजेस होते हैं अगर किसी केस में 2 जजेस होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है डिविजनल बोला जाता है किसी केस में अगर 2 जजेस होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है डिविजनल बेंच बोला जाता है ठीक है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन what percentage of dues need to be paid upfront by the telcos to avail the benefit from the staggered payment schedule कितना उनको ड्यू सबमिट करना है कितना ड्यू सबमिट करने को बोला गया है कि भैया आप इतना ड्यू सबमिट कर दो और क्या करो कि आपको सारी जो चीजें आपको उसका सारा बेनिफिट मिल सके मतलब कि आप 10 साल में पूरा अपना जो भी ड्यू बन रहा है उसको सबमिट करो तो कितना ड्यू सबमिट करने के लिए बोला गया है व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर कितना ड्यू सबमिट करने के लिए बोला गया है सो द राइट आंसर इज 10% 10% का ड्यू सबमिट करने के लिए यहां पे बोला गया है ठीक है कि भैया 10% का ड्यू है उसको वो कर दो सबमिट कर दो और वो हो जाओ ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन अब ये बहुत आसान सवाल है यार ठीक है बहुत आसान सवाल है इसको अपन हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन पहले ही शुरुआत के टाइम पे बोर्ड पे पहले ही लिख दिया था मैंने यहाँ पे कौन है करंट मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्टर सॉरी कम्युनिकेशन मिनिस्टर सो द करंट कम्युनिकेशन मिनिस्टर इज रविशंकर प्रसाद रविशंकर प्रसाद क्लियर है रविशंकर प्रसाद ठीक है समझ में आया मगज में आया सारी चीजें क्लियर हुई ठीक है ऐसे आपको पढ़ाई करनी है ऐसे आपको एक एक टॉपिक को लेके हुए चलना है ऐसे आपको एक एक टॉपिक को कंक्लूड करना है ठीक है अब क्लैट जो है वो आप सबने देखा होगा 2020 वाला जो पेपर है वो पूरा आप सबने स्टडी किया होगा एंड उस पेपर में क्या था उस पेपर में मुश्किल से कितने 7 टॉपिक्स आए थे ठीक है 7 पैसेजेस पूछे गए थे 7 टॉपिक्स थे बट वो 7 पैसेज क्या थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पैसेजेस थे ठीक है ईयर के वो सबसे इंपॉर्टेंट पैसेजेस थे जो क्लैट में पूछे गए थे क्लैट 2020 में तो अब आपको क्या करना है कि किसी एक टॉपिक को उसके पूरी डेप्थ में आपको जाना है ठीक है उसकी डेप्थ एनालिसिस करनी है उस टॉपिक की तब जाके वो पूरा टॉपिक आप कवर कर सकते हो तब जाके अगर उस टॉपिक पे बेस्ड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तब आप उन 5 क्वेश्चन को कर सकते हो क्लियर है यस सर आई शेयर मैं शेयर कर दूंगा ठीक है अभी जैसे ही अपना ये सेशन एंड होगा तो इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ठीक है सेशन के तुरंत बाद मैं शेयर कर दूंगा yes Varsha he is also the law minister Ravishankar Prasad he is also the law minister
ओके, चलो, सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब लास्ट सेशन का यहाँ पे टाइम होने वाला है आपका। जल्दी आपका लास्ट सेशन शुरू होगा। सो आई थिंक आपको मैंने यहाँ पे जो टॉपिक समझा है, अब क्लैट हमसे ऐसी डिमांड कर रहा है आजकल, मतलब 2020 वाले पेपर को देखते हुए ये लग रहा है कि अब जो टॉपिक है उसको एकदम इन डेप्थ में जाके कवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी टॉपिक उठाया, उसको 5 मिनट 10 मिनट में खत्म किया और वो टॉपिक फिनिश हो गया। नहीं, अगर 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक पे, बेस पांच चार पांच क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं, तो उन 4 5 क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? वॉट, वाई, वेन, वेयर, हाउ। ये पांचों चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी, आपको उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, आपको उस टॉपिक की डेप्थ में जाना पड़ेगा, तभी जाके आप पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है? सो आगे से आपकी जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी किसी टॉपिक को पढ़ने की, वो ऐसी ही रखना। उसका बिल्कुल एक एक चीज, उसको पूरी एक एक चीज को समझने की कोशिश करना कि जो टॉपिक है उसकी व्हाट क्या है, वाई क्या है, व्हेन क्या है, वेयर क्या है और हाउ क्या है। क्लियर है? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अपन, ठीक है? चलो बाय गाइस, टेक केयर, टेक केयर।
कर दिए, ठीक है. So, hi everyone, and good evening to one and all. This is Karan Mehta, one of the directors of LegalEdge Tutorials, standing before you to have a session on managing comprehensions under critical reasoning, and the same techniques I'm sure will be helpful in cracking the reading comprehension section as well as the legal comprehension section as well. So, largely, I'll be focusing on managing comprehensions as a whole. ठीक है. सो मैनेजिंग कॉम्प्रिहेंशन एज अ होल में अब ये जो हम चीजें सीखेंगे, ये पर्टिकुलर चीजें विल बी हेल्पफुल फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस एंड द लीगल रीजनिंग सेक्शन एज वेल. So I hope you have your notebooks with you because I'll be making you write a lot of notes in today's session. I'll repeat, मैं अपने सेशन की पीपीटी या पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा. It's more on the theoretical side of this session. I'm sure that Harsh has taken a few practice sessions with you. And this being the 2021 session and our first marathon for the 2021 session. So I'll just be speaking on a lot of theory around comprehensions. सेकेंड, मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मेरी जितनी चीजें मेरे पीपीटी में लिखी हुई हैं, यू राइट डाउन दैट एंड ऑल्सो उसके अराउंड जो मैं तुमसे नोट्स बनवाऊंगा या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ नोट्स बनाने हैं, प्लीज मेक दोस. आई विल ऑल्सो बी क्लोजिंग द लाइव चैट ऑप्शन. आई रिपीट, I'll also be closing the live chat option. I don't want any disturbance during this particular session. This largely will be one to many kind of a session. ठीक है. And for all legal students, मैं ये सेशन की कॉपी तुम्हारे प्लेटफॉर्म में भी अंदर इसको एम्बेडेड करवा दूंगा. ठीक है. सो दैट यू मे वॉच इट मल्टीपल टाइम्स एज वेल. और इसके टाइटल के साथ दो तुम उसको यहां भी देख पाओगे ऑब्वियसली, बट वो वहां भी अवेलेबल रहेगा. ठीक है. सो आई होप दैट द बेसिक्स आर क्लियर. हम सेशन को किस तरीके से लेके जाएंगे, आई रिपीट, मैं लाइव चैट को मैंने क्लोज करने को बोल दिया है. तो आई होप दैट द लाइव चैट इज ऑलरेडी क्लोज. यस, आई हैव गॉट अ थम्स अप फ्रॉम देयर. सेकेंड, आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइज टू बी मेकिंग अ लॉट ऑफ नोट्स. तो जितनी चीजें मेरी पीपीटी में लिखी हुई हैं, तुम उतनी तो कॉपी करोगे. उसके अलावा उसके अराउंड तुम्हें जितने और अपने नोट्स बनाने, मतलब जितनी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, इन केस यू वांट टू पेन देम डाउन अराउंड योर ओन नोट्स, प्लीज डू दैट. दोज वुड बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल. एंड जो आज हम बातें करने वाले हैं, आई वॉन्ट दिस टू बी रजिस्टर्ड इन योर मेमोरी परमानेंटली. और ये एक ऐसा सेशन होगा दैट यू गाइस शुड बी वॉचिंग इट पीरियोडिकली. मतलब एवरी 3 to 4 वीक्स जब भी तुम्हें कहीं कुछ कॉम्प्रीहेंशन के अराउंड चैलेंजेस आने लगे, आई एम श्योर तुम आज कुछ सीखोगे. ठीक है. अगले 3-4 हफ्ते में उसको भूल जाओगे. सो 3 हफ्ते बाद ये वाला सेशन फिर से देख लेना, क्योंकि ये वो बातें हैं जो तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आएंगी, बट धीरे 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 जैसे तुम आज जो टेक्निक सीखोगे उसको यूज करोगे, and then after a few days you would again need to come back and revisit all the points that we would be discussing in today's session. So I hope that we are all sorted, and let's start with the session. I hope that the notebooks and the pen is ready as well. ठीक है. So तुम लोग भी पानी पीते जाना, मैं भी अपना पानी पीते जाऊंगा. मुझे बहुत देर तक बोलना है. कहीं अगर कुछ मुझे लगेगा तो मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा, पर मुझे लार्जली लगता नहीं है कि मेरे पास बहुत ज्यादा कोई व्हाइट बोर्ड यूज करने के लिए होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यस. सो आज के पूरे सेशन का फ्लो चार्ट क्या होगा, हम इन 5 चीजों पे बातें करेंगे. सो द फर्स्ट फेज ऑफ द कंप्लीट सेशन विल बी एन इंट्रोडक्शन अराउंड द comprehensions. Second, we would discuss some time saving techniques कि किस तरीके से we can minimize our time while reading comprehensions as well as reaching the right answer. The third is a 5-step process to destroy comprehensions. तुम किस तरीके से एक comprehension को पूरी तरीके से ऑपरेशन कर सकते हो.
The next is kind of pro tips, cheat codes and strategies to be used while attempting comprehensions. Critical रीजनिंग बेस्ड हो, ठीक है, तो अच्छी बात है. बट अगेन मैं तुम्हें डे वन से बोल रहा हूं, द टेक्निक्स दैट यू यूज टू सॉल्व द क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, those techniques can be used to solve any comprehension across English language, and the next is your legal comprehensions as well. Then the last is your speed reading techniques. Okay, how to increase your speed and the importance of reading at a faster pace. Okay, so start करें. Just a second. I think I have got uh, a wait from the studio team. I should be waiting for some time. ठीक है, so I'll be waiting for a minute. So ये अपना पूरा फ्लो चार्ट रहेगा. This is how we would be proceeding. मैं स्टार्ट करूं? बता दें, ठीक है, एक साथ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, cool. I have received a thumbs up from them. संतोष पाई देना please. चलो, let's start with the introduction and then move on to some time saving techniques. Write everything down. Then the 5-step process to destroy comprehensions. Then we move to pro tips, cheat codes, and the strategies. And last but not the least would be the speed reading techniques. So, let's get started with introduction. So, the first thing that all of you will need to understand, जो कि मैं already तुम्हें बता चुका हूं, apply everything that is being taught. मेरी बातें सुनने में आज ठीक लगेगा, बट वो सारी की सारी बातों को अप्लाई करने में यू विल नीड टू पुट अ कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है, और कॉन्शियस एफर्ट ऑन अ डेली बेसिस, नॉट जस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर में, बट इवन वाइल रीडिंग अ न्यूज़पेपर. If you really want to destroy comprehensions, you would need to take comprehensions extremely sincerely. और sincerely से मेरे का मतलब ये है that you should not be waiting to apply these techniques in a mock test paper or an assignment, but daily जो तुम न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो उसमें भी ये टेक्निक, एज इन न्यूज़पेपर रीडिंग में, or for any matter you are reading a novel or a magazine or an article or a newspaper, कहीं भी तुम अगर कुछ कर रहे होगे, the technique has to be used. Because क्यों मैं बोल रहा हूं टेक्निक यूज करने के लिए, क्योंकि जब तक टेक्निक को अप्लाई करना विल बी अ हैबिट. एल्स तुम आज मेरी बात सुनोगे और एज आई सेड विद इन अ फ्यू वीक्स भूल जाओगे. अगर तुम उसको अप्लाई करते रहोगे और इस पूरे सेशन को हर 2-3 हफ्ते में रिवाइज करते रहोगे, आई एम श्योर यू विल सी अ मैसिव इंप्रूवमेंट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. एंड जब तुम्हें वो इंप्रूवमेंट दिख जाए, come back to this session and just thank LegalEdge team for this. Now, the most important is apply everything. जो आज मैं बोल रहा हूं, everything that will be taught. The second, इस पूरे सेशन का आउटकम क्या होना चाहिए, मतलब at the end of it तुम्हारे पास क्या टेक अवे होगा. तुम्हारे पास एक फ्रेमवर्क होगा, ठीक है. You will get a framework. That framework has to be applied to comprehensions, any type of reading that you will be doing from tonight. आज रात से ही तुम जो करोगे, the framework has to be applied. Next, you would be getting better and smarter reading techniques. Make as many notes as you can. ये मैं तुम्हें already बता चुका हूं. Now let's get started. CLAT or law entrances, or rather I would say CLAT, test you on passages, right? 3 sections होते हैं, reading comprehensions, critical reasoning and legal comprehension as well. So reading comprehension, yes, तुम्हें वहां पे English language में तुम्हें you will get a lot of RCs in a lot of previous papers. Law entrances या फिर other management and any other entrance, you will find comprehensions everywhere. Legal comprehension, एक मिनट, excuse me, yeah, लीगल कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा, और क्रिटिकल रीजनिंग में जो कॉम्प्रिहेंशन है, दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू फाइंड.
because passages generally critical reasoning में I think CLAT would be only one of the few papers across the world जहाँ पे CR में passages आते हैं. Else the mother of CR is known as GMAT, है ना, the examination, और वहां पे paragraphs आते हैं. बेसिकली पैसेजेस कुछ नहीं होते, पैराग्राफ्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं, जब मैं 3 या 4 पैराग्राफ्स को कंबाइन कर दूंगा, व्हाट आई गेट इज अ पैसेज. So the techniques for solving CR, or for that matter, any other comprehensions that you read or understand via GMAT questions will be the technique that can be applied to passage based as well. And GMAT वाले questions पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि मदर ऑफ CR तो वही है. ठीक है. Now, next is the next point that we need to understand is active reading versus passive reading. A lot of us read newspapers or read our stuff as passive readers. Passive reading doesn't make any sense. You need to be an active reader. Now, what do I mean when I say an active reader? कितनी बार हम सिर्फ रीड करते हैं फॉर द सेक ऑफ रीडिंग. तुमने ये नोटिस किया होगा, या कुछ लोग जिन्होंने क्लैट 2020 की प्रिपरेशन भी की होगी, यू मस्ट हैव रेड अ लॉट, बट कहीं तुम्हें रीडिंग में इंप्रूवमेंट नहीं दिखा. क्योंकि तुमने रीडिंग इस पर्पज से की, किसी ने बोल दिया कि यार रीड करना है, बस फैकल्टी ने बोल दिया, सर ने बोल दिया कि रीड करना है, इसलिए हम बस रीड करने बैठ जाते हैं. तो जब हम विदाउट एनी टास्क, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी डायरेक्शन अगर हम रीड करने बैठ जाते हैं, दैट इज नोन एज पैसिव रीडिंग. बट इन अ टेस्ट पेपर यू नीड टू बी एन एक्टिव रीडर. एक्टिव रीडर का मतलब, फर्स्ट यू हैव अ पर्पस ऑफ रीडिंग. You already know what you are reading, the topic that you are reading. Secondly, तुम्हें उससे gain क्या करना है. I mean, after spending 15 minutes of reading, what the outcome should be. Active reading is time based. Time based का मतलब, तुमने अगर एक न्यूज़पेपर लेके बैठे हो या एक आर्टिकल लेके बैठे हो, उसकी एक डेडलाइन अटैच करो कि ये आर्टिकल मेरा अगले 10 मिनट्स में, 12 मिनट्स में, 20 मिनट्स में रैप अप हो जाना चाहिए. आई कैन नॉट सिट एंड रीड एंड इनफाइनाइट टाइम, बिकॉज इनफाइनाइट टाइम में तुम्हें जो गेन करना है वो नहीं होगा. यू विल गेट लेजी. मे बी शायद 10 मिनट्स की रीडिंग को तुम 20-25 मिनट्स में रैप अप करोगे. वहीं अगर तुम एक एक्टिव रीडर बन जाओगे, तुम 20-25 मिनट्स का काम 10-12 मिनट्स में रैप अप कर दोगे. एंड यस, you will be learning a lot because you will understand कि मैंने जो टाइम सेट अपने लिए किया था. let's see, largely तुमने एक पैसेज उठाया, लेट्स से स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, एंड तुमने वो आर्टिकल देखा कि ये आर्टिकल स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है. मुझे लग रहा है दैट ये आर्टिकल को पढ़ने में आई माइट नीड अराउंड 12-13 मिनट्स. बट एट द एंड ऑफ 10 minutes you realize that your time calculated was wrong and you actually needed 17 or 18 minutes. So धीरे धीरे क्या होगा, अगर तुम इस टाइप की डेडलाइंस रखते जाओगे, योर माइंड विल ऑटोमेटिकली ट्रेन इटसेल्फ, ताकि तुम एग्जामिनेशन में भी जाके जो एस्टिमेटेड टाइम है उसको राइटली जज करो. सो बोलते ना, एवरीथिंग हैज टू बिगिन एट होम फर्स्ट. सो एनीथिंग दैट यू रीड शुड हैव अ पर्पस, एंड लार्जली उसका एक टाइम, उसका एक एंड टाइम होना चाहिए. 99 of the students are 91% of the students are passive readers. Don't be a passive reader. Let's ensure that we start active reading from tonight. Again, active reading का एक और मतलब हो सकता है, जब रीड कर रहे हो तब होश में रहो, मतलब यू आर नॉट लॉस्ट इन सम अदर वर्ल्ड. आइडियली जब तुम रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, योर फोन्स, योर नोटिफिकेशन, एवरीथिंग शुड बी केप्ट फार अवे. तुम्हें उस समय कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें कहीं ना कहीं एक एक्टिव रीडर से पैसिव रीडर बना देगा, क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, राइट. सो एक्टिव रीडिंग के लिए यू नीड नो डिस्टर्बेंस, यू नीड एन एंड टाइम, you need certain deadlines, and trust me, your whole efficiency of reading will increase. Be it a reading comprehension in the English language section, be it a critical reasoning comprehension in the CR section, or be it a legal reasoning comprehension, or be it any article across any website on the web, a newspaper article, any novel, anything. So I hope, very important point, the difference between an active reader and a passive reader, you have to be an active reader. At the end of every reading session, ask yourself, did you read it actively or passively? If you're getting an answer yes for reading it passively, I'm so sorry, your reading hasn't made any sense. You should become an active reader.
जो एन एक्टिव रीडर विल नॉट हैपन ओवरनाइट. तभी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है. सर, आई एम रीडिंग अ लॉट, बट मे बी यू आर बीइंग अ पैसिव रीडर, यू आर नॉट बीइंग एन एक्टिव रीडर. सो तुम जितने एक्टिव रीडिंग के सेशंस पे बैठोगे, उतना ज्यादा तुम्हें तुम्हारे सेशन का आउटकम मिलेगा. बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर मैं रीड कर रहा हूं, सर मैं 4 महीने से रीड कर रहा हूं, 5 महीने मुझे रीडिंग को हो गए, बट आई कैनॉट सी एनी डिफरेंस. All those kids have been behaving like passive readers. Clear? Active reading versus passive reading. Ultimately, you are a CLAT test taker or you are a test taker. ठीक है, तुम्हें एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो एट टाइम्स यू माइट नॉट डाइव इनटू द पैसेज, एकदम पैसेज में घुसना नहीं है इन द मॉक टेस्ट. मेकल से प्रैक्टिस करते समय कर सकते हो, बट जो प्रैक्टिस वाली अप्रोच होगी, वेयर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, going a little slowly, maybe just to have a better understanding of the passage, this might not be helpful in the final examination say rather in your mock test. In your mock test or your practice test, your test, मैं test की बात पे आ गया हूं अब. In your practice test, you just have to behave like a test taker. Even if you don't dive into the passage, तुम एकदम passage में घुस नहीं जाओगे, still you will be able to solve questions. You won't believe क्लैट 2020 में रीजनिंग में 2-3 पैसेजेस ऐसे थे कि मुझे पैसेज पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस. वो इतने कॉमन सेंस बेस्ड थे. ठीक है, सो इट हैपेंस, एंड स्पेशली व्हेन योर आर्टिकल्स आर कमिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स एंड द फेमस मैगजीन्स, मतलब ऐसे टेक्स्ट जो कि बहुत लोग पढ़ते हैं, और जो आर्टिकल्स चूज होते हैं लार्जली वो काफी बार थोड़े कॉमन टॉपिक्स पे भी होंगे. क्योंकि वो कॉमन टॉपिक्स पे होंगे, that's the reason you might be able to answer a few of them without reading the passage in depth. And वैसे भी क्योंकि तुम एक टेस्ट टेकर हो, है ना, तुम कोई एनालिस्ट नहीं हो. So there's a difference between an analyst and a test taker. Many a times you can behave like an analyst while going through a lot of practice, while reading comprehensions, taking some extra notes, but when you are behaving in that test paper, तुम संडे को, you have a mock test every Sunday, right? At LegalEdge, you have a mock test every Sunday. तो जब तुम कल मॉक टेस्ट लिखोगे, कल संडे है, जब तुम कल एक मॉक टेस्ट लिखोगे, सो प्लीज उस पैसेज में डूब मत जाना. टेस्ट टेकर हो, आंसर लेके आना है बस. एनालिसिस करना है टेस्ट के बाद करना. ये भी गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं. एंड यस, द लास्ट पॉइंट ऑन दैट स्लाइड इज अ लॉट विल डिपेंड ऑन यू. Everything, in fact, a lot is a wrong word. I would say everything depends on you. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. ये सेशन अभी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे. कितने देख रहे हैं अभी? आई थिंक 430 odd right now. And ये eventually thousands of kids would be watching this. Thousands of kids would be attending this whole marathon session over the next few days. मेरी बात सुनेंगे सब, इंप्लीमेंट बहुत ही कम लोग करेंगे. एंड मेरी बात ध्यान रखना, अगर इस पूरे सेशन की हेल्प से अगर एक स्टूडेंट पे इंपैक्ट आ गया, द जॉब ऑफ द सेशन इज डन. एक स्टूडेंट पे अगर इंपैक्ट आ गया, अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम वो स्टूडेंट बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो. तो पहली स्लाइड में मैं तुम्हें ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज एक्टिव रीडिंग. ठीक है, you have to become an active reader. The second point was you have to behave like a test taker while attempting the mock. तुम्हें एनालिस्ट की तरीके से बिहेव नहीं करना. एक्टिव रीडिंग के टाइम तुम शायद थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा डीप में जाके अंडरस्टैंड कर सकते हो. एंड एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन यू. तुम किस तरीके से अपने अगले 8 odd months को प्लान करते हो, whether you are actually reading or not. Are you, in case you have taken a year break, I'm sure you guys should be reading at least 3 hours every day. If not at a stretch, you can divide your time between 1 hour in the morning, 1 hour in the afternoon, and an hour in the evening. 3 hours divided, and then you may take it forward. And the best part is the newspapers. Now, the next is, as I said, you would be learning a lot of things today. Implement it from tonight, tomorrow, and even after. Fine. Now, let's get started. कितनी बार ऐसा होगा that you will get some random topics which are very difficult to comprehend. But तुम्हें ये समझना है, तुम्हें
टेस्ट पेपर में लगेगा कि मैं वो रैंडम टॉपिक्स को छोड़ दूं, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दो, बट वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग, जब तुम अपने डेली रूटीन में आते हो, यू शुड रिमेंबर द टॉपिक दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन दैट वेरी टेस्ट पेपर। वो टॉपिक पे आओ, प्रैक्टिस सेशंस के टाइम थोड़ी सी रिसर्च करो एंड गेट दैट टॉपिक सॉर्टेड। टेक एन एग्जाम्पल, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा। I'll just give you a very small example. तुम मुझे अगर कोई स्पोर्ट्स का कॉम्प्रिहेंशन दोगे, I might understand it a lot better than let's say a comprehension on international politics. I'm not into politics, but I'm a lot into sports. So author अगर दो तीन लाइन बता देगा, तो I'll be able to understand or grasp the next 6 lines as well. एक स्पोर्ट्स का अगर मुझे पैसेज मिलेगा, आई विल बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू। बट अगर मुझे तुम एक इंटरनेशनल एक मिनट, हाँ, तुम अगर मुझे एक इंटरनेशनल बिजनेस का एक पैसेज दे दोगे, आई माइट नॉट बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अगर मुझे ये समझ में आ गया है दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज माय वीकनेस एंड आई एम अ टेस्ट टेकर, मुझे अगले 4-5 दिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अराउंड बहुत सारी रिसर्च करनी चाहिए। मे बी इन द नेक्स्ट 2 to 3 weeks आई वुड बी लिटिल बेटर विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसकी जो जनरल नॉलेज अराउंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, अगर वो मुझे आ गया, सो ऑब्वियसली जब कोई अगला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पैसेज होगा, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट अ लॉट बेटर, क्योंकि बिकॉज आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ इट। सो किसी भी टॉपिक का बैकग्राउंड होना is always a big plus, is always a big plus. So, and that is why you should be writing a lot of mock tests. That is why you should be reading a lot. Try and identify the topics or the areas in which you are extremely uncomfortable. And then उन topics पे जाके, उन areas पे जाके research करो. That will be very helpful for you. ठीक है? Next. हाँ, very interesting point. Call it a big no or wow. Basically, कोई हमने अगर एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक उठाया, यू मे कॉल इट अ बिग नो, ये चीज मुझसे नहीं बन रही, वर्सेस यू कैन कॉल इट अ वाओ, ओके, ये चीज मुझसे नहीं बन रही है, लेट मी गो बैक, रिसर्च ऑन दिस एंड गेट बैक टू इट। सो तो एक तुम एक चीज को जो बिग नो था, वो एक वाओ फैक्टर में कन्वर्ट हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट योर प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट। प्रिपरेशन का मतलब, लेट अस थोड़ा सा अपन ये समझते हैं, प्रिपरेशन का मतलब ही ये होता है कि तुम्हें जो चीजें नहीं आती हैं, तुम उसको सीखो, उसको समझो। जब तक तुम्हें जो चीजें नहीं आती, जो टॉपिक्स नहीं आते, जो सब टॉपिक्स नहीं आते, जो चैप्टर्स समझ में नहीं आते, जो टाइटल्स समझ में नहीं आते, जब तक तुम्हें वो सारी चीजें जो समझ में नहीं आती है, जब तक वो समझ में आने नहीं लगेंगी, तो फिर प्रिपरेशन का मतलब ही क्या हुआ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनको जो आता है वो उसी को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और जो नहीं आता, दैट इज अ बिग नो फॉर देम। सजेशन फ्रॉम आवर साइड, अ बिग नो किसी के लिए मत करना, स्पेशली अंडर कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग। इफ यू आर गेटिंग टॉपिक्स दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, गो बैक एंड रिसर्च, अपने बिग नो को वाओ पे कन्वर्ट करो। एवरी बिग नो शुड बी कन्वर्टेड इनटू वाओ, एंड यू हैव 8 months फॉर इट। ओवर द नेक्स्ट 8 months तुम अपने बिग नोस को अगर वाओ पे कन्वर्ट कर दोगे, आई एम श्योर तुम बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशंस एंड बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत डीप में पढ़ लोगे। एंड ये बिग नो से वाओ कन्वर्ट जो तुम करोगे फॉर कॉम्प्रिहेंशंस, इट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द करंट अफेयर्स सेक्शन एज वेल। करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज भी वहां से मैसिवली इंप्रूव होगा। सो देखो, तुम कुछ कुछ चीजें विल हैव एन ओवरऑल इंपैक्ट। सो आरसी इंप्रूव होगा, क्रिटिकल रीजनिंग इंप्रूव होगा, करंट अफेयर जीके इंप्रूव होगा, यस, लीगल एस्पेक्ट वाले लीगल कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होंगे। एंड द बेस्ट पार्ट विल बी, यू विल हैव 4 पाइप्स वर्किंग फॉर यू। एक पाइप से पानी ज्यादा आ रहा है, दूसरे से भी आएगा, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, एंड ओवरऑल इट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द टोटल स्कोर। So then with these techniques or with these ways, we are not looking at improving just one section, but 4 odd sections. So samjho, if it starts working, it will have such a large impact. So nothing should be a big no. Let's assure ourselves that we convert that big no into a wow factor.
नेक्स्ट पॉइंट, इट सेज कनेक्ट द डॉट्स। कनेक्ट द डॉट्स का मतलब क्या है? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्ट द डॉट्स? कनेक्ट द डॉट्स का मतलब अ पैसेज विल हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, एंड अगेन ये सिर्फ हैबिट से ही होता है। आज रात को तुम जो कॉम्प्रिहेंशन रीड करोगे, अ कॉम्प्रिहेंशन विल हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। देयर विल बी अ मेन पॉइंट, देयर विल बी अ बैकग्राउंड ऑफ द पैसेज, देयर विल बी अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। उन सबको अगर तुम बाइफरकेट कर पाओ कि क्या मेरे पैसेज का मेन पॉइंट है, क्या मेरे पैसेज के मेन पॉइंट के सपोर्ट में लिखे गए हैं, क्या मेरे पैसेज के इंप्लीकेशंस हैं, या लेट्स से द आउटकम ऑफ द पैसेज है, और क्या इस मेन पॉइंट का बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड है, पैसेज का मेन पॉइंट है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, एंड फिर कंक्लूजन है। तो अगर मैं इसको एक छोटे तरीके से बता पाऊं, लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट हियर। सो पहले होता है बैकग्राउंड ऑफ द थिंग। ठीक है, बैकग्राउंड से बनेगा मेन पॉइंट। मेन पॉइंट को और सपोर्ट करने के लिए, जस्ट टू पुट मोर कॉन्फिडेंस ऑन द रीडर, more confidence on the reader, I'll use something known as supporting statements. Supporting statements से क्या होगा? Confidence बढ़ेगा रीडर का। एंड देन जब मैंने सपोर्ट कर दिया, लास्ट इज माय implication of this, or rather the conclusion, कि या मेरा रिजल्ट क्या निकाला, या मेरा पूरे पैसेज का आउटकम क्या है। सो कोई भी ऑथर इन इसी फ्रेमवर्क पे, पैसेज पे काम करता है। You would need to connect the dots. First, understand the dots and then spend time connecting it. पैसेज को पढ़ते, जो मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, वो एक बहुत सबकॉन्शियस लर्निंग है। जब तक तुम एफर्ट नहीं मारोगे वो होगा नहीं। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में बड़ा मैजिकल सा लग सकता है, बट जब तक ये अप्लाई नहीं होगा तब तक उससे मजा नहीं आएगा। The next point is very, very, very important. If you don't train yourself, the untrained will take time. Now, if you don't train yourself, ठीक है, हम्म, the untrained will take time, इसका क्या मतलब है? Untrained will take time का मतलब ये है that a lot of students, in fact every student feel कि comprehension पे training की क्या जरूरत है, मैं ज्यादा reading करके करूंगा क्या? The more you read, the more you get comfortable with reading. The more comfortable you get with reading, you would start converting your big nose to vows. Big nose to vows जितने ज्यादा convert होते जाएंगे, तुम्हारा reading का जो exposure है वो उतना बढ़ता जाएगा। And then this is what preparation is, and largely this is what training is all about. Because you have trained yourself, you will perform in a much better way as compared to someone who is untrained. ठीक है, who is untrained. So trainings will be important, your practice sessions will be important, and ultimately you are fighting for a competition. So it's like a sports day of your school. It's not the annual day of your school. It's like the bloody sports day of your school where everybody is fighting and competing. And because it's a sports day, there will be winners, there will be losers, and therefore you have to train. एनुअल डे में क्या होता है, सब जीतते हैं, बट नहीं, ये जो पूरा इवेंट है जो हमारे साथ 7-8 महीने बाद होने वाला है, ये एनुअल डे नहीं है, यहाँ पे सब नहीं जीतेंगे। इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स डे। सो ट्रेनिंग हैज टू बी डन रिगुलरली एवरी सिंगल डे। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, किसी भी पैसेज के देयर आर लार्जली 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, चाहो तो ये वाले इसकी डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, मैंने बहुत उसको ढंग से लिखने की कोशिश की है। देयर इज अ पॉइंट विच इज द मेन पॉइंट, देयर इज अ बैकग्राउंड, मैं जिसकी बात कर रहा था, देयर आर सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, एंड देन देयर आर इंप्लीकेशंस। ठीक है, सो बैकग्राउंड की जो डेफिनेशन है वो वहां पे लिखी हुई है, एंड उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, लार्जली हम ये बात करते हैं दैट व्हेन यू आर रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन, एक बार रीड करके तुम्हें उसका मेन पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड इज अगेन द इंफॉर्मेशन कि वो मेन पॉइंट पर पीछे से, पीछे का जो पूरा सपोर्ट आ रहा है उसकी हिस्ट्री क्या है, वहां पे हम आ रहे हैं। ये भी तुम्हें लार्जली बहुत सारे पैसेजेस में मिल जाएगा। सपोर्ट इज ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड टू स्ट्रेंथन द पैसेज, एंड देन implications आर मोर लाइक कंक्लूजन्स। किसी ने अगर रीडिंग करी होगी, सो यू वुड अंडरस्टैंड कि हाँ,
ये सारी चीजें मुझे पैसेजेस में मिली हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये सारी चीजें go ahead and search for this in your daily newspapers as well. Don't just wait for a mock test. बिल्कुल मॉक टेस्ट का वेट मत करना. जो डेली न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें जाके कोई भी आर्टिकल पढ़ो, उसका मेन पॉइंट देखो, उसकी हिस्ट्री पढ़ो. ठीक है, देखो ऑथर ने कौन से स्टेटमेंट दिए हैं जो इसी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ऑथर के बाद कोई सपोर्ट करने के लिए लिखे गए, ताकि रीडर का कॉन्फिडेंस बढ़े. सपोर्टिंग स्टेटमेंट होता क्या है? रीडर का जो कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज, एंड इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट. तुम्हें कॉन्शियस एफर्ट मारना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. पता है इससे फायदा क्या होगा? तुम्हारे वो स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग और अजम्पशंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेंगे. उस समय कभी बाद में किसी और मैराथन पे आऊंगा, बट इसको ऐसे देख लेना. ठीक है, कल से ही, आज रात से ही जो भी आर्टिकल्स पढ़ो, उस पे ये बाइफर्केशन, इस तरीके से उसको डिवाइड करने की कोशिश करना. ठीक है, नाउ this was an introduction of the session. Now let's move on to the next point, which is time saving techniques. I'm sure बहुत लोग की इच्छा होगी that we should know how should we be saving time. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं टाइम सेविंग टेक्निक्स पर. नाउ तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तीन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स to get better with comprehensions, critical reasoning, RC, as well as your legal comprehensions. Point number one is the process of elimination. Now, this is helpful across all sections. Process of elimination का मतलब, don't search for the right answer, but start rejecting the wrong ones. Wrong answers को reject करते चलो. Second, there is only one and one correct answer. Many students fall in this trap कि यार सर वो ना, वो दो आंसर ऑप्शंस काफी ज्यादा क्लोज थे, वो मैंने तो गलत वाला मार्क कर दिया, बस आई वाज वेरी क्लोज. अगर इस थॉट प्रोसेस में तुम आ गए, दिस इज वेरी डेंजरस. आई रिपीट, दिस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस इज वेरी डेंजरस, जहां पे हम खुद को ये कन्विंस कर लेते हैं, एंड आई विल नॉट इवन से 99% स्टूडेंट्स डू इट, 100% स्टूडेंट्स डू इट. दे कन्विंस देमसेल्व्स कि यार दो आंसर ऑप्शंस काफी ज्यादा क्लोज होंगे, और जो क्लोज में जो बेट सही आंसर होता है, मेरा लार्जली बस गलती ये होती है कि मैं दूसरा वाला मार्क कर देता हूं. और जो मैं दूसरा वाला मार्क कर देता हूं, वो एक्चुअली में होता क्या है, वो मेरी ना किस्मत ने साथ नहीं दिया, या फिर वो क्वेश्चन में कुछ गलती थी, वो तो दो आंसर सही थे. Just to tell you, if you practice from the right source, there will be only one and one correct answer. पहले तुम्हें खुद को बिलीव करना पड़ेगा, because then how you will be learning it. So don't fall in the trap of having multiple correct answers. No, there is one and only one correct answer. तुम्हें वो माइक्रो लेवल पे जाके बाकी आंसर्स को एलिमिनेट करने का कॉन्फिडेंस या टेक्निक्स आनी चाहिए. And for that, the next point is you should have a good vocabulary. A lot of times we don't have a good vocabulary. By a good vocabulary, I mean that हमें correct usage of the word या उसकी correct definition पता होनी चाहिए. This is where vocabulary will be very helpful. हो सकता है what you know is a far-fetched meaning of the word, but they are looking for a perfect meaning of the word. So you will need to understand this thing. So good vocabulary will be important. Second, process of elimination. There is no alternative to it. And largely, every student, तुम खुद से पूछ लेना, तुमने इतने सारे पिछले मॉक्स में कब process of elimination की help से काम किया होगा? Everybody has been telling you to use this, or at least the better people would have told you to use the process of elimination. But how many times you have actually used it? हम अपने फ्लो में इतने बर्बाद हो जाते हैं कि हम बस अपने रेगुलर मेथड ही चलना चाहते हैं. मैंने तुम्हें क्लास की स्टार्टिंग में बोला था, एवरीथिंग दैट आई टेल यू हैज टू बी अप्लाइड. एंड तुम्हें ये सेशन को क्यों पीरियोडिकली देखना चाहिए, सो दैट तुम भूल ना जाओ और तुम वापस आ जाओ. एंड देयर इज ओनली वन एंड वन करेक्ट आंसर. कितना अच्छा नोट लिखा हुआ है स्लाइड में, दैट यू विल इजीली फॉरगेट टू फॉलो द रूल्स. बहुत इजी है रूल्स को भूलना, कुछ नहीं करना तो और ऑटोमेटिकली भूल जाओगे. Now let's me move to how to eliminate answer options.
नाउ जनरली जनरली हम बात कर रहे हैं चॉइसेस विथ एक्सट्रीम वर्ड्स, वर्ड्स लाइक ऑल, नो, ओनली, नेवर, एवरी, एक्सक्लूसिवली, ये जितने जितने वर्ड्स होते हैं, ठीक है, दीज आर नोन एज एक्सट्रीम वर्ड्स। इनको एक्सट्रीम वर्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तुम्हें यूनि डायरेक्शनल अप्रोच दे देते हैं, ठीक है। ऑल मतलब दिस थिंग विल नेवर हैपन, तो उसमें गुंजाइश नहीं है, इट्स एन एक्सट्रीम वर्ड। ओनली ही इज अलाउड, गुंजाइश कुछ नहीं है, दिस इज वन ओनली, ओनली ही इज अलाउड, ठीक है। So, इस टाइप की जो वर्ड्स होते हैं जहां पे कोई गुंजाइश नहीं होती है, दोज आर नोन एज एक्सट्रीम वर्ड्स। जनरली आंसर ऑप्शंस विथ एक्सट्रीम वर्ड्स आर नॉट योर करेक्ट आंसर ऑप्शंस जनरली। I have definitely seen certain answer options with extreme words and they have been right. That's the reason कि generally I'm saying generally ऐसा होता है that you can eliminate answer options on the basis of this. ठीक है. Now, second, choices that ask you to make judgments. ऐसी choices जहां पे तुम अपने opinions दे रहे हो. Understand this word, understand the word judgments. वो सारी चीजें जहां पे तुम अपने ओपिनियंस दे रहे हो, वो आंसर चॉइसेस लार्जली करेक्ट नहीं होंगी, ठीक है, वो लार्जली करेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। नाउ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आंसर्स, मतलब जहां पे शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो तुम्हारी जो बातें हैं तुम्हारे पैसेजेस में, एक्सेप्ट फॉर वीकनिंग, वीकनिंग में तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आंसर्स मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही चाहिए, वीकनिंग के अलावा बाकी सारी जगह यू वुड नीड टू स्पेंड टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस। A very important point, choices that include outrageous, illogical, unscientific, or politically incorrect statements. Politically incorrect statements, ठीक है, unscientific statement, outrageous, again, extreme statements, outrageous में extreme statements, ऐसा होगा, they can never be your answer choices, ठीक है। Last, by logs leaks, choices that are not backed up by solid proof, ठीक है। कोई अगर assertion, अंडरस्टैंड ढूंढना ये वाले वर्ड की मीनिंग assertion की, सो अगर इफ यू गेट अ पॉइंट राइट वेयर there is some assertion, some assertiveness is there, any assertiveness should be backed up by a solid proof. Without proof anything would be invalid. So लार्जली हम तो ये पता है कि आंसर ऑप्शंस को एलिमिनेट करते कैसे हैं, उस पे एक पॉइंट और लिख लेना, लाइक एवरी वर्ड ऑफ योर करेक्ट आंसर ऑप्शन, लिख लो, यहाँ पे नहीं था वो, मैं तुम्हें उसको अलग से लिखवा देता हूं। एवरी वर्ड ऑफ योर करेक्ट आंसर ऑप्शन शुड हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद द पैसेज। बेसिकली तुम जिन आंसर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हो उनमें ढूंढ लो, वो एक या दो वर्ड्स के बेसिस पे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, तुम्हें पूरे 15 to 20 वर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। This is where again good vocabulary will come into the picture. Couple of words or even a single word in the answer option can help you eliminate the complete answer option of 15 to 20 words. वो एक word identify करना जरूरी है, and जिस भी wrong answer option में वो at least one word होगा जरूर। So if we get into a habit of approaching it, तुम्हें टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, राइट, यू आर अ टेस्ट टेकर, सो यू नीड टू अप्रोच इट इन दिस वे। समझ में आई मेरी बात? अप्रोच ही ऐसे करना है कि मुझे तो वो वर्ड बताओ जिसके बेसिस पर मेरा आंसर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, मुझे दिमाग नहीं लगाना, मुझे बिल्कुल बुद्धि नहीं लगा, मतलब वर्ड ढूंढो, मैं वाइल आई एम सॉल्विंग अ कॉम्प्रिहेंशन आई एम लुकिंग फॉर वर्ड, जब भी अजीब वर्ड मतलब क्या ये वर्ड है जिसके वजह से मेरा आंसर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, आई एम लुकिंग टू एलिमिनेट आंसर ऑप्शंस देन लुकिंग फॉर द राइट आंसर ऑप्शन। मैं ढूंढता हूं कि कौन सा वर्ड मिले जिसकी वजह से, तो इसके वजह से ए एलिमिनेट हुआ, इसकी वजह से बी एलिमिनेट हुआ, वर्ड्स पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। आई रिपीट, there will be at least one word in all wrong answer options जिसकी हेल्प से तुम पूरे आंसर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। 90% ऑफ द केसेस में वो सिंगल वर्ड ही होता है, 5% मोर विल हैव 2-3 वर्ड्स, दैट्स इट। तुम्हें तो एक वर्ड चाहिए और वो जरूर मिलेगा, बट हाँ अगर अप्रोच वैसी बन जाए तो कि मुझे तो एलिमिनेट करना है, कभी सही आंसर मत ढूंढो, एलिमिनेट करते चलो। तुम देखना तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तुम्हें मजा ज्यादा आएगा, ज्यादा इन्वॉल्व होगी क्वेश्चन के साथ।
ठीक है ना? 5 steps टू 5 step प्रोसेस टू टू डिस्ट्रॉय कॉम्प्रिहेंशन। बहुत अच्छी बात लिखी है वहीं पे ब्रैकेट में, विच इज बी अ बिजी स्टूडेंट। आई रिपीट, बी अ बिजी स्टूडेंट। नाउ what do I mean when I say be a busy student? Be a busy student का मतलब ये है, ठीक है? I'll repeat, what do I mean when I say be a busy student? Busy student का मतलब होगा active reader. I'll repeat again, busy student का मतलब क्या होगा? Active reader. Involve होके रीडिंग करो, ठीक है? इन्वॉल्व होके रीडिंग करो। प्रैक्टिस कॉम्प्रीहेंशन डेली वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर्स। एवरी आर्टिकल, ये बात अपन पहले कर चुके हैं, एवरी आर्टिकल दैट यू रीड इन द न्यूज़पेपर should be taken like a comprehension, ठीक है? It should be taken like a comprehension, perfectly like a comprehension, and then trust me, then you are looking at getting at least 50-60 comprehensions every single day. हम बोलते हैं मुझे कॉम्प्रीहेंशन कहां से मिलेगा, कॉम्प्रीहेंशन कहां से मिलेगा? इफ योर न्यूज़पेपर इज टेकन like a comprehension, you are looking at 50-60 bare minimum. If you're looking at 2 to 3 newspapers every day, you're looking at getting 80 to 100 comprehensions every day. And many a times you don't need questions on that comprehension. तुम्हें तो उसको डिस्ट्रॉय करना सीखना है, ठीक है? तो वो तो जो प्रैक्टिस टेक्निक्स है, एंड टाइम होना चाहिए, कितनी देर में कॉम्प्रिहेंशन को खत्म करना है, फोन, anything that might disturb you should be kept बहुत दूर तुमसे, while being an active reader, while being a busy student. And busy student का मतलब एक तो रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक्टिव रीडिंग, सेकेंडली बिजी स्टूडेंट का मतलब है पूरे टाइम अलर्ट रहना। आई हैव आल्सो सीन वन थिंग, जनरली द स्टूडेंट्स हु आर ऑन द लेजी साइड, जनरली, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, इस टाइप के पेपर में योर ओवरऑल एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, अगर तुम थोड़े से लेजी हो, इट विल टेक अवे गुड 20-25 मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। और अगर तुम एक एक्टिव स्टूडेंट हो, तुम होश में रहते हो पूरे टाइम, तुम लेजी नहीं हो, यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी एट अ +25, it will have an impact. So your overall attitude towards life will have a huge impact in a paper like this. तुम अगर एनर्जेटिक हो, जोश में रहते हो, होश में रहते हो, you'll start your journey from +25 marks. Else, whatever you do, you'll never be competing against 150 marks. You'll always be competing from 125 marks. -25 नंबर तो एटीट्यूड ही ले जाएगा। Second important point, while you read, make notes. Make notes in the form of arrow diagrams. Make notes in the form of abbreviations. तो बताओ नोट्स होने कैसे चाहिए? एक सिंपल सी टेक्निक देता हूं, ध्यान से सुनना। द टेक्निक विल बी, तुम्हें एक लार्जली एक 450 वर्ड्स का जो कॉम्प्रीहेंशन होगा, उसके जो शॉर्ट नोट्स होंगे, इट शुड बी इन 1.5 एसएमएस में आ जाने चाहिए। 1 से 1.5 एसएमएस। एसएमएस बाय 1 आई मीन 160 कैरेक्टर्स, ठीक है? सो 160 कैरेक्टर्स से 1.5, सो 160 to 240 कैरेक्टर्स में, 240 ऑन द लार्जर साइड, आइडियली 1 एसएमएस। 160 कैरेक्टर्स में पूरी समरी या इंपॉर्टेंट वर्ड्स या नोट्स आ जाने चाहिए। कोशिश करो 160 कैरेक्टर्स में आ जाए। अभी अगर 240 तक भी जाते हैं तो भी सही है। उसके बियॉन्ड जा रहे हैं मतलब हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं जो कि मेन पॉइंट की नहीं है, वो मेरे सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स की है। समझे मेरी बात? सो अगर तुम एसएमएस, एक एसएमएस 160 कैरेक्टर्स टू 240 कैरेक्टर्स, तुम्हारा एक 450 वर्ड्स का पैसेज का शॉर्ट नोट उतने में आ जाना चाहिए। अ नोट दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व योर क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेज। अब ये जो नोट्स हैं, तुम इसको नोट्स के फॉर्म में ले सकते हो, शॉर्ट हैंड राइटिंग में कुछ लिख सकते हो, तुम इसको उसको अपन क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम बना सकते हो। यू कैन क्रिएट सर्टेन डायग्राम्स एज वेल, ठीक है? एरो डायग्राम्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो अपन अपनी आगे वाली क्लासेस में जरूर सीखेंगे कि हम नोट्स बनाते कैसे हैं। आज के लिए तो एक सरप्राइज बस ये है कि 160 कैरेक्टर्स से मैक्सिमम 240, ये अभी 240 बिकॉज हम अक्टूबर में है, दिसंबर आते आते तो हम यहां पे ब्रेक लगा देंगे।
कि मुझे 160 कैरेक्टर से ज्यादा मेरे 450 वर्ड्स के पैसेज का नोट नहीं होना चाहिए. विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज. ठीक है. देन identify keywords, signal words, or rather Q words. Now, what are these words? Words की लिस्ट है वहां पे. Words like furthermore, moreover, first, second, third, for example, nonetheless, however, must, ये जितने भी words हैं इनको आइडेंटिफाई करो. एंड आइडेंटिफाई मैं फिर बोल रहा हूं, टेस्ट में मत करना. सीधे जाके जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वहीं पे आइडेंटिफाई करना चालू कर दो. वहीं पे आइडेंटिफाई करना चालू कर दो. क्यों सर? डेली न्यूज़पेपर में क्यों? यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन. मैंने क्या बोला? यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन. ट्रेन योर ब्रेन का मतलब तुम्हारे लिए कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही ये हो जाना चाहिए. यू शुड बी दैट मच इन्वॉल्व. यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन. ये प्रैक्टिस में ही होगा. And once your brain starts identifying, sir, I have a doubt. ऑफलाइन पेपर में तो आई कैन अंडरलाइन इट. ऑनलाइन पेपर में हम अंडरलाइन कैसे करेंगे? अ वेरी गुड डाउट. सो ऑनलाइन पेपर में क्या होगा? वंस यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर ब्रेन, जैसे ही वो वर्ड तुम्हें दिख जाएगा, लेट्स से हाउएवर, येट, ठीक है, इन स्पाइट, ड्यू टू, देयरफॉर, दस, नेवरदलेस, फॉर एग्जाम्पल, ये सारे वर्ड्स, बिकॉज, ये सारे वर्ड्स अगर तुम्हें दिख जाएंगे तुम्हारी आंखें रुक जाएंगी. ये मिल गया मुझे क्यू वर्ड. ठीक है. और धीरे 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 यू वुड गेट इनटू अ हैबिट. देखो कुछ चीज एक्सपीरियंस के साथ ही होती है. यू विल डेवलप योर ओन टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड. अच्छा वहां पे वो क्यू वर्ड था, वहां पे क्यू वर्ड था, यहां पे क्यू वर्ड था, यहां पे क्यू वर्ड था. ऑफलाइन पेपर होगा नेक्स्ट ईयर तो हम डेफिनेटली उन सब वर्ड्स को मार्क कर पाएंगे. कॉशन, प्लीज डोंट वेट फॉर अ मॉक टेस्ट to use these techniques. It's a request from my side. Use it in the daily newspapers because in those newspapers, bloody you guys are getting 80 comprehensions, 90 comprehensions every single day. एक बार वो आदत बन गई ना, वो ही आदत कंटिन्यू होगी. मॉक टेस्ट में कोई मैजिक नहीं होगा. There will be no magic that will happen मॉक टेस्ट में एंड द फाइनल डे. जो रोज करते आ रहे हो ना उसी को कंटिन्यू करोगे. वही हैबिट्स, एंड हैबिट्स टेक टाइम टू डेवलप. तो जब डेली न्यूज़पेपर में वो जो 70-80 कॉम्प्रिहेंशन जो हम पढ़ रहे हैं वहां पे भी स्टार्ट अंडरलाइनिंग दैट, तो बाय डिफॉल्ट फिर हम अपने टेस्ट पेपर में करेंगे. बिकॉज दैट इज हाउ वील डेवलप अ हैबिट टू अप्रोच कॉम्प्रिहेंशंस. द हैबिट विल नॉट चेंज. अभी क्या हो रहा है, हम प्रैक्टिस अजीब एक डिफरेंट तरीके से करते हैं. वाइल रीडिंग वी आर अ पैसिव रीडर एंड इन द मॉक टेस्ट वी अचानक से वांट टू बिकम एन एक्टिव रीडर. ऐसा कैसे होगा? होगा कैसे? मतलब व्हाई एंड व्हाई इट शुड हैपन. समबडी हु हैज बीन प्रैक्टिसिंग लाइक एन एक्टिव रीडर वही वहां पे भी जाके एज एन एक्टिव रीडर बिहेव या परफॉर्म करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, why those notes are important? Because you will ultimately start visualizing about the passage, वो main point, वो background, वो supporting statements, वो मेरा conclusion via those notes only. ठीक है. And you may read the questions before you start the passage so that you know कि किस टाइप के questions आने वाले हैं. But ये जो चीज है, reading the questions before the passage, ये effective तब होगी जब जो टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं वो रेगुलर न्यूज़पेपर्स पे फॉलो हो रही है. ठीक है. इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो. द नेक्स्ट इज योर प्रो टिप्स, योर चीट कोड्स एंड द स्ट्रैटेजीज. सो व्हाट आर दोस प्रो टिप्स, व्हाट आर द चीट कोड्स एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं? बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, ये प्लीज नोट कर लेना. Everything will work only if you wish to apply for it. ठीक है. अप्लाई करोगे तो ही वर्क करेगी वरना नहीं करेगी. एंड अप्लाई भी एकदम कल से नहीं करने लग जाएगी. अप्लाई इट फॉर अ फ्यू वीक्स एंड सी द मैजिक. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ब्रेन को हम जैसा चाहते हैं कि वो एग्जामिनेशन में बिहेव करे, हम उसको डेली उसी की आदत डाल रहे हैं. अगर मेरा एग्जामिनेशन होता
कि कौन कितनी ज्यादा देर तक सो जाएगा। तो मैं अभी से सोता ही रहता, मैं बेड पे पड़ा ही रहता, मैं उठता ही नहीं, क्योंकि मेरी टेस्टिंग ही उस पे होने वाली है, कौन कितनी ज्यादा देर तक सोएगा। बहुत लोग उसमें जीत जाते हैं, काफी टफ कंपटीशन हो जाता है उसमें। बट मैं कल से सिर्फ सोना चालू कर देता, मुझे प्रैक्टिस सोने की करनी, तो मैं उठूं क्यों? राइट। सिमिलरली अगर तुम्हें अगर डी डी डे पे जाके कॉम्प्रिहेंशन की चीजें करनी है, सो डेली कॉम्प्रिहेंशन पे वो पूरी अप्रोच, डेली जो तुम 70-80 आर्टिकल्स पढ़ते हो मतलब पढ़ने चाहिए। जिन लोगों ने 1 साल का ब्रेक लेके रखा हुआ है, अगर कोई फ्रेशर है, तो फ्रेशर को भी दिन के 15-20 आर्टिकल्स, a fresher should also be reading at least 15 to 20, 25 articles. But this year, I believe that even the freshers have a lot of time because they are attending online classes in schools. So, droppers who have taken a year break or who have decided or who are yet to decide, understand कि freshers से तुम्हें इस साल ज्यादा competition मिलेगा because they have all the time in the world to prepare, and freshers ये बात तुम समझो, तो ड्रॉपर्स ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि मैंने बोल दिया उनको कि फ्रेशर के पास ज्यादा टाइम है, तो भाई तुम्हें भी अब अपस्केल तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलो, प्रो टिप्स, चीट कोड्स एंड स्ट्रैटेजीज। पहला पॉइंट है, स्टार्ट रीडिंग टुडे, बेटर रीडर एंड अ बेटर जज ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय बेटर जज ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग? तुमने अगर क्लैट 2020 का पेपर देखा होगा, you would have noticed that there were passages from very different genres. अलग अलग टाइप के अलग अलग जॉनर के पैसेजेस थे, राइट। तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन का जॉनर अलग था, लीगल में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस थे, एंड सेम विद क्रिटिकल रीजनिंग एज वेल। Why only reading will help you to improve your skills? Because, and why do we prefer a newspaper? क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है, दिस इज द ओनली टेक्स्ट दैट यू गेट डेली, तो हर दिन तुम्हारे पास नया टेक्स्ट आ रहा है रीड करने के लिए, प्लस यू गेट आर्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स। ठीक है, यू एक्चुअली गेट देम फ्रॉम डिफरेंट जॉनर्स। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑफ अ न्यूज़पेपर, different genres plus you get new text every day. ठीक है, so and while reading this, what exactly happens that you are training your brain for different types of writing, different types of authors, different types of topics. So different types of writing, different types of authors, and lastly different type of topics as well. To an extent, कितनी बार तो different type of subtopics as well. इतनी वैरायटी तुम्हें सिर्फ वहीं पे मिलेगी, एंड इतनी वैरायटी की तुम्हें रिक्वायरमेंट रहेगी। यू एक्चुअली नीड दिस। फर्स्ट, बिलीव दैट यू वुड बी नीडिंग इट। नेक्स्ट, एक छोटी सी टिप है, रीड बिफोर यू स्लीप, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। ये एक रूल बना लो, रीड बिफोर यू स्लीप। मोबाइल पे देखते देखते सोना मत, रीड बिफोर यू स्लीप। you will have a better sleeping pattern too. ठीक है, रीड का मतलब वो फेसबुक की न्यूज फीड्स नहीं, रीडिंग का मतलब अ प्रॉपर विद अ बुक और अ न्यूज़पेपर और एनीथिंग दैट यू विश टू। तो अपने मोबाइल फोन को साइड में रख के सोने के 30 मिनट्स पहले रीड, एंड रीड करने के बाद यू मे जस्ट कीप योर फोन, आई मीन कीप योर बुक, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट, ये already we have discussed that whatever practice you do, you have to do it in a time setting. Now why am I saying to do it on a time setting? देखो, so ultimately what you know is that your examination is a 2 hour examination. ठीक है, it's a 2 hour examination. Now let me take an example of an athlete. ठीक है, any athlete. Now this guy has to compete for a 200-meter race. मुझे एक चीज बताओ, if this guy has to compete for a 200-meter race, इसको प्रैक्टिस कितने की करनी चाहिए? एटलीस्ट 300 meters की। He cannot practice for 100 meters. He cannot even practice for 200 meters. तुम्हें नहीं पता फाइनल डे जाके क्या होगा, क्या हो जाएगा, उसकी हेल्थ क्या होगी, how would his body be reacting. He would need to practice for 300 meters to be assured कि मैं फाइनल डे जाके
200 मीटर्स की रेस तो भाग लूंगा। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। फॉर यू टू डू an intensive reading, now your examination, let's let us all agree, is an intensive reading examination। अगर मैं क्लैट की बात करूं तो for you to be able to intensively read नहीं करना भाई, साथ में comprehend भी करना है, understand भी करना है। For you to do all of this, you need to practice 3 hours। तुम जब 3 hours तक इंटेंसिव रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे, फाइनली जाके तुम 2 hours में बिहेव कर पाओगे। द प्रॉब्लम इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट डू दिस फॉर 3 hours, दे डू इट फॉर एन आवर, दे वुड डू इट फॉर 45 minutes, दे वुड डू इट फॉर 90 minutes। अरे पर उससे 2 घंटे की रेस तो नहीं निकलेगी ना। तुम्हारी प्रैक्टिस ही वैसी थी, और फाइनल डे के प्रेशर्स अलग होते हैं, उस दिन का प्रेशर अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है। वहां उस दिन एनटीपी नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं होता, वहां पे अलग तरीके से होता है। तो ये 1.5 hour की प्रैक्टिस से कोई फायदा नहीं होना। एंड दैट इज द रीजन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रैक्टिस, हु वर्क रियली हार्ड, बट कितनी बार दे हैवंट वर्कड दैट, होता है ना, वो लास्ट लैप जो होता है वो चीज कवर नहीं हो पाती। सो प्रैक्टिस लाइक एन एथलीट। व्हाट डज एन एथलीट डू? Athlete, for a 200-meter race, this athlete would be practicing for a 300-meter race. This athlete, he'll not run, he would make it time bound। वो स्टॉप वॉच पे प्रैक्टिस करता है, वो स्टॉप वॉच पे प्रैक्टिस करता है, स्टॉप वॉच पे। क्यों स्टॉप वॉच पे प्रैक्टिस करता है? क्यों उसको टाइम बाउंड करना है? क्योंकि उसको जॉग नहीं करना है, वो टहलने नहीं निकला है, उसको उस दिन जाके टहलना नहीं है, उसको जाके कंपीट करना है। वो एनुअल डे पे नहीं पार्टिसिपेट कर रहा नाच गाने में, वो स्पोर्ट्स डे पे कर रहा है। सब कुछ टाइम बाउंड होगा, सब कुछ स्टॉप वॉच पे होगा, और 200 पे भागना है तो 300 मीटर्स की प्रैक्टिस लगेगी। आई होप आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट दैट यू माइट बी रिक्वायर्ड टू रीड over the next 7-8 months if you are willing to get into the top notch colleges of the country। and yes, next year जब एग्जामिनेशन होगा, मैं एक बात अच्छे से सुन लेना, your consortium is now a 2-year old, so they have matured, so उनकी incremental learnings चालू हो गई हैं। सो 19 से उन्हें 20 में सीखा, 20 की जो उनकी कुछ एरर्स होंगी वो 21 में सीखेंगे, उनकी लर्निंग्स हो गई हैं अब। सो दे वुड प्रिसाइसली नो कि उनको पेपर्स में करना क्या है, हाउ टू मैनेज ऑल ऑफ इट। ठीक है, सो प्रैक्टिस लाइक एन एथलीट। वन मंत्रा, कभी भी लगे यार कुछ भूल रहा हूं, कुछ क्या करूं मैं, आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, ओनली वन मंत्रा, प्रैक्टिस लाइक अ एथलीट, एंड आई हैव गिवन यू द वे टू डू इट। Next is sentence correction, which is grammar and vocabulary based questions। Now, very important point, a lot of students feel कि यार comprehensions है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दी कि मुझे vocabulary की जरूरत है, जब तक मुझे precise meanings of word नहीं पता होंगे मैं आंसर ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। Second, sentence correction is actually related to grammar। Now, when you have better grammatical skills, हमने लास्ट वाले सेशन में बताया था रेनन मार्टिन एज अ बुक, to have, if in case you have better grammatical skills, so उससे you will have better understanding of comprehensions as well। comprehension में उनने कहीं कर सेमी कोलन या फिर कोलन या एक्सक्लेमेशन मार्क या पंक्चुएशंस का rigorous यूज किया है, because you're good with grammar, you understand the importance of each and every punctuation and back it with a good vocabulary। I'm sure comprehensions understanding will be much better। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, यूज एरर लॉग्स। अब अपनी सेशन का थोड़ा अपन जा रहे हैं डीप में, व्हाट एग्जैक्टली इज अ एरर लॉग। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि एरर लॉग होता क्या है। एरर लॉग वैलिडेट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। एरर लॉग इज योर बेस्ट टीचर, यू आर योर बेस्ट टीचर एज वेल। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ एरर लॉग। एरर लॉग का मतलब क्या है, ये देखो। So I've created a sample error log for you। ठीक है, a sample error log means suppose तुम जो variety of articles रेगुलर अपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हो, you should be reading around 40-50
आर्टिकल्स और कॉम्प्रिहेंशन ऑन अ सिंगल डे बेसिस, तुम अगर 5-7 3-4 न्यूज़पेपर्स पढ़ लेते हो तो आई एम श्योर तुम्हारे शायद 50-60-70 आर्टिकल्स या न्यूज तो कवर हो ही जाती होगी. सो दिस इज अ सैंपल एरर लॉग. मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं लाइक स्पिरिचुअलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, लीगल अफेयर्स. ठीक है, मतलब लीगल अफेयर्स को मैंने ब्रेक कर दिया. लेट्स से नेशनल केसेस, वर्डिक्ट्स एंड जजमेंट्स, एंड लीगल अफेयर्स, इंटरनेशनल इश्यूज. अब क्या हुआ, while reading I can rate myself. So if I'm comfortable with economics, my confidence level in reading an economics article is 4 out of 5. ये एरर लॉग तुम कॉन्स्टेंटली अपडेट कर सकते हो. Suppose you say, I mean, spirituality पे my confidence level is 1. This means I need to get more articles, I need to research, I need to read more articles on spirituality. ताकि देखो, all these are different genres. हर जॉनर की एक एक बेसिक वोकैबुलरी होती है. ठीक है, I'll just give you a very small example. Economic Times as a paper, when I started reading very long back, I mean, while it was my last days of my school, इकोनॉमिक टाइम्स काफी बार सीओ डॉट करके लिख देता था. बहुत जगह सीओ डॉट लिखता था, सीओ डॉट सीओ. मुझे समझ में नहीं आता ये सीओ क्या है. आफ्टर रीडिंग अ फ्यू आर्टिकल्स आई अंडरस्टूड बाय सीओ दे मेंट कंपनी. सो अब मुझे अगर ये चीज नहीं पता हो, कोई अगर इको के आर्टिकल में मेरे एग्जामिनेशन में इफ आई फाइंड अ आर्टिकल ऑन इकोनॉमिक्स एंड आई फाइंड सीओ डॉट देयर, मुझे समझ भी नहीं आएगा कि क्या है. So every genre has its own vocabulary. By reading by reading a lot of articles on a particular genre, तुम अपनी vocabulary बढ़ाते जाओगे. So suppose simple example, अगर मुझे medicine में I've rated myself 2, ठीक है, if I've rated myself 2, but अगर over the next 10-12 days I read a lot of articles on medicine, मैं उसके वर्ड्स का कनेक्शन, उसकी जो बेसिक वोकैबुलरी है, वो द बेसिक जो वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी, अगर मैं वो सब समझ लूंगा, ऑब्वियसली माय मेडिसिन का जो पैसेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी. सो इन फैक्ट ऑन रेगुलर डे यू कैन स्पेंड एटलीस्ट एन आवर ऑन द एरर लॉग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द टॉपिक्स यू आर वीक एट. जो बेसिकली तुम्हारे जिसमें स्कोर कम है, दैट्स अ बिग नो फॉर यू. तुम्हारे जिसमें स्कोर हाई है, यू आर इट्स अ वाव फॉर यू. तो बिग नो से वाव पे हमें लेके आना पड़ेगा. ठीक है, इज इट क्लियर? क्या ही बात समझ में आई? नाउ सो आई ऑलरेडी सेड कि एक एरर लॉग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको तुम मेंटेन करते चलो, यू विल सी द डिफरेंस इन द नेक्स्ट 3 months. कोई अगर नया ही टॉपिक मिल जाए, लेट्स से यू फाइंड एन आर्टिकल ऑन सोसाइटी और मे बी साइकोलॉजी तुम्हारे एरर लॉग में नहीं है, you are not able to understand it, put it on the list, mark it as confidence level 1. मतलब मुझे ये एरर लॉग तुम्हें कॉन्स्टेंटली ये बताता रहेगा कि तुम्हें कौन से टाइप के आर्टिकल्स पे वर्क करना है. ठीक है, सो इसके लिए दिस इज लाइक आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड द एरर लॉग. अल्टीमेटली वी वांट टू इंक्रीज आवर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. वो assumptions, वो strengthening of the argument, वो weakening of the argument, वो सब हो जाएगा, पर वो तब तक नहीं होगा जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी. The remaining points I have already discussed, where I've said here your short notes should be more like a SMS, है ना, उतना होना चाहिए. Your short notes should largely be like a SMS, मतलब 160 characters के अराउंड तुम्हें एक 450 वर्ड्स के पैसेज का शॉर्ट नोट बना लेना चाहिए. कोशिश करो. सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मतलब तुम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख रहे हो, जितना लिखा है उसको शॉर्ट करो, आदत बन जाएगी, हो जाएगा. हर चीज की हैबिट बनाना जरूरी है. ठीक है, नाउ इन एवरी पैसेज लाइक आई सेड यू हैव टू मार्क सर्टेन क्यू वर्ड्स, राइट, सिग्नलिंग वर्ड्स, या फिर जो भी अपने की वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स बोल दो उनको, क्यू वर्ड्स बोल दो. वो मैंने एक लिस्ट पूरी बना के रखी हुई है. These words will be very helpful in you in making short notes. So, बोलते सर मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? शॉर्ट नोट्स तुम्हारे इन वर्ड्स के अराउंड बन सकते हैं. ठीक है, सो इसको लार्जली मैंने 5 अलग अलग ग्रुप में बाइफरकेट करके रखा हुआ है. फर्स्ट ग्रुप इज अ कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट, if P then Q, when P then Q, whenever P then Q.
If I go for the movie, I'll have pizza. Cause and effect. Only if I go for the movie, I'll have pizza. Compare and contrast. Description, कहीं पे तुम्हें अगर कुछ मिल रहा है, प्रॉब्लम एंड अ सॉल्यूशन एंड अ सीक्वेंस. सो ये जो 5 कैटेगरी है, दीज आर सिग्नलिंग वर्ड्स. क्या वो सिग्नल कर रहे हैं? जो हेडिंग है ना, वो सिग्नल कर रहे हैं. सो लाइक से सिंस ये सिग्नल करता है कि हम एक प्रॉब्लम और एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं. बिकॉज या इफ देन कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ एज वेल एज सिमिलर टू हाउएवर कंपैरिजन की बातें करता है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इस टाइप की जो वर्ड्स है, कैरेक्टरिस्टिक जहां पे डिफाइन हो रही है, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन की बातें करता है. ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली लाइक आई थिंक a word like for example can be under description too and can be under sequence too. So ये तुम लिस्ट को आइडेंटिफाई कर लेना, इस पे वापस आके ये लिस्ट के सारे वर्ड्स को लिख लेना और इस टाइप के वर्ड्स को कॉन्स्टेंटली अंडरलाइन अपने पैसेजेस में करते रहना. These are your cue words which will help you to draft the SMS version of your complete passage. इसके अराउंड ही सारी इंफॉर्मेशन, वो मेन पॉइंट, वो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, वो बैकग्राउंड और वो जो कंक्लूजन, द 4 बेसिक पिलर्स ऑफ अ पैसेज, वो वहीं पे छुपे होते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली मतलब फॉर ऑब्वियस रीजन मैं आज सब कुछ ये सीआर के मैराथन में खत्म नहीं कर दूंगा. सीआर बोलूं या फिर लेट्स से कॉम्प्रिहेंशन मैराथन बोलूं, आई विल बी लीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कवर्ड इनसाइड द क्लासरूम्स ऑफ लीगल एज. ऑब्वियसली ये सब चीजें ऐसे खुले में बाहर नहीं आ सकती, मेरी स्टूडेंट्स मेरे को मारेंगे, है ना, तो वो तो नहीं हो पाएगा. बट यस, आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ यू अ लॉट ऑफ हिंट्स ऑन हाउ टू अप्रोच कॉम्प्रिहेंशंस. नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तुम भी पी लो, बट उसके पहले ठीक है तो मैं उस पर आता हूं. तब तक कुछ अगर लिखना हो तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फोटो लेनी तो ले लो, वरना फिर यहां पे वापस आ जाना. ठीक है, चलो. नेक्स्ट अपॉइंट्स, थोड़ा बस जो मैं बोलते जा रहा था उसी को और स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है. रीड अग्रेसिवली, एक्टिव रीडर, है ना, फास्ट एंड अग्रेसिवली एज वेल एज कीप मेकिंग नोट्स. एसएमएस में एक 450 वर्ड्स का पैसेज का नोट आ जाए सिंगल मैसेज में. द नेक्स्ट इज नोन एज अ रॉटन टोमेटो टेक्निक. रॉटन टोमेटो टेक्निक का मतलब, रॉटन टोमेटो मतलब एक सड़ा हुआ टमाटर, है ना, एक सड़ा हुआ टमाटर. तुम्हारे जितने भी रॉन्ग आंसर ऑप्शंस होंगे, उन सारे रॉन्ग आंसर ऑप्शंस में मैं सारे रॉन्ग आंसर ऑप्शंस को मैं बोल रहा हूं, एक एक आंसर ऑप्शन में एक एक वर्ड ऐसा होगा जो कि सड़ा हुआ टमाटर होगा, जिसके कारण पूरा आंसर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए. तो योर कंप्लीट आंसर ऑप्शन विल हैव वन रॉटन वर्ड. एक वर्ड, एटलीस्ट एक वर्ड, 2-3 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, एटलीस्ट एक रॉटन वर्ड होगा. और ये जो टेक्निक है, ये सबसे ज्यादा यूजफुल होती है आंसर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए. मुझे नहीं मतलब पूरे आंसर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, मुझे तो वो एक वर्ड या वो 2 वर्ड ढूंढने हैं जिसके वजह से मेरा पूरा आंसर ऑप्शन एलिमिनेट होगा. और वो सड़ा हुआ टमाटर अगर मुझे मिल गया, मेरा पूरा आंसर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. और अगर ए आंसर ऑप्शन में तुम्हें कोई रॉटन टोमेटो नहीं मिल रहा, बी पे जाओ, सी पे जाओ, डी पे जाओ, जो जो जहां जहां मिलता जाए उसको एलिमिनेट करते जाओ. जो एंड में बच जाएगा उसमें चूज कर लेना. ठीक है, नाउ पॉज एंड प्ले का मतलब ये हुआ, बहुत ज्यादा फास्ट, एकदम अग्रेसिव रीडिंग एंड टू फास्ट रीडिंग में फर्क होता है. अग्रेसिव रीडिंग मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव रीडिंग, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, टेकिंग एवरी कॉम्प्रिहेंशन इन अ वे कि ये मेरे एग्जामिनेशन का कॉम्प्रिहेंशन है. टेकिंग अ न्यूज़पेपर रीडिंग इन अ, मैं बोल रहा हूं ठीक है, यू विश टू टेक ब्रेक, टेक अ ब्रेक, बट जब तुम रीड कर रहे हो तब उसको अग्रेसिवली रीड करो. तेज नहीं होता, अग्रेसिव का मतलब तेज नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन के साथ होता है. यू वुड लाइक टू रीड अ न्यूज़पेपर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस फॉर 20 मिनट्स एंड देन लार्जली टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, वो चलेगा. बट लेजी जैसे 30 मिनट्स रीड मत करो. इट विल मेक नो डिफरेंस टू योर रीडिंग टेक्निक्स और योर रीडिंग स्किल्स और फॉर दैट मैटर एनीथिंग एल्स. ठीक है,
फोकस इज द की। बात वही हो रही थी कि डल, बोरिंग, तुम्हें देख के लगना चाहिए किसी को, जब तुम रीड करो कि तुम कुछ रीड कर रहे हो, कुछ रैंडमली बैठ के कुछ पढ़ रहे हो, वैसा फील नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। प्रैक्टिस एक्टिव रीडिंग, ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड यस, चेक द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट, ये भी बता चुका हूं। पहले क्वेश्चंस देख लो एक बार, जस्ट स्किम थ्रू देम, यू अंडरस्टैंड कि कहां कहां से आया है। बिकॉज अगेन यू हैव टू बी लाइक अ टेस्ट टेकर, डीप डाइव नहीं करना अपन को पैसेजेस में। ठीक है। एंड embrace द पैसेज, शो योर लव फॉर द पैसेज का मतलब ये है, वही अपन ने एरर लॉग बनाया, जिसमें मार्क्स अपन को कम मिल रहे हैं वो चीजें अपन ने ज्यादा बढ़ाई। एंड वाइल रीडिंग, पे अटेंशन टू इट, कोशिश करो कि तुम्हें समझ में आए, डोंट हेट इट। बिग नो उसको मत दो, उसको वाओ जैसे रीड करने की कोशिश करो। एक बिग नो वाले पैसेज को भी वाओ जैसे रीड करने की कोशिश करो। फिर अपन अपने जब टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे ना। बट जब वो टाइम स्लॉट चल रहा है, तुमने अगर अपने आप को 7 to 8 मिनट्स दिए हैं टू रीड समथिंग, तो तब उस पैसेज में उसको वाओ जैसे ही रीड करो। कुछ नहीं आएगा, मुझे आएगा 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 आएगा, ये वाला थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा होना चाहिए। What are the speed reading techniques? Very important. Speed reading techniques. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। Your words per minute should approximately be 400 to 500. If you are anything lower than this, let's target to achieve 400 to 500 words per minute by December end, or rather by January as well. 3 महीना दो खुद को, so अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, let's say around 15th of January, we can target that we need our words per minute to be around 400 to 500. अभी जो लोग रीड जनरली करते होगे, don't be surprised to know that your word limit would be around 180, 170, 220 words per minute. तुम अगर अग्रेसिवली रीड करते हो ना तो भी यूज सर्टेन वर्ड्स पर मिनट कैलकुलेशन टूल्स। ऑनलाइन तुम्हें कुछ टूल्स मिलेंगे जिसको तुम यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट योर वर्ड्स पर मिनट। दिस इज व्हाट ट्रेनिंग इज, दिस इज largely what training is. Your words per minute has to improve. समझ गए मेरी बात? ठीक है। और ऑनलाइन टूल से तुम अपने वर्ड्स पर मिनट चेक कर सकते हो। जाओ गूगल करो, आई वांट टू चेक माय वर्ड्स पर मिनट, यू विल हैव सर्टेन टूल्स दैट विल हेल्प यू डू दैट। ठीक है। व्हाई एम आई सेइंग 400 to 500 वर्ड्स पर मिनट? मैं तुम्हें बताता हूं। क्लैट बोलता है कि 450 वर्ड्स का मेरा पैसेज होना चाहिए। तो 400 to 500 वर्ड्स पर मिनट का मतलब यह है दैट मैं 1 मिनट में पैसेज पढ़ लूंगा, मैं 1 मिनट में उसको रिवाइज भी कर लूंगा। एंड आई लार्जली हैव 3 to 4 minutes टू आंसर द क्वेश्चंस टू। एंड यही अगर 400 की जगह 200 वर्ड्स पर मिनट पे रह गई, या 180 पे रह गई, या 170 पे रह गई, अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेशर दैट यू आर बिल्डिंग ऑन योरसेल्फ। एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा टूल कैन हैव अ मैसिव डिफरेंस। एंड with regular practice, with regular active reading, you guys can cross 500 per minute as well. I know a lot of you will be crossing this, but सब नहीं भी करो। मैंने बोला ना, ये पूरा सेशन से अगर एक स्टूडेंट को फायदा हो गया, our job of, like, since the whole team has been after this since 9 a.m, our job is done. एक बच्चे को भी अगर फायदा हो गया तो ठीक है। सो आई होप वर्ड्स पर मिनट की तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ में आई है। चंक रीडिंग, इसको गूगल कर लेना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इस पे भी डिटेल नहीं दूंगा। चंक रीडिंग गूगल करना एंड लर्न द टेक्निक्स ऑफ चंक रीडिंग। चंक रीडिंग का मतलब ये होता है अ लॉट ऑफ वेरी गुड रीडर्स हु हैव हाई स्पीड, वो वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी फ्रॉग। ये जो जिसने ये स्टेटमेंट पढ़ा, बहुत सारे लोग इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। व्हाट डू आई मीन इज, जो आई मूवमेंट होता है सेंटेंस के ऊपर, सेंटेंस है पूरा द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी फ्रॉग, ठीक है। तो जो का जो आई मूवमेंट होता है वो वर्ड टू वर्ड होता है। पहले द पे आई है, फिर क्विक पे, फिर ब्राउन पे, फिर फॉक्स पे, फिर जंप पे, फिर ओवर पे। चंक रीडिंग में क्या होता है, यू आर रीडिंग 3 to 4 वर्ड्स एट वंस, मतलब तुम्हारा जो आई स्पैन है वो 3 वर्ड्स टुगेदर, फिर 3 वर्ड्स, फिर 3 वर्ड्स, मतलब तुम्हारा आई स्पैन
थ्री थ्री चंक, तुम 3 to 4 वर्ड्स का चंक बनाते हो, और 3 to 4 वर्ड्स का चंक बना के तुम 3 to 4 वर्ड चंक रीडिंग करते हो। अगेन डेली करोगे, आज रात से अगर प्रैक्टिस कर लोगे, विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 weeks you will start reading like that only. And if you start reading like that, it will improve your efficiency by 50% at least. So in case you are 200 words per minute, वो 200 से 300 तो तुम्हें चंक रीडिंग ही ले जाएगा। But yes, this has to be practiced. Practice aggressively daily with every passage. With every passage. तो ही हो पाएगा। फाइनली एग्जामिनेशन में जाके कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? नाउ ट्रेन हार्ड। ट्रेन हार्ड का मतलब डू रीड अ फ्यू कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट्स। एक सिंपल एग्जांपल दो। जब भी मैं डेटा अरेंजमेंट की क्लास लेता हूं, बहुत बार, मतलब मैं पिछले बहुत सालों से, मैंने आज भी कल भी क्लास ली थी, मैंने सब बच्चों को यही बोला कि मैं बेसिक से स्टार्ट नहीं करूंगा। डेटा अरेंजमेंट तुम अगर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, यू ट्रेन योर ब्रेन अकॉर्डिंगली, उसको कॉम्प्लेक्सिटी दिखाओ, उसको आसान चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगती है। आई टेल टू स्टूडेंट्स कि मैं मेरी क्लासरूम के अंदर कॉम्प्लेक्स डेटा अरेंजमेंट ही लूंगा, मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स डेटा अरेंजमेंट ही पढ़ाऊंगा। मेरी पहली क्लास ऑफ डेटा अरेंजमेंट भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ ही चालू होती है, बिकॉज आई बिलीव कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अगर आ गए, इजी क्वेश्चन तो तुम घर पे ही करोगे। यू हैव ट्रेन्ड योर ब्रेन अकॉर्डिंगली, तुमने उसको कॉम्प्लेक्सिटी ही दिखाई, तो जब तुम उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हो, वो उसको नेचुरल लगने लगती है। Similarly, spend at least 30 to 40 minutes, I'll not say all of time, at least 30 to 40 minutes in reading complex articles. हो सकता है, so as I said, complex articles जो generally थोड़े से tough हो। So tough articles can be articles from EPW, Economics and Political Weekly, articles from The Economist, The Economist, EPW, इसमें जब तुम आर्टिकल, a lot of articles on the from the Hindu as well, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। Spend 40 minutes of time reading those articles as well. It will be extremely beneficial. And spend at least an hour with your error log वाले, जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, उन आर्टिकल्स पे टाइम स्पेंड करो। सो आई एम लार्जली लुकिंग एट यू गाइस स्पेंडिंग अराउंड 90 मिनट्स, 30-35 मिनट्स इसके साथ, कॉम्प्लेक्स आर्टिकल के साथ, एंड अगेन 45 मिनट्स टू 1 hour ऑन द आर्टिकल्स जो तुम ऑन द जॉनर जो कि तुम्हारे एरर लॉग पे मिनिमम कॉन्फिडेंस लेवल पर है। इट्स अ रिक्वेस्ट, तुम इसको 3 हफ्ता कर लो, सिर्फ 3 weeks कर लो, यू विल सी मैजिक हैपनिंग। तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बहुत डिफिकल्ट होगा करना, बहुत डिफिकल्ट होगा। इट्स लाइक गोइंग टू अ जिम, है ना? इट्स लाइक गोइंग टू अ जिम कि वो कर ही नहीं पाते, वो एनर्जी नहीं आ पाती, वो टेक्निक सीख ही नहीं पाते। बट इस पर्टिकुलर सेशन को तुम अगर 2x स्पीड पर रेगुलर सुन लोगे, शायद 1.5 घंटे का सेशन तुम्हारा लार्जली, शायद आइडियली 2x स्पीड पर तो 45 मिनट्स पर रैप अप हो जाएगा। बट अगर तुम उसको पीरियोडिकली सुनते जाओगे, यूड अंडरस्टैंड कि हाँ, मतलब सर ने बोला था। तो जस्ट इंश्योर कि जो पूरा जो हमने इतना टाइम दिया वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव रहे। सो इस पर्टिकुलर स्लाइड सा विल बी वर्ड्स पर मिनट हमें बढ़ाने हैं। यूज एन ऑनलाइन टूल एंड विल बी सरप्राइज टू नो योर वर्ड्स पर मिनट। अच्छा, जब तुम पहली बार उस टूल को यूज करोगे, बी एक्सट्रीमली नेचुरल, खुद को बेवकूफ मत बनाना। वर्ड्स पर मिनट का मतलब ये होता है कि हम उस पेस पर पढ़ रहे हैं कि हमें समझ में भी आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आई रिपीट, वर्ड्स पर मिनट का मतलब ये होता है कि हमें समझ में भी आएगा कि हम एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन टूल में खुद से झूठ मत बोलना। इवन दो इफ यू गेट 60 वर्ड्स पर मिनट, लेट दैट बी एन ऑनेस्ट कंक्लूजन। ठीक है? इसके बाद वंस यू आर डन विद दैट, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज चंक रीडिंग। ठीक है? एंड वंस यू अंडरस्टैंड चंक रीडिंग, और जो 2-3 चीजें तुम्हें यूज करनी है, 30 मिनट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्टिकल्स, इकोनॉमिस्ट, ईपीडब्ल्यू, फ्यू आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू, एंड good 45 minutes to 60 minutes on that sample error log from, जिसमें तुम वो जॉनर चूज करोगे। जॉनर को गूगल पे डाल देना, तुम्हें मिल जाएगा बहुत सारा। कुछ भी पढ़ना है हमें,
हमें तो उसके अराउंड हमें बस उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट की थोड़ी सी वोकैबुलरी बढ़ानी है, ठीक है। सो ट्रेन हार्ड का मतलब मैंने कुछ एग्जांपल्स वहां पे लिखे हुए हैं। एडवांस साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स, अजीब लगेगा पढ़ के। लाइब्रेरियन रीड बुक्स अबाउट साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, आर्टिकल्स, बुक्स ऑन साइंस, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। थोड़ा पढ़ के अजीब डेफिनेटली लगेगा। So, ठीक है, I think you got a fair idea on how to manage comprehensions, got a lot of techniques how to manage comprehensions, ठीक है। तो हम इसको यहां पे आज रैप अप करेंगे। आई होप you would be using all of this. आज का पर्पस अलग था, this was the first marathon session, so we largely thought that let's discuss a few techniques first, ताकि अगले मैराथन्स में टेक्निक्स डिस्कस नहीं करेंगे, ये जो टेक्निक्स सीखी है इसको अप्लाई करेंगे, है ना। और उस समय मैं बिल्कुल भी टेक्निक्स की बातें नहीं करूंगा, मैं सीधे एप्लीकेशन पे आ जाऊंगा। सो मे बी इन आफ्टर ऐसी कोई मैराथन बहुत रेगुलरली होती नहीं है। I don't even expect marathons to happen once every month to know. That is too much of data or too much of knowledge that we'll be sharing on YouTube. No, that will not happen. So let a lot of things be reserved for students inside the classrooms. जितना हम यहाँ पे कर पाएंगे उतना हम definitely करेंगे. And I think we have a All India Scholarship Test on the 20th of October for all students who wish to attempt CLAT 2021 or even CLAT 2022. जितने भी हो तुम्हारे friends हैं, let them know that we have a scholarship test on the 20th of October. So this is Karan Mehta signing off. Thank you guys. I'm one of the directors of LegalEdge Tutorials. I hope you guys had a nice time and you would be using everything that I've told you right from tonight. है ना। आज रात से चालू करते हैं। होपफुली मैं जब अपने अगले सेशन पे आऊं हमें सारी चीजों को यूज कर पाए एंड रिपीटेडली। एक बस लास्ट थिंग, डेली न्यूज़पेपर्स आर्टिकल से ही इसको करने लगना, इट विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। डोंट वेट फॉर माई क्लास और एनी अदर मॉक टेस्ट टू, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, अपने रेगुलर धल्ले पे आ जाओगे। इसको तो आज रात से या रादर कल सुबह से ही करना चालू करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे। आई थिंक आई हैव अ यूट्यूब लाइव ऑन मंडे वेयर आई विल बी डिस्कसिंग द टाइम टेबल फॉर द ड्रॉपर स्टूडेंट्स फॉर 2021, है ना, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं विथ अ लॉट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा अरेंजमेंट अंडर लॉजिकल रीजनिंग एंड अगर हमें एचओडी ने अलाउ किया तो मैथमेटिक्स एज वेल, ठीक है। चलो, that's it from my side. Thank you so much. Take care of yourself. Good night. Bye bye.